to show the diagrams of the data center. But similarly, I am also using the fundamentals of the project management to manage my project. So every engineer does that. Okay. So some engineering is definitely they are specialized. Electrical engineering is different from electronics engineering. So electronics engineering is not IT engineering. Similarly, civil engineering is different from structural and mechanical. But the common ground for us is the maths, science, and logic. Okay, these things we need at all the times. So logically speaking, now guys, here are 6 steps of constructing a house. So just have a look and apply your logical thinking and tell me that what is the first step that you would prefer to do, where you would like to start from. Which one will be the first? Look at the picture. B. Foundation. B. So I put the number 1. So what will be the number 2 step? D. D will be the 2. Okay. Then what will be the number 3 step? C. C. A. A will be the number 4. F. Then 5, and of course, this is the last step where you will do the painting. Okay, so this is called logic, because maths and science we understand. Logic means a reasonable thing, something which leads to another step. Okay, with a strong understanding of the reason. So that is called the logic. So we are going to use the project management logic here to understand the topic. So introductions we are done. So let me tell you, the workshop expectation is that after this training, we will be practically be able to control the project. It is not just about understanding the Primavera. You will understand the Primavera buttons completely. But beyond those buttons, the main thing is that you should be able to plan the project. You should be able to baseline the project. You should be able to execute the project. You should be able to monitor, control the project. You should be able to report the status and the forecast of the project, and you will be able to communicate well with your stakeholders and take the project to the objective, right? So we are going to learn about the project management concept. Then I will introduce you to the P6 interface, that what are the various buttons in the interface, what is the menu system, how do we configure that. So we will learn about setting up the P6 environment, because it has got quite some lot of the settings to make it configurable for you. So, for every user, they can have their own configuration. It is a very flexible software, but, to have these features and have this facility. So it's a very logical thing. If you have a lot of facilities in some product, definitely it will take you some time to learn those so that you can benefit the maximum from those product features. Okay. Then after that, we are going to learn organizational breakdown structure and enterprise project structure. And inside that exists, we will learn how to work with work breakdown structure and activities. So those who come from the Microsoft project background, so it is the same as the task in Primavera P6. Then working with resources in Primavera. So every project manager utilizes 3 resources: man, machine, material. Right, guys? Yes. Every industry, whether I'm making an IT project or say civil engineering, mechanical, electrical projects, I need to work with 3 kind of resources: man, machine, material. So these 3 are very much a common in every project. And then we will learn how to load the cost of the project in Primavera. Then we will freeze the project. Baseline means freeze the best planned values of the project parameters. So guys, what are the basic project parameters? The basic project parameters is the time of the project, the material quantities which you have calculated, and the resource units. So what are the resource units? Man hours or the machine hours. So we freeze them, then we start the work. When we are doing the work, so what we do, we capture the actual data and we compare. We compare the actual duration with the planned duration, so that we can find out any variance from the planned values. And if there is a variance, so we take a corrective action. So for that, of course, we are
using the Primavera only. Okay, we can do it inside the Primavera. So first of all, we must have a good and reliable plan with the best values in the planned baseline. The baseline has to be nearly perfect. Okay, so that we can trust it absolutely. So when we do the comparison, we can say for sure, oh, my activity is getting delayed. Oh, my activity is using more man hours, more machine hours, more material, so that we can take a reliable corrective action and we can track the project. Okay, so that we can keep the project on the objective using the various reports, and we can complete the project within the planned values. So for that, Primavera is useful. So here is a tribute to the founders, because it's a great software created by the great people. Now these three guys, so Joel Koppelman and Les Askin Dick Ferris, these three gentlemen are civil engineers. Now you might be thinking, how can civil engineers develop the software? No, civil engineers, they didn't develop the software, they developed the idea, they developed the flow, they developed the logic. Okay, because they had a very good experience in the civil engineering and the project management practices. And they thought in 1979, I'm talking about the year 1979, these three gentlemen, they thought that there should be a software. So what they did, they created the idea, they created a company, then they hired a lot of programmers. After 4 years, in 1983, this company called Primavera Systems Incorporated. So they launched the software called Primavera. Okay, and their software was having two-tier architecture. Two-tier means that since the Primavera could be used only by big companies only, so it was separated into two parts. So one part is the business logic part, and one part is the database part. Okay, so they used, they did, the Primavera is not a file based. It does not store the data in a file, just like the Microsoft project or Word or Excel. They store the data in the file. Primavera stores the data in the database from day one, since 1983. So the database used by them was the Oracle. Okay, so it is one of the earliest database companies. So the Oracle created the database. I think they started in 1980. So this company, maybe even before that. So they connected their software to the Oracle database, so that large amount of data could be stored in the database. And Primavera will do the data processing, data gathering, data collection, data reporting, and interpretation of the data. Okay, so that people can use it. So now what happened, due to the close association of the Primavera and the Oracle company in 2008, so for whatever reason, these gentlemen sold the intellectual property to the Oracle Corporation. So after 2008, the Oracle developed it a lot, and not only the Oracle, but they made it compatible with many other databases. So Primavera can today can connect with multiple databases, not only the Oracle, but the Microsoft SQL server. It can connect. It can connect to SQLite. It can connect to the Oracle data center based data. It can connect to the Amazon Web Services based database. Okay, it can connect to many cloud platforms to store your data. So you can choose to store the data in your laptop, that as you are doing right now. You can choose to store the data within your company premises, within the same building, in another computer. And through the network, the Primavera can access that database. The database could be stored in another city within your country. It could be in another country. Okay, so this is the way the Primavera is very flexible. And it integrates many other enterprise software. What is an enterprise? Enterprise is a group of company. Enterprise means something which is happening at a large scale. Okay, so it can take care of the entire business. So yes, Abhishek, you have a question. Please go ahead and ask it. Yeah, actually, on my personal laptop, I'm getting a message. Please ask the host for permission to record this video. Okay, fine. So I will give you that permission. So that is good. So now you can start it. Okay, so you keep the recording on. Okay, now
So all this part is done because this part I don't mix in the training. So this is my slide. So my slide is also shared with you. It is in the documents folder. Now, I'm going to ask you this interaction. See, it is not a question. It is not a question. Basically, you can tell me that what you feel is a project. Okay. So Niaz, you tell me what you feel is a project. When you hear this word, In guidelines, yes, in guidelines with PMI, a project can be defined as a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or results with yes, a defined beginning and end. yeah. So all the projects, they have a definite beginning and end because they are temporary. Yes. Okay, and they are undertaken with an objective. So objective 2 is to create a product or a service, and each time you do a project, the outcome is unique. It is different from the previous one. So it could be different in size, different in budget, different in technology, different in challenges. Okay, and but different in many ways. So this is the standard definition as per the PMI. So those who don't know the PMI, well, let me tell you, PMI is a project management institute which was set up by some engineers in the USA in 1969 in Pennsylvania, because in the USA there are a lot of professional association. There is even association of chefs. There is even association of plumbers. There is association of electricians. There is the association of the carpenters. Every kind of the profession has a association in the US. So they created the Project Management Institute in 1969 in the Pennsylvania state to share the common knowledge of the project management, which the various engineers were trying to use so that it could be refined, it could be well defined, it could be used quickly to control the project. So then everybody agreed that project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or a service. Now the word but temporary, so why it is temporary? Now there is a technical meaning, it is temporary because it has a start date and a finish date. But why it is temporary? So let me tell you guys, let me tell you the philosophical meaning. It is temporary because we are also temporary, right? Right. So it is a human wish to see the results of his hard work or the labor within his lifetime, right or wrong? So we can't say that the project will go on and on. So I will sign a project with some organization, and later my third generation and their third generation will give the result. Okay, so that is not possible. I would like to see something done within my lifetime. So that's why we say it is temporary, because when the client is approaching you for some work, so the client says that, look, please do this project by this date. So we say, yes, we have to do it within the limited date. So that's why it's temporary. So why it is temporary? One more logical thing is that the work ceases when objective has been attained. So it means that when the structure is built or something has been created, then the work ceases. Then what happens? Team is disbanded upon project the completion, and the team members are reassigned to some other projects by the organization, right? So that's why we say it is temporary. Now, how unique? Sometimes the projects are big and the project characteristics are progressively elaborated. Why they are done so? Because what happens if you're having a project for 5 years, there is no need to basically plan in details the WBS and activities in details. So you can chop up the project in 5 parts. You can say this is the project phase 1, 2, 3, 4, 5. So what you can do, you can use the Primavera to do the detailing for the year 1. Okay. So after you are, when you are nearly completed the year 1, so you can start the detail for the year 2 and so on. That's how also the project can go on. Okay. It is unique because the outcome is always different in a project. Just like making a movie is a project. So do you think that all the directors or the producers, they use the same story each time?
No. So, each time they come up, they make a movie, they will come up with a different theme or a unique theme. Okay, so that, it's interesting to watch. Okay. So that's why we say that the projects are temporary in nature and the projects, they have a unique outcome. Okay. Now I am going to the next slide. See, the project can be visualized like a triangle, but it is called a triple constraint theorem. So here is a word constraint. So what do you feel the word constraint means? What is the feeling it gives you? It is basically some boundary beyond which you cannot go. So within this boundary limit, you have to work. Limit. So the word is the limit. Okay. Okay. Now, let us understand that what are the limitations in the project. So constraint does not mean that it is preventing you. Constraint means that it is restricting you to do something. So that's why it is called a constraint. So, the project can be visualized like a triangle. So for your easiness and for ease of understanding, so we can say that a project has the triple constraint. So you have a limitation of time. Then you have a limitation of the budget. Now within these two limitations, so you'll have to complete the work. That is the scope of the project. Now, what is the time limit? See, the time limit is always set by the buyer or the user, okay, or the end user. So he says that please do it in 2 years. So now suppose your engineering calculation says that the project requires 2.5 years and the client is setting a time limit of 2 years, right? So then it becomes a time constraint, right, guys? Yes. Then it becomes a constraint. So time is not a constraint if the say freedom is given to you, then it is not a constraint. Now there is another constraint here. Suppose your calculation says in the Primavera, it says that the cost should be around say 50 lakh rupees. But your buyer says that I can provide a budget of 45 lakh rupees. So sometimes the constraint you will say, okay, I can take care of the 5 lakh rupees. But if the buyer says, no, I will give you 42 lakh rupees. So that might be a constraint. So you'll have to see that how you can fit in the project within the given time and cost constraint. But the scope of the project, that is the work in the project, has to be complete. Because if the work is not complete or all the steps are not done, then what we get is the poor quality. So what is the quality? Quality, in simple words, it says the acceptance criteria. So that is called the quality, acceptance criteria of a product as good for use, right? Right, guys? So the quality acceptance criteria is set by the client himself. So he wants all the quality, but he puts a limitation of time and cost. So he is creating a sort of a limitation and it creates sort of a pressure. So you have to visualize like a triangle and you should be able to balance it in the beginning. So quality has to be planned. Quality cannot be by chance. You can't say that, okay, let me try this. Let me complete the project and let me see if I get the right quality or not. That can prove to be very costly. So you should not take a chance. Project is not like gambling away the money. So the projects are costing millions of dollars and you should be very much responsible for the attaining the quality from day one. Now, what is the component of time? I'm going to write two things here. Two words here.
So can you guys guess duration, schedule? What to guess, sir? So can you guys guess that what is the meaning of the word duration and what is the meaning of the word schedule? Duration means, suppose what is the project duration basically? It can be duration for under project some bifurcate some. Oh, so that's fine. Can you give example of a duration? Can you give example of a schedule? Some simple example. Everybody can try. So I'm not expecting a correct answer. Even a wrong answer will do. So that's okay. Interact with me. So it's okay to give me a wrong answer. सर ड्यूरेशन सर हम कह सकते हैं जैसे कि हमारा कोई काम है 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो कहेंगे 3 आवर उसका जो है ड्यूरेशन है Yes, yes, correct. हाँ। Schedule? और सर शेड्यूल जो है ना सर ये हमारा शेड्यूल प्रोग्राम मतलब फिक्स प्रोग्राम जो होता है सर पहले से ये हमारा शेड्यूल्ड है कि हम इस काम को जो है इस दिन करेंगे इट इज शेड्यूल Yes, then. Okay. So guys, so what Sayad is saying that the duration is a span of time or the units of time, just like we have the units of the measurement of length. So the units of the measurement of the length are like millimeter, centimeter, meter, kilometer, right? Similarly, we have got the span of time, which is like this. So I'm going to write it here and you are going to guess it, what I have written here. Guys, can you expand this? Durations? सर मिनट आवर डे वीक मंथ ईयर Yes, correct. And then when I give it to the Primavera will create the schedule. So what it will do for each of the activities, it will create the schedule like this. Right? So schedule will be the definite start date and time and finish date and time as on your calendar. See, in the software, the date is not just alone, it is not in the isolation. Internally, it has a time also. The time part is there also. The time part may be hidden because you don't need it. Because if you're doing longer projects, so the time part may not be important. But definitely the date part is always important. So that's why we always prefer to display the date only, not the time always. But internally the time is also calculated. Okay, now the cost has got another word which is very much related to it. This word is called the price. So guys, can you please guess that what is the cost and price? What is the difference, definition? What would be a cost and what would be a price? Just guess it. Give me a wrong answer. Not a problem. Okay. Just think of it. Pardon? Sorry. Yeah, go ahead. But tell me that what is the meaning of cost and what is the meaning of price? Guess it. What was incurred for the manufacturing or creating that product? Yeah, fine. Guess And it. price is, I think, maybe what you want to sell, at what rate you want to sell. Yes, correct. Yeah. Sell See, the service, the product. so this price and cost, both of them are the amounts of the money, right? Okay, now let me tell you, cost is the amount of the money which you are spending on getting the job done or getting the project done. So this is mainly spent on right? So when we are spending the money on the subcontracted work, it is spent in the form of cash.
Okay, so that is the cost. And what is the price? Price is equal to the value index of the product. Right, guys? So is this clear? Because whenever you are doing something, you are using your expertise, the raw material, you are creating a value. So something which has a higher value, it will be indexed using the money, because the money is a device which has been created by mankind so that we can exchange the values easily. Because earlier, in the human society, we used to have the barter system, but the barter system does not work. So because what happens So because in the barter system, you might end up with having something which you don't need. That is the problem. So that's why mankind, they came up with the concept of the money. The concept of the money is purely numbers. So, we are exchanging the numbers. We are indexing the value, and we are exchanging this number. So these numbers are written on pieces of paper, like in India. So the numbers which are written on pieces of paper are like this: 10, 20, 50, sort of this 100, 200, 500, 2000. These are just index numbers. So with that, we are able to exchange the goods and the services, right? So the cost is the amount of money which is spent by the project team in completing the work, and the price is the value index of the product. Now, price is something which is basically managed by the marketing team. They try to get the maximum price. They want to project the maximum value into the market, right? Now, but in the market, there is competition. So when you are having the competition, now the thing is that you will have to basically work with a fixed price. So, most of the project in this world, they are given at a fixed price, fixed bid, which is mentioned in the contract, that you will be completing the project within this much price and this much time. So that becomes a constraint, right? So after the constraint, so what do? We have to calculate a profit margin and see if the cost which is coming after deducting the profit margin, which is good enough for us to work or not. If it is not so good, if the profit margin is not meeting the criteria of the business, so what you are going to do? You are going to renegotiate the price of the product with the client to ask for more price. Now, if the client is not willing, then you might ask him to reduce the quality parameters. But the thing is that, guys, let me tell you that always you should negotiate in the beginning to either increase the price or to reduce the quality parameters, because in the end, the expectation should not be wrong. So whatever expectation you set in the beginning, that should be met. And that is truly a project manager's job. So you should be able to balance the price paid by the customer and the quality expected. Okay, so that is a fair business practice. So if you are not able to meet the quality which is expected by the client in the beginning, so in the beginning you should ask for more time and money. Okay, so that's it. If the client is not having or not willing, so then you can tell the client to accept to reduce the quality acceptance criteria, or you might even better not undertake the project. Okay, so that is the best thing. So do not settle for a lower price, and do not create a low quality product or a service. Because what happens after the price has been negotiated, the client will remain fixed on the maximum quality. And if you are not able to produce it, so that will be a pity. So it is better not to, because you don't have to do all the projects at all the times, because the organization has to be profitable. It should be able to pay for the current salary. It should be able to pay for the depreciation and replacement of the machines and the infrastructure. It should be able to pay for the research and development. It should be pay for the training of the staff, retraining of the staff. It should be able to have some money in the reserve also. So the amount of the profit that a business deserves, so that should be maintained, because all the private businesses, they have to be self-sustainable. Because if the business is not self-sustainable, the government, which might be taking the corporate taxes, they will not come to rescue any business at all. Okay, so there is no precedence I have seen
that the government has intervened to save any private business. Did the government save the Jet Airways? The Jet Airways is gone. The Adani Airlines is gone. So there were many private airlines, but since they could not be profitable, so they went down. The government will not put the money into any non-profitable business, so simply because people are going to lose jobs. So the Kingfisher Airlines is gone. So similarly, there are many companies which are owned by the big groups like the Tata Televentures. So it was not a profitable. So Tata went out of the Tata Televentures and the Tata Indicom. Okay, but the Tata has an enterprise. So Tata has all other businesses to take care of its business. So that's not a problem. Now we come to the scope. The scope is combined with another word called requirement. Okay. Okay. So guys, you can tell me that what is the meaning of the requirement and what is the meaning of the scope? The scope is total project scope is there. Under the scope, there is many requirements like manpower, machinery, material, and other things. Mm-hmm. Anything else, guys? Someone would like to add something else? Scope is what is agreed with the customer or client, what we want to do, means what we like to do. Mm-hmm. Anything else? See, requirement and scope, they are related as much as like the price and the cost, right? So see, price is the value index, which is either set by the client or set by the organization. And price minus cost is equal to profit. Okay, so between price and cost, there has to be a value creation to get that profit. Okay, so cost is basically the amount of money spent on the work. So similarly, I will tell you how they are related. Suppose there are 4 people, they go to a restaurant. Okay, so after they are seated, the waiter will come to them and he will ask, sir, what would you like to have? So each of the 4 people will tell a different food item. So the waiter will note 4 food items, 1, 2, 3, 4. So he will take this 4 food item list to the back end where there is a kitchen, and kitchen is managed by a role called chef. Now the chef will receive the list and he will tell the waiter, tell our guests to wait for 15 to 20 minutes so the food will be ready. Now what the chef will do, he will look at the food items list and he will ask his team members to do some work. So he will ask someone to basically, cut something, bake something, blend something, fry something, microwave something, mix some spices. So he will give the various activities to his team member. So it means that he is asking them to do the work. Okay. So what is the work? The work is the scope. Requirement is a wish list of the client, that what he wants to have, the products and features. Okay. I mean the features and functionalities of the product. So that is the requirement, and scope is the work to be done by the engineering team to fulfill the requirement. So requirement is wish list. So guys, please read this. Sayed, you read this out to your friends. Read the requirement and read the scope.
Requirement, which list of the client, like the features and the functional list of the product. Scope, work to be done by the engineering team to create the product as per requirement. Right? So guys, is this clear? So Yes, sir. requirement is always told by the client and scope is created by the engineering team. Now, what does the scope include? The scope includes a very detailed requirement document which is signed off by the client. Requirement gathering is done either by the marketing team or the business analysis team or maybe the engineers also. After the requirement document has been completed, it should be checked by the client for completeness and correctness, and it should be signed by the client stakeholders. Okay, so they must all jointly sign that what we have told is completely taken into the document, completely captured into the document. Then what the engineering team will do, they will create a steps document, they will create a product design or a prototype, and they will show it to the client. So after they have shown it to the client, if it is looking fine, so there might be a multiple iterations. Okay, iteration 1, 2, 3, 4. So after the design has been approved or it has been seen by the client and stabilized, and then they will do the prototype. So some big products, they require some prototypes before you can make the final product. So after that, the WBS and activities will be created in the Primavera, and the big size, the actual product will be created or executed. Right, guys? So is this clear? Now, the Yes, sir. quality is the acceptance criteria that all the features and functionalities which have been mentioned, if they are found to be working right as per the standards set by the client or as per the standards set by the various standard bodies like the ISO, Six Sigma, these are the quality standards. So if it is meeting the certain standards of safety and functionality, then the product will be accepted as good by the client, right? So that quality acceptance criteria has to be planned from the beginning. Quality is not by chance, quality is by planning. Right, guys? Is this clear? Quality is by planning and quality is not by chance. Right? Okay. Now we are going to the next step to understand the further project. So in a project, you have to identify the total stakeholders and scope. So, when there are many people on the client side, you should know that who are the people, those who are going to dictate the requirements. So you should know all the people. You should not miss any person on the client side. And then you should be writing the complete scope of the project in detail. And then you should evaluate different project delivery methods like plan A, plan B. If you are having a bridge, you can make multiple kind of bridge. You can make a rope bridge. You can make a cantilever bridge. Okay, you can make some other bridge like the opening bridge. Okay, so so you can basically then evaluate that what are the different project delivery methods. Then you should identify the deliverables under a logical breakdown. So logical breakdown is called work breakdown structure. Okay, or the project breakdown structure. Then you should identify the activities required to produce the delivery. Activities are basically the small steps which you need to do to produce the deliverables, and you should be able to identify and optimize use of resources, because if you are using a software like Primavera, you should be rightly planned with the resources like man hour, machine hour, material quantities, so that you can complete the project with acceptance criteria, and it should be profitable also. Because if the acceptance criteria is met and if the project is not profitable for the company, it is of no use, right? So optimal use of the resources is one of the important functionalities of the project manager. And then you should evaluate if the target dates may be met, because the project is working under a constraint. The target dates will be set by the customer. You should identify the risk. So guys, tell me, what is a risk? What do you feel is a risk? This word risk. What do you think or feel is a risk? So risk, but let me tell you, risk is an uncertain event or an occurrence. If it happens,
it can cause damage to the project. Like you must have heard of that some crane fell down, some heavy equipment got toppled, people got injured, and sometimes there is a risk like the adverse or unexpected climatic conditions. So they have stopped the work on the site. The risk is like a pandemic happening. So is it a predictable thing? So could you predict the COVID? No, you couldn't, because it's an unknown risk. Okay. So risk, they come suddenly, but there are certain risks which we can foresee, and there are certain risks which we can't. So they are called a known risk or an unknown risk. Okay. Now provide a baseline plan. So what is a baseline plan? The baseline plan is a plan which is approved by the major planning stakeholders. So that is called a baseline plan. It is used to compare with the actual work and control the execution. So assist in stakeholder communication. So what is the communication main aim? Basically to keep them posted about what is the current project status and what is the forecast, so that the stakeholders, they stay calm and they hang on with the project team. Okay. Otherwise, there can be many disturbance because some of the stakeholders might be investors, so they might withdraw and the project can come to a standstill. And assist the management to think ahead and make informed decisions. So that should be the aim in the planning. Now we come to the next. Suppose there are two ways to do the project. This is the way one, method one, method two. Now in the method one, what the project manager says, that don't spend too much time on the planning. He says, the sooner we get the project, we make a plan, but we start the execution quickly. Now what happens, they do something and only to realize that it is not meeting the acceptance criteria of the client. So what happens, they undo it. After undoing it, they redo it and it works. So, this is how they're working. Do, undo, redo, do, undo, redo, do, undo, redo. Because they are not having some drawing or something to compare against. Then they complete the project and the client says, okay. Now, in the second case, what the project manager is saying is that you plan thoroughly and completely, go over the product design in details and plan the project thoroughly and completely. And what happens that in this case, they come up with a baseline. So what does a baseline looks like? A baseline looks like a solid planning values of time, resource, and cost. And when they do the work, so, their work is going like this. So the work is being represented, so it is staying near the baseline, but sometimes it varies and they take a corrective action to bring it near the baseline like this. So mostly they will close around here. So after that, they show it to the client and the client says, okay. So in this case also, the client is okay. So, but what is the difference here? The difference is here. Now, if you look closely, there is the benefit of the planning. So guys, what is the benefit of the planning written here? Please read this. What is the benefit of planning? Time, cost, resources. Okay. Let's say that using the methodology one, the organization is able to deliver 10 projects per year. But using the second method, the organization is able to deliver 14 projects per year. So tell me guys, that which will be a more profitable method, method one or two? Let's assume they are having the same size of the resources, man and machine, same quantity, same pay scale. Tell me, an organization which is doing 10 projects a year or 14 a year? 14 projects. If you are having the same size of the organization, but you are very, very efficient, well planned, and you are able to deliver the 14 projects using the same amount of the resources, so definitely you are going to make more profits. You are going to create more value. So if you are going to create more value, the money is basically in the human society is an index. Okay, it is an index of the value given and received. So that is why we are definitely going to use the project management fundamentals, and definitely the fundamentals will be implemented by one of the
best software in the world, which is called the Primavera. Now, guys, please read this. What is written here? Projects fail in the beginning, not in the end. Okay. Yeah. So you have to, why the project fail in the beginning? Because in the beginning, our requirement gathering could be incomplete and incorrect. Yes, due to that, there will be a poor scope definition, poor design, and poor project planning. It can be due to the fact that the requirement and scope is correct, but the planning itself has not been done properly. So the project will fail in the beginning, not in the end, because in the end, the result will be mismatch as per the expectation of the client. So guys, we have to make sure that we start with some good diligent process in the beginning itself, so that we are managing a success and not a failure. Right, guys? Is this clear? Okay. So for that, we need to use the skills of the project management. Now, what is a project management? So basically, it is application of knowledge, skills, and tools and techniques to project activities in order to meet and exceed stakeholder need and expectations. Who is a stakeholder? Stakeholder is an individual or organization involved in or affected by the project outcome. So you are a stakeholder, your client is a stakeholder, your boss is a stakeholder, your PMO, the project management office is a stakeholder. Like that, everybody is a stakeholder. Your vendors, your suppliers, your contractors, they are all stakeholders. They want the project outcome to be successful, right? They want your project to do good and meet the expectation criteria of the client and get the money, right? Now, the project is basically having, the project life cycle is having the 5 phases, okay, or the 5 process groups. So starting is the number 1 is the initiating. What is initiating? When we are doing the initiating, we say that, okay, we have an initial contact with a prospective client and we are trying to do the technical feasibility. If it is technically feasible, then it's okay. Then we do a commercial feasibility, means that if you are getting the right price, okay, so then we might go ahead. So once all the feasibilities are done, technical, commercial, okay, all other feasibilities are cleared, so we get a green flag. So we say that the initiating part is done. So we have taken the initiation to do a project. So when we want to do a project, we have to do the detailed planning. So this is the process group number 2. So in the planning, we do a detailed planning of the schedule. We do a detailed planning of the costs. We do a detailed planning of the resources. We plan out what are the possible risks in the project. We do risk management, quality management, procurement management, stakeholder communication, okay, risk management, and the integration management, all the knowledge areas. We do the detailed planning. So we use the Primavera here, but the Primavera will be applicable throughout. I will show you. Now, after the planning is complete, we do the work. So doing the work is called execution phase. So when we are doing the execution phase, we also do the number 4, that is monitoring and controlling. So what is monitoring? Monitoring means watching something. Okay, so in the monitoring, we gather the actual data for time, for resource utilization, and for the actual cost utilization. Then we compare with the planned values. And when we when we find any difference or a variance, we take a corrective action. So corrective action is called controlling. So when the execution happens, the monitoring and controlling, it happens in parallel. Okay. And it finishes in parallel as well. So then we do the closing of the project, which is the graceful closure. So in the closing, we do see administrative closure, like we clean up the project site, we hand over the product and the deliverables to the client, and we provide all the maps, drawings, documents to the client. We provide all the completion procedures. We get a quality assurance criteria acceptance from the client, and then we raise a final invoice to the client. We get a final payment. We make payment to all our contractors. We release them. We release man machine, and then we archive the project data. So, this is the closing. So where is the
where is the involvement of the Primavera? See, Primavera involvement is like this. This is the area which is controlled by the Primavera. So part of the initiating which is outside the Primavera, that involves meetings. So when you are having a meeting, you might not be using Primavera, you might be meeting face to face, you might be meeting over the Zoom or some other software. So Primavera is not required there. But after the initial handshake, so when you are going to do the documentation, yes, Primavera can be involved in managing the documentation. Primavera has a module inbuilt into it, in which you can upload the document, you can track the document progress, you can put various kind of status and search words into the document. And Primavera is a very, very intelligent knowledge base also, because it can help you in the documentation flow also. So after that, of course, the 2, 3, 4, 5, you need the Primavera. So the Primavera controls up to this point, okay, till the closing group. So it's a very important software to control the life cycle of the product, of the project. So here is another lesson for you. You have to keep it in mind. Suppose this is the initiating part, and this is the planning phase, and this side is the execution. And definitely when you're having execution, you are also doing monitoring and controlling. Then this is the closing. Now, what happens in the initiating, you're thinking it's a concept. Let's say it takes you $1 of thought process to develop the concept. Then you're planning. Now, planning you are doing with another 2 people. So 3 people are involved. Let's say that you are spending $3 to plan it. Now, what happens when you want to execute the plan? So the plan could be running into many hundreds of dollars. Because to execute the plan, you are going to work on the site and you will be using a lot of men, machine, and material. Now, what happens that you have spent $200 and then you realize that it is not up to the mark of the acceptance? Or maybe the client comes and does a check and say it is not acceptable. Then what you'll have to do? You'll have to pull down the entire structure. So this is called scrap, and the value of the scrap is 0. So what is the lesson? The lesson is that when you are, okay, when you are going to, so make sure that your planning is 100% correct. Okay. And your concept is 100% correct. Your requirement is 100% correct. Okay, so that's it. So not only that, the Primavera will work here also. So if you have a good plan, everything is fine, then you should be doing very good monitoring and controlling also. Right, guys? Is this clear? If you have a good plan, but you are not monitoring or watching the project, then it can go in the wrong direction. Right? It can cause loss. So majority of the money is being spent in the execution phase. So it is almost like spending 70% of the project budget on the execution. So make sure that you have something which is good and which is having a baseline, and you are monitoring it also, right? So Primavera is very, very important here also as well. So just like in the beginning. So that is the lesson learned. And so now, so the project life cycle has been explained. So let us go into the previous triangle. After that, we are going hands-on. So guys, please have a look at this triple constraint. So this is totally managed by the Primavera. Okay. So the scope is mapped. So let me tell you the columns where it is mapped. So there is a column called the original duration. Okay, so it is mapped there, original duration. In the Primavera, what you have is WBS and activity name columns. It is mapped there. And cost is mapped into 4 cost breakups. So the 4 various costs are labor, non-labor, and
materials. So guys, is this clear? And quality part is a documentation. Right, guys? Is this clear? How it is mapped into the Primavera? Just keep this in mind. You will see them soon. Now, I'm pausing for any questions on the topic of the project management. Okay. So you can ask me your question, any kind of question which you feel. So you can ask me. So please go ahead. Feel free to ask question. Go ahead. You have written here quality as a document. So this is a from quality you get output as document. Yes. Like this. But I think quality is a you can say how you measure the product. Yes. So the measurement has to be documented. Okay. You have to write the points that what will be tested in the product or the final outcome. So that has to be written in form of some description, or what is better, you can write it in form of points to be tested. Okay. So when these points are tested by your own internal quality team, then these will also be tested by the client. If the results are matching, if your team says, yeah, it is good, so then you give it to the client, then client team also finds it good. So it means that the value has been created. Then the client will be willing to pay the milestone cost. So, so the total price of the project is divided. Client does not pay at once. So client pays, step by step. So they divide the entire product into deliverables. And these deliverables are assigned a milestone date, that by which date this deliverable has to be completed. For example, I am doing a shopping mall project for my client. So there are 7 deliverables like basement level -2 parking, basement level -1 parking. So when I complete 1 parking, I will get a payment. So when I complete another parking, then I get a payment. Then I will do the ground floor. So when I complete the ground floor will be tested as per the acceptance criteria parameters. If it is found good, then client will make me a payment. So similarly, I will complete first floor, second, third, fourth, and then the client will make me the final payment, because according to our contract, so I have to construct up to the 4th floor. Okay. So the quality parameter will be listed in the document, and each of the document. So each of the qualities, the set of the quality parameter will be different for each of the deliverables, right? So they have to be tested at each and every stage. So quality, when you are creating the document can be stored inside the Primavera in a classified manner. So Primavera has got many parameters for storing the document, like the date of creation, the author, the version number, okay, document type. So a lot of information is stored. So when you are creating hundreds of document in a particular project, so the documents can be easily found by their identification tags, right? So the quality is compared against the list of the parameters. So that's why we say quality is managed by the documents. You must do the documentation of acceptance criteria. Okay, is this clear? Sir, I have a question. Yes, good. Ask it. सर स्कोप में सर स्कोप में हम जो है ना अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फिक्स करते हैं. हाँ, स्कोप के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू, we can create 2 kind of activities. One is the activity to manufacture the product, fabricate the product, and then there is an activity is to test the product, the quality activities. So scope has got 2 kind of cost, the fabrication cost and the testing cost. The activities for both the fabrication and the testing will be included in the scope.
अच्छा सर, जो हम क्वालिटी के जो भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे, वो हम स्कोप में डिफाइन करते हैं, फिर उसको हम हाँ, क्वालिटी में टेस्ट करते हैं। क्वालिटी अगर हम मतलब अगर क्लाइंट ये चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम्म, तो पहले तो हम जो हम्म, है किसी चीज को हम जो ये बनाते हैं, फिर हम उसकी क्या टेस्टिंग करेंगे कि वो ठीक बना है कि नहीं बना। जो भी उसका वो एक्सेप्टेंस भी स्कोप में क्राइटेरिया है। वो भी स्कोप में जाएगा. सो दैट विल बी आल्सो डिफाइंड इन द स्कोप. सो स्कोप इज नॉट अबाउट द इंजीनियरिंग स्टेप्स. Scope also include the testing steps also, side by side. So what we do in the beginning, what we do the unit testing. Unit testing means component testing. After that, when we integrate the component, then we do integration testing. So we Okay. do series of tests, then we do the final integration testing. So then we say that, okay, the quality, which is the quality acceptance criteria, as stated by the client beginning, that how the product should perform at a particular level regarding the functionality. So, suppose if I'm making a lift for a client, passenger lift. Client says that the safety criteria for my passenger lift is that it should be able to carry 10 passengers. Okay. So, what I will do? First, I will study the structure and size of the lift, which is good for 10. Then I will select the quality materials like the lift cage, like the rope of the lift, according to the quality. So I will say that, okay, if the acceptance criteria is 10, I will make sure that I'm creating the lift with a load which is good enough for 20 people. So I'm doing a load testing for 20 people. So after doing the load testing for 20 people, I find that the lift is working perfectly even after the 15 days. It has not failed. So definitely the same criteria down. Now the client criteria may be lower. So the client will do a load testing for 10 people or maybe 11. He'll find that it works fine. And then it says that, okay, it meets my acceptance criteria. So he will make me the payment. Similarly, suppose my client is a bank. Okay. So the bank is asking me to develop a net banking application. So I then ask them that what is your quality acceptance criteria for the application? I'm giving you, see, the criteria can run into a list of 100 checklists. I'm just giving you a simple. They say that the interface should not be hackable by any hacker even after 1 billion attempts. It will take a hacker, it should take an hacker 1 billion, the combination of login and password to hack into a particular account. I say, fine, done. Now I ask him that what is the peak login that you expect during your business hours? He says our peak business hours are from 10 a.m. to 2 p.m., 4 hours. So then I ask him, how many people do you expect to log in simultaneously? He says our peak load is 10,000 people can log in during this 4 hours. You can expect 10,000 people to be constantly logged in. So then I tell my quality team to design the product in such a way so that the possible hacking criteria is 2 billion times and the load will be tested at 20,000. So this is what we do generally. So when I do the hacking test and the load test, and if it passes the 2 billion, and if it passing the load criteria of 20,000, because normally I have seen that the customers are not able to completely guess, we always keep our own quality acceptance criteria margin higher than the client margin, so that there is no way client can fail our product while doing his own test. Right? Is it clear? Yes. Okay. Okay, sir. So I will do the load testing at 20,000. Now the customer is going to do it at 10,000. क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा. मैंने जब 20,000 का मैंने चेक करके दिया, वो 10 पे चेक करेगा तो चलेगा कि नहीं? चलेगा. तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसकी मीट हो गई. स्पीड, फिर वो कहता है कि जो लॉगिन स्पीड जो है वो 5 सेकंड में होनी चाहिए. मतलब लॉगिन का बटन प्रेस करते ही 5 सेकंड के अंदर क्लाइंट जो है मेन पेज पे पहुंच जाना चाहिए. तो मैंने अपनी टीम से कहा भी हम अपना जो है स्पीड रखो 3 सेकंड. लॉगिन का बटन प्रेस करते ही 3 सेकंड के अंदर जो है यूजर को मेन पेज पे ले आओ. तो मैंने चेक किया तो कंसिस्टेंटली वो 3-4 पे चल रहा है. अगर क्लाइंट चेक करेगा तो उसको भी 3-4 मिलेगा. तो वो उसका अगर क्राइटेरिया 5 का है
तो मेरे को एक चीज बताओ कि ऐसा कौन सा क्लाइंट होगा जो 3-4 सेकंड में अगर पेज लोड हो रहा है, वो उसने 5 का कहा है, अगर वो उससे भी जल्दी लोड हो रहा है तो वो मना थोड़ी ना करेगा, है ना? एक्सेप्टेंस के करेक्ट लिए सर, करेक्ट। वो कहेगा जी हाँ ठीक है, तो हियर इज योर पेमेंट। ठीक 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 है ना? तो क्वालिटी एक्सेप्टेंस ओके। क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हो, आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। मेरे को एक चीज बताओ, अगर हाई स्पीड में अगर लोड हो रहा है नेट बैंकिंग, तो इज इट क्रिएटिंग ए वैल्यू और नॉट? और नेट बैंकिंग क्यों क्रिएट किया गया? यस। नेट बैंक इसलिए क्रिएट किया गया है कि लोग बैंकों के अंदर आके भीड़ ना लगाए। अगर किसी ने अपना बैंक बैलेंस चेक करना है, खाता देखना है, अपनी रीडिंग लेनी है, मतलब खाते की वैल्यू और वो ट्रांजैक्शन रीड करने हैं, तो अपने घर से ही बैठे। अब तो घर से तो दोनों के लिए अच्छा है ना। आपको बैंक में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और बैंक के सामने भीड़ नहीं होगी। इसलिए तो आजकल बैंक में कौन जाता है? बैंक में सिर्फ आदमी एक बार जाता है खाता खोलने के लिए, है नहीं? उसके बाद जो है आदमी कहीं नहीं जाता बैंक में। फिर उसके बाद जो उसके घर के पास ही एटीएम मशीन दी हुई है हर जगह पे, हर सोसाइटी में। तो दैट इज ड्यू टू द क्वालिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, राइट? तो ये क्राइटेरिया जो है पहले सेट होती है, और क्राइटेरिया के मुताबिक हमने ये देखना है कि ये जो क्वालिटी वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मच प्रेशर from the constraint of time, cost and scope. So the quality should be having the right space to be executed by the the product engineering team. ठीक है? So guys, is this clear? The quality should be set in the beginning. Yes. If the Yes, quality sir. is set in the beginning, then you are able to plan the appropriate time, cost, and the scope. So if you find that the quality is creating a very unsafe product, suppose we have been given the responsibility to make a flyover. Now, the time and the price which is quoted by the client is not good enough to create a safe product or a safe flyover, because the expectancy of a flyover is for say 100-ton load, and it should be lasting for at least 100 years before it is declared as unsafe. So if you feel that the time and the price is not good enough, tell me guys, what should you do? Should you not talk to the client and renegotiate it for more time, or should you go ahead and create unsafe structures? As a responsible project manager, you should tell the client in the beginning Yes, sir. that the amount of time and the budget which you are giving me, it is not leading to a safe quality flyover, so I'm not going to undertake this project. You should say no, or rather you should say like this. आपको पता है कोलकाता में कुछ सालों पहले एक फ्लाईओवर जो अंडर द कंस्ट्रक्शन था, चलते चलते वो बीच चौक में, मतलब चलते हुए चौक के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। 28 लोग जो है वो मर गए ऑन द स्पॉट। वो सी फ्लाईओवर का एक सेक्शन जो है वो गिर गया बिल्कुल नीचे चलते हुए ट्रैफिक पे। आपको पता है कंपनी का नाम क्या था? इन्वर्सल, याद है? INVERCEL। आज से 7-8 साल पहले ये ट्रेजेडी हुई थी। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में हर आदमी जानता है ये कंपनी पिछले 28 साल से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, और इस कंपनी ने काफी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी किए थे, स्टेडियम वेडियम कुछ किए थे। बस वो पॉलिटिकल प्रेशर के चलते जल्दबाजी में, इट इज नॉट अबाउट इंजीनियरिंग, it is about the time constraint which was not sufficient to make the quality things, and due to which the tragedy happened. And there were a lot of court cases, litigation and all that, and the company got blacklisted, and all other clients, they were afraid to give their project to this company. So the company slowly lost business, and the company got sold out, and some of the directors are still in jail. So it is your responsibility to check for the quality constraint in the beginning, because quality can't be by chance. Quality has to be planned. Quality is impacted by the availability or non-availability of the sufficient time, sufficient money. So sufficiently all the steps should be completed. So all the steps which include that of the assembly and the quality testing. So if you are cutting down on the scope due to lack of time and cost, then you will come up with a poor quality, and it can endanger the life of people, right? So guys, is this clear? We should not do it. We should always
look at the quality and always make sure that it has good enough room from the time, cost, and scope part. Right, guys? Is this clear? So you should be able to map this into the Primavera. So in the Primavera, what you have, these are the column names. So you keep them in mind. Okay, in the cost, you will see that this is the component, and in the scope, you will see this is the component of the scope, WBS and activity blame. So this is how it is mapped into the Primavera. Now, guys, we will go hands-on into the Primavera. If you don't have any questions, so we can go directly into the Primavera. But before that, I would like to check. Anand, what is the status with your laptop? Could you bring it online? So is this your laptop? So, okay. So the Anand 2 is your laptop, right? Okay. So let me make it as Anand. So can you please show me the screen of your, so guys, we can take a break for 30 minutes. The Anand, can you please switch on the mic? Guys, you can hear me? Someone can hear me, yeah. So Yes, sir. Anand, can you please unmute from your laptop? Can you hear me from your laptop? Or just share me the screen of your laptop? Oh, okay, fine. Abhishek, just do one thing. So I think you won't be able to share or record. No, you won't be able to record from. So just do one thing. From your personal laptop, you share me your screen. Okay. From your personal laptop, you share me your screen. So let me have a look. So what do we have there? Because at least we can start the download. At least we can start the download. So go to your personal laptop, and from there you can share the screen. I'm sharing my screen. Yeah. Now I'm going to ask you for the permission. Yeah, please. Okay. Now this is the laptop. Okay. Now fine. Now you launch the browser and you open your gmail.com account here. Software I will download it, but Okay. So you have done the downloading. Okay. Can you go to your D drive? yeah. No, I'm facing some issue. Actually, I'm not able to click on this. Okay, so you can go to your D drive and show me that where you have downloaded and where you have kept it. So where is the download files? Where is the folder? I think this laptop is not supporting, so maybe Your screen is frozen. yeah, it is frozen. Sorry. Okay, just where is the download file? Let me open it. So have you completed the download? Yes, I had completed the download. Okay. It was showing to me here. डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा सी ड्राइव में जाओ इसमें यूजर में जाओ इस corner. So do you see there are two boxes there? So can you read the content of the two boxes there? Do you see that? Manias, keep the screen stable. So guys, can you read the two boxes on the top? Yes, Primavera P6 Professional. 21 and the current project. 21, yes. No current project. So when there is no project loaded into the memory, so it will say no current project. And when the Primavera is loading one or multiple projects, so they will show up here. The project code will show up here on the top. Now below that,
what you have is the main menu. This is a drop down menu. So drop down menu means that the menu option will drop downwards. So Niaz, please click on the file. So the drop down menu is showing below. So these are the options which are clubbed under the file menu. So if you need to use any of these options like new, open, import, export, so I'll explain to them later. Right now, we are only trying to understand what options are there. Then you click on the edit menu. So then you click on the view. View. Do you see that it has the longest drop down? It has got a lot of options in the view menu. This is used to configure what you are viewing on the screen. So the drop down menu, and of course it can be clicked with the mouse. It can be also accessed with the shortcut. Now, how to access the menu with the shortcut? So Niaz, please press your button Alt F. Alt and F key combination. Alt F. See that? Okay. Now, if you press Alt V, you will see the views submenu, Alt V. Do you see that? So guys, if you're comfortable, so basically the mouse is on the right side and your shortcuts are on the left side. So they'll be using the combinations which are very near. If you are good at using both your hands, actually I am good at using both my hands. And if something I can do with my left hand like Control or Alt, so I will do it with my left hand. So if something is near to me with my right hand, so with the right hand, I will better use the mouse. Okay. So in case you want to use the left hand, so you can use the Alt V, or otherwise, if you're comfortable to use the mouse, you can use the mouse to access the drop down menu. So this is a drop down, but in the drop down menu, you have to memorize all the options. So if you look at the view, so I'm not sure if you can memorize all the options which are there in the view, because the list could be quite long. So if you want to do something with the zoom, you might have to remember that the zoom option is actually placed under the view. So now to solve that problem, so what the Oracle did, instead of the drop down, they also gave you another option. This is called the panel menu. So guys, do you see this panel here? So in the panel, what they have done, that the main options from the drop down, they have been collected and put on the panel. So right now what you're seeing is the panel 1. Actually, in the Primavera, there are 2 top panels. Okay, so they are structured like this. So right now you are seeing only 1 panel, and then there are 2 more panels here. So one panel is on the left side and another panel is on the right side. So you know how we are going to talk about it. So if I say go to the panel, top panel 1, so this is the top panel 1. This is the top panel 1. This is the top panel 2. This is the left panel. Okay. And that side is the right panel. So, right, guys, you can remember this. Left of the panel, right panel, top panel 1, top panel 2. Right. So right now you are not seeing the top panel 2 because it is yet to be configured. So we will come to that in a moment. So after the panels, so what you have is the tabs, but right now you are seeing only 1 tab because this is the default tab which is open when you start the Primavera. So if you want to see more tabs, just do one thing. Go to this project, Saratoga Senior Community, you right click it, right click here, and you open the project. So guys, everybody please open the project. So guys, make sure that you are using the demo screen. You keep your mobile parallel to your laptop screen. Make sure that it is supported. Use a आप एक काम करो, एक ना पानी की बोतल भर लो पूरा, ठीक है, उसको ना अपने वो मोबाइल के पीछे रख दो. अगर आपका स्टैंड है तो फिर बहुत अच्छी बात है. रख लिया सबने पैरेलल में. Just fill a bottle of water and place it behind the mobile and keep the mobile parallel to your laptop screen. Okay, so now you will be able to see it comfortably. Now, so what you have is 2 tabs right now. So I want you to open the 3rd tab. So 3rd tab is WBS. Please click on this the button WBS.
So guys, please confirm, do you have the third tab? You have the 3 tabs. See guys, let me tell you one thing. If you have any problem, immediately tell me. Don't wait for me to go ahead. ठीक है, यू टर्न नहीं करवाना, ये नहीं कि मैं चुपचाप बैठा रहूं और फिर जो ट्रेनर 10 किलोमीटर आगे वो पे चला जाए, फिर उसको पीछे से सर वो जरा यू टर्न करना है, 10 किलोमीटर आ जाओ पीछे घूम के, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए. राइट गाइस, इज इट क्लियर? अच्छा, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म टू मी. सो एवरीबॉडी इज हियर? Yes, sir. WBS tab is not visible. हाँ, WBS टैब को विजिबल करने के लिए, अच्छा देखो किसी का ना दोनों सिस्टम में जो है मतलब वो चल रहा है माइक और ऑडियो, एक सिस्टम में कंप्लीटली म्यूट कर दो साउंड और माइक. देखो WBS टैब को खोलने के लिए इस पे क्लिक करो. देखो दिख रहा है डेमो, दिख गया? Yes, yes. हाँ तो करो. देखो स्क्रीन पे ना आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो काफी शार्प होता है, उस पर भी काफी चीजें क्लियरली दिखती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आप उस पर गूगल मैप देख के ड्राइविंग करते हो, जस्ट वैसे ही आपने करना है यहाँ पर भी, Yeah, WBS आ गया. है ना? तो काफी अच्छा रहेगा, आपको ना बार बार स्विच नहीं वो करना पड़ेगा. मैं कोशिश करूंगा मैं लाइनें थोड़ी सी लंबी लगाऊं ताकि आपको दिख जाए क्लियरली. तो गाइज यू टर्न नहीं करना. आप लोगों ने ये तो सुना होगा, सबका साथ सबका विकास. इसका मतलब ये है कि आप सब मेरा साथ दोगे और मैं आपका विकास करवाऊंगा, ठीक है, और विकास होगा जरूर, ठीक है. और जो मजा भी आएगा और बाद में आप लोग ये मजा फिर ये सारे देश को देना, ठीक है. तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा साथ देना है और आपका विकास होगा पक्का. अच्छा, उसके बाद क्या है, नाउ द नेक्स्ट टैब इज दैट. Okay, sir. हाँ बिल्कुल, गुड. अब नाउ यू क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट्स. तो ये भी एक टैब है, दिस इज रिपोर्ट. सो इट शोज यू ऑल द रिपोर्ट्स व्हिच आर देयर इन द प्राइमावेरा. Now there is one more tab which is called the resource. Okay, here you click on this human being. So basically this human icon is representing 3 kind of resources: man, machine and material. So this is a comprehensive list. So now this part of the screen is called the tab. Just like in the browser when we open multiple site, okay, we can open projects, activities, WBS reports and resources. Okay. So guys, please come back to the projects tab. So you are here. So everybody Yes. is on the projects tab. Okay, see, you divide the screen like this. Okay, you bring the divider here approximately in the center like this. Do you see now the screen is vertically divided into half, 50-50? Almost. Okay, now you click here. But I'm seeing some colored lines on the right side. Yeah, good. So these are called the Gantt chart. So Niaz, you click here in this center goal. You just double click here. Gantt chart. Now, so guys, everybody can see like this. Please click on this button. See, there is a button here, zoom out. Do you see this minus? Yes. So click on this button till you get the Gantt chart of this size. Okay. Now I'll tell you that what are the various structures in this screen. So on this screen you are having the structure. So this part is called the table, and table is consisting of information column. Okay. So table is a collection of columns, and you can add more. If you need, you can add more columns here. And okay, and the right side, this is called the Gantt chart. So the Gantt chart was designed by Henry Gantt. Henry Gantt had designed this Gantt chart in 1904. So he was a mathematician and he was calculating. He was sort of a consultant to the many civil engineering companies. So in 1897, he wrote the world's first project management book called The Organizing for Work. Okay, in 1897, so many years ago. In 1904, he showed to the whole world that how the time can be visually conveyed. दूसरे आदमी को अगर समझाना होगा कि भाई कौन से प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, तो उसने क्या किया, गैंट चार्ट बनाया. तो in the Gantt chart, there are mainly two things here. So this part is called the
time scale. So guys, do you see the brown boundary line? Yes. Now this is called the time scale, and the below the time scale he created activity timeline or the timeline. Do you see the red rectangle inside it? So the Yes. timeline is measured against the time scale. Okay, so when the timeline is measured against the time scale, you can see which project is having what duration. You can see long duration project, you can see short duration project. So you can compare the duration, see with the green arrow. So if you see, this is a long duration project, and if you read the time scale for the green one. So guys, can you please tell me how many years is this green one? This green, the arrow which is whose activity line is connected with the green. See this carefully here. This is one complete year, two complete year, three complete year, and this is 3 quarters, right? So you can say that it is approximately 3.75 years or 3 years complete and 3 quarters, right? So you can judge that this is a very small project which is marked in the circle. Do you see that? Yes. On the Gantt chart, on the Gantt bar, you can also see the start date and the finish date of the project. See this. Do you see this arrow? You see this pair of the arrows? So what is the start date of this project? 18th May. 18th of, 18th. what is the finish date? 12th July. July. Correct. So, this is called the timeline. So this project is of small duration. So its timeline is also proportionately small against the scale. Now, below this, I'm going to mark using the brown color. So listen to me carefully. So below it is called the detailed screen. I'm going to write all the names. So this is the timeline. No, sorry, this is not the timeline. This is the time scale. And this is the timeline. So the timeline of the project duration. So the duration is mentioned like or it is designed like a line so that you can see that what is the length of the timeline against the time scale. So you can perceive it quickly. This is the detailed details window, and on the top, so what you have is columns, and the whole thing is called the table. Guys, do you see that? Table. So, there are three main things here. Table, on the right side, the Gantt chart. So I will write the full name of this. The whole thing, the combination of time scale and the timeline is called the Gantt chart. Gantt chart was designed by a mathematician called Henry Gantt, and he showed and he gave the complete structure of the Gantt chart. He wrote a book on the Gantt chart, and he gave the complete theory of the Gantt chart in 1904. So the project managers used to earlier times, before the advent of the graphical computers, they used to draw it using the drafter. Like, I believe that you must have also done engineering drawing. I've also done engineering drawing. I've created many the isometric views of the components of the civil engineering, mechanical engineering. So we learned that how we can draw the structure so that the engineer, the site engineer, can execute the structure and make it. So it was so they used to attach some templates to the drafter and draw this using the same draft board and on the draft the drafter. Okay, so this is the Gantt chart, and this Gantt chart is used to visually perceive the duration and feel that what projects are happening in parallel, what project is happening earlier or after. So you can see there can be some time in parallel time is there in certain project. Okay, so visually it is good to understand. Okay, the numbers are presented like so. Now let me tell you, there are three screens
or the 3 tab, project activities and WBS, they have the same structure because they are concerned with the timeline. Now I'm going into the activities tab, and guys, you can see activities tab is also having the same structure, because in the activities tab, we are looking at the timeline of the activities. Activities are the task inside the project, and the WBS is the logical grouping of the activities inside the project. And these 3 tabs, they are having the same structure. So what is the structure? Table, Gantt chart, detail. Table on the left side, Gantt chart, and details. So they are having the same structure here, right? So guys, is this thing clear? Projects, activities, and WBS. Projects, right now I'm in the WBS tab, then activities tab, same structure. And then I'm in the projects tab, which is also having the same structure. Do you see that? Table, Gantt chart, and details. So this was created by Henry Gantt to represent the time information. So you could see against the time scale, when is the project starting, or when is the activity starting, or when is the WBS starting and finishing, and what is the comparative duration, and which of the activities or which of the projects or which of the WBS they're happening in parallel. So you can see some of the projects here, they are happening in parallel. Okay, some of the projects are short. Some of the projects are finishing later. You can see that their timeline is going towards the end of the time scale. So they are finishing later. So that gives you the perception of the total data in the system. Okay, so I'm going to remove the mask. Okay, so now I think you can understand that right side is the Gantt chart, left side is the table, and bottom is the detail. Now we will go into the reports tab. So Niaz, you click on the reports tab here. Reports tab is having a list of the reports which are used to create the understanding of the project. So projects can be understood whenever they are running. So we want to check the health of the project using the report. So just like you have the medical report, so you can consider that the reports are also sort of the reported for the reports are used to judge the health of the running project as part of monitoring and controlling process. Okay, so is this clear? So Primavera comes with a lot of inbuilt reports. So we can basically use a report which is the nearest one, and these reports can be copied and these reports can be modified also. So we can create a lot of new reports out of these reports. Okay, so is this fine? So just a moment, guys. Okay, now you please click on the resources tab. See, resources tab is going to show you the full list of the resources in the organization. Okay, so these resources are not just limited to the human resource. For me, right now, the reports, I clicked something, it went outside. The report is not seen. So reports you can see from here. So you click here, click here. So guys, please do not experiment on the screen. I request you, please. Okay, so we will come back to it. I'm just only trying to tell you that below the main menu, what you have is tabs. So guys, is this clear now? Tabs. So just like you have the tabs for the multiple websites in your browser, so it is just like that. So these are the major information which you can see. So our most frequently used will be the projects and the activities. Okay. With the projects, we can see the complete list of the projects in the Primavera. Okay. So guys, now I want you to be able to configure the buttons so that we can use the Primavera to the maximum best.
So right now we have a limited number of the buttons which are not good enough for our use. So we are going to increase the buttons. So first of all, let us click on the view menu. So guys, everybody please click on the view. So guys, please look at the demo screen and follow step by step. I will not be going very fast. I will not be going very slow. If you are careful, and guys, please make sure that you are not distracted by anything. Ensure a good environmental factor. Keep a bottle of the water in front of you. Okay. And if you are stuck somewhere, immediately let me know. Please don't do this. It's not like this that you will keep quiet and let me go ahead and tell me. Please tell me something 10 steps back. Okay, guys. Guys, is that clear to you? Yes, sir. If you're stuck on the current step, immediately let me know. Either I will explain to you, you will be fine, or I will come to your screen also. Okay, fine. Now everybody has clicked on this. Now, guys, if you go toward the bottom, you will see there's an option called toolbars here. I've drawn the arrow. It is quite a long arrow. And toward the bottom of this menu, if you go toward the bottom, you will see configure. You will see a configure option at the bottom below the activity critical path. You will see an option configure your tool. I mean, configure your buttons. Go to the bottom, Niaz. Sir, I cannot see the screen, that one. In your screen. No, you have to go to the bottom. First of all, you click on the toolbars. On the toolbars, if you go below, so if you go below, you will be able to see, or what you do, just do this thing for a moment. You minimize it. Okay. And maybe you can select, you just scroll down. No, you will have to minimize it. There two. No, I saw toolbar. Yeah. So you go to the option. First you click on the view. Then you select toolbars, and on the right side, there is a configure toolbars. There is an option at the bottom. At the bottom of this menu, somehow find it and click it. Okay. Configure toolbar. Activity critical path. Yeah, below that. Customize. I'm not able to see on the screen. I don't know why this zoom all these buttons. So guys, have you selected this? It is showing as customize. Customize only, sir. So click the customize. Yes, correct. So click the customize. Okay. Guys, everybody please confirm that you are in the customized toolbox. Have you got the customized toolbox here on the screen? Everybody? Yes, I have got. Saji? Yes, sir. You We are got on the Yes. same page. Okay, guys. Now, guys, listen to me very carefully. You will have to start from the top. So you will have to click on the action. Do not jump. Okay, action. Select it. Select administrator. Action. Select dictionaries. Find. Select find. Select publish. Select reports. That's it. You select only until the reports. We don't need the critical path yet. So guys, please look at the demo screen. Have you selected all these? Yes. Have you selected all these toolbars? Okay. Yes, all. Okay, very good. Now click on the close button. Activity critical path, that also? No. Okay. So click on the close. Yes. Close it. Now, guys, you will notice something. Please do not click. Let me explain to you first. You have to understand the thing properly. See, after this, after you have clicked, you will see that a lot of new rows have been created below the main one. So, so that's not a problem. Actually, this is your panel number 2. Now, what we are going to do, that we are going to pick them one by one. So we have to start from the first ones. The first one is this. Now, guys, do you note that at the end of the toolbar on the left side, there are certain dots. Do you see that certain multiple dots are there? And when you place your cursor there, it becomes like a forklift grabber. Have you seen a forklift?
It is used on the sides to pick up heavy objects like stones or big thing. So this looks like a forklift. So all you have to do, just Niaz, just wait. I will give the first demo, then you guys can do it. Now the first demo is being given by me. So what I'm going to do, I'm going to place this item here. So this is the one set of the toolbar C. I'll have to do it very gently and have to do it with a mouse. So first of all, I'm going to move it to the right side. Guys, do you see that it has to be done gently like this? First, you bring it to the blank space and then you push it up like this. Right. Now, Niaz, you will do the second one. You will grab it and bring it here and place it here. You'll have to do it with the mouse. Okay. Actually, no, just wait. Actually, what you have done, that you have put it out of the sequence. So this one needs to go here. And this one is supposed to be here. Why I'm doing this? So guys, if all your screens are same, then it will be easy during the training. Everybody's screen is the same. So if you look at the demo screen, so you will be able to find the same same set of the buttons on the same spot on your screen also. Now Niaz, you grab the next one and you bring it here. This one? No, Baba. Next one, Baba. This one, na. Again, you have to do it very gently. मैं बोल रहा हूँ, हाँ, straight line में लाओ. हाँ, बिल्कुल ठीक है. ठीक है? अच्छा. Now you bring it in an absolute straight line and push it to the top. Make sure that your cursor is going in a straight line. Correct. ठीक है? हाँ, yes, good. नीचे लाओ इसे थोड़ा. ये आ जाएगा नेक्स्ट रो में. हाँ, इसको हल्के हाथ से. हाँ, बस छोड़ दो इसे वहां पे. अच्छा, अब इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में लाओ और इसको जो इधर लगाओ. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है. सो गाइज, प्लीज लुक एट द डेमो स्क्रीन एंड मेक श्योर दैट यू हैव द same set of the buttons on the same spot, because then it will be easy during the training. I can use any of your screens and then you will be able to find the same button on the same spot. After the training, it's your choice that how it is comfortable for you. But during the training, make sure that you have the same button on the same spot so that you can look at the demo screen and you can get something done quickly. So everybody, please confirm that you are doing the same. अभिषेक, yes sir, आपका सेम चल रहा है? रिस्पॉन्स ठीक है लैपटॉप का? yes बढ़िया है. ठीक है गाइस, आज जो है ना कमाल हो गया, एक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया. 2 GB रैम में जो है प्राइमावेरा चल रहा है. 2 GB रैम में पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि 2 GB रैम में इंस्टॉल हो गया 5 मिनट के अंदर. ठीक है, 2 GB रैम में 5 मिनट में इंस्टॉल हुआ है और विंडो 7 चल रहा है. 2 GB रैम चल रही है, विंडो 7 चल रहा है और बिल्कुल सही स्पीड से चल रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी इंटेल माइक्रोसॉफ्ट मिलके ना हमें हर 2-3 साल के बाद ये पागल बना रही है कि अपना रैम बढ़ाओ. विंडो 11, अब ये जो विंडो 11 क्या करेगा, अब ये 8 GB रैम को ये खा जाएगा. कुछ दिनों बाद विंडो 11 बोलेगा कि भाई तुम इंटेल जो है 10 लो. ठीक है, प्रोसेसर चेंज करो तुम्हारा. अच्छा, अब क्या करना है गाइस? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? सी गाइस, देयर इज ए set of the buttons which can be understood like this. See, this is a set of button, right? Or this is a set of button. This is a set of buttons. Do you see the dots? Actually, dots are the sort of boundary line. Actually, these are the handles. Now, this is a set of the buttons. Okay. Now, what I want you to do, I want you to bring this set of the button in the panel number 2. I want you to bring this set of the button in the green box. Can you drag it and bring it into the green box? Gently you bring it below in the panel number 2. ठीक है. Now you leave this to me. I'll just tell you. If you bring it a little bit down, so this panel will adjust like this. So guys, please do this thing and then tell me that you are here. Saji, you are going fine. Is it responding fine now? Yes, it is responding fine. So after the reboot, is it fine now? Is it fine? It is fine. It is fine.
Okay, good, good. So that's good to hear. So guys, now, but tell me one thing. So everybody is synchronized here. Yes, yes. Arvind, you are synchronized. Yes. Okay, very good. So now, guys, let me tell you something very important. See, in this panel, why did I ask you to bring this set of the button down here? Because, you know, this is a set of the collection. Now, in this collection of this button, I want to expose a button. See, you can add more button. So there is a button here which is very important to be exposed in the beginning. So please click on this triangle. Please click on this triangle and you select add or remove buttons option. Select add or remove. Now a very important button is here. So that is lock all toolbars. Please select this button. It will add on to the set. Niyaz, look at the arrow. तीर पे ध्यान दो. Select it. करो, click करो इसे. हाँ. So when you select it, you see that it is getting added on the top. Yes. दिख गया ऊपर? हाँ. Now you select the next button, expand all, collapse all, collapse to. Okay, Niyaz, just hold the screen here because you are the demo guy. So guys, please look at the demo screen and make sure that you have selected these 4 buttons. Look at the arrow. The arrow will tell you which buttons are to be selected. Lock all toolbars, expand all, collapse all, collapse to. Currently select. Yes. So everybody is selected. Yes, yes. Saji, you have? Once again, lock all toolbar, collapse all, collapse to. No, expand all. Expand all. Okay. Expand all, collapse to. 4 buttons you have to select. Okay. So, Saji, are you logged in from both the screens? I mean, from your mobile and also your laptop? Yes. Okay, good. Now, guys, I'll tell you this is a special button. Now, to remove this drop down, click on the blank area on the Gantt chart. Click on any blank area on the Gantt chart. This will go. Now, guys, but let me tell you. So, look at this button here. So, what does it remind you of? Kya hai ye? It's a lock. Toolbars. It's a lock. It is shaped like a lock and it says lock all toolbars. Now, in the beginning, I want to lock the toolbars in place. I mean, it will lock the toolbars, but we can continue to add more buttons. We can continue to configure. Now, what is the benefit? The benefit is that after I have locked all the toolbars in place, then accidentally these toolbars won't be shifted. Okay. Accidentally, these toolbars won't be shifted. Now, guys, you click this lock button. Click on the lock button. So after clicking the lock button, what change do you see? What change do you see on the screen? This is See, it this is extended right, left side. before. No. See, after you click the lock, these dots are gone. Do you see these dots here? Yes. Actually, dots are the handles. So these handles are used to grab the set of the button and move them from one place to another if it is required. But now we don't require this handle, so we have to lock it. Because what happens when you are taking the cursor from here to there, it might get entangled in the cursor and this might move the set of the buttons. Okay. So the first thing that we do, we just lock the toolbars. Okay, guys, you have done that now? Yeah. Now we are going to expand the set of the buttons. Now we are going to work upon the panel number 1. So on the panel number 1, we are going to the left side. Now I'm going to draw the arrow and just see that where the arrow is touching. No, the arrow is touching on more buttons. Click on add or remove the buttons. So guys, do you see this menu here? So from this menu, you add page setup button and print setup button. Add the page setup and the print setup button. So guys, you have done that? Yes. Okay, fine.
Now, after that, after doing this one, so you just click here, blank portion mein click karo. Menu is gone. Okay. Now, I'm going to point out the next button set here. Click on add or remove the buttons. In this set of the buttons, you will select activity usage spreadsheet. Then you select resource usage spreadsheet. Then you select arrange children. So guys, have you selected these three? Please repeat again. So guys, please confirm. Repeat again, sir. What? Yes, yes. Please repeat. Yes. No, this is not to be repeated. What do you repeat? It's on the screen. Just look at the screen and do it. If Sir, my something, Gantt chart area zoomed out, zoomed in. How can I zoom out that one? Yours is zoomed out. no, you just look at the button side. Please use this. Yes. Please Fine, that's done. don't look at the Gantt chart right now. Do exactly what I'm telling you. You select this set and you add 3 buttons here. Just read the screen. Read the screen. Demo screen, you can see there clearly. This table is not opening, sir. Huh? This table is not See, if the zoom panel is on this, you move the zoom panel toward the right side or bring it to the bottom. There might be a zoom panel set of the buttons, so you just grab it and scroll it down. Okay, then I think you can see the top layer of the Primavera clearly. So guys, you have done? Yes, I have done. Okay. Now, after this, you click on the blank area in the Gantt chart so that this drop down goes away. Now, guys, look carefully where I'm pointing, and look at the demo screen. And from this set, you select no bottom layout. Select no bottom layout. Please look at the demo screen and do it. So guys, you are done. You are synchronized up to here. Okay, guys. Now, once again, click on any blank in the area so that this goes away. Now, guys, you will have to look very carefully where I'm pointing. I'm pointing to a triangle which is near the line. Now, select add or remove buttons. So here you will select the first 4 of the button, all the 4. And then again, you will select the last 2 buttons. Please look at the demo screen. So Niaz, just hold your screen. So guys, please look at the demo screen and read the button names of what you have to select. Saji, please read the button names. Please read it. New layout, open layout, say layout as bars, column. No. Look at the arrow. Can you see the red arrows? Table, yes. Table, only font those. and row, user preferences. So these 6 buttons we have selected? Yes. Okay, fine. Very good. See, when you have selected these 6 buttons, the check boxes are there. You see the check. So these buttons have been added onto the top panel. So you can see them. If you look carefully, you can see there are buttons which you have selected. They have been added on the top. Okay. Okay, fine. Now we will go to the last one. So you can click here on this triangle. Now, after that, you select add or remove the button.
And here in the last one, you will select global change. Then you will select summarize. Then you will select recalculate. Then you will select issue navigator. These four you have to select. Okay. Sayad, you are synchronized. Sayad, you are here. Yes, sir. Synchronized all. हाँ ठीक है ना अच्छा Yes, ठीक sir. Yes, sir. तो मेरे को एक चीज बताओ आपको पहले जो ट्रेनिंग थी उसमें बताया था इसमें ये बटन से स्टार्ट करना है इंटरफेस समझाया था कुछ नहीं नहीं सर नहीं सर, डायरेक्ट ईपीएस से स्टार्ट कर दिया था। नहीं तो आप कम बटन में क्या सीख लोगे तो पूरा तो फीचर तो सारा वहीं से होगा ना एक्सेस चलो ठीक है कोई बात नहीं अब जो है बढ़िया करते हैं अच्छा now you click on the blank area in the Gantt chart so that this drop down goes away. Now guys I'm going to highlight the panel number 1. So guys please see that on your panel number 1 you have this set of the buttons complete. Okay, I'm marking the set. I'm creating a boundary line of the sets. So guys, on the panel number 1, you have the 5 set. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And do you find approximately the same the buttons on those? Do you have you selected the same buttons? Okay. So I assume that if everybody is quiet, so it is yes. Now we are going to work on the panel number 2. Now on the panel number 2, I'll tell you that where to start from. In the panel number 2, you go to this set, which is the third one here. ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये बड़ा है. Now in this set, you will select one button only, resource curve. Resource curve, ये है button. So guys, do you see that what button you have to add here? Resource curves. दिख गया आपको? Please. After that, you click on this set of the buttons. It's already complete. So move to the next one. Now in the next one, there is a button here called the report groups. So you have to take this. Please select the report groups. So guys, please try to avoid any the background talks. Please do not distract yourself. Please focus on this training. This is a highly focused and individual training. It is not a group. I'm not doing a seminar. This is a sort of one-to-one training. Okay, is this clear? Yes. So if you have something running in the background, you can take care of it during the next break. Okay, guys. Now, this set of the button is done. Since we had already completed this set, so there is no need to do anything. Now we are going to configure the left panel. So click this arrow, click this triangle on the left of the panel. Now you select add or remove the buttons. So here you are going to select commit changes and refresh data. Okay, these two are very, very important buttons. So the commit changes, as you can see, it is a floppy. So floppy is for save. Here you don't see the word save. You see the word commit changes, because when you are saving the data to the database, it is like committing the changes into the database. Okay, so that's why you don't have the word save, because this software is not file based. When you press the commit changes button, the changes which you have made kept in the local memory, they might be pushed into the database on your laptop. The database might be in another room in the same building. The database could be in another building in the city. The database could be in another state, or database could be in another country. So the commit changes will push the data from your laptop memory into the database. Okay, that's why it's not saved. Okay, now the refresh data button will tell you that if some new changes done by your colleagues on the same project, that it will bring them here. Okay, now you click on the blank area so that this menu goes away. Now you will
expand the next set of the buttons and select on add or remove. Now in this, you will select the button enterprise project structure. Then you are going to select the roles. Then you are going to select the OBS, enterprise project structure, roles, and the OBS. So guys, I am holding the screen. Please have a look. What is this OBS? Yeah. Please look at the demo screen. They are marked by the red arrows. Guys, I'm sure you can see the arrows too. Do you see the markings which are being made by me? Yes, yes. Okay, fine. Okay, now click on the blank of the portion of the Gantt chart. Now you select this last group of the buttons from here. In this, you will select only one option, that is the issues. So, you know, when you are doing the project, you can maintain and manage the issues using the issues options. So when you are using the networked option of the database, then your colleagues can report the issues and you can prioritize the issues. You can reassign the issues to the appropriate team members. Okay. Now, guys, you will click on the right panel. So guys, everybody is on the right panel here. Please select dissolve, link, undo, and fill down. Okay, these 4 buttons you can see on the screen, and these are marked by a red arrow. Please look at the screen. On the demo screen you see, and you select these 4. Guys, have you selected these 4 buttons? Yes, I have selected. Dissolve, link, undo, fill down. Yes. Dissolve, link, undo, and fill down. Okay, now you guys click on the blank portion on the Gantt chart, and this set of the menu will go. See, rest of the buttons, they are already maximum selected, so there is no need to select any more buttons. Okay, so our panel number 1, that is the top panel 1. This is our top panel 2. Then what we have is our left panel, and this is our right panel. They are now configured, right? Now we understand that what is the main menu, what is the top panel 1, top panel 2, what is the left panel, right panel. And slowly as we use the buttons, we'll be able to get familiar with the buttons with their functionality. See, some of the buttons are intuitive. If you look at, you will find printer. So we know that this button is used for printing. Similarly, you will see a floppy button on the left side. So we can understand it is used for the save. So similarly, there will be many more buttons. We'll be able to recognize the symbols or the pictures. So we'll be able to remember what functionalities they do by using them. So, but if you want to learn them quickly, I had asked you to print the file number 1. Okay, in the file number 1, all the buttons and their icons with their commands, what command they execute, it is mentioned there. You can look at that from time to time, and very soon you will be able to remember all the buttons. So it is not a difficult thing. If you use a software frequently, and if you look at that command sheet, so you will be able to remember it quickly. So that's not a problem. Now, what we are going to do, that we are going to configure the projects tab font, because the font right now is not so comfortable. So guys, please click on the projects tab. After clicking on the projects tab, you will click on this button. So guys, do you see on the panel number 1, I have marked out this button. It is called table, font, and row. Guys, do you see that? Table, font, and row. So click this button.
So guys, you are here in the table font and row. Okay, now you Yes. click on the font. Click on the alphabets in the font. In the font, you will select Vardhana. If you type just V here, just like this, if you just type V, you will get the Vardhana. Then you select the Vardhana regular 8. Vardhana regular 8 size. Font size should be 8. Right, guys? Sir, for me, it's showing not responding that tab, table font and row. So you just wait. Just wait. There is something in the laptop which is keeping it slow. Do you play games on your laptop? No, no, no. I don't know. There is some graphical or something, some kind of routine is running in the background, which is just holding it. Now, has it come? No, no, no. So then, what to do? I will close and reopen again. Okay, Reopen right. again. Okay, now click on the OK. Then click on the OK. You will see the font will change here and here. Click on the OK, the button to implement this Vardhana font. So guys, do you see the font change here? नहीं, font तो change नहीं हुआ इधर. आपने जो है कौन सा font किया था, select नहीं किया आपने. एक मिनट रुको. So guys, first of all, you click this button, then go to the font. In the font, you will select Vardhana. So you have to click on the Vardhana to bring it here, regular 8. Then click on the OK, the font will change. Do you see the font has changed? And suddenly you can read it a little bit better. Yes. So if you're having a bigger screen resolution, you can use the font number 9 also. But at this point of time, I would like you to use the font number 8 because we are going to use this font to add a lot more columns here. And we are going to expand the columns here. Now guys, do the same thing on the activities tab. Go into the activities tab and change the font to the Vardhana 8. Okay. Then you do it for all the tabs. Correct. Click on the OK. Okay, so this is Vardhana 8. Then go to the WBS tab. So select the Vardhana 8. So this is a one-time job only. After that, it will be very comfortable to use the interface. Why? Because in the future, you would be working in a high-speed action mode. So when you are working in high-speed action mode, everything should be crisp and clear to you to read. Now you do the same thing on the resources tab also. So you select the Vardhana regular 8 and click on the OK. So guys, have you changed for all these 5 tabs? Project activities, WBS, reports and resource. Everybody please confirm that you have implemented the Vardhana font 8 size. Now everybody please come back to the projects tab. Very good. So everybody can please confirm that you have changed the font. Saji, what about you? No, sir, I haven't. I'm trying that one because that is showing the same, not responding. I'm trying to solve that one. So did you reboot the laptop after installing the Primavera 21? Yes. Hmm? Yes. So is the laptop behaving like that today, or is it like that for some time, or is it something wrong with it? No, normally it works fine. Because earlier 20 was working fine in this one.
No, 20 and 21 is the same. Basically, for the font feature, that doesn't make the 21 a little bit heavier. Basically, the software, the newer version of the software are more bug-free. Okay. Okay. More bug-free and more faster even, because all the companies, they don't have any more features to add. Now, let me tell you the truth. All these 38 years, they have completed all the project management life cycle here. The software is nearly perfect. The only thing that they are doing is that if someone is reporting any kind of bug, or someone is complaining that the software is running slow, okay, so they are just compacting the software in the memory. They're making sure that the software is fast and quick to run, and it is more and more bug free. Okay, so there is nothing much more to develop. Maybe in the future you can have the voice activity. I will close this app and open again. Yeah. Close this app, exit the Primavera and restart it. And make sure, can you please shut down all other softwares on the laptop? Yeah, only this is working. So you, Zoom have you closed your browser? Browser also closed. Okay, so no other software is running except the Zoom, of course. Zoom, yes. Okay, so you run it once again. And quickly log in and try to see if you can implement the font. Because by implementing the font, it becomes very comfortable to read small text. Do you see? This font is so sharp. But yeah, it came, but right now the projects, I cannot see the projects, resources, activities, and the other reports tab. So you click on this, you will see the projects tab. Where? Okay, projects I have. Remaining activities I don't have. Okay, if you want to see the activity, just do one thing. You select any of the project and you open the project, then you will get activities tab. So you have done that? No. So I opened one project. Open this project, Saratova, right click and open. It will load into the memory and the activities tab will come. After the activity tab comes, then you click on the WBS tab. Do you see here, WBS, these two blue squares, you click them. Yes. Then you can click on the reports, then you can click on the resources. Okay, look at the demo screen in your mobile and do the same on your screen and you will get all these tabs. So you've got all these tabs now? No. Again, it's not responding. See, you'll have to find a solution for that, or else you book me a ticket for Dubai. I will come to your home and fix it next week. Right? Either you fix it or I fix it. I will fix it. I'll give me some time. Or you come to my home. I'll fix it here in Ghaziabad. I'm always ready to help. Okay. Thank you. Okay, fine. Now let us continue. Okay, just don't worry, but let's see if we can do something more with that. So after you have set the font, I want you to understand the buttons. Okay, so I'm going to mark a pair of the buttons here. Now, if you look at the screen, I have marked a pair of the buttons. So one of the button on the left side, I click, it shows only the table. The name of the button is table and the name of this button is Gantt chart. So guys, do you see what is happening on the screen? See, I click on the table button. So the table is showing. The table. Why you should only see the table? Because if you're having a lot of columns and then you are not interested to see the Gantt chart, you are trying to focus on the numbers or the text. Okay. So then you can click on the left side, you can see a lot of columns. But if you're interested to see the columns and the Gantt chart also, you can click the right button also. Now guys, what I want you to do, I want you to do left, right as you used to do in the scroll. So these two buttons you click 10 times. 10 times you click on the left button and 10. So left, right, you do it.
20 times. So it will be 10 times each. Why? Because I want you to have accelerated experience. Because after 3 days of the training, you will feel as if you have been using Primavera for the last 2 years. Okay. And moreover, during the training, I am not going to point out the button for you. I'll just tell you that Niyaz, switch on the Gantt chart or switch off the Gantt chart. That's it. So you will know which the buttons to click. So left right जो है 10 बारी left और 10 बारी right. ठीक है? And then the skill within your grip. If the skill is within your grip, so it will lead to your vikas, right? Okay, so guys, is this clear? What these two buttons can do? So have you done the practice? Now I am sure you are going to remember it forever, and you will be able to find them quickly and use them quickly, because you know these are the very basic buttons. You need to know them. What about this if I don't want to see this table? No, if you don't want to see the table, then you will have to close the projects tab. Actually, this is part of the tab. See, in the tab, at least one thing will be there, that will be the table. The graphical information is the optional one. Okay, the graphical information is the optional one. The table is not optional. As long as the tab is there, the table will come. Right? So table is the basic data. Now, I'm going to show you another set of the button, another pair of the button. So I mark this button. Now see that what happens. I click on the right side button. Now guys, do you see that what happens? Yes, bottom layout has been disabled. Yes. Now I click on the left side, bottom left comes. So details, so that the left side button is called detail and the right side button is called no bottom layout. So what it does, it hides the detail. So that button is called no bottom layout. And this button brings up the details. So that's why this button is called details. Now guys, you do the left right thing 20 times. 10 times on the left side and 10 times on the right side. No, yeah, in the middle of the button. Yes, correct. And remember it permanently. Because I don't want you to be lost for buttons. अभिषेक ठीक चल रहा Yes, sir. हाँ ठीक चल है? लैपटॉप रिस्पॉन्स ठीक है? ठीक है समझ नहीं आ रहा यार, 2 GB में चल रहा है प्राइमावेरा. Okay guys, so that's really good. Now I'm going to show you another set of the buttons which are also very important to master in the beginning. So guys, let me do this thing. First of all, let me hide the bottom layout details. So guys, I'm going to show you a pair of the buttons here. Right now you can see as on the screen, as on the demo screen, there is a double plus button which is now disabled and there is a double minus button. So Niyaz, you click on the double minus button and see that what happens. क्या हुआ? All disappeared. See, all the data has not disappeared, it has got folded. है ना? Folded एक वो गेट होता है ना जिसे हम कहते हैं कैंची वाला दरवाजा. ठीक है? So then there is expand all. So expand all will show you the data, the tree-like structure, all the trees and the full tree. I mean, it will show you all the branches. So expand all, collapse all.
So you click on this 10 times on the left and 10 times on the right. So you saw that you can remember as if you have been working on Primavera for 2 years. 3 साल में 2 दिन का एक्सपीरियंस पूरा करना यहीं पे ही, ठीक है. And today guys we are going to sit a little bit later और आपने घबराना नहीं है, ठीक है. ठीक है, समझ में आया है ना. अच्छा, now guys I am going to tell you one more button, so which is also very useful button. So guys, do you see there is a button here which is showing you plus minus symbol. Okay, now you click this button plus minus. So once you click this, a pop-up will come, collapse to. Now you select in the drop down, you select level 1, and after that click on the button apply. Now what do you see? You see that all the information is collapsed to the top level 1. Now here, then you select level 2 and apply. In the drop down, you select level 2 and apply. Now what you are seeing is the level 2 of the data. Now let me explain this to you. So guys, what is the meaning of the enterprise? Enterprise word का मतलब क्या होता है? सुना तो होगा टाटा एंटरप्राइजेस. एंटरप्राइज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो जब हम देखते हैं टाटा एंटरप्राइजेस, तो इसका मतलब क्या है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो इंडिया में एंटरप्राइजेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? व्हाट आर द एग्जांपल? टाटा के अलावा और कौन कौन सी है एंटरप्राइज, बताओ. अदानी एंटरप्राइजेस. हाँ, उसके बाद है रिलायंस ग्रुप है, उसके बाद है आदित्य बिरला ग्रुप है, और एक टीवीएस ग्रुप है साउथ की, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी ग्रुप है, ठीक है. और क्या है? और है कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप इंडिया में? विप्रो है ना, वो भी बहुत बड़ी ग्रुप है. उनका जो है सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, एंड दे आर इनटू द फूड प्रोडक्ट्स. विप्रो का काफी डाइवर्स पोर्टफोलियो. तो ये जो है, उसके बाद जो लेवल 2 है ना, हम इसको कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं लाइन ऑफ बिजनेस, की कंपनी के किस किस चीज के बिजनेस है, किस चीज का धंधा है, ठीक है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, और नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है. अब ये ग्रुप ऑफ कंपनीज बनती क्या है, कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात सारे. Whenever a person starts a business, he starts with one business, right? Guys, right or wrong? Yes, right. So what happens after some time, he gains proficiency in that business. वो उस business का ना मास्टर बन जाता है. लेकिन एक चीज ना वो रियलाइज करता है कि कोई भी बिजनेस आप खोलो, वो साल में या फिर वो कभी कभी डाउन भी हो जाता है. अब जैसे अभी पीछे कोरोना के टाइम में कौन कौन से बिजनेस डाउन हो गए थे? ट्रैवल लाइन के बिजनेस थे ना, जितने होटल, एयरलाइंस और ये सब कैब वैब सब, ये डाउन हो गए थे कि नहीं हो गए थे? जी. लेकिन कुछ बिजनेस है, जैसे मान लो कि टाटा के पास थी, टाटा एयरलाइंस थी, टाटा ने तो एयर इंडिया बाद में ली है. टाटा के पास कौन सी एयरलाइंस है? विस्तारा. सुना है आपने विस्तारा? अब विस्तारा एयरलाइन डाउन थी, लेकिन क्या टाटा का काम धंधा क्या बंद हो गया? नहीं. टाटा के उस वक्त जो है कार बन रहे थे, टाटा स्टील जो है वो चल रही थी, बेशक वो कम चल रही थी लेकिन वो चल रही थी. तो ग्रुप ऑफ द कंपनीज क्या होते हैं कि जब एक बिजनेसमैन जब एक बिजनेस को करता है, फिर वो रियलाइज करता है कि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक दूसरी बिजनेस भी स्टार्ट करनी चाहिए. तो आपको पता है कि टाटा का ओरिजिनल बिजनेस क्या है? जब टाटा ग्रुप जब स्टार्ट हुई थी, टाटा का ओरिजिनल बिजनेस है स्टील. जमशेदपुर शहर का नाम सुना होगा आपने. यस. तो टाटा के जो ग्रुप के जो सबसे पुराने जो थे, जो बुजुर्ग थे सबसे पुराने,
उनका नाम था जमशेद जी टाटा। तो जमशेद जी टाटा जो विजनरी थे, तो उन्होंने कहा था कि स्टील जो है हम इंग्लैंड से क्यों मंगाएंगे, हम स्टील यहीं बनाएंगे, लोहा हमारा और आदमी हमारा, और तो स्टील भी हमारा। तो उन्होंने टाटा स्टील करके कंपनी स्टार्ट करी, पूरे जमशेदपुर में बड़ा स्टील प्लांट जो है वो लगा दिया। फिर उन्होंने खोला, फिर टाटा होटल, फिर और कई बिजनेस खोले। तो टाटा के पास मीडिया भी है, बेनेट कोलमैन कंपनी जो है वो मीडिया आर्म में है टाटा ग्रुप में। तो इट इज कॉल्ड ए पोर्टफोलियो। आपको पता है रिलायंस का ओरिजिनल बिजनेस क्या है? शुरुआत में जब रिलायंस स्टार्ट हुई थी, रिलायंस का ओरिजिनल काम है कपड़े का, विमल फैब्रिक्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब विमल फैब्रिक्स जब चली तो धीरू भाई अंबानी को समझ में आया कि भाई फैब्रिक्स भी हर वक्त नहीं चलती है, तो कुछ और किया जाए। तो उन्होंने फिर रिलायंस पेट्रोलियम खोली, फिर उनके बेटों ने आके रिलायंस मोबाइल खोली। उसने अनिल अंबानी ने सबसे पहले रिलायंस मोबाइल खोली, रिलायंस टेलीकॉम, अब तो वो बंद हो गई है। फिर उसके बाद फिर मुकेश अंबानी को बेच दी उसने कंपनी। ठीक है, तो फिर मुकेश अंबानी ने खोली रिलायंस जियो। तो जियो भी वही टेलीकॉम का काम कर रही है। और रिलायंस के और भी कई बिजनेस हैं, रिलायंस रिटेल, रिलायंस मार्ट, रिलायंस का एक और है मिल्क बास्केट, वो रिलायंस ने बाद में एक्वायर की है। ठीक है, तो कुछ बिजनेस इनके जो है पहले से चल रहे थे, कुछ बिजनेस इन्होंने बाद में एक्वायर किया। जैसे टाटा ने अभी एयर इंडिया को एक्वायर किया है। तो एयर इंडिया का जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो आता है ट्रैवल। और जो टीसीएस जो कंपनी है कौन से पोर्टफोलियो में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिख रहे हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टीसीएस भी काफी सक्सेसफुल कंपनी है। कई जो है 1000 करोड़ों का सॉफ्टवेयर जो इंडिया में भी बनाती है और एक्सपोर्ट भी होता है उनका। ठीक है, उनका बाहर भी काम है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो क्या होता है कि ये जो प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर है ना, ये शुरुआत से ही जो है ये बड़ी कंपनीज के लिए, इसका फुल नेम है ईपीपीएम, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के अंदर पी फॉर पोर्टफोलियो, एंटरप्राइज के अंदर पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईपीपीएम इसका पूरा नाम है। तो पूरा नाम क्या है? एंटरप्राइज पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पोर्टफोलियो के अंदर जो है प्रोग्राम भी होता है, फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट होता है। तो अब इसके अंदर जो है क्लिक करो लेवल 3, लेवल 3 लाओ, अप्लाई करो, डू दी अप्लाई बटन। Now guys, do you see that there are the yellow bands here? दिख गया आपको? जो येलो बैंड्स क्या है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, मेरे को बताओ ये क्या है? What did I write on the screen? Niyaz, read it. Yes. Programs. 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 प्रोग्राम्स होता है। जो येलो जो होता है ना वो पोर्टफोलियो के नीचे होता है, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो, स्पेशलाइजेशन है उसमें भी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपनी का करता धरता कौन होता है, उसका नाम क्या होता है? मतलब रोल का नाम देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने? CEO. सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ, तो सीईओ जो होता है वो इन सब का हेड होता है। पोर्टफोलियो के लिए क्या होता है? पोर्टफोलियो कौन संभालता है? पोर्टफोलियो मैनेजर। प्रोग्राम कौन संभालता है? प्रोग्राम संभालता है प्रोग्राम मैनेजर। और प्रोजेक्ट कौन संभालता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। Project manager. ये जो व्हाइट वाला जो है ना, ये है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए होता है प्रोजेक्ट्स मैनेजर। तो प्रोजेक्ट्स मैनेजर के पास एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट, इसलिए मैंने लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर के पास आमतौर पे एक ही पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का पर्पस क्या होता है?
The purpose of the portfolio manager is to develop the business in the particular portfolio. So his job is to put and bring new projects and put them into the pipeline ताकि कंपनी के लोग रोजगार में लगे रहें, कंपनी बेरोजगार ना हो जाए. बात आ रही है समझ में? पोर्टफोलियो मैनेजर बड़ा धुरंधर व्यक्ति होता है. वो इधर उधर से जो है कहीं से भी कैसे भी करके प्रोजेक्ट ले आता है, चाहे वो टेंडर पास कराए, ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, उस आदमी को पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया जाता है. बात आ रही समझ में? नहीं? ठीक है. बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वो लाता है, उसका काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है. प्रोग्राम मैनेजर क्या करता है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर के नीचे काम करता है. व्हाट ही डज कि वो उस पोर्टफोलियो के अंदर जो उसका जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो रिसोर्सेज को वो डिवाइड करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कराता है. वो प्रोजेक्ट मैनेजर को वो हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, और वो रिसोर्स वो प्रोवाइड कराता है. उसके ऊपर प्रोग्राम लेवल पे एक जो वो बजट दिया जाता है, तो उस बजट से वो मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा वो प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट करवाता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर को वो सपोर्ट करता है मतलब हर तरीके से. ठीक है. मटेरियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, कोई ट्रेनिंग हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो प्रोजेक्ट के बीच में, कोई क्लाइंट से प्रॉब्लम हो गया, किसी और से प्रॉब्लम हो गया, तो वो हेल्प करता है. तो ये उसका काम है कि जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करना है. तो प्रोग्राम मैनेजर क्या करता है, जो सेम टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होता है उनको वो मैनेज करता है, उनके बीच में वो रिसोर्सेज शेयर कराता है. मैन मशीन, मान लो 3 कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो तीनों के लिए जो है अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है तो प्रोग्राम मैनेजर जो है वो करेगा बल्क क्वांटिटी में. अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर अगर किसी सीमेंट प्लांट को अप्रोच करेगा तो वो मान लो वो दे रहे हैं कि 100 रुपए का बैग, प्रोग्राम मैनेजर कह रहा है जी मेरे को अपने इस स्केल में चाहिए, तो वो नेगोशिएट करके 80 रुपीज का ले आएगा पर बैग. तो ये सारे काम करता है प्रोग्राम मैनेजर. तो इस तरीके से ईपीपीएम चलता है. ठीक है. तो ये जो बटन है ये आपको दिखाता है लेवल्स. ठीक है. अब आप इस पे क्या करो कि ये जो लेवल सिलेक्ट कर करके 2-3 बारी जरा प्रैक्टिस करो. 1 2 3 1 2 3 जरा 3-4 बारी करो. अप्लाई करना है, ओके नहीं करना. ओके करने से बंद हो जाएगा बटन. करो 2. मतलब याद हो जाना चाहिए बिल्कुल पक्के तौर पे. ठीक है. इस ट्रेनिंग के बाद ये फील नहीं होना चाहिए कि कुछ याद नहीं है मुझे. ठीक है गाइस. So this is basically to expand and contract the data at a particular level. Now right now you are seeing 3 levels, but there can be more if you wish to. But in most of the cases, most of the companies, they are fine to represent the data in the 3 levels. Now, if you want to collapse all the level, so you would click on the double minus. If you want to expand all the levels, so you will click on the double plus button. Okay. And this is the screen divider. Okay, this is the vertical divider. Normally, we prefer to keep it near the middle so that we can divide the screen half between the table and the Gantt chart. Okay, so is this clear? Yes. Okay, now, first of all, now guys, do one thing. First of all, you switch off the Gantt chart by clicking on the table option. Okay. Now what you are seeing is only the table and you are seeing the columns here. So do you have a screen like that? And also switch off the bottom part of the screen by clicking on the no bottom details. So make sure that you have only the table and without any bottom details. Now you can see that the right side of the screen is empty. So, you know, there is a potential to add a lot more columns here. So those columns could be about the planned duration, actual duration, percentage completion, start date, planned start, planned finish, actual start, actual finish. Now, what is the planned cost of the project? What is the actual cost of the project? What is the variance and what is the remaining funds of the project? You know, there is a space for a lot of columns here and we are going to expand. And after adding those columns, we are going to understand
what is the status of each of the project by interpreting the data, right? So first, what we will do, first of all, we will add the columns. Okay. So guys, you are ready to add the columns. You are ready to go with me? Yes. Okay. Now, in this area or this area, you can do a right click and you will see a menu after doing the right click. So guys, do you see this menu? In this menu, there is an option called columns, and then you select columns, customize. Okay, just look at the demo screen. So guys, have you seen that columns customize? See, first of all, you will right click. After that, you will get column. Then you will select the customize option. Guys, do you see on the screen? दिख गया आपको? हाँ अभिषेक, दिख गया? Just a minute. देखो जरा इसमें अरविंद, Yes. ऑनलाइन Customize. Yes. है? हाँ, इसको सिलेक्ट करो तो कस्टमाइज का टूल बॉक्स आएगा. मैं इसको टूल बॉक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो इस टूल बॉक्स से मैं सेटिंग करता हूँ मैं. ठीक है? Okay. Now you expand the toolbox by dragging from the corner. Expand the toolbox by dragging from the corner. ठीक है? Now ये जो toolbox है, इसके अंदर क्या है कि अब ये जो लेफ्ट साइड का फॉन्ट है ना, थोड़ा सा छोटा है. सो नियाज एक काम करो, देखो यहाँ पे एक ना ट्राइंगल है, इस पे क्लिक करो. देखिए ये ट्राइंगल, इसमें सिलेक्ट करो टेबल फॉन्ट एंड रो. आफ्टर सिलेक्टिंग द टेबल फॉन्ट एंड रो, गो टू द फॉन्ट and this time you are going to select Vardhana 9 number. Vardhana, you will select the Vardhana and use the 9 number font because we have got some space here. यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो इसलिए हम 9 number font use करेंगे. ठीक है? Now this font size is increased. Now I want you to notice something, guys. Do you note the same column names are there on the top, right? So it means that if you want to implement some columns, so you'll have to you have to bring some columns here, and as you add here in the selected options, and then you can add more columns on the screen below. Now guys, let me tell you, in the beginning you will never click this button. These two buttons, guys, do you see clearly what buttons I am indicating? These two buttons, they look like the fast forward and they look like the fast rewind. So do not click this button. The problem with these buttons is that if you click any of this button, they will take away all the items from the left to the right or from right to the left, which is a disaster. Okay, which is a very big problem for you. So do not click these buttons. Right? Okay. Now we will select the buttons one by one. I mean the columns one by one from left side to the right side. Now guys, please click on the strategic priority, this column here. Please click this. Click. Acha. Now I want to have the dates. Which dates? The planned date and the actual date. I mean, no, sorry. Duration. Planned duration and actual duration. Now guys, do you see that on the left hand side, there is a group called duration. You can expand it by clicking on the plus button. D se pehle hai na plus button. D se just before the D. So guys, do you see that? That inside the duration group, you can see BL project duration. So you select the BL and take it to the right side by clicking this button. Okay, guys, do you see that this column is gone to the right side? Guys, do you see that this column has been selected to the right side? Then you select actual duration and also take it to the right side. Actual, A for actual, take it to the right side. Okay, so guys, I'm just waiting for you to confirm you're done. You have to select these two columns, BL project duration and actual duration. Have you selected that? Kar liya select? Okay, so Arvind has done. So good. Yes, so, yes, I have. Okay, so everybody please confirm that you are able to do it. Sayad kiya kya?
सियाद, Yes, sir. विकास होना चाहिए Done it. अब की बारी, कोई बहाना नहीं Yes, चाहिए sir. मुझे। Hello. हाँ, okay. Hmm. Now, after we have selected the duration, please close this, please collapse this group. So after collapsing this group, I'm thinking, what do I want? Oh, I said, oh, I want, what is the percentage of the completion of the project? Now, if you look at the groups very carefully, there is a group which says percentage complete. So please expand this group, percentage complete. From this, you select the option schedule percentage complete. Okay, so schedule percentage complete. So you take it to the right side. So guys, have you seen the schedule percentage complete has been selected? Make sure that they're in the same sequence: BL project duration, actual duration, and schedule percentage complete. So at this point of time, the schedule percentage complete should be appearing at the bottom. दिख गया आपको? Do you find the schedule percentage complete is at the bottom? Guys, do you see that percentage Yes, yes, yes. at the bottom? Okay, so after that, you will collapse. Yes, Yes, sir. Arvind, thanks for responding. So guys, please click on the percentage complete. Okay. After that, I'm thinking, what do I want? Then I'm thinking that I want the dates. Now, to get the dates, so guys, what I will do, I will expand the dates group. So guys, do you see a group here, the dates? So expand the dates group here. Click here. So then you will select in this sequence. First of all, you select the start and take it to the right side. हाँ. उसके बाद आप select करो F for finish. F for finish देखो आपको मिल जाएगा. उसको भी ले जाओ. फिर आप जाओ A for actual start. Right side पे. Actual finish. Right side पे. ठीक है. So guys, I'm pausing here. आप देखो यहाँ पे ये 4 dates हमने ये सेट की है. इस sequence में आपने भी करना है. So once you confirm, then I will move to the next group of the buttons. I mean, next group of the columns. We start. Yes, start is here. Start. Finish. Actual start and actual finish. Yes, I have done. Okay, very good. So thanks for confirming. Very good. So guys, we have selected the dates. Then I'm thinking, what is the another aspect? Another aspect of the project is about money. So where is the money aspect? It is under the cost group. So I will expand the cost group. In the cost group, I'm thinking that what is the planned cost of the project? Say, guys, do you see there is a field here, BL project total cost, BL. BL means baseline. Baseline means a planned value, planned and stabilized value, fixed value. So you take it to the right side, BL project total cost. Now, after that, I would like to see actual total cost. You will select actual total cost. Then when I'm running the project, I want to see that while I'm running the project, what is the difference? The difference in the project management language is called the variance. So you will select this column at the bottom. It is at the bottom, variance BL project total cost. So when I'm running the project, I'm also interested to see what is the remaining amounts of the money. So I will select remaining total cost. Okay. So guys, I'm marking on the screen here, and Niaz, please read the columns to your friends. BL project total cost, actual total cost, variance BL project total cost, remaining total cost. So everybody please confirm that you have selected these columns. और नियाज जरा गिन के बताओ कितने कॉलम्स हैं टोटल, ऊपर से जरा गिनती कर लो एक बारी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. So guys, you should have 15 columns in total. And if you have 15, then I'm sure you are fine. And also see the sequence of the column. If you find that any of the columns are out of the sequence, so you can move it up or down using these buttons on the right side.
Okay, Sayyad, good. Thanks for telling me. Good. Saji, Yes, what yes. with your laptop? Laptop is responding or not? Yeah, it's responded. Okay, okay, fine. So you please select these columns. I'll wait for you. You select this column quickly and then. So I already selected. Oh, you have done. So very good. Now, guys, please click on the OK. And after you click on the OK, these columns will get implemented on the tab. You Yes. see that these columns are implemented now. Now you can see. It is implemented. Okay. Now, what we are going to do, since there are a lot of columns there, we want to basically fit these columns onto the screen. So guys, just see that what I'm doing, I'm reducing the size like this. So slowly and slowly you will find that the data is going to fit on the screen. Okay. So guys, I'm going to optimize the size by dragging this, or I can do a little bit of a double click on the boundary line, just like in the Excel. So guys, one thing you should note that in the numeric column at the top, you should be able to see the currency symbol because it has got the maximum number of the numerals. Maximum number of the digits is there. If you can't see the dollar symbol, it means that the data is cut. Like if you look at this, the data is cut. So here you have to expand. So once you see the dollar symbol on the top row, it means that the full data is now visible to you. Right, guys? Is this clear? Now, if you look at the screen end to end, so Sir, all my the actual data. start and actual finish is before the start and finish. So is that a problem? So tell me again. My actual start and actual finish is in your in the display. It is shown as after the start and finish. Actual start and actual finish is shown. So in my system, the actual start and actual finish is in before start and finish. So that does that make any difference? Just don't worry. So you can drag them, you can grab and drag them and place them here like this. See, I'll just show you that how to grab and place a column from left to right. See, what I'm going to do, I'm going to pick up the start column. Guys, do you see the start column is depressed here on the demo screen? Okay, I'm going to place it after the project name. So I go to the project name column and place bring my cursor just behind it and I release it. Do you see the start has moved? Guys, do you see that moved the start column? So I'm going to grab it once again and place it before the finish and release my mouse. So once I release my mouse, so the start column gets released there. So you can grab any column and you can place it appropriately where you feel that it should be done, right? So you can shift them. You try to do it, try to help yourself, you will be fine. Okay. So you grab the column, just don't worry, you might misplace them, but you will get a little bit of practice. With a little bit of practice, you will be able to do it. Very good, very good. Yes. Okay, done. Yes. So see, you can basically change the configuration from here also. But in the column interface, you can select a column. But here you can't select a column. If you want to add more column, so definitely you will have to go into the interface. Now, guys, I want you to notice something. Niaz, you please click on the project ID column on the top. Guys, do you note there is a small little triangle which comes up here? Do you see this triangle? Now, if you look carefully on Nia's screen, on the demo screen, do you see that the triangle is pointing downwards? Yes. Now, what the triangle is saying is that the data is organized in that direction. Means the smaller value is at the top, the greater value is going downwards. Okay.
Now, Niaz, you click on the project ID column once again. Now, do you see that the triangle is pointing upwards? Do you see that, guys? The triangle is now pointing upwards. Okay. Now, once the triangle is pointing upwards, so do you see that the data is sorted in the reverse direction, guys? Do you read this numbers here? You will be able to understand. Read the numbers and see which way they are going. Right? Descending order. Smaller numbers are downwards. So actually the triangle is pointing the upwards. You can do the same thing on the project name also. Now you click on the project and see, you can sort only one column at a time. Click it. Now the alphabetic sort is from A to Z. Now it is now Z to A, upside down. Now click on the total activities. You see that the total activities is sorted from top to bottom, then bottom to top, and sort on the schedule percentage complete. Do you see the schedule percentage complete, guys? So schedule percentage complete is showing you the percentage completion of the project. So guys, you can sort on any column, but as a best practice, the sorting after you are done should always be brought back onto the ID column. In every screen, you will find that on the corner, on the left side, there is an ID column. You should always bring it back onto the ID column. Right, guys? Is that clear? So ID column has to be sorted in the downwards direction, like the triangle should be pointing downwards. Yes, this is the ideal parking for the sort. Just like you park your car in a proper way, you should park it like this, right? So guys, do you note this thing, this triangle? The triangle should be always parked here on the ID column, and the direction should be downwards. Is that clear, guys? Yes. Okay. Yes. Now we are going to understand the layout. Actually, what we have done, the way we have organized the data, the way we have arranged the columns, we have changed the font setting and all that. This is called a layout. Okay. So now this layout means that the way you are organizing the data, the way you are displaying the data, so the layout can be saved and the layout can be shared with your friends also. But first of all, I want to save my layout because when I start my software next time, I should be getting the same kind of the structure that should not be lost. So data is there, data will not be lost, but the looks will be lost. Okay. Now guys, please click on this button. Do you see this button here, save layout as? Yes. Okay. Do you see this? Now you click this button, save layout as. Now you write here projects layout by, projects space layout by, then you put your name. So everybody please put your name after the by, project layout by. So Niaz will write Niaz and you guys will write your name. So guys, please see this. Okay, do you see that? So everybody, what is it here? Saji, you are here? Yes, yes. Okay. Now, guys, after that, you click on the save button. And after you have clicked on the save button, please confirm if you can see. Yeah, Sayad, good. So, guys, do you see that your name will appear here? Layout, projects layout by your name. Guys, please confirm. Do you see the layout name? Yes. Okay, so now we will understand the layout, that how does the layout work. It is one of the very important things which will make your use of the Primavera very, very comfortable. Now, to see your layout in the list of the layout, please click here. This is called open layouts.
Guys, do you see a tool window called the layout? The open layout? This is a tool window for the layout. Now I'm going to bring it a little bit to the corner. I'm going to place it here so that you can see the impact of the layout. So in this tool window, there are two categories. One is the global and one is the user admin. Now user admin is you. It means the layout which has been created by you will be saved here and it will be visible to you only. So guys, just imagine that in case you are working in a big company and you are using the database which is connected, we are using a centralized database, right? Now all your data is not on your laptop, but it is saved in a database, which is a centralized one. You just don't know where it is. It really doesn't matter. So as long as you can see the data on your screen, now what happens that many other people are also working. So global category is the category of the layout, which is provided by the Primavera as an initial starting point. Now global layout is visible to all. The user layout is only visible to the particular user. So the user admin, this is a private layout. So the global layout can be changed anytime? No. We can switch to the global. Just wait. First of all, you understand what is this? This is a private use layout visible to you only. Global change layout can be used by anybody. Now we are going to experiment with the layouts. Now guys, just do this thing. First of all, you select the chart view. After selecting the chart view, click on the apply button. Click on the apply button and you will see something happening on the screen. Now guys, what happened? What you are seeing is a chart view. Chart. Isn't it a chart? It is the hierarchy chart. Now guys, what is the hierarchy? On the top, it is the enterprise at the number one, only one. Now all these which are at the number two, these are the portfolios. Then there is a number three. The number three is a program. And then in the last, what you have is the project. So it is called the last. It is not the number four, it is the last. Because in certain portfolios, they have been subdivided into projects, but certain portfolios, they have the projects directly. We'll understand in a while that why is it so. See, when a new line of business is started, the portfolio is small. So the projects are kept directly in the portfolio. When the portfolio increases, when the turnover of the business increases, the portfolio is subdivided into programs. And then program managers are appointed to take care of them. Okay, slowly and slowly we will learn it. But we are now trying to understand that what is a layout. Layout means layout, means laying the data in front of you so that you can interpret the different aspect of the data. Now you select project coding and click on the apply button. Yes, select a project coding and apply. You will see a different set of column. Now you are seeing a set of column, but it is not having any parent-child structure. There is no grouping here. It is a flat list. Do you note that the listing is flat? No grouping. Yes. Now this is, if you look carefully, what kind of information is that? It is a very general information. Project manager कौन है? Project कहाँ पे है? इसका sponsor कौन है? इसकी rating क्या है? This is very general information, right? जैसे कुछ project अभी जो है ये evaluation stage में है, मतलब client से बातचीत चल रही है, तो यहाँ पे project खोल दिया, इसलिए खोल दिया ना project, ताकि project के document store कर सके यहाँ पे. So अभी ये initiation stage में है, ठीक है? अभी ये project अभी ये plan नहीं हुआ है, ठीक है? Guys, is it clear? अच्छा, now there is another layout here. Select the project cost and click on the apply. Up there go. Now the screen has changed, the layout has changed. Now you have a parent-child structure, but here the focus is on what? Focus is on the monetary aspect. Now, for those guys, those who have done the PMP, they can see the CPI and the SPI column. Guys, do you see the CPI column and the SPI column?
So can someone tell me that what is the interpretation of the CPI column? So when we look at the CPI data, so what we can perceive, हम क्या महसूस कर सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है? CPI is cost per performance index. It shows the efficient utilization of $1. See, minimum should be $1. See, the CPI is basically centered around the one value. Now, if $1 you are spending, you are creating a value worth $1.03. So basically, if this project, if you look at the Haitang Corporate Park, this project can finish below the budget, means that it can save some money also from the budgeted. But if you look at that next project, it says 0.91. So 0.91 means that if you are spending $1, so if you're spending $1, so you are basically completing the work which is worth 91 cents. This is the interpretation. But if you don't take a corrective action, then very soon the project can utilize large amounts of money, which will be greater than the planned amount of the money or the budgeted amount of the money. And similarly, the schedule performance index is about the speed of the project. When the speed of the project means that when it is 1, it means that all activities are starting on the planned start date and all activities are finishing on the planned finish date also. So all activities are starting and finishing on time. So that is 1. If it is below 1, it means that the project is going slow. Sometimes you might even find if some project is going faster, if its SPI is greater than 1. And then at completion total cost, this is a forecast. Okay, the forecast is based upon the CPI. So if you understand these things, if you have done PMP training, then you can use it to get the perception. Okay. Explain CPI. Standard. CPI, please again explain, sir. Who is that? Arvind. Arvind. Yes, sir. You'll have to join my PMP training. Sir, little bit is just explain. Okay, CPI is about the performance of $1. Okay. So Arvind, it means that when you are spending $1, how much work you are completing. तो अगर $1 अगर आप इसमें खर्चा कर रहे हैं तो आपका $1 ही काम होना चाहिए, ठीक है? तो if the CPI is below 1, it means that there is a possibility that the project may end up spending more money than the budgeted amount of the money. Okay, if the CPI is more than 1, so it means that if you continue like this till the end of the project, then the project may be completed in lesser than the budgeted amount of money. अभी तक तो इतना ही माइंड में रख लो, ठीक है? Now, standard program view, click on the apply. Sir, schedule project index also once more. वो speed के लिए होता है. The speed should be around 1. 1 is the ideal speed. If it is below 1, I can tell you the interpretation, not the calculation. Okay, 1 means on time, below 1 means that you are going slow. Now, this is a standards project view. So, you know, someone might have created these views. So basically they want to interpret the various aspects of the project, right? So this is also having a set of columns, some color, some font. Then you feel you might be feeling comfortable in your own view. So you select your project layout view under the admin and click on the apply. Okay. After you have applied, so you are back to your own view. So I'm sure you are feeling very comfortable here. Now click on the open, it will close this and apply the layout. Just in case you have not applied, so it will apply it once again. So guys, you are back into your own view and feeling at home, right? Okay, close it. Now, guys, please make sure that the triangle is in the project ID column and it is pointing downwards. Everybody, please confirm this. So everybody's here. Good. Yes, Abhishek, thanks. Yeah, so yes. Yes, sir.
Saji, you are here. How is your system responding now? Yes, yes, yes. It is good. Okay, very good. Okay. Now, guys, what we are going to do that we are going to interpret this data even further. So we are going to understand the various data of the project which is presented to us. We will be able to interpret the health of the project. So for that, I want you to click on the option schedule percentage complete. So, it will sort. This column will get sorted. So make sure that it is from 0 to greater value like this. Write this. You have this, guys. Schedule percentage complete. Okay. Now let us do this thing. Let's take a break for 20 minutes. So right now it is 4 p.m. Indian Standard Time. Okay. So let's take a 20 minutes break. So let's have some tea and come back. Let's relax and come back. After that, we are going to learn that how to interpret this. Your recording, you can start the play. And then Abhishek is going to share his screen. Yeah, I'm sharing my screen. Sharing my screen. Yes, it is. It is. So, guys, you can see the demo screen. Okay. Now, first of all, what I want you to do that first of all, you click on the schedule percentage complete button, right? So schedule percentage complete, this column will be sorted first, then we will continue. Okay. Okay, guys. Now I want you to look at this data. I'm going to underline it. See, first of all, let us look at this project. So guys, what is the completion percentage of this project? 0% completed, right? So it means that this project has not been started. Now, guys, do you see this actual start column? It is blank. Do you see that actual finish is blank? Do you see that? Why these two columns are blank? The actual start and the actual finish date columns are blank because the schedule percentage complete is 0. So this project has not been started, right? So is this clear to you? Saji, is this clear? Yes, yes. Okay. Yes, yes, yes. Now, and you will see if you look at this column here, actual cost, that's also 0. And of course, the variance will be 0. And you will see one more thing, which I'm going to mark with a green line. So do you see this guy? That the planned total cost is exactly equal to the remaining total cost. Okay. Why the remaining total cost? Because you have not used any of the money or the funding, right? So this is the data interpretation of the. Now, what is the meaning of this total activities? Total activities means that what is the number of the activities which are inside this project. So guys, you can see the number of the activities can also define the size of the project, right? You see that the Saratoga and Juniper and the Harbor Point A, so they've got around 130 plus activities. So they are bigger project as compared to the ones having less number of the activities. Okay. Now we will look at another project, which is this time I'm going to select a project which is completed. So if you look at the Sunset Gorge, guys, do you see that this is a 100% completed project? Do you see that here? So if you look at the completed project, how does the data look like? So the data I'm going to show you the interpretation of the data. So guys, do you see that in this project, the project which has been started, okay, the project which has been started. So let me mark it once again. So I'm talking about the project, the Sunset Gorge project here. So you can see here that in the start
date, it is suffixed with a A, and the finish date is also suffixed with an A. Do you see that? Now, what is the meaning of this suffix in the start and the finish column? It means the project has a actual start date and the project has an actual finish date also. Okay, which you can confirm here. So you can see that its actual start date is filled in and actual finish date is also filled in. Do you see that here? Guys, do you see that? Actual start date and actual finish date is filled in for this project. Right? Okay. Now we are going to see further for this project. Now, if you look here at this project data, so guys, what was the planned cost of the project? $92,000. Now, what is the actually finished cost of the project? $97,000. So, guys, do you? I hope that you can see comparatively that it has taken more amount of the money to complete the project than planned. So, is that clear? Yes. Okay. So, how much more it is mentioned here? If you look here comparatively, it has taken approximately $5,000 more. Right. So you can see in the variance column, the amount $4,999 is mentioned in the bracket. Do you see that it is mentioned in the bracket? Yes. Bracket is extra. The bracket is meant to display the negative amount. Okay. So this is how the financial data is displaying the negative amount. Now we will look at a project in which the completion is in progress. Okay. Let's look at this project here, Hythang Corporate Park. Do you see that, guys? Okay. Now, what is the completion of this project? 31%. So it means that the project has started. So next to the start date, there is an A. Do you see that? Yes. But if you look at the finish date, that there is no actual finish date because the project is in the progress. So that's why the actual finish date is blank. Do you see that actual finish date is blank here? Yes. Okay, so after this, you are going to see that this is the total planned cost of the project. And to complete the 31%, it has spent out of the 636, it has spent around $191,767. Do you see that? $191,767, right? And what is the variance amount? Is it positive or the negative amount? Positive. It's a positive one. Now, what is the interpretation of the positive variance? It means to complete the project till the 31%, it has spent this much amount less than the budgeted amount. So it means that the budgeted amount for 31% could be 191 plus 767 plus 45225. It could be that much amount of money could have been spent, but maybe the project manager and the project management team is very, very efficient in executing the project, and without compromising the quality, they have completed the acceptance criteria, and then they saved this much amount of the money. So which is fine. So that's okay. But in most of the cases, it will not be so. Let's look at a project just above it. If you look at this city center project, so this project is 16% completed. But do you see the amount of the variance here? This is mentioned in the bracket. Yes.
So what does it mean if the amount is mentioned in bracket? Negative. Negative. So negative means that if it is in the variance is negative, it means the amount of the money which has been spent on doing the work is actually more than the planned amount of the budget for 16% completion. So at this point of time, it should have been that much amount of the money less. So normally, what is the acceptable variance? The variance should be 0. The actual cost and the planned cost of the project should be same. So whatever you plan, so that should be the expenditure, right? So then the variance will be 0. So is this clear, guys? Yes. Okay, guys, now I'm going to tell you the next thing. This is the interpretation of the data here. Now the thing is that when we look at this data, so we find that the duration is mentioned here. This is the project duration and the actual duration, but they are not having any kind of the suffix. It really does not mention that whether they are days, weeks, or months. So you don't see that. And then your boss is there. Let's say that you have an imaginary boss who is appreciative of your work. He says that I want to see the date part I want to see the time component in the start and finish date, and all the dates should have the time component. And he says that I want this amount of the money to be translated or converted into the rupees. Okay. So it means that we have to do some settings here, right? So guys, we are going to do the settings. So you're ready for that? So step by step, we will do it. Right? Okay. Now to do such settings there, so we will have to start from the admin menu. So guys, if you look at the top, you will see the admin option. Please click on this. First, we will make sure that we set up the interface properly. So the first option that you see here is the admin preferences. So guys, please click on the admin preferences. In the preferences, the first one you see is the general preference. So what is a general? It is the general data. It is a code separator. Code separator is represented by a dot here. So it means that between the parent and child, if it is written somewhere, so you will see that it is being separated by a dot. Parent character or the parent code, child, you will see dots. So this is okay. So we don't change it because it is absolutely fine for us. Now, the first day of the week, actually, it should be Monday. So you select it as Monday. So when we look at the calendar, the Monday will appear on the left and the weekends will shift towards the right. So guys, please select here. You select here Monday. Yeah, correct. So guys, everybody has selected the Monday? Yes, selected. And default duration, please make it 6. So this is the activity duration. So in this training, we need 6. It is a convenient to have 6 as a duration. So it's quite good because you can choose it for 2, 3, or whatever you wish. So each time you create an activity, it will be created with the default duration of the 6 in the duration column. So we actually need this for this training. So it is a convenient for us. So it is not a rule, it is of convenience. What does this denotes for me? So for any activity which you create, if you add a new activity, by default, it will have a 6 days length. Okay. Okay. We need it. So we can change it below 6 or more than 6 also, but most of the time we need 6. So that's why I said, so default means convenience, default doesn't. Now select the data limits. Select the data limits. So guys, in the data limits, do you see what it is saying? EPS, WBS, tree level, what is saying 20. Now, if you look at the tree level here, it is 1. This is 2. This is 3. And for us, 3 or 4 is good enough. So, all this data which has been set here, it is more than sufficient for our users. So we don't have to change here, but we need to understand
that the parent child structure like this, parent child, parent child, parent child, parent child, parent child, it can go up to 20. So we are fine with that. So we don't need more than 3. So I think we can skip that. Okay. So then we come to ID. ID means identity, identification. According to the project management fundamental, the project management says that everything inside the project, including the project itself, should have a unique identification code. If you look at the project ID maximum character, it says 20. Now, if you look at the project ID here, can you count how many characters are there? कितने character है इस तरफ left side में? Eight, maybe maximum 9, but here is a provision for 20. So I don't think we are going to use that much. So, so we are all fine with this. There is a provision for 20, right? Okay. Now we come to the next is the time period. So please come to the time periods. Now, guys, normally how many hours are there in a day? 8. No, 24. But, can a person work 24 hours? No. A person cannot work 24 hours. So what you are seeing here, it is written 8. Now it is called the man hours per day is 8. But where does this number 8 come from? पता कुछ आपको number 8 कहाँ से आया? 8 man hours किसने set किया सबसे पहले? नहीं. सबसे पहले 8 man hours per day set किया था International Labour Organization ने, which is part of the United Nations. So they gave a set of the labor laws, international labor laws. So these labor laws were implemented by the member countries on 1st of May 1950. So guys, कभी आपने सुना मे डे छुट्टी होती है, लेबर डे, मे डे, तो छुट्टी लिया कभी, क्या मिली है कभी कंपनी से? आपने किसी ऐसी कंपनी में काम किया जहाँ पे 1 मई को छुट्टी थी कभी? अच्छा, लेबर डे सुना है नाम? Yes. ये जो लेबर डे होता है ना, ये क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड ओवर में 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, हर टाइप की कंपनी में छुट्टी होती है. तो वो लोग जो है ना, वो लेबर डे की इसलिए छुट्टी मनाई जाती है क्योंकि इससे पहले इंडस्ट्री में लोगों की हालत खराब थी. इसमें कोई लिमिट ही नहीं था. देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर द पीपल टू वर्क 10 hours, 12, 16, So after the labor laws were implemented, then it was determined by all the governments that everybody is going to work 8 man hours. So that is why it is called man hours. So man hours is the hours worked by man. So that is why it is called the man hours. So according to the international labor laws, the man hours was set to the man hours was set to the 8. Right, guys? So is this thing clear? Yes. So that is why it is. Now, what happens if I'm going to run a company, organization for, let's say for 6 days a week. तो 6 days में कितना हो जाएगा man hours total? इसमें कितना हो जाएगा? तो 48 करो इसके अंदर. We are going to use the 6-day week organization. ठीक है. अच्छा, 6 day के बाद अगर मान लो कि if there are 4 weeks in a month, so what is 48 multiplied by 4? कितना हो जाएगा यहाँ पे? 192. तो इसमें 192 डालो. We are going to use the 192. We are going to create a company format with 6 days a week. लेकिन मैन आवर 8 ही रहेगा. आप किसी कंपनी को 5 दिन, 6 दिन, 5.5 दिन ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन मैन आवर 8 ही रहेगा. That is the rule. Now guys, what is 192 multiplied by 12? अगर साल में 12 महीने हैं तो what is 192 multiplied by 12? कितना होगा? 2304. हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने 2400 डालना है. मैं आपको उसका रीजन जो है मैं समझाता हूँ आपको. आपने नोट किया होगा कि कुछ महीने होते हैं जिनमें 5वां जो सप्ताह होता है ना, जो सैटरडे, इवन दैट इज वर्किंग. ओके, बिकॉज दोज आर 31 days month. So that is why we are rounding it off to 2400. So
2304, we round it off to 2400 to accommodate those months also. Because in certain months, there is a 5th working Saturday. 5वां Saturday भी है उसमें. Now here in the months you make it M0, not 0, O, letter O. First you make it as MO in the months. इसकी abbreviation को change करो, MO. Capital O? No, small. O. अच्छा, और यहाँ पे in the minutes you change it to M. You remove the N and make it to M. Now I'll tell you the reason I'm asking you to do it. See, many years ago, I was having, in 2010, I was having a problem in exporting the data from Primavera to Microsoft project. So I realized that in the Microsoft project, the month is MO, but it is fixed. You can't change it. It is hardwired, hard-coded. But in the Primavera, you can. So, that makes it compatible, right, guys? याद है अभिषेक, Microsoft project में months डालते हैं, MO का. Yes. उसके अंदर M होता है और इसमें भी हमने सेम कर दिया abbreviation. अब दोनों तरफ compatibility हो गई. अच्छा, now we will come to the earned value. So the earned value is the value which is basically the monetary calculation of the work completed. So it is according to PMI process, it is based upon activity percentage complete, which is correct. And this is the forecast as the remaining cost for activity. Now, both of them are correct. We are not going to change. Okay, so we let it remain the same. Now come to the reports. In the reports, in the header label 1, you put your name. And in the footer label 1, you write here. End value means, once again, end value means my speaker was in trouble. Earned value is the value, the monetary expression of what is the percentage completion of the product, how much part of the project you have completed, and what is the monetary value of that. That is called the earned value. Okay. So now in the header label 1, you write your name, and in the footer label, you write your company name. You write your organizational name. Now, why I'm asking you to do it? Because once you are printing any report in the future, you will be able to trace it back here. And if you wish to change it, you can change it, right? You can change it. You will be able to remember where you put these values. Now, after the reports, come to the options. I have to put my company name on footer level 1. Yes. So it will be good so that you can trace it. Okay. Now, And what about the custom level 1? Yeah, you do it in the first set only. Custom level 1, you leave that. There is no need for that. Okay. Now, you come to the options. In the options, just do one thing. You select this URL, open it in the browser quickly. Open it in the browser, bookmark it in the browser, close the browser and come back here. Sorry, sir. Open this URL in the browser, bookmark it in the browser, close the browser and come back. Because you should visit this site later after the training, because it has got all the information about the version 21. If you want to read more about the version 21, if there is any update, so you can see it on this site. Okay. I have to bookmark there. Yeah, you bookmark it and then you come back here. Oh, done, sir. You opened it in the browser quickly and bookmark it and come back. Or if you don't, Abhishek, you don't do it. आपका 2 GB रैम में जो है सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है. अभी मत खोलना, इसको आप ना बाद में कर लेना. Right. Anyway, it's going to be there in admin. So guys, quickly you open it in the browser and bookmark it and come back here. Close the browser. Okay. After doing the bookmark. Because this is the site from where the version 21 information, if you want more information, if the version has been updated or not, anything like that, you can see from there.
Okay, so you have the user manual is there, so you can read it after the training. But if you're fond of the technicalities, there is an administrative manual also, but on this site. Okay. Now our next option is rate types. So rate type we are going to use in this one, we are going to use the standard, so which is fine. We don't change anything here. So we use the standard only. So after this, you come to the industry selection. In the industry, we will select engineering and construction to get the maximum features. Okay. So the Primavera is basically having some customized feature for some industries, but I've noticed that engineering and construction gives you the maximum features which can be used by any other kind of the industrial project. And we don't need the exception site list, because the exception site list is basically useful if you are having Primavera online, which you don't have right now. So we don't bother about that. So guys, please confirm that you have selected this engineering and construction from the industry. Okay. So if you've done that, good. So Arvind has done. Niyaz, you have done? Yes, done, sir. Sayyad, you have done? Saji, you have done? Okay, good. Saji, what about you? Yes, yes. Now click on the close, guys. So the options which you have selected, they will get implemented. So it is saying that industry selection will be implemented after you restart. So that will happen later. Right now, once again, we will click on the administration. Okay, in the admin, we will select admin categories. Now, what is a category? Admin category. Category means that what is the classification of the data inside the Primavera. That is meant by the admin categories. Okay. Now, in the admin categories, there is baseline type. So whenever we set a baseline, we can select what type. So these types are fine. Now, our main changes will happen here in the expense. So what is an expense? Expense is the budgeted amount of money, which is also called the indirect cost. So there are certain categories which we use in India. So let us create them, which is not already there, because this is the American software, but we need to expense categories in the context of India. So guys, please click on the add button. And one category which we need in India is the staff welfare. Staff welfare, STAFF space welfare, capital W से लिखना है, बिल्कुल ठीक है, and press enter. ठीक है guys? Now you shift it up, क्योंकि आपने create किया तो आप इसको frequently use करेंगे. तो जब भी आप अपना पॉपअप जब खोलेंगे सिलेक्शन के लिए, तो ये आपको सबसे टॉप में मिल जाएगा आपको स्टाफ वेलफेयर. ठीक है, समझ में आया? तो स्टाफ वेलफेयर एक जो है खर्चा है, जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है. अच्छा, एक और खर्चा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर. सो यू राइट हियर, फर्स्ट यू क्लिक हियर ऐड एंड देन यू राइट हियर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर नंबर 2 पे, just below the staff welfare, transport expenditure. So this is the amount of money which has to be planned by you to transport your raw materials from the godown to the project site. So this is a third party expenditure, and press enter. So once you have done that, please confirm. So guys, is the demo screen clearly visible to you all? Yes. And I'm sure it is quite sharp on your mobile phone also, because mobile phone display is quite good. The Arvind has done good. So thanks for letting me know. Thanks for staying coordinated with the group. Okay. Saji, I am a little bit concerned about you. Is your laptop fine? Yeah. So Yeah, my
In between, it has stopped responding, but right now I had restarted that one. Okay. No, I think it will be tonight. It will be fine because once it restarts 3-4 times, I think all the components will get updated. After that, it will stabilize. So, anyways, how much RAM do you have in your laptop? 8 GB. 8 GB. I think it will be fine. You will be fine. But Windows 11 is actually unnecessary for most of us. From the engineering point of view, we don't need it. So the basic purpose of the operating system is to facilitate the smooth operation of the application softwares. So I've looked at the Windows 11 updates on many computers. I've seen that some people are still facing problems. Very much, yeah. Okay, so Windows 10 is fine. So as long as you have a 64-bit computer with 8 GB RAM and you have Windows 10 and you have got 15.6 screen, 15.6 inches. So I think you are fine. So in most of the cases, you're fine to do the Primavera. And also if you use any AutoCAD software, even 15.6 is good. But if you are at home, so these days, all the laptops, they come with the HDMI port. So if you open your television packing box, you will find HDMI cable. You can connect your laptop to the TV. You can use it like a huge big size monitor. So suddenly you will see that your fonts are bigger, sharper, brighter, Okay, so you can connect your TV monitor at home with your laptop also. So I think that Abhishek, you remember doing that? We were doing it. So during Microsoft project training, I hope that was good. Actually, your monitor had gone bad. So he was using that to do the training. So it was fine. Now, guys, next is the WPS. Today, can you give us a recorded version of this one? Because in between some portions were missed. So that one I need to recheck. See, it is not so, it is not a small file. Actually, this file, so right now it is recording in the compressed format. So can you please start your own recording? So Anand, I gave you the permission to record. So please make your own recording because I told you it takes time. So where is your permission, Anand? I cannot. Oh, so you just press on your record button, you can record. Actually, you should have been recording. That was not a problem. Okay, but so guys, please remember one thing. If you disconnect and then connect, the recording permission will be gone. Okay. But now also I cannot record. No, I have now given you the permission. So if you want to see, if you look down, you will find the pause recording. Or if you want to do the recording, press Alt-R. If you press Alt-R, it will start the recording on your laptop. Okay. Fine. You can press Alt-R. Now, guys, according to the PMI, the 5 process groups are initiating, planning, executing, monitoring, controlling, and closing. It means that executing should be the third place. So you shift it up. And controlling and monitoring is not correct. Actually, it is monitoring and controlling. Now, these are used to classify the WBS. That what is the particular WBS all about? So are we initiating or are we doing planning? So we can set up the category for the WBS and we are able to classify the WBS information. Right, guys? Yes. So is this thing clear? Okay. So we will see its implementation later. Now we come to the document categories. See, in the Primavera, you can store multiple documents. Okay. So, but Primavera is a very disciplined software. You cannot just upload like the Google Drive. You have to tell the Primavera that what is the category. Now, what I'm asking you to do, you select a category which you frequently use and take it to the top. Shift up. Suppose you are mostly into the bid.
So what you can do, you can select the bid and shift up like this. Okay, so you select your frequently used category to the top so that you can find it when you need it. Okay. So is this thing clear? Yes. Okay. Now come to the document status. So status means current state of the document. Okay. Now there is one of the status which is not mentioned here, but I think it is useful to have. You click on the add and you add the status here, rejected. Rejected. So even if some document is not okayed, but if it is rejected, so what you can do, you can still keep it in the system under the rejected status code. Okay, so it's up to you which status code you want in which place. So that's your choice. Okay, now we come to the risk categories. Now in the Primavera, you can add risk register. So when you add the risk in a risk register, you have to classify that what kind of risk is that. So you can create the categories which work as the classification point. Now, one of the categories which is here, but I feel that needs some correction is that if you look carefully here, so you can see the word resources under the people. Do you see that people is the parent? So actually Yes. the resource is a broader word. So resource should be the parent and people, customer, machinery and material should be under the resources. Why the resources are considered a risk? Because if the resources are not available on time, okay, so that can create the schedule risk or it can delay the schedule. So that's why. So now what I want you to do, guys, please select the resources here and you shift it left. Shift it left like this. Done? Have you shifted it toward the left? Left. Now you shift up by one slot and move the people under the resource and move the customer a little bit to the left so that it looks like this. So guys, please compare the structure with the screen. The resources should be the parent of people and the customer. Why the customer is a risk? Because if you give any document for review or approval to the customer, say, sir, please approve it within the 5 days limit. But the customer is a risk factor because the customer may take more than 5 days. He might take around 10 days to complete the same job, which you want completed in 5 days. Now, that is why we Can you say. repeat this? How to change this? So you just select and shift left. First of all, you select the resources and shift left. Left, yeah, I did. Then you shift up by one step. Oh. So it looks like this now, same to same Yeah. as on the screen. Okay, now under the resources, we want to add 2 more. So you click on the add button here. And in the new risk category, you write here machines, because the machines are also resource. Machines and equipments. Okay. Machines and equipments. Okay, so after that, you add one more. You write here materials. Materials are also risk because if materials supply is delayed, then it can delay the project. So, this is a risk category under which you will write down the actual risk name and risk register will be created. Materials. Okay.
So guys, please correlate with the screen that you should have something like this. So make sure that it looks like this. So you have Resources, resources. we added two things, machine and equipment and materials. No, machine and equipment on the same line. Yeah, in this resources. Yeah, under the resource, they will be child. Yes, under the Look at the screen, Baba. Please look. Do you see the screen? Yes, sir, I did. Do the same thing. It's easy because you just have to navigate the stuff. Okay. Now we come to the next option, that is the notebook topics. The notebook topics are basically, in the Primavera, you can take notes for everything you can describe. But Primavera being a very disciplined software, you have to select which notebook category topic you are writing. Sometimes people say, sir, it is very difficult to select a notebook topic at the time of writing the topic itself. Then I tell them that, okay, if you find it too difficult, then you create a notebook topic called general notes. So you put everything under the general notes. If you feel you can move it to some other category later, you write here general notes. Okay. So you don't have to always select a particular topic. You press enter here. Okay. So when you press enter, the data will be automatically saved by Primavera. So most of the time, let me inform you that Primavera is automatically saving the data in the background. Okay. And sometimes when it is not saved, I'll tell you that how to recognize it. Then how to save the data proactively by yourself. Right? Okay, guys. So you are done till this point. You have the same to same? Yes, sir. Okay. Yeah. So we will come to the EPS in a while. Okay. Just park your question. Now, guys, next is the unit of measure. So when we are creating the material resource, so there are certain unit of measure. So one of them, which is definitely not used, is dollar. So guys, please delete this dollar. It is not a unit of measure. Please delete the dollar. Okay. Now let me tell you that how do we measure the materials. I'm going to write what we measure for a material. Guys, please read it. Length, area, volume, weight, units or count or quantity. इन तीनों का मतलब तो सेम होता है. ठीक है. अच्छा, और कुछ होता है मटेरियल के बारे में जिसको हम जो है वो मेजर करते हैं प्रोजेक्ट में? नहीं ना. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ लेंथ के बारे में. लेंथ में दो टाइप के मेजरमेंट है जो दुनिया में चल रहे हैं, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिश जो है वो मेजर करते हैं इंचेस में, फीट में, यार्ड में, है ना. और फ्रेंच बोलते हैं बड़ा सिंपल, वो कहते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. ये फ्रेंच का दिया हुआ है. और एरिया और वॉल्यूम भी जो है उसी का एक्स्ट्रापोलेशन. अच्छा, वेट जो है ब्रिटिश किस तरीके से करते हैं? आउंसेस, पाउंड्स. सुना है ना आपने, आउंसेस एंड पाउंड्स. तो ये ब्रिटिश का मेजरमेंट है. फ्रेंच का क्या है? मिलीग्राम. ठीक है, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, टन्स. वो 10 की जो है वो यूनिट में करते हैं मेजर. अच्छा, ब्रिटिश की काउंटिंग किस तरीके से होती है? डजन्स. सुना है आपने? Yes. डजन्स में होती है. तो और फ्रेंच की काउंटिंग कैसे होती है? 10, 100, 1000, 1 मिलियन, बिलियन. ये फ्रेंच का है. लेंथ में क्या होता है? इंचेस, फीट. ये सब जो ब्रिटिश का दिया हुआ है. ठीक है ना. तो हम जो है दोनों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है, दोनों की. तो गाइज व्हाट यू नीड टू डू, यू विल लुक एट माय स्क्रीन. मैं अपनी स्क्रीन पे ना मैं आपको दिखाऊंगा. ये आपने वो ऐड करना जो आपकी स्क्रीन में नहीं है. ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ रहा हूँ, अपनी स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपसे.
पहले मैं अपना प्राइमावेरा स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो जब मेरी स्क्रीन आएगी तो आपने क्या करना है, वो ऐड करना है जो नहीं है आपके पास। दिख गई आपको ना ये स्क्रीन मेरी? गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, अब दो ऊपर से पढ़ो, मीटर। जो आपके पास नहीं है वो ऐड कर लो आप, ठीक है? जो आपके पास नहीं है वो ऐड कर लो बस। इट इज जस्ट टू गिव एन स्टार्टिंग आइडिया। तो बट दिस इज नॉट द लिमिट, देयर कैन बी मोर देन दिस, ठीक है? सो यू वंस यू ऐड इट, जितना दिख रहा है आपको उतना ऐड कर लो, फिर मुझे बताओ। Okay.
So guys, you are done? Yes. Everybody is done? Yes, until number. Okay, so shall I stop the sharing here? Done? Okay. Okay, sir. So everybody please confirm you're done. No, sir, no. My computer is restarting, sir. Okay, Just now okay. Quickly. So you have done it? Okay, guys. So I think we have to stop here now. Okay. So, but these are not the ones that you will use. So in the future, if you feel that if you are using a particular kind of a material which has a different unit of measure, you can come back here and you can continue to add here. So I think most of the material has been represented here. The weight, volume, area, okay, and the count. So now, right now, so Arvind, you share your screen, please. So Arvind, you are here. Can you please hear me? Yeah, you share your screen. So we are going to use the ones. See, if you are going to use something more, so you can put them on the top. So we would be using we'll be using the square meter and the meter. So what you can do, you can shift it up, right? Square meter and square meter, you can write like this. And do you have meter? Meter you can add. So meter. See guys, when you write the meter, actually it is METRE. So there is a difference between these two words, METR. METR means the instrument. METRE means the length. Okay. So square meter. Oh, meter is there. So I think it is down there, right? You have it down there, meter. So where is this? Where did you put it? Because it says that the meter is there. Yeah, meter is there. So we will take it up. So shift up. And this is extra. So we can get rid of this. And meter, we can write like this, MTR. So actually it is not METR, but METRE. METRE means length. Okay. So this is a sort of a French spelling only. METER, TER means instrument, like voltmeter, ampere meter, temperature meter. Okay, fine. So you have created the categories of the data. Now, please click on the. You have to close this. Yes, you close this and you select the currency. Now, currency is something that we are going to create. So normally we have the world's. Where's the currency? So currency, first of all, you click on the admin, or you can click here on this icon also. Yes. You can directly click this icon on your panel 2, or you can select from the admin currencies. Now, normally we have the major currencies here, but Indian rupees is not here. We'll create it. Exchange rate for the USD is always 1. Because USD is the currency which is used to exchange
the money between the various banks in the world. Okay, if you're sending money from one country to another, so the amount of the money which is transmitted, it is first converted into the US dollar, and US dollar is transmitted from the bank one to the bank two, and then bank two gives you the local currency. Now, to add a currency like INR, which is not here, so we will click on the add. So guys, please click on the add. Okay, so after you have clicked on the add, so in the bottom, a new currency will be created. INR currency ID is Indian rupee is INR. So you write here INR. In the currency ID column, you write INR. And in the currency name column, you write Indian rupee. Indian rupee. And the symbol of the Indian rupee you can get by pressing the button Control Shift and number 4. No, you don't have to write it. There is a symbol Control Shift and number 4. If you can't get this symbol, I have put this into the Zoom chat box. You can copy and paste it from there. Okay. That it, sir. Okay. So if you can type, now the exchange rate you write here as 80 rupees. You round it off to 80 rupees like this. The currency symbol is like this. So it will come with Control Shift 4. 3 keys you have to press at once. Now, positive currency format you change to the one like this with a space. It should be having a space here. So guys, do you see the positive currency format here? Yes. So that is the dollar. With a space. Right, guys? Okay. Yes, sir. Now, after that, you click on the close. So this is the master list. So it is not be implemented, but it will be stored. So we just create. What is this positive means? Positive currency format. And So negative currency. see, look at the format. Do you see there is a space here? Mm-hmm. So that is how it will be displayed with one space. That is the meaning of this. Okay. It is the formatting. Because by default, the dollar is sticking to the number. We don't want that. We want a space. That's it. Okay. Is that clear now? Yeah. Now click on the close. See, it will not be implemented right now because we have just created the data. So master is about creating the data. Okay. So we just completed the job of creating the data. See, admin, now let me tell you about the story of the admin. See, guys, when you join a company which has already implemented the Primavera, you will not be seeing the admin option. You will not be seeing it. नहीं होगा admin option आपके लिए. Admin सिर्फ एक आदमी होता है, वो आप नहीं है. आपको admin right नहीं दिया जाएगा. अगर हर आदमी को admin right देंगे, तो क्या होगा? तो हर आदमी अपने अपने तरीके से जो है वो admin में जाके जो है वो अपडेट करेगा, तो सारा डेटा जो है कंपनी का खराब हो जाएगा. एडमिन का मतलब होता है एक आदमी होगा और वो जो भी अपडेट करेगा, मान लो इफ देयर आर say in the network around 5,000 users, it's a multinational company, 5,000 users are there, so everybody will be seeing the same thing. Okay, so we make sure that it is done by only a responsible person. Okay, so you won't be seeing the admin. Okay. So, Abhishek, if you're not able to get the rupee symbol, just go into the chat box and copy it. I put it into the chat box. Okay. वो चैट बॉक्स में भी मुझे विजिबल नहीं हो रहा है. वो एक्चुअली मुझे एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है. चैट बॉक्स में देखो, यहाँ पे देखो, ये एवरीवन को दिए. आप अगर चाहो तो मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप में दे देता हूँ. आप चाहो तो अपने स्क्रीन पे, नहीं व्हाट्सएप तो आप अभी मत खोलना. आपको अगर दिखता है चैट बॉक्स में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है. आप वहाँ पे अभी R डाल लो. ठीक है. तो चैट बॉक्स में तो वैसे दिख रहा है सबको. तो पहले मैं एडमिन की बात को मैं कंप्लीट करता हूँ. एडमिन आपको नहीं मिलेगा कंपनी में. आपको एडमिन, व्हाई आई एम ट्राइंग टू टीच यू एडमिन, सो दैट यू कैन कॉन्फ़िगर योर सॉफ्टवेयर. इफ tomorrow you need to join any small company, mid-sized company, you might be installing the software there. So
In a small company, you have to have multiple skills. So you need the admin in a small company. Okay, now guys, when you want to implement something for yourself, that will be under the user preferences. So what do you prefer? So this is an individual option. Admin is a global option. It is applicable over the entire company. So user preferences is for the user. It is an individual's own setting. Okay. So guys, you are ready to go into the user preferences now. So please click this button. As on the screen, do you see that user preferences? Please click this button from the panel number 1. If your panel number 1 is hidden, then you can go to the edit and you can find the same button at the bottom here. Do you see that? You Yes, can sir. click this button from the bottom of the edit menu also. So once you click this button, you will see a pop-up like this. So this is called the user preferences. So, this is your own preference. It is set for the individuals. Now, guys, first of all, you select this checkbox. Show duration label. Please select this. Then you select the hours. Then you select the third one, show unit label. So you select like this, 1, 2, and 3. So please select them in this sequence. 1, 2, and 3, you please select like this. Okay. Okay, now select the option dates. Come to the dates, the option here. In the dates, you will select 12-hour format, which will give you the time also. And it will add the time component to the date display. Do you see that sample here? Yes, sir. Yes. Okay. And make sure that you have selected day month here. It is the second option from the top, because that is the option we use in India, right? Okay. After that, you will select the currency, because in the admin, we created the currency. Now we are going to select using this button. Click this. And then here in the search box, you type IN. Okay. Now you click on the plus button. Okay, guys, do you see Indian rupees in the display here? Yes. Okay, then if you are seeing Indian rupees in the display, come to the next option, assistance. In the assistance, you uncheck the second number box. Keep the first number box on. Okay, like this, because we don't need it here, because activity is basically, it's okay not to have that, because that is a waste of time. You don't get any extra help, but you get a lot of pop-ups, but it is useful to have it in the new resource. So guys, we have done that up to the assistance. Yes. Is in synchronization. Okay, now come to the option application. In the application, so what you are seeing here, startup window. Now, what is the meaning of the startup window? See how the Primavera will start when you start up. So normally, you are seeing the activities, but suppose if you closed your activities last time, you will see a blank window. So sometimes that could be the cause of a panic here, that I've lost my data. If you don't want to have the panic, you select the option projects. So even if you close all the tabs here, so you will be able to, first option that you will see will be the projects. This tab will be always visible. So you select it. Okay, projects. So each time you start your Primavera, even if you close all the tabs, but you will see the project tab is always open by default. So you can choose the project you want to work upon. So it is very easy and very secure thing. Right, guys? Okay. So you are done till this point. Everybody is synchronized. Yes, sir. Then we come to the password, the option. Password we are not going to change, because right now we are not doing any high value thing. We are just only studying. Because one of my students, he changed the password in the middle of the training, despite my telling him not to do so. Then what happened? He forgot the password.
Okay. And then, so his work was lost. So I gave him the database of another student to start his or continue his training. So don't change the password, because when you join a company, the password policy will be implemented by the administrator. So just like your net banking, guys, have you noticed that your net banking forces you to change your password approximately within the range of 2 to 3 months? You have to change it, right? Yes. That is to keep your money safe. Because these days from the interface, you are transferring money. Can you just imagine if someone gets your password, he can transfer money from your bank, your bank account. So that's not good. So now come to the resource analysis. So come to the resource analysis. So, these options by default, so they are fine. So you don't have to change them. Okay. Yeah, resource analysis is fine. So after you have done that, so then come to the calculations. Okay. In the calculations are selected according to the best option. So according to the PMI, so that's fine. So we don't change them either. So we can continue with the same option. Now we come to the last one, that is the startup filters. Come to the startup filters. In the startup filters, basically, I don't want any filter at all. So I want to view all the data. So guys, you select all these radio buttons in the red box. On the right side, you select all that. We don't want any filter. When I start my Primavera, I want to see all these data without any filter. Okay. So that I'm sure that all the data is existing, and then I can narrow down the filter if I need to in certain places. So guys, everybody is done till this point. Everything is synchronized. So close this. So if you close it, this is going to be implemented on the interface. Okay. Now I want you to see and notice the implementation. If you would notice carefully, you are seeing in the project duration, you can see that it is now showing you the fraction of the day. So it is showing you the fraction of the day like the hours. Do you see that hours now? Yes. Many of the project data, they have the hours. Now, similarly, look at the date column. In the date, you can see the time part also. The time part is also activated. You see that? So all the date column will have the time part activated now. And since the money has been converted from 1 to 80, 1:80, you will see that the monetary columns need to be expanded to show the data completely. Do you see that? We need to stretch them because the number of the numerals has increased. So that is, we have to increase. देखो साइज जो है ना, ये थोड़ा सा आपको ये बढ़ाना होगा, क्योंकि डेटा जो है वो प्रॉब्लम। हाँ बताओ, दिखाओ स्क्रीन, दिखाओ अपनी स्क्रीन, दिखाओ अपने, कौन है सर? ये टाइम यूनिट्स में सर ये सब यूनिट शो नहीं हो रहा। ओके, नहीं डिस्क्राइब दिखाओ अपनी स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लो कुछ देर के लिए, मैं आपकी स्क्रीन पे आता हूँ। हाँ देखो, आपका स्क्रीन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, आपके मॉनिटर में जो है अच्छा खासा रेजोल्यूशन है। ये क्या होता है ना, जब हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया 1 से लेके 80, तो क्या हुआ कि जो गिनती की संख्या जो है ना, मतलब ये बढ़ गई है। तो आपको करना क्या है कि आप ये जो कॉलम है ना, इनको हल्का हल्का फैलाओ, इन्हें, इसको थोड़ा, ठीक है, फैलाओ इन्हें, ताकि ऊपर का जो डेटा है वो दिख जाए। अगर ऊपर का डेटा अगर आपको दिख जाएगा सबसे टॉप रो में, जब रुपीस का सिंबल आ जाएगा, इसका मतलब नहीं, इसको बाईं तरफ से फैलाना स्टार्ट करो। देखो यहां से फैलाना स्टार्ट करो, नहीं इसको आप क्लोज कर दो, ये आपका ठीक है। नहीं, इसमें तो आपने ये सिलेक्ट करना है ना, शो ड्यूरेशन लेवल आवर्स, ठीक है, ये आपने करना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो डेटा जो है ना आपका, जो मॉनेटरी जो कॉलम है, देखो ऊपर अगर रुपीस दिख रहा है,
अगर ऊपर का दिख जाएगा तो नीचे का तो जरूर दिख जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रैंड टोटल तो टॉप में ही होता है ना, सबसे बड़ी अमाउंट ऑफ मनी टॉप में होती है। अगर ऊपर का डेटा दिख गया तो नीचे का तो दिख जाएगा। अब क्या हुआ कि आपने 1 रुपए को 80 से मल्टीप्लाई करा, मतलब $1 को 80 से मल्टीप्लाई करा है, तो उसमें तो डेटा तो बढ़ जाएगा ना। तो नाउ आई वांट यू टू नोटिस समथिंग गाइस, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके ड्यूरेशन कॉलम में फ्रैक्शन आ रहा है, और आपके किसी भी डेट के कॉलम में टाइम भी आ रहा है, और यहाँ पे सारा आपका जो मॉनेटरी डेट डेटा जो है वो आपके एग्जैक्टली वो 80 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो यूज करता है, जैसे ये अभिषेक है तो वो यूज करता है, तो उसको मैं याद दिलाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में रुपी जो है, मतलब करेंसी कन्वर्जन नहीं होती, उसमें सिर्फ वो सिंबल चेंज करता है बस, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई नहीं करता, उसमें मल्टीप्लाई करने की सुविधा नहीं है, इसमें है। ओके गाइस, इज दिस क्लियर? कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन? ओके, सो इफ देयर इज नो फीडबैक और क्वेश्चन, कुछ है क्या, कोई क्वेश्चन है, पूछो। अच्छा, सबका ठीक चल रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यू आर सेइंग? सर मेरे को एईडी पे कन्वर्शन करने के लिए दिखाओ एक बार। हाँ, तो एईडी कन्वर्जन करने के लिए एईडी जो बनाना पड़ेगा ना आपको, नया बनाना पड़ेगा सेम जैसा। रुक जाओ, मैं आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। आप मेरे को जो है अपनी स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो अपनी। You please share your screen there, then I will tell you the steps. नहीं तो मैं यहीं से दिखाता हूँ, आप यहीं से देखो, आपकी स्क्रीन लगता है शेयर नहीं होगी इतनी जल्दी, आप डेमो स्क्रीन में देखो। तो आप एक काम करो, ये सैयद अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा। अच्छा आनंद, आपकी स्क्रीन जो है, हाँ ये आई गई अल्टीमेटली स्क्रीन शेयर, हाँ ठीक है। तो यू आर इन द यूजर प्रेफरेंस, अभी नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं आनंद, रुक जाओ, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा तब करना आप, ठीक है। आप जल्दबाजी नहीं करो, क्लोज करो इसे। पहले तो आप जो है यूजर प्रेफरेंस में आपने इसमें फॉन्ट नहीं डाला क्या इसमें? फॉन्ट नहीं डाला उसी टाइम अच्छा, में। एक मिनट रुको, मुझे ना जरा, मैं कुछ सेटिंग में कर देता हूँ, आप मेरे को रिमोट कंट्रोल अप्रूव कर दो। हाँ, तो मुझे आपकी स्क्रीन का भी जो है ये पता चल जाएगा अभी क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये इसमें, हाँ अब जो है रिस्पॉन्स ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब ऐसा तो नहीं है ये लटका देगा यहाँ पे फॉन्ट में आती ये, हाँ मान गया, ये मान गया, चलो। विंडोज 11 इज द बॉस यार, ये अगर दिखाएगा फॉन्ट तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो, योर फॉन्ट हैज चेंज्ड, नाउ इट लुक्स बेटर एंड इट इज मच मोर कंफर्टेबल। So you expand the size here, a little bit space you have to provide, because after the currency is changed, it is going to multiply and increase in the numbers. So number of the digits will increase. So when the digit increases, you will need some space. Now you can see that in the user preferences, after you have selected, so you can say, so up to the dollar you are fine. Now what you want is AED. Now to do the AED, so quickly go to the admin currency here. Come here, come to this button here. Yeah. Now you click on the add. Now you type here AED. AED you type here. And write it as UAE dirham. ठीक है। और इसमें सिंबल है नहीं, सिंबल नहीं है इसके अंदर। आप एक काम करो, एडी लिख दो पूरा, और इसमें लिखो एक्सचेंज रेट $1 से कितना मिलता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें इंडियन रुपीस किया कि नहीं ऐड, इसमें करो ऐड, लिखो इसमें INR, लिखो इसमें INR, और इसमें लिखो इंडियन रूपी, ठीक है। मैं सिंबल टाइप करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। और इसमें लिखो 80 प्रेस एंटर। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव करेंसी जो फॉर्मेट है उसमें एक स्पेस डालने का है, ठीक है, क्योंकि ये जब डिस्प्ले होगा ताकि सही ढंग से ये दिखे आपको, ठीक है। आप इसको क्लोज कर दो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं इंडियन रुपीस में,
यहाँ पर आओ, यूजर प्रेफरेंस में जल्दबाजी नहीं, माउस को कंट्रोल में रखो। नहीं तो आप एक काम करो, यहाँ से क्लिक कर लो। नहीं, रुक जाओ, आपका रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके। जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। आपको वहां से बटन नहीं दिख रहा ना, आप इसमें जो है ये एडिट में क्लिक करो और click on the user preference here. It is the same thing, and you select INR first. First you select the INR. Just type IN. Okay, then you select the. Now close it. No, close it. पहले close करो इसे. देख लो पहले. दिख गया? INR में conversion. So do you see the digits have increased because 1 multiplied by 80 it will increase. Now once again go into the user preference from the edit user preferences. हाँ, जाओ उसमें और right now you select AED. You type AED and then select, close it. Now you will see a conversion into the AED, right? Okay. So you can do any kind of the currency conversion. The conversion rate you can get from the site xe.com. Okay. So now let me quickly check what about your activities. Activities, font. So let me change the font quickly. Just wait. But you know that where you can change the font. But you know, in the future, I don't think you will be using any other font other than the Vardhana. So Vardhana will be the best font for always, and it will give you very comfort, viewing comfort. So in the future, you will be doing high value action. You will be doing a lot of the projects, but you will be fine using the Vardhana font. So let me check the activities. I think it didn't get implemented because I had not selected. So once you see the Vardhana, you should be selecting it also. Then it will be implemented. So now we will go to the reports. So this is a list of the reports which are here. So we will be selecting V for every time when we open the no. Primavera we need to set the No. It is just one-time setting, once in a lifetime. In case you are creating a new database, yeah, in that database you will have to do all the setting from the scratch. Okay, since it is a brand new one, so that's why we are doing the setting. If you continue to use this database for your projects, so there is no need to do any kind of further setting here. So you can continue to create your projects here. So that will be fine, absolutely fine. So Vardhana 8. So guys, on all the screen, we have got the Vardhana 8. Now guys, just do one thing. Go to this button. Do you see a cross button on the top? So yes. Continue to click this button till all the tabs are closed. You should not be seeing any tabs here. Close all the tabs. One by one, you close all the tabs. Okay, guys, do you see a blank screen now? Yes, so everybody. Now, guys, just read what is there on the top. Pardon, sir. I missed this step. How to remove all the tabs? Yeah. So on the right side, there is a small little cross button. You just click that here. Small little cross button on the top. Yeah. So not the big ones, the small one. Chote wala. Okay. So you click that cross button and all the tabs will close one by one. Actually, that button is related to the tab closing. कर दिया क्लोज? Yes. तो अब आपका स्क्रीन ब्लैंक है, बिल्कुल ऐसा ही साफ है ना, बिल्कुल? साफ। अच्छा देखो, इसमें देखो टॉप में देखो, यहाँ पे कुछ है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई लोडेड? Saratoga senior community. As on the डेमो स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे कुछ और भी हो सकता है, दैट रियली डजंट मैटर. तो क्या है कि इन द Primavera we have basically switched off the tab, but the data is still loaded into the memory. So, you know, if I click on this button, this is a symbol of the activity tab. Guys, do you see this green tab? So you remember this tab. Okay, this is a green tab. This is for activities. Now it will display. Click this. Yes. Now, do you see the activity has come? Activity has come because the project is loaded into the memory. So when a project is loaded in the memory, the activity as well as the WBS tab can be displayed. So now you click this
So the WBSN activity, they can be loaded if the project is loaded in the memory. Right, guys? Is it clear? Yes. Now what we are going to do, we are going to remove the project from the memory. Okay, we are going to remove the project from the memory. So guys, please press the combination button, Control W. Combination of Control and W button. Control and W. Yeah. It will ask you, do you want to unload the project from memory? Then you say yes. He's showing, are you sure you want to close this project? Say yes. Okay. Yes. So Control plus W, it is going to look like this. Are you sure you want to close this project? Just say yes. Now look at the top, that what it is saying. No current projects. No current project. And if there is no project, do you see that most of the buttons are deactivated here? Yes. In all the panel, you will see, since there is no project data, no project is there in the memory, all these buttons are deactivated because these buttons are called context sensitive button. Context. So what is the context? Project. So that project is not there, the context is not there, so these buttons are deactivated. So I want you to familiarize with this fact, but in the future, if you are seeing any deactivated button, don't be panicked. Okay, why? Because maybe that particular data is not there. If some data is not there, then the buttons will be deactivated. Okay, so if the data is there, then the button will be activated. Now, guys, we will see that what happens when we restart the Primavera. So right now, you please exit, file exit. See, with the normal setting, you will see a blank screen, but with my setting, which I told you, you will not be seeing a blank screen. File exit. Go to the file exit and say yes. Okay. So guys, what do you see now? Nothing. Okay. Now you restart your Primavera and you log into the Primavera. गोली चल रही है यार किसी के वहां पे? नहीं दरवाजा पकड़ो वैसे। अच्छा, मैं समझा कोई आतंकवादी हमला हो रहा है कहीं पे। हाँ, admin, you put here admin. See guys, you will see a list of the project. You see that first of all, the Primavera will display you the list of the project. So guys, everybody please confirm that you have this list of the project to start with. Yes. Because, you know, this is a very good thing, because once you see the list of the projects, so it gives you a very comfortable feeling that all the data is intact. Okay. So Anand, just give me the control. Let me do some more settings here because you had missed them. So I think you will need them. The first day of the week should be Monday. So the default duration we need it as 6 days. So when we create new activities, data limits fine, ID lengths fine, time periods 848. So we had, because your system was not working, so let me update this. Okay. Yeah. So you can update yourself from the recording when I share it with you. So your friends are here. So basically, you know, we have to make sure that everybody is going at the same pace. Okay, so earned value is the same reports. In the reports, it should be having your name. ANAND. So Anand Raji, right? Saji, Saji. Saji, and what is your company name? You can write here your company name here. Okay, yeah, GBS. Okay, that's all fine. Options, rate types is fine. Industry, engineering, exception site list. We don't need this. Okay, close it. Okay.
Okay, fine. So at this point of time, everybody is synchronized, but I want your user preferences to having the rupees. Okay, so we will select rupees for this training, INR. Where did we put the company name? Can you show that one once again? So that is, yeah, I will show you. Admin, Okay. preferences. And then we had gone to the reports. In the reports, Okay. the footer level. So when you print the report, you will see it. Okay. Why I am asking you to put your name and company name so that you can trace it back here because you will remember it. So guys, please, everybody, please click on the project ID. Okay, make sure that your project ID is the column which is sorted like this. So this is the column which is to be sorted by default, right? Okay. Okay. Now, do the same. Click on the plus minus button here. Saji, you grab the mouse and click on the plus minus. I can't see the one by one. Okay. Okay. I am seeing the value difference. The value. And you select the level 2. हाँ, value में बताओ क्या हुआ, बताओ. What is the problem? I'll solve it. The value which is shown on the screen is not matching with what I have seen in the Primavera. आप ना देखो एडमिन में आओ, यहाँ पे वैल्यू उसकी ना जो पैसे की ना जो ये रुपए की ना, हाँ. देखो आप एडमिन प्रेफरेंस में आओ, इसमें आ जाओ आप. ये है ना जो करेंसी है. एक मिनट रुको, नहीं रुक जाओ. एडमिन प्रेफरेंस नहीं, एडमिन जो ये करेंसी वाला है ना, उसमें डॉलर जो है और INR का जो कन्वर्जन रेट है वो 80 रुपए का ले लो. ठीक है, तो 80 रुपए लेते ही वो उसके साथ मैच कर जाएगा. वो इतना वो जरूरी नहीं है. आपने करेंसी INR ली हुई है कि नहीं? करेंसी INR ली. हाँ बस ठीक है. वो तो ऐसा है ना कि देखो वैल्यू में क्या है कि करेंसी तो फ्लक्चुएट करती है, कभी 70 तो कभी बीच में 71-72 ऐसे भी चलती है, कभी 80 चल रही है अभी. तो क्या होता है कि हम लोग एक राउंड फिगर लेके ये समझना चाहते हैं कि ये कन्वर्जन ये करता कहाँ से. तो वो एडमिन के अंदर हम जो उसकी जो है मास्टर वैल्यू स्टोर करते हैं और यूजर प्रेफरेंसेस में हम चूज करते हैं कि हमने क्या यूज करना है. तो आप उसमें जो स्टोर करके रख दोगे वो ग्लोबल हो जाएगी. मतलब पूरी कंपनी में जो 10,000 लोगों के लिए 80 रुपए हो जाएगा डॉलर. बात आ रही समझ में? अब एडमिन का जो है, अब आप खुद ये समझ सकते हो कि भैया अगर कैसा होगा अगर हवाई जहाज में बैठे हो तो हर एक के सामने ही जो है वो हवाई जहाज का कंट्रोल दे दिया जाए, तो आ जाएगा मजा नहीं? हाँ, चाहिए क्या हवाई जहाज में? नहीं. फ्लाइट में दिलवा दे तुम्हें कंट्रोल की तुम्हारी सीट के सामने एक जॉयस्टिक लगा दे, आप चाहो तो पायलट को बाईपास करके फ्लाइट को दिल्ली की बजाय इंदौर में ले आना है. नहीं आया ना? नहीं. हाँ, तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि एडमिन एक ही होना चाहिए ना वो कंपनी में. तो एडमिन जो है एक ही होता है. यहाँ पे एडमिन की ट्रेनिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाई चांस अगर आपने कभी छोटी या मिड साइज कंपनी में ज्वाइन किया, वहां पे क्या होगा कि आपको तनख्वाह जो है ज्यादा मिलेगी, लेकिन वहां पे पूरा काम आपको आना चाहिए. तो वो भी एक मौका है जिंदगी में कि या तो बड़ी कंपनी में छोटे आदमी बन जाओ या तो छोटी कंपनी में बड़ी तनख्वाह लेके बड़े आदमी बन जाओ. ठीक है, तो तब आप जो एडमिन कर पाओगे, अपने बॉस को इम्प्रेस कर दोगे, इंस्टॉलेशन कर देना सबके सिस्टम पर, पूरी कंपनी में कह देना भी प्राइमावेरा में काम होगा, सब ऐसे काम करो. ठीक है, तो एडमिन वहां पे बहुत काम आएगी आपके. तो इसलिए एडमिन भी सीख लो आज. बात आ रही समझ में? सियाद नहीं? बिल्कुल. ठंडक आ रही है दिल में? नहीं आगे जी सर. अच्छा ठीक है. अच्छा चलो कोई दिल में वैसे भी आदमी को ठंडक जो है रखनी चाहिए. ठीक है, शांति बहुत बड़ी चीज है. शांति देखो हमारे देश में है, मिडिल ईस्ट में पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है वहां पे. ठीक है, तो शांति बड़ी चीज है, उसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते, पैसे से तोल नहीं सकते उसमें. तो इसलिए जो है शांति को रखना बहुत ही वो जरूरी है. उसकी कीमत ये है कि दिल में थोड़ी सी कसक तो होगी, लेकिन शांति अगर रखोगे तो उससे तुम बड़े काम कर लोगे. ठीक है, हाँ. तो अब हम चलते हैं इस चीज को समझेंगे, व्हाट इज द EPS. सर एक हाँ
पूछना था। हाँ तो जैसे पूछो। कि मेरे को सर कंट्रोल W करके हमने सारे मेमोरी से आउट कर दिए थे इसके, जितना हाँ भी रिकॉर्ड था इसका प्रोजेक्ट का। तो हाँ। सर उसको रिकवर करने के लिए हमको जो है ना प्राइमरी रीसेट करना पड़ेगा। विदाउट नहीं नहीं रीस्टार्ट नहीं, करें हमने सिर्फ मेमोरी से अनलोड किया, वो तो डेटा तो हमारे सामने ही है। प्रोजेक्ट तो हमने क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, देखो अब ध्यान से देखना, अभी ये डेमो स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ देखो अभी क्या है कि ये सारा प्रोजेक्ट का डेटा मेरे पास है, ठीक है सर। मेरा सारा प्रोजेक्ट का डेटा। अब ये कहाँ पे है, ये है हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से मैं जब मेमोरी में लोड करता हूँ तो वहीं पे मैं काम कर सकता हूँ ना। देखो मैंने किया ओपन द प्रोजेक्ट। अब क्या करेगा प्राइमावेरा, क्या करेगा कि डेटाबेस में से लोड करके वो मेमोरी में ले जाएगा, रैम के अंदर। देखो ये रैम रैम में है इस वक्त, ठीक है। मान लो ठीक मुझे काम करना है तो मैं मेमोरी में लोड करूंगा। अब मेमोरी तो लिमिटेड होती है, किसी के पास मेमोरी जो है 4 GB 8 GB है, तो उसको जो है इतने सारे प्रोजेक्ट लोड नहीं करने हैं, तो वो उसको अनलोड वो कर सकता है, ताकि उसका कंप्यूटर जो है थोड़ा फास्ट चले, लैपटॉप। क्योंकि प्राइमावेरा का तो डेटाबेस बहुत बड़ा होता है। अगर तुम किसी भी बड़ी कंपनी में काम अगर तुम करोगे, तो एट ए टाइम तुम चाहो तो 10-10 प्रोजेक्ट भी लोड कर सकते हो, लेकिन कई बार लोड करने की जरूरत पड़ती भी है। क्यों? समटाइम द प्रोजेक्ट दे हैव इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। If you करेक्ट। completely done with the work in the project, you should unload it from the memory. So unloading it from the memory means unloading it from the RAM, but not from the enterprise. It is still there. ये नीचे जो लिस्ट है ना, यहाँ से तो कभी भी लोड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो जाए, प्लानिंग का या ट्रैकिंग का, तो प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। जैसे हम कोई फाइल खोलते हैं, ठीक है, हमने कहा भी फाइल में काम हो गया तो फाइल जाइए बंद कर दो, तो कंट्रोल S कर देते हैं। जैसे विंडो में क्या होता है, कंट्रोल S होता है ना, इसके अंदर फाइल का डेटा सेव करने के लिए ये लेफ्ट साइड में ये बटन दिख जाएगा तुम्हें। अभी इनका जो है बटन अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो मैं जो है कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ये वाला ये बटन दिख जाएगा। अच्छा, अब हम किस चीज में जाएंगे, अब हम जाएंगे ये समझेंगे कि भाई व्हाट इज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें व्हाट इज द बिग पिक्चर, जैसे हम कहते हैं ना ईपीपीएम है, ईपीपीएम होता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एंड नो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एंटरप्राइज पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अब क्या करना है, हाँ यस आनंद, यू क्लिक ऑन दिस बटन हियर, यू सी दिस बटन, दिस चार्ट बटन दिख गया गाइस आपको? देखो आपके पास ये आया है। अच्छा, आप एक काम करो कि गाइस यू प्लीज क्लिक ऑन द डबल माइनस बटन एंड द चार्ट व्यू। सो व्हाट डू यू सी? यू आर सीइंग ओनली द एंटरप्राइज, ठीक है। मान लो ये एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई ये टाटा ग्रुप है, ठीक है, तो ये ऊपर है एंटरप्राइज टाटा ग्रुप। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टाटा ग्रुप में कौन कौन सा काम धंधा होता है, किस किस चीज का जो है उनके पास पोर्टफोलियो है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, ये जो प्लस है ना बटन, एक बार। तो आपको क्या हो रहा है, ये टाटा ग्रुप का ये बोल रहा है कि भाई टाटा ग्रुप में इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। उनके पास ये जो है ये एनर्जी सर्विसेज का भी लाइन ऑफ बिजनेस है, पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, कॉर्पोरेट प्रोग्राम का पोर्टफोलियो और आईटी का। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि उनके पास जो ये एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पोर्टफोलियो के अंदर में जो क्या हो रहा है आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे है आपका ये पोर्टफोलियो हमने कहाँ से लिया सर? ये पोर्टफोलियो जो ना यहाँ से क्लिक करके लिया। देखो स्टार्टिंग से देखो, सारे ऐसा है कि देखो इस पे जी ध्यान सर। दो स्क्रीन पे। पहले मैं सब चीज में क्लोज कर रहा हूँ। देखो यहाँ आ गया एंटरप्राइज है, यहाँ आ गए आप। एंटरप्राइज। देखो मेरे को ना जरा फीडबैक दो जरा, ताकि मुझे पता भी चले ना आप कहाँ पे हो। दिख गया कहाँ आपको? से, ये कहाँ से आना है सर? हाँ, ये कहाँ से आना है वही वो पूछ लो ना पहले, ये लो यहाँ से देख लो। हाँ जी, ओके। ठीक है, अब इस पे क्लिक करो, ये डबल माइनस में कर दे क्लिक। अब आपका भी ये सिंगल हाँ बॉक्स है यहाँ पे। हाँ अच्छा, सर। अब सिंगल बॉक्स में जो नीचे जो प्लस का साइन है, एक बारी क्लिक कर लो इसे। किया क्लिक? हाँ सर। ये जो नंबर 2 में जो आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना इसके नीचे, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो।
अब यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो के अंदर जो है प्रोग्राम है। आप जैसे ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसके नीचे क्लिक करो, आपको दिखेगा प्रोग्राम। एक बारी क्लिक एक बारी क्लिक कर दो, दिख गया आपको ये प्रोग्राम, दिख गया आपको? जी सर। अच्छा, इसमें लिखा है प्रोडक्ट प्रोग्राम 1, प्रोडक्ट प्रोग्राम 2। अब अगर मान लो कि अगर ये प्रोग्राम है तो क्यों है, और यहाँ पे एनर्जी के नीचे डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स है तो क्यों है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे जो है बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, शुरू में कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस किसी भी कंपनी में स्टार्ट होती है तो क्या उसमें क्या प्रोजेक्ट क्या भर भर के होंगे या इक्का दुक्का ही होंगे? शुरुआत में कोई भी नया कोई अगर ग्रुप जो है कोई नया काम धंधा स्टार्ट करती है नई लाइन ऑफ बिजनेस में, तो शुरू में एक दो ही होंगे ना प्रोजेक्ट। जी। तो शुरू में जब प्रोजेक्ट जब कम होते हैं ना, तो वो पोर्टफोलियो में ही होते हैं डायरेक्टली। बात आ रही समझ में? बाद में क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट जब बढ़ जाते हैं, जब प्रोजेक्ट की संख्या पोर्टफोलियो में बढ़ जाती है, तब उसको यहाँ पे सब डिवाइड कर दिया जाता है प्रोग्राम्स में। देखो, अब ये देखो, मैं प्रोडक्ट प्रोग्राम 1 को क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये जो पोर्टफोलियो है आपका, जो आप इसमें गिनती करो कितने कितने प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1, कुछ प्रोजेक्ट आपके प्रोग्राम 1 में है, कुछ 2 में है। गिनती करो कितने हैं, ऊपर से लेके नीचे। देखो, मैं आपको बताता हूँ गिनती करके। 1 2 2 3, गिनती करो, ऐसे स्क्रॉल डाउन करो, गिनती करो कितने हैं प्रोजेक्ट इसमें। इसमें 6 और 6 12 हैं प्रोजेक्ट। अब ये जो 12 प्रोजेक्ट ना, क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर जब वो मैनेज नहीं कर पाता ना, वो क्या करता है, इसको सब डिवाइड कर देता है प्रोग्राम्स में। तो कुछ बिजनेस की क्लासिफिकेशन करके वो प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है, और यहाँ पे जो है अपॉइंट होता है प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर इसको मैनेज करता है। यहाँ पे कौन होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर। और यहाँ पे कौन होता है? एंटरप्राइज को कौन करता है मैनेज? सीईओ करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये है आपका प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो इस पे कर रहा है, वो लेवल में, और यहाँ पर भी कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आप कहोगे ये पोर्टफोलियो के नीचे डायरेक्टली क्यों है? क्योंकि बाबा ये पोर्टफोलियो अभी छोटा है। बात आ रही है समझ में? ये पोर्टफोलियो जस्ट अभी कंपनी ने स्टार्ट किया है, इसलिए इसके अंदर अभी कम प्रोजेक्ट हैं। जब बढ़ेंगे तब उसको सब डिवाइड किया जाएगा और वो आपसे करवाया जाएगा। तो पोर्टफोलियो को डिवाइड करने को तैयार हो आप? आर यू रेडी गाइस? सिखाऊं? यस। पोर्टफोलियो में प्रोग्राम कैसे बनता है? ठीक है, ठीक है। तो अब जो है मेरे साथ चलो। अब हम क्या करेंगे, ये जो है पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपके बॉस की थॉट प्रोसेस क्या है। आपके बॉस ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है ना, ये जो सेक्टर है अपना, ये एनर्जी सेक्टर, इसमें हमारे पास जो है प्रोजेक्ट जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो थोड़ा सा वो बिजी हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा। तो हम क्या करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को 3 प्रोग्राम में बांट देंगे। देखो दिख गई ये 3 हिस्से गाइस, डू यू सी दैट? यस। तो ये 3 प्रोग्राम में बांट देंगे और 3 प्रोग्राम मैनेजर हायर करेंगे। तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? एक होगा रिन्यूएबल, और दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल, और तीसरा होगा आपका न्यूक्लियर। अब ये तो मानते हो ना कि तीनों के तीनों ही जो कैटेगरी एनर्जी के हैं, है ना, ये स्पेशलाइज्ड हो गए ना एनर्जी के अंदर। अब इसको तीनों को ये बांट देंगे और 3 प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे एक एक प्रोग्राम के लिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब आपको उन्होंने काम दिया है कि जो एनर्जी जो पोर्टफोलियो है उसके नीचे 3 प्रोग्राम बनाओ, और 2-2 प्रोजेक्ट अभी जो एग्जिस्टिंग है 6 प्रोजेक्ट 2-2 करके तीनों के अंदर डाल दो। ठीक है, तो समझ में आई बात? ये दोनों प्रोजेक्ट इसमें जाएंगे, ये दोनों इसमें, और ये दोनों इसके अंदर जाएंगे। ठीक है,
पहले तो ये हमने इसको क्रिएट करना है, इसको क्रिएट करना है और इसको क्रिएट करना है. सो गाइज, इज दिस थिंग क्लियर? यार कोई हाँ या ना नहीं बोल रहा है यार. Yes, sir. क्या बात है यार, इंजीनियर्स हो यार, इंटरेक्ट करो मेरे साथ. हाँ बोलो, नहीं तो ना 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 बोलो. नहीं है वो समझ में तो बहुत अच्छी बात है, तो समझाऊंगा ना मैं. नहीं, yes, yes. Yes, sir. Clear, sir. Clear. All हाँ, are clear. अब पता है, कई बार मुझे लगता है कि मैं अकेला ही तो पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम सब भाग गए यहाँ से. ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता क्लास में. ठीक है, अब ये तो क्लास ऐसा है कि इसमें मैं जिस स्क्रीन को मैं दिखा रहा हूँ, आप भी उसी स्क्रीन को देख रहे हो, तो उस स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ, तो मैं तुमसे फीडबैक मांग रहा हूँ, तो तुम बोल दो हाँ तुम हो यहाँ पे. तो उससे क्या होगा कि भाई मुझे ये पता लगता रहेगा कि भी सबका साथ मिल रहा है और सबका विकास भी हो रहा है. नहीं तो ठीक. अब हमने क्या करना है कि इसको ना सब डिवाइड करेंगे हम. तो सब डिवाइड करने के लिए वी हैव टू स्विच टू द व्यू. ये वाला व्यू आप ले लो इसमें. सही है सर, सही है. हाँ बिल्कुल, टेबुलर व्यू लो आप. टेबुलर व्यू लो, इसमें देखो ऊपर जो है ना आपका जो टेबल वाला व्यू है उसमें क्लिक कर दो. ठीक है, ऐसे आपके पास ये आ गया व्यू. Yes. अब इस व्यू को पूरा एक्सपेंड कर दो, बिल्कुल फुल एक्सपेंड करने के बाद इसको आप ले लो लेवल 2 में. सिर्फ 2 में लो इसे, ऐसे. और लेवल 2 में सिर्फ एनर्जी को एक्सपेंड कर लो, ऐसे. सो गाइस प्लीज कम टू दिस व्यू. You should be seeing only the expansion in the energy portfolio. Now, what we are going to do, we are going to partition this portfolio into 3 programs: renewable, non-renewable, and nuclear, like this. ठीक है guys? So you are ready with the concept? अच्छा, now if the concept is understood, I have to select level 2. हाँ, इसके अंदर हम जो है लेवल 3 क्रिएट करेंगे, क्योंकि एनर्जी तो ये ऑलरेडी ये 2 पे है ना. 1 पे कौन सा होता है, देखो आपका एंटरप्राइज तो 1 है और पोर्टफोलियो आपका 2 है. अब हम 3 क्रिएट करेंगे प्रोग्राम्स इसके अंदर. तो गाइस प्लीज क्लिक ऑन द पिरामिड सिंबल. देखो ये बाईं तरफ आपके पिरामिड सिंबल है, और यही वाला पिरामिड सिंबल आपके पास एंटरप्राइज में भी है. देखा एंटरप्राइज में नंबर 2 पे ये सेम टू सेम जो है वो पिरामिड है. सो गाइस वी आर हियर इन दी एंटरप्राइज डिस्प्ले पे प्रोजेक्ट. ओनली लेवल 2 शो हो रहा है. कौन सा लेवल 2 शो हो रहा है? हाँ तो इसको एक्सपेंड कर लो ना यहाँ से, ये एनर्जी को. देखो आपका यू हो रहा है ना. या हाँ जी सर. तो क्लिक, हाँ, ओके. साइन को तो क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ये पिरामिड में इस पे क्लिक करो. फिर पिरामिड में देखो पिरामिड जो है कैसी होती है, ऊपर जो है नैरो डाउन होते हैं, नीचे से चौड़ी होती है. तो ऐसे ही अपना जो है, ऐसे ही हमारे डेटा का स्ट्रक्चर भी होता है. तो ऊपर जो है एंटरप्राइज होती है, एंटरप्राइज के नीचे पोर्टफोलियो के नीचे प्रोग्राम्स होते हैं, खूब सारे प्रोग्राम्स के नीचे काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं. तो इसका मतलब नीचे जो है डेटा ज्यादा होता है. अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये लिस्ट जो है आपको दिख रही है, तो पूरी की पूरी फुल लेंथ दिख रही है ना. अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको रखना है एंटरप्राइज में. कर्सर को ले आओ पहले एंटरप्राइज में, ले आए. Okay. गाइस शुरुआत में ना आपका कर्सर एंटरप्राइज में होना चाहिए. अब आप करो ऐड, यहाँ पे करो, ऐड करो यहाँ पे. Okay. मैं किसकी स्क्रीन पे हूँ? द आनंद, प्लीज क्लिक ऑन द ऐड बटन. सर ये Okay, so guys, after you have clicked on the ad, so you will be seeing a new EPS. Do you see that? अच्छा, न्यू ईपीएस को ना आप इसको ना धीरे धीरे खिसका के ये एनर्जी के नीचे ले आओ. ये वाला बटन है, यूज दिस बटन टू स्लोली एंड स्लोली शिफ्ट इट जस्ट बिलो द एनर्जी. ठीक है, प्लेस इट बिलो द एनर्जी. Yes. अरे क्या कर रहे हो आनंद? सर ये यार आनंद जस्ट स्टॉप. अरे बाबा, I told you to move the new EPS below the energy. Where are you going? Like this. Now guys, you shift it to the right side. Click on the right button and shift. Do you see the parent-child relation which has been created here? Yes.
Okay, now Sir, how to show this EPS pop-up? अरे बाबा तुम कहाँ छूट जाते हो यार, पीछे पीछे। इस पे करो क्लिक, ये ट्रायंगल ये है, पिरामिड पे क्लिक करो, यहाँ आ जाओ। अगर देखो, अगर किसी ने टॉयलेट जाना है तो मेरे को बोल दे, मैं रुक जाऊंगा वहां पे। ये नहीं कि टॉयलेट जाके आओ फिर रिवाइंड करो, ऐसे नहीं नहीं होगा। सर। ठीक है, अब इसको, अब पहले कर्सर प्लेस करो एंटरप्राइज पे। ये आ गया बॉक्स आपका? यस सर। एंटरप्राइज पे कर्सर प्लेस करके क्लिक करो ऐड में, एक नीचे ये ब्लैंक जो है न्यू ईपीएस आ जाएगी। बन गया नीचे? हाँ, जी सर। अब इसको खिसका के एनर्जी के नीचे ले आओ, बिल्कुल इसके नीचे लाना। ठीक है, कौन से बटन से खिसकेगा ऊपर? इससे शिफ्ट अप वाला ये बटन, ये है, दिख गया आपको शिफ्ट अप का जो जो बटन है? जी सर। हाँ, तो बिल्कुल ले आए इसके नीचे। अब इसको कर दो शिफ्ट राइट, अब ये चाइल्ड बन जाएगा। शिफ्ट राइट करने से ना ये चाइल्ड बन जाएगा, इट विल कम बिलो द एनर्जी। ठीक है, यस। सेम है ना? अच्छा, अब नाउ आनंद, यू राइट हियर REN like this in the capital letter, and in the EPS name you write रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। लिखो यहाँ पे, क्विकली टाइप करो, इसको डिलीट करो, लिखो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। E should be capital, P should be capital। हाँ, एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, स्पेस डालो, प्रोग्राम। आनंद, प्लीज Yes. to me, Baba. I am asking you to write program. No, I wrote renewable energy. Do you want to add another one also? Anand, I am asking you to complete the sentence. You write here renewable energy program. Yes, renewable energy. I wrote. Arre Baba, I am asking you program to write the word program also as well. Okay. Because my sound is getting in between. The sound is not clear. So Sound is not clear because you are using the fashionable Bluetooth. Please do not use the Bluetooth. Please disconnect the Bluetooth. Bluetooth is causing some noise here. Okay, Bluetooth is creating some of the hissing noise and you are not able to hear. Bluetooth does not work well with the Zoom. Can you please get rid of the Bluetooth? Can you please cut out the Bluetooth and get back to your laptop speaker and mic? No, it's a laptop speaker, but this one is Bluetooth, right? Mouse is having the wireless. So mouse may be causing the problem. I think because if there is any Bluetooth device, it will cause any problem. Okay, because the mouse has got the radio waves which is interfering with some other thing. So Bluetooth devices should not be used. It is a fashionable thing. It is not used by engineer. It is used by Miss Universe only. Fine. So after renewable energy, what I need to write? I didn't get that. Okay, now click on the add button. Click on the add button. See, for tomorrow's class, please get a wired mouse. Okay, do not use the Bluetooth. Nobody should use the Bluetooth because it causes the disturbance and your recording will be screwed up. When you hear the recording, you will pity yourself that why did I use the Bluetooth? See, for me, it is not a problem. My brain can filter that out. Okay, but guys, your recording will be messed up. Now you write here non-REN. Now you write here non-renewable energy program. P capital. Because the Bluetooth has problem. Bluetooth technology is not always good. Okay. Now you write here nuclear, NUC, in capital letters. You write NUC.
and you write here nuclear energy program. Nuclear, no, NUCLEAR, that is the spelling of nuclear energy program. Okay, so and press enter. Okay, so now guys, please make sure that you have got 3 children under the energy: renewable, non-renewable, and nuclear. So do you see this? You see that it is implemented here. Yes. Okay. So, so this is the toolbox and that is where it is implemented. So everybody is having the same done. So guys, you are synchronized up to here till this point. Yes. Everybody is done. Okay. Now you close it. Close this thing. Why it is yellow in color? Yeah, because it is a program. So the enterprise will be blue, portfolio will be green, and program will be yellow if it is non-selected. If you remove your cursor, It's not showing on there. The Okay. 3 new. Yeah, so you show me your screen, I'll check. Okay. So who is that? Niaz. दिखाओ अपनी स्क्रीन, देखें क्या हुआ. अभी तो आपने क्रिएट ही नहीं किया, आपने कुछ. I have created. Sir. हाँ दिखाओ कहाँ गया क्रिएट करके. नहीं, एक मिनट रुक जा. अरे बाबा, आपने क्रिएट कहीं किया, देख कहीं रही हो. आपने क्रिएट जो है एनर्जी में किया है ना आपने. Yes. वो Yes, तो yes, yes. अब वहां से आके भूल गए इतनी जल्दी कि कहाँ क्रिएट किया. आप जो है ये इसको क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब मैं यहीं पे रहूंगा मैं कुछ देर. So guys, have you created like this? Okay. Now what your boss is saying, is that you subdivide the 2 projects each. Okay, so you select these 2 projects. So guys, first of all, you click on the project ID and make sure that the triangle is pointing downwards. Do you see the triangle is pointing downwards here? Do the same thing for your screen also. Now select the first 2, cut it. Select the 800 and 820. करो, दोनों को करो ना सिलेक्ट. हाँ करो, सिलेक्ट करो. ये शिफ्ट डाउन है, शिफ्ट प्रेस करो, डाउन एरो प्रेस करो, ये हो जाएंगे दोनों सिलेक्ट. हाँ कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स. हाँ, now you select the renewable energy and do a control V for victory. कंट्रोल V जो है पेस्ट का होता है, कर दो इसमें कंट्रोल V. ये दोनों इसमें मूव कर गए. Now select the next 2 and move them into the non-renewable. ठीक है, और नेक्स्ट 2 जो है सिलेक्ट करो और इन दोनों को मूव कर दो नॉन रिन्यूएबल में. करो सिलेक्ट. हाँ करो शिफ्ट डाउन. हाँ कंट्रोल एक्स. नॉन रिन्यूएबल पे सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, कंट्रोल V. ठीक है, समझ में आई. आप सिलेक्ट करो ये नेक्स्ट. Done. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया है. आपके बॉस ने क्यों करने को कहा आपसे. बॉस ये बोल रहे हैं कि देखो हमारा एनर्जी में ना, ये जो एनर्जी जो पोर्टफोलियो है हमारा, ये बढ़ने वाला है, इसमें प्रोजेक्ट बढ़ने वाले. तो इन एंटिसिपेशन ऑफ द एक्सपेंशन, व्हाट ही हैज टोल्ड यू टू डू, ही हैज आस्क्ड यू टू सबडिवाइड इट इनटू 3 प्रोग्राम्स. बोल रहे हैं कि इसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर जो वो बिजी हो रहे हैं, वो बिजनेस डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एनर्जी का जो सेक्टर है हमारा, जो पोर्टफोलियो है, उसको 3 प्रोग्राम में बांट देंगे और इसके नीचे, ठीक है, इसके काम को हल्का करने के लिए 3 प्रोग्राम मैनेजर जो है इसके साथ में ये जो है ये लगा देंगे. तो 3 प्रोग्राम मैनेजर अलग अलग जो है प्रोग्राम को वो संभालेंगे, तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम हल्का हो जाएगा. तो गाइस, पोर्टफोलियो मैनेजर, व्हाट इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर? क्या है बताओ. Manages the portfolio, all the programs. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर का मेन फंक्शन ये है बिजनेस डेवलपमेंट. Okay. Yes. ये आदमी ऐसा है, इसको हम कहते हैं हिंदी में धुरंधर. Mhm. ठीक है, ये टेबल के ऊपर नीचे दोनों तरफ काम करता है. ये Okay. बात आ रही समझ में? नहीं, ठीक है.
और कंपनी के अंदर ला ला के प्रोजेक्ट डालता रहता है, इससे कंपनी चलती है। हम्म, अगर कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं आएगी तो कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा बताओ? पर वो तो सेल्स का काम है ना सर। अरे बाबा, ये सेल्स का बाप है। ये ओके। पूरा बिजनेस यूनिट इसके पास में है। सेल्स मार्केटिंग वाले इसी को रिपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, सेल्स मार्केटिंग वाले इसी को रिपोर्ट करते हैं। इसी के हाथ में पूरा एनर्जी का सेक्टर है। अब टाटा जो है, रतन टाटा बैठ के वो थोड़ा ना देखेगा कि तीसरे ये क्या काम हो रहा है, कौन। स्ट्रेटजी बनाते हैं सर ये लोग। हाँ, ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उसके हाथ में जो बिजनेस यूनिट, और इस आदमी को तनख्वाह जो है कुछ भी नहीं मिलती। मैं आपको बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको सिर्फ जब वो कमीशन मिलती है। आप ये मान के चलो कि जो आदमी साल में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए वो कमाता है, उसकी मंथली पता है तनख्वाह कितनी होती है पेरोल में? क्या 10 रहता है सर? ना, इससे ज्यादा नहीं देते पोर्टफोलियो मैनेजर, क्योंकि ताकि उसके भूख रहे। समझे कि नहीं? अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को लगेगा मुझे बैठे बिठाए महीने में 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। और जो असली जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं ना, वो कहते हैं भैया मुझे तनख्वाह ही नहीं चाहिए, मेरे को आप काम करने के लिए ना, बैठने के लिए मेरे को जगह दो, और मुझे ये बताओ कि कौन सा धंधा आपकी कंपनी में चल रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस धंधे में कितना धंधा जो है ये बढ़ाया जा सकता है। कई पोर्टफोलियो मैनेजर कहते हैं कि मेरे को इतना परसेंटेज चाहिए, तनख्वाह तो चाहिए नहीं, अगर काम नहीं आएगा तो मेरे को मत देना पैसे। बात आ रही है समझ में? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी में। इसलिए तो आप कहोगे यार इतनी लाइफस्टाइल है। भाई साहब, वो लाइफस्टाइल तो है, लेकिन वो उस लाइफस्टाइल के पीछे मेहनत है, दिमाग है, चालाकी है, धूर्तता है। जो भी आप कहो भी, जैसे भी आदमी काम कर रहा है वो कर रहा है, कंपनी को धंधा जो है वो ला के दे रहा है कहीं से भी, और प्रॉफिट ला के दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल लो प्राइस पे बेच के आ रहा है वो। बात आ रही है समझ में? हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो शिकार करके ला रहा है, तब उसके बाद जो है नीचे जो छोटे मोटे सब खा रहे हैं। ठीक है, ये गीदड़ कुत्ते ये शेर है कंपनी का। तो नीचे है प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, ये काम करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देसी भाषा में समझाता हूँ, जल्दी समझ में आती है। ठीक है, so we have to understand now what is happening. This guy is getting bogged down by the load of the work, which is the managing multiple projects. So that's fine. In the beginning, it's fine, but later on, he has to be relieved. So company is appointing 3 program managers, but before that, it has created the 3 programs. Now the company is going to appoint 3 program managers. ठीक है guys? Okay. अब एक काम करते हैं कि प्रोग्राम मैनेजर तैयार करते हैं 3। देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे डू यू सी दी आइकन? देखो इसका नाम क्या है? ओबीएस। ओबीएस है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि अब ध्यान से देखना कि जो ह्यूमन आइकन यहाँ भी है और ह्यूमन आइकन यहाँ भी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखो और मुझे बताओ दोनों में अंतर क्या है। ध्यान से देखना कि पहले वाला जो रिसोर्स है उसके पीछे जगह खाली है, देखा उसके पीछे। और ये जो है ना, ये जो ओबीएस है उसके पीछे नीले रंग का एक बोर्ड है, देखा? नीचे इसके पीछे नीले रंग का एक बोर्ड है। इसका पता है मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी का बोर्ड मेंबर। आइकन में भी मतलब समझा हुआ है, जैसे आपने वो देखा होगा जो इजिप्शियन जो हाइरोग्राफिक्स होता है उसमें बना होता है, चिड़िया, कुत्ता, बंदर, लिजर्ड विजर्ड सब कुछ, हाथी घोड़े सब, इसमें भी समझा हुआ है। अब मेरे से एक बार एक स्टूडेंट ने कहा सर इतने सारे आइकन हैं तो ये याद नहीं रहेंगे इतने सारे। मैंने कहा तू सिर्फ 15 आइकन याद कर ले, उसी से तेरा काम चल जाएगा। कि सर 15 भी नहीं होगा। मैंने कहा एक बात बता, झूठ मत बोलियो, कॉलेज टाइम में तेरे को कितनी जो है ये लड़कियां याद थी? तेरे को कम से कम 15 तो याद थी। उनका नाम, उनका कौन से ईयर में है, कौन से सब्जेक्ट में स्टडी कर रही है, कौन से गांव से है, कौन से शहर से है, और सब तूने याद कर रखा था। यहाँ के तेरा दिमाग क्या हो गया तेरा? तो गाइज यू हैव टू यूज द सेम टैलेंट व्हिच यू हैड इन द कॉलेज डेज ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू जस्ट हैव टू यू रिकॉल द टैलेंट। दैट इज ए लेटेंट टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट है, उसको अब दूसरे प्रकार से यूज करना है। ठीक है, कॉलेज टाइम में यूज किया, अब यहाँ पे यूज करना है। किस चीज के लिए? यहाँ पे यूज करना है आपने आइकन्स की पहचान बनाने के लिए। ठीक है,
तो धीमे धीमे करके अगर आप प्राइमावेरा से प्यार करते हो, अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो, तो कॉलेज में जैसे तुम सारी लड़कियों से प्यार करते थे तो याद हो जाएगा सब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके पीछे बोर्ड, तो इज ए बोर्ड मेंबर, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो अब हमने करना क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अच्छा देखो इनके ना, देखो ये डेमो स्क्रीन पे देखो, किसकी स्क्रीन पे हूँ मैं, नियाज की। नियाज देखो ऊपर ना, ध्यान से देखो ऊपर, देखा तुमने कितने सारे कोड हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाबा इतने सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे ये खुले हुए हैं, ये गलती से लगता है वो खुल गए, देखो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे पास ये खुले हुए हैं, दिख गया आपको? जी सर। मेमोरी में। अब इनको ना अनलोड करो ये मेमोरी से। सबसे पहले करो कंट्रोल डब्लू, करो, यस करो। कंट्रोल डब्लू का मतलब है कि मेमोरी से अनलोड करना। अब मैं बताता हूं कि इसके साथ ये क्या हुआ है। देखो गाइस, नाउ रीड द टॉप। टॉप को जो है वो पढ़ो, नो ऊपर जो करंट टॉप रो प्रोजेक्ट। है। नो, नो करंट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं एक ना ये डेमो दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने एक ही प्रोजेक्ट को लोड करना है, तो मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और then I did the right click and did the open project. So once I click on the open project, the activity tab will open. ठीक है? Now guys, look at the top. How many project do you see there? One only, right? Okay. Now, Niaz, you close this project. You press the Control W button. Okay. Now, I'll tell you something interesting. If you are on this program, so in this program, how many projects are there inside it? कितने हैं इसमें? इसके नीचे कितने हैं प्रोजेक्ट इसके अंदर? दो है ना? वेरी गुड। नाउ गाइस, डू दिस थिंग, यू राइट क्लिक हियर, इसके ऊपर राइट क्लिक करो नॉन रेन पे, और इसको करो ओपन प्रोजेक्ट, मतलब इस पे करो ओपन प्रोजेक्ट। आप देखोगे इसके अंदर के जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये खुल जाएंगे। देखिए अब देखो, अगर वैसे नहीं दिखता तो फिर यहाँ पे देख लो, दिख गया दो यहाँ पे। जी सर। तो ये वाले प्रोजेक्ट किस ग्रुप के हैं? आपके उसी वाले ग्रुप के हैं जहां से आपने, जो ग्रुप को आपने ये खोल दिया था। ठीक है ना? तो ग्रुप के अंदर दो थे प्रोजेक्ट, आपने नॉन रेंट को खोला है। अच्छा, अब आप प्रेस करो कंट्रोल डब्लू। अब ये दोनों अनलोड हो जाएंगे मेमोरी से। करो यस, करो करो यस करो। आपका माउस तो है ना, या फिर क्या है वो? ऐसा लग रहा है कि वो है, लगता है ट्रैक पैड सा है। माउस है, ट्रैक पैड है? नहीं आज आपके पास? माउस है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। माउस का ना जरा थपकी सी मार दो इस पे, ठीक है? थोड़ा सोस आ रहा है ये, इसका थोड़ा जाग जाएगा। अच्छा देखो, अब इसके जो है ये, देखो ये सिलेक्ट करो एनर्जी यहाँ पे। अब बताओ इसके नीचे कितने हैं प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट की बात करूं, प्रोग्राम मत गिनना। 6। हाँ, अब इसको करो ओपन, देखो इसके नीचे के 6 प्रोजेक्ट। प्रोग्राम प्रोजेक्ट। तो प्रोग्राम की गिनती नहीं होगी, हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट की गिनती कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जब मैं ओपन प्रोजेक्ट मैं करूंगा इस पे, तो क्या होगा, इसके अंदर के 6 प्रोजेक्ट मेमोरी में लोड हो जाएंगे। तो करो इसमें राइट क्लिक करके। नहीं नहीं, अरे कहाँ ऐसा क्यों रहे हो? वहीं पे रहो ना, एनर्जी पे रहो यहाँ पे। अब करो इसमें ओपन प्रोजेक्ट, करो ओपन प्रोजेक्ट। जस्ट अ मोमेंट।
So guys, do you see that there are 6 projects loaded into the memory, right? So is this thing Yes. clear? Okay. Now, it means that you can load multiple projects, but what is the utility? The utility is like this. Suppose between 2 projects, some activities are related. So what you can do? You can select the activity from the project 1 and you can relate it to the next project. Okay. So this is the activity. If any of the activities are related like this, so you can set up the relationship here, right? That is the benefit. Okay, because there is a possibility they are being done in parallel for one common goal. Like suppose there are 2 projects. One is the construction of the rocket and one is the construction of the satellite. So some of the things are related, so they can be done in a sequence. So you can relate them, right, guys? Is it clear? That is the benefit of this facility in the Primavera, that you can load multiple projects if required. So you should know this, what happens when. So I want you to know this so that you do not load multiple projects unknowingly. Now you press the Control W button. Press the Control W. And click on the yes so as to unload it from the memory. Okay, guys, so you have done that. So guys, is this clear? Now, guys, do you understand? If you did the same thing on the enterprise, then what is going to happen? Don't try it. Because if you do it on the enterprise, it will load hundreds of projects into the memory. Okay, so you should know about this feature. So you should know when you need one project and when you need multiple projects. So you should be able to click on the appropriate one. Now, guys, please click on the button, Organizational Breakdown Structure button, that is the OBS button. So click on this. So let us expand the box since we are opening this box for the first time. So let us configure this box. So guys, please expand the size like this and increase the column size like this. And then you change the font. Font कहाँ से change होगा? यहाँ से. यहाँ पे select करो आप table font and row. Please select table font and row. 8 or 9? Select 9 number here, Vardhana 9, because we have got some space here. तो हम यहाँ पे 9 यूज करेंगे. क्यों? वहां पे ना नीचे पता क्या है, हमें काफी सारे कॉलम जो है एक साथ जो है वो लगाने, इसलिए वहां पे हमने 8 यूज किया. यहाँ पे तो एक ही है कॉलम, है ना? तो इसलिए हम जो है 9 साइज ले सकते हैं. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंटरप्राइज जो है इसको मैनेज कौन कर रहा है. देखो यहाँ पे ना जो ह्यूमन आइकन है, यहाँ पे जो है ना ये डेजिग्नेशन की बात हो रही है कि एंटरप्राइज को संभालने वाला डेजिग्नेशन कौन सा है. तो एंटरप्राइज को कौन संभालता है? सीईओ. और सीईओ के नीचे कौन होता है? सीईओ के नीचे होता है पोर्टफोलियो मैनेजर. मैं लिख देता हूं, पोर्टफोलियो मैनेजर. तो आप एक काम करो, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर जो वर्ड है ना, देखो एक मिनट रुको, पहले मैं इसको ठीक से लिखता हूँ. ये अंडरस्कोर नहीं होना है, ये होना है डैश. तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर जो वर्ड है, आप एक काम करो, ये एनर्जी के भी सामने पेस्ट कर दो. इसे करो, इसे पेस्ट. हाँ, अब इसको जो है ये एनर्जी के सामने करो, पेस्ट करो डैश लगा के. हाँ ठीक है, चाहे स्पेस रहने दो, ठीक है, स्पेस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब आप जो है ना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक मिनट रुको, इसमें एक मिनट हो गया, वो डिलीट हो गया था. अच्छा, अब आप इसके सामने स्पेस डाल के पेस्ट कर दो. हाँ, अब एंटर प्रेस करो. अब नेक्स्ट में जाओ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे क्लिक कर दो और इसके भी सामने पेस्ट करो.
तो ये जो पोजीशन है आपका, जो इमीडिएटली सीईओ के जो नीचे होता है, वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर। और पोर्टफोलियो मैनेजर जो है बिजनेस को डेवलप करता है। ठीक है। कॉर्पोरेट, पेस्ट करो इसे। ठीक है। और ये आईटी, ये भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, इसे भी करो पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, कर दिया पेस्ट। हाँ, अब Yes. देखो, अब इनके नीचे कौन होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर के नीचे, पोर्टफोलियो मैनेजर के नीचे होता है प्रोग्राम। Program manager. तो प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हायरार्की में प्रोग्राम मैनेजर इज ए पर्सन who is sponsoring the project to the project manager. He is selecting the right project manager and he is providing the resources to the project manager and he is managing the program. He is making sure that he is optimally promoting all the projects. And करो इसमें करो कंट्रोल V। ये प्रोग्राम नहीं, पोर्टफोलियो नहीं बाबा, प्रोग्राम मैनेजर है। पोर्टफोलियो के नीचे प्रोग्राम मैनेजर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर सीईओ होता है और फिर प्रोग्राम मैनेजर के नीचे होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए रिसोर्स विद इन द प्रोजेक्ट, इसलिए उसका नाम यहां नहीं आता। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर खुद एक रिसोर्स होता है, ही इज नॉट ए बोर्ड मेंबर। हाँ, एंटर कर दो। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी है ना, इसके नीचे 3 जो है प्रोग्राम मैनेजर चाहिए। बताओ कौन कौन से चाहिए वो हमें, देखो ध्यान से, कौन कौन से चाहिए हमें? दिख गया आपको? Yes. बनाओ फिर ये 3 प्रोग्राम मैनेजर। तो प्रोग्राम मैनेजर नया डालने के लिए क्लिक करो ऐड, सो क्लिक ऑन द ऐड बटन। अब देखो इसके नीचे जो रो क्रिएट हो ना, इसको ना चाइल्ड बनाओ पहले। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा नाम क्रिएट होगा? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका रिन्यूएबल। लिखो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद जो है फिर से एनर्जी को, इसको रिन्यूएबल पे रखो और करो ऐड। देखो नीचे आ गए ना ब्लैंक रो। अब इसके नीचे लिखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। चाहो तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके चेंज कर देना, ऊपर से पूरा कर लो कॉपी। ठीक है, इसके आगे जो है नॉन लिख देना बस, बाकी तो सारा सेम रहेगा। लिख दो नॉन। हाँ, अब इसको एंटर प्रेस करो। अब प्लस, हाँ ऐड करो। अब इसका लिख दो यहाँ पे, पेस्ट कर दो इसे पहले, इसके अंदर जाओ। अब करो पेस्ट करो। अब रिन्यूएबल को नाम चेंज करके न्यूक्लियर कर दो बस। ठीक है, तो देखो 3 प्रोग्राम क्रिएट किए हमने और 3 प्रोग्राम मैनेजर हमने ये अपॉइंट कर दिए ना। अब ये 3 प्रोग्राम मैनेजर को हमने क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम प्लस इसके अंदर के जो प्रोजेक्ट है, इनको ये असाइन करने हैं ऐसे, ये हर एक को। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। अब अभी आप जाओगे ना, ये जो एनर्जी पोर्टफोलियो मैनेजर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दो। आपने देखा इसके पास क्या है? पूरा एनर्जी है। उसके पास ये प्रोजेक्ट है, देखो 6। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 6 प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे। ये तो प्रोजेक्ट का ये WBS है और उसके पास ये भी है। तो हमने क्या करना है कि बाकी सारा कुछ हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी सारा कुछ ना हमने ये हटा देना है और इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी रहेगा बस, ये एक ही रहेगा। और बाकी ये सारे जो है ना, ये जो अभी जो प्रोग्राम मैनेजर जो हमने पोजीशन क्रिएट किए, इनको हमने बांट देना है। ठीक है गाइस, इज दिस क्लियर? Okay. Anand, is this clear? Guys, is this clear? Yes. Okay. Now we will go Yes. and we I'm are doing going that. to shift the responsibility. Now guys, first of all, you select the energy. Okay, click on the energy portfolio here.
क्लिक करो एनर्जी, देन यू सिलेक्ट द डिटेल। हाँ, क्या हुआ, नॉट क्लिक नहीं हो शोइंग, रहा है? नहीं क्लिक हो रहा सर। अच्छा, एक सेकंड रुको जरा, क्लिक क्यों नहीं हो रहा? क्लिक तो होना चाहिए। एक मिनट रुको जरा, ब्लैंक एरिया में क्लिक करते हैं। आपके तो पूरे प्राइमावेरा ही नहीं क्लिक हो रहा है, ये क्या है? कोई विंडो खुला तो नहीं हुआ प्राइमावेरा में? आपके कोई विंडो, कोई पॉपअप तो नहीं है इधर उधर दाएं बाएं छुप तो नहीं गया नहीं कोई नहीं, pop-up कुछ भी नहीं सर। खुल के? क्योंकि अगर कोई पॉपअप अगर हो ना ओपन, तो यहाँ पे क्लिक नहीं होता फिर। जी कुछ भी ओपन नहीं है सर। तो ये क्या हो रहा है ये इसमें? ये तो हैंग सा हो गया। आपके जो है कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं अभी? प्राइमावेरा एक चल ही रहा है। है? अच्छा, अच्छा प्राइमावेरा है। अच्छा, तो अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्सिबल क्लोज करना पड़ेगा प्राइमावेरा को। ये समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। अच्छा, आप एक काम करो, नीचे ना आप जो है टास्क मैनेजर पे राइट क्लिक करो। मुझे दिख नहीं रहा टास्क मैनेजर, आपके दिख रहा है नीचे? यस सर, टास्क बार सेटिंग। हाँ, नहीं नहीं, टास्क बार सेटिंग में नहीं जाना, टास्क मैनेजर को लॉन्च करना है। टास्क मैनेजर वो ये दिखाता है कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं अभी सिस्टम में। किसी प्रोग्राम को बंद करना हो तो वहां से बंद कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर खुद ना बंद हो रहा तो वो मेन स्विच है। देखो एक आता है टास्क मैनेजर। अच्छा, अगर वो नहीं आ रहा ना, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात। यस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करो, ये 3 बटन एक साथ प्रेस करो, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और फिर ये सिलेक्ट करो टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर। हाँ, ओके। कर लिया सिलेक्ट? हाँ। तो टास्क मैनेजर में देखो, एप्लीकेशंस में प्राइमावेरा, और प्राइमावेरा को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके करो एंड प्रोसेस। एंड क्योंकि टास्क। ये आपको अपने आप करना पड़ेगा, मुझे वो स्क्रीन नहीं दिखेगी यहाँ से जैसा बोल रहा एंड हूँ। टास्क। टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में प्राइमरी सेलेक्ट करके एंड टास्क करना है ना। हाँ, एंड टास्क कर दो, प्राइमावेरा बंद हो जाएगा। वरना कंप्यूटर को रिबूट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगी। आपने पता क्या किया था कि कर दिया सिर्फ, सर। हाँ सिर्फ प्राइमावेरा ही शेयर किया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब की बारी आप जब भी शेयर करो तो फुल विंडो शेयर करना है आपने, सिर्फ प्राइमावेरा नहीं शेयर करना। ओके। तो आप लोग एक ये ट्रेनिंग के दौरान गाइज एक एक काम करो, कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, आप ना प्लीज ब्राउजर मत खोलो अपना, ठीक है? प्लीज डू नॉट ओपन योर ब्राउजर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो सयाद अपनी स्क्रीन शेयर करो आप, अपने सब ब्राउजर जो है वो बंद रखो इस वक्त। फिर से ओपन करना है सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं सयाद से बात कर रहा हूँ। सयाद, ओके। सुन रहे हो आप हो यहाँ पे? हाँ, अपनी स्क्रीन शेयर करो अब आप। हम्म। देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये जो है कर ना, दी सर, कर दी सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ, दिख गए, बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा कॉलम हम जो है ये बड़ा कर लेते हैं। अभी जो एनर्जी के पोर्टफोलियो मैनेजर है, पूरा पोर्टफोलियो प्लस नीचे के प्रोग्राम इनकी जिम्मेवारी में। अभी तो प्रोग्राम मैनेजर के पोजीशन नए बनाए, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खाली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये एनर्जी है, इसको किया सिलेक्ट। अच्छा, नियाज आपका जो है प्राइमावेरा फिर से लॉन्च करके यहाँ आ जाओ फटाफट यहाँ, और मुझे फिर वो तो बताओ कि यहाँ पहुंच गए हो आप। ओके सर। So guys, please select the energy services, and in the detail tab, go to the general tab. In the detail window, go to the general and look at this selection box of the responsible manager. So guys, do you see this responsible manager here? Yes. Okay, so it is showing you the energy portfolio manager. So which is correct, right? That is correct. ठीक है? अच्छा, अब आपने करना क्या है कि अब आपने सिलेक्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। करो, सिलेक्ट करो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। देखो इस पे ले आओ कर्सर अपने, रिन्यूएबल पे ले आओ इस पे। सर मेरे में थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? ये इंटरप्राइज सीईओ दिखा किसमें?
रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के नाम नहीं नहीं, कौन से में हो अभी वो आप? आपने बोला ना सर, जनरल में क्लिक करने के लिए। हाँ, जनरल में आप कौन से ग्रुप पे हो? आप जो एनर्जी पे हो, रिन्यूएबल पे हो? पहले रिन्यूएबल पे आओ, स्क्रीन पे ध्यान दो। आप पहले स्क्रीन पे देखो मैंने क्या सिलेक्ट किया, वही सिलेक्ट करो। फॉलो एग्जैक्टली ऑन द स्क्रीन। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये अभी जो प्रोग्राम है, ये ठीक है प्रोग्राम हम शिफ्ट कर रहे हैं प्रोग्राम मैनेजर को। बात आ रही है समझ में? नहीं, ठीक है। 3 प्रोग्राम मैनेजर हमने जो है अपॉइंट भी है कंपनी में, अब उनको काम ट्रांसफर कर रहे हैं ना। पहले ये पोर्टफोलियो मैनेजर के पास था या किसी के पास भी था, उसकी कोई टेंशन मत लो अभी। आप एक काम करो कि सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट करो। करो इसमें पहला स्टेप, ओपन प्रोजेक्ट करो यहीं से ही। कर दिया। सही याद, इस पे करो ना, इस पे तो इसमें बॉटम लेआउट नहीं शो होगा। इस पे करो तो बॉटम लेआउट कर लो ना शो। बॉटम लेआउट शो करने के लिए डिटेल का है ये बटन, इस पे क्लिक करो ना, ये आ जाएगी बॉटम लेआउट। गाइस ये ना आउट ऑफ सिंक हम जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये इतनी सिंपल सिंपल है चीजें, कभी तुम किसी में अटक रहे हो। देखो किसी और चीज पे ना ध्यान मत दो अभी, ठीक है? ये यस 3 दिन बहुत क्रूशियल है, एक बार सीख लोगे तो पूरी जिंदगी में बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ध्यान दो जरा, क्योंकि अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो मैं बहुत ही सिंपल चीजें मैं समझा रहा हूँ। अभी तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आऊंगा तो वहां पे काफी ध्यान देना होगा तुम्हें। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि सबने ये एक्टिविटी टैब में हो, आपको देख रहे हैं 2 प्रोजेक्ट? यस सर। है नहीं यस? सर मुझे। यार ये क्या हो रहा है यार? 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करो यार, ये फटाफट। देखो मैं चाहता हूँ आप लोग ना देख के करो अपने हाथ से। अगर मैं आपकी स्क्रीन पे आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए मुझे अपने हाथ से वो करना पड़ेगा, फिर वो प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर वो प्रैक्टिस नहीं कहलाएगी। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम सुन नहीं रहे। अब तुम एक काम करो, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। इसको पहले सिलेक्ट करो, इसको, हाँ इसको राइट क्लिक करके करो ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, सो गाइस दिख गया आपके जो एक्टिविटीज में, आपके दो दो प्रोजेक्ट वो खुल गए हैं। अगर आप चाहो तो ऊपर की तरफ देख देख सकते हो, या तो चाहो यहाँ पे माइनस का बटन प्रेस कर लो, ये डबल माइनस का आपको दिख जाएगा। आपको दिख गया ये? ठीक है, अब ये जो डबल माइनस का जो बटन आपने क्लिक किया तो आपको ये पता चल गया कि 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे से। अब क्या होता है कि जब भी आप ओपन प्रोजेक्ट करोगे तो ये घसीट के आपको एक्टिविटी में ले जाएगा, लेकिन आपने अपने आप को वापस प्रोजेक्ट में ही लाना है। वापस प्रोजेक्ट के टैब में आओ और प्रोजेक्ट के टैब में रिन्यूएबल पे जो है कर्सर ले आओ अपना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम में, और बड़े प्यार से ध्यान दो, जनरल वाले टैब में जाओ। अब कोई ये नहीं बोलना कि मैं छूट गया पीछे, 1 मिनट में रुक जाता हूँ। गाइज मेरे को ना बड़ा डर लग रहा है अब कि हर आदमी जो है 5-5 मिनट के बाद कह रहा है कि यू टर्न करो। गाइज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, प्लीज एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म दैट यू आर हियर। यस सर। एक ही यस है। मेरे को जो है कि टोटल ट्रेनिंग कितने हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को जरा लिस्ट चेक करने दो कितने लोग हैं यार ट्रेनिंग में। ठीक है, ट्रेनिंग में है 5 लोग, तो मेरे को 3 यस और सुनने हैं। एक की तो स्क्रीन पे हूं मैं। Yes, I'm in the same time. Yes. हाँ, चलो वेरी गुड। नाउ इन द जनरल, so what you do, you change the program manager to renewable energy program manager. Guys, make sure that this is the program which is selected. Then you are in the general tab. So after going into the general tab, you select here, click here. हाँ, so since you are opening this box for the first time, just hold. So give me the remote control. और नियाज प्लीज गिव मी द रिमोट कंट्रोल। हाँ देखो, अभी क्या होगा जब पहली बारी कोई भी बॉक्स वो खोलते हो ना, वो दिखेगा छोटा, आप उसको ना ये बड़ा करो साइज में, और उसका जो फॉन्ट साइज है आप इसमें ले लो वरदाना 9। आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके जो जो डिस्प्ले में जो देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वरदाना रेगुलर 9, रेगुलर 9 साइज फॉन्ट। ठीक है,
दिख गया आपको, देखो है ना? यस अच्छा, अब हुआ क्या है कि आपको जो है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे आप यहाँ से? जाहिर बात है आपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर ही सिलेक्ट करना है, तो करो इसे सिलेक्ट, और ये प्लस का ये बटन दबाओ। अब इसको करो यस, ओके। अच्छा, अब रुक जाओ सारे, अब मुझे बताओ कि सबने ये सिलेक्ट किया है यहाँ पे, यस है? आपका यही है ना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर? तो मेरे में डिलीट हो गया है, पता नहीं कैसे। अच्छा रुक जाओ, देखते हैं। अच्छा, बाकी जिनका फ्लो में चल रहा है वो देखो कि आपके ये प्रोजेक्ट में चेंज हुआ कि नहीं। हो गया। ठीक है सर, यही है। नीचे सेम है ना ये? बाबा प्लीज रिस्पॉन्ड करो यार, फॉर गॉड सेक यार, कोई रिस्पॉन्ड करो। हो गया सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके हो गया। नीचे का जो प्रोजेक्ट है इसमें भी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है? सेम मैनेजर? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर। हाँ, सेम है सर, सेम है सर। वेरी गुड Yes, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा हूँ ना, सेम आ गया। है ना? देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको ध्यान से मैं समझाता हूँ। सेम है सर, हो गया अपडेट। वेरी गुड, अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या है, आपने ये कैसे किया वो भी आप समझो। आप ध्यान से देखो ऊपर, जब आपने प्रोग्राम को खोला तो प्रोग्राम के अंदर के दो प्रोजेक्ट मेमोरी में लोड हो गए, दिख गया आपको? ऊपर देखो टॉप में। अब ये दो प्रोजेक्ट खुल गए, वो ले गए आपको एक्टिविटी टैब में। एक्टिविटी से आप जो वापस फिर से लौट के यहाँ पर आए, और यहाँ पे आपने प्रोग्राम को फिर से सिलेक्ट किया, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जैसे ही चेंज किया, तो ये क्या करता है प्राइमावेरा, कि अगर अंदर के प्रोजेक्ट अगर मेमोरी में लोड है तो उनको भी प्रोग्राम के साथ साथ उन्हें भी अपडेट कर देता है। समझ में आगे टेक्निक क्या है? अच्छा, अब यही टेक्निक आपने नंबर 2 पे आपने वो करनी है। अब जो आउट ऑफ द सिंक है वो भी नंबर 2 से चलो। आउट ऑफ द सिंक कौन है इस वक्त? कौन बोल रहा था कि प्रॉब्लम है कुछ? अरविंद अरविंद। हाँ अरविंद, आप एक काम करो, इसको सिलेक्ट करो, नॉन एनर्जी रिन्यूएबल प्रोग्राम को। अब इसको करो ओपन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को राइट क्लिक करके गाइस ओपन करो इसे। इसके अंदर के दोनों प्रोजेक्ट खुल जाएंगे, और पिछले जो दो प्रोजेक्ट है वो अनलोड हो जाएंगे मेमोरी में से। नियाज रिस्पॉन्ड करो यार, इस पे राइट क्लिक करो। हाँ करो, ओपन करो इसे। देखो जैसे ही आप इसको तुम ओपन करते हो तो ये क्या करता है, आपको एक्टिविटीज में ले जाता है। दिख गया आपको ये इसके अंदर के Yes. दोनों प्रोजेक्ट? यस अब आपने एक्टिविटी में रहना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है आपका। वो ये सोचता है कि आप शायद प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, लेकिन आपने काम करना है एंटरप्राइज के प्रोजेक्ट की लिस्टिंग में। आपने फिर से ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और आपने कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है? नॉन एनर्जी। क्योंकि ये कई बार क्या होता है, आप जिस ग्रुप से चलते हो तो कई बार इधर उधर ये चला जाता है कर्सर। अब आपने क्या करना है, इस ग्रुप को सिलेक्टेड रख के इसका मैनेजर कौन होगा? ये नॉन रिन्यूएबल का कौन सा होगा मैनेजर? नॉन रिन्यूएबल हाँ, एनर्जी नॉन प्रोग्राम। रिन्यूएबल वाला होगा, है ना? प्रोग्राम मैनेजर। हाँ, इसका नॉन रिन्यूएबल वाला ही होगा। तो जैसे ही इसको आप ये सिलेक्ट करोगे तो ये सारे प्रोजेक्ट इसके ग्रुप के और जो है प्रोजेक्ट के सब इसको रीअसाइन हो जाएंगे। देखो ध्यान से, अब देखो इसका डेटा अपडेट है, नीचे जो प्रोजेक्ट का जो है वो भी अपडेट है, और इसका भी अपडेट है। दिख गया आपको? अच्छा एक मिनट ना, सारे पॉज रहे ना, मैं जरा इसके नियाज के सिस्टम में कुछ डेटा ठीक कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना है। नियाज यहाँ पे ना तुम टाइप करो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर, फटाफट से टाइप कर दो यहाँ पे। NUC है इसमें, स्पेलिंग में ना ई नहीं होता, ठीक है ना? NUCLEAR, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, और एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, अच्छा क्लोज कर दो। अच्छा गाइस, अब एक काम करो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके ओपन प्रोजेक्ट करो इसमें। अब इसका जो है हम अपडेट करेंगे सारा डेटा, ठीक है? और जैसे ही इसका जो है ना आप इसको खोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये राइट साइड में एक्टिविटीज में ले जाएगा। आप देखो इसमें कंफर्म करो, ये डबल माइनस पे क्लिक करो, देखो आपको दो प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। दिख गया आपको दो?
है ना। चलो, इसका मतलब अंदर के प्रोजेक्ट, लेकिन हमने यहाँ नहीं रहना, हमने जाना प्रोजेक्ट की लिस्टिंग के अंदर, जो मेन जो लिस्ट है। अब इसके अंदर हमने सिलेक्ट करना है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को, और इसको सिलेक्ट करके हमने जाना है नीचे। ग्रुप पे रहो, यहाँ पे चेंज कर दो। नीचे जो मैनेजर है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर को यहाँ पे ये असाइन कर दो, ये रहा। ठीक है, ये आपका प्लस का बटन है, फिर ये क्लोज का बटन है, विंडो क्लोज, और यस कर दो। तो यस करते ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी अपडेट होगा, इसके अंदर के प्रोजेक्ट भी अपडेट होंगे, चेक करो। ठीक है, ये भी ठीक है। तो गाइस एक बार हम चेक करते हैं। देखो रिन्यूएबल का देखो मैनेजर, देखो आप अपनी स्क्रीन पे भी देखो और डेमो स्क्रीन पे भी देखो, सही है। अब इस पे चेक करो नेक्स्ट, ये जॉन्सटाउन पे प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट भी चेक करना है ना भाई। Yes. करो इस पे क्लिक, यहाँ पे देखो इसका ठीक है मैनेजर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो सनसेट गॉर्ज में जाओ, इसमें जो अगला जो है ना जो प्रोजेक्ट है, इस पे देखो ठीक है मैनेजर। अच्छा, अब इसका चेक करो, देखो ठीक है इसका मैनेजर। राइट। अब 870 नंबर पे जाओ, ठीक है मैनेजर इसका, सही है ना। ग्रुप में जिस ग्रुप में प्रोजेक्ट है वही है ना मैनेजर का नाम भी। हाँ, अब न्यूक्लियर में जाओ, देखो इसका ये आ गया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मैनेजर। अब 950 नंबर, ठीक है ये। राइट सर। डन गाइस, यू हैव डन सेम टू सेम। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी। अब किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या मिली वो हमें देखेगा यहाँ से। सो गाइस प्लीज क्लिक ऑन दिस बटन हियर, OBS. To what time today class will be? Who is the asking this? Anand, because I have one outside one commitment, that's why. See, when you had taken the admission in this training, your commitment should be to this training only, right? Yes. We had a lot of things to do today. Today is being Friday. So No, there are because- many obligatory things here. Some people need to pray. Some people had problem in the system. Okay. So I will be here teaching till 12 a.m. Right? Guys, is that clear? Okay. So you have to complete the class. Please do not leave the class until the today's training program is completed, and I will let you know when it is completed. I'm not going to speed it up till every person is clear with the full knowledge, right? So you have to stay here. Okay, guys. So that being clear, now we will take a break, but we are not going to stop till the today's agenda is completed, right? Okay. Okay, fine. Now we will see that what is the energy portfolio's responsible update. Now his responsibility is now, do you see? Guys, do you see that energy portfolio is having only one responsibility here? So this is the intended result we had wanted, right? What was happening? Why did we create the position of the program managers? We created the position of the program manager so this guy can focus more on the business development within his portfolio, right, guys? Is this thing clear? Okay. Yes. That is why we have what we have done. We have shifted all the responsibility to the respective program managers. Now the respective program managers are managing their project and their group. And if you look at the non-renewable, he is managing his group and he is managing the two projects which is there.
So he is managing the non-renewable, and the nuclear is managing, and the renewable is managing his own group. So his group is at the top, and you can see the projects here. So he has got two projects. Actually, this is the WBS. This is one project. So, and that's his group. So you can see he is having the renewable group, and he's having one more project. So each of the program managers have one program and two projects in their responsibility, right? And the energy portfolio manager is having the responsibility of the energy group only, right, guys? Is this clear? Yes, right. So this is called the structure of the people. Now, guys, I'm going to show you a slide. Okay, the slide will give you the further understanding that why the EPPM is called EPPM, why it is basically used for the enterprises. After this slide, I'm going to take a break. And after the break, we are going to come back again till we are done with the today's topics. Okay, so I'm going to share my screen in a while. Just let me load the slides. So I'm just going to the particular slide. Just be with me. So guys, I will ask you. देखिए स्क्रीन आपको. So guys, you can see the screen. Yes. देखो, अब ध्यान से देखना, मैं इसको ना expand कर रहा हूँ. मैं देखो किसी चीज से. Saji, is that you? Please stop talking to someone else. Please pay attention to this training, okay? It will be good for you. See, guys, this is the Primavera pieces, the data structure. See, I'm showing you the hierarchical chart. Now, on the left-hand side, I'm going to draw a rectangle first to make you understand how does the world works, how does the big companies they work. See, in the big corporation, this is called the structure of the business. This red rectangle is called the structure of the business. Then the green rectangle is called the structure of the management. So right side, the green rectangle is representing the people that run the business. On the left side, it is representing the structure of the business, how the business is being done in a company or in a particular group. So now what happens that when there is a company, so the company is called the enterprise. So, you know, the person who is at the top will be the CEO, right? So we'll have the CEO at the top. And the CEO has the portfolios. You know, guys, these are the portfolios, and portfolios can be further subdivided into programs if required, right? At this point of time, I'm showing you only the portfolio here because I don't want to give you any wrong idea that portfolio should be necessarily subdivided into programs. If a portfolio becomes big, if it becomes big, only then the programs will be brought into the existence. The portfolio starts with some number of the projects in the initiality. The portfolio is managed by portfolio manager. So, you know, guys, portfolio manager will be always there. Program manager may or may not be there, right? Every company starts with the portfolio. Now, under the portfolios, guys, what do you see here? Multiple projects. And guys, under the project, what do you see here? Work breakdown structure. Under the particular work breakdown structure, guys, what do you see under the WBS one? Its own activity. Activities are contained inside the WBS. Now, guys, who is working on the project? The project is being managed by the project manager. And then with the project manager, there are engineers, the business analyzer. The WBS is managed by the team leader, and the activities are done by the resources. They are called executive resources because they execute the activity, right? So who are the resources? See, in construction industry, they are like labor, mason, crane operator, okay? Like this, these are the executives. And then there are site supervisor. They are like team leaders. Like in the IT industry, we have got programmer, tester, designer,
a coder, all these are resources. Then we have got some designation like software engineers, like that. So all these guys, they work with the project manager. So right side, and the scheduling is controlled by something called the calendar. So the calendar is basically controlling the dates of the activity start time, and the calendar is also controlling the resource schedule also. What is the working days and what is the non-working day of the resource, and what is the working day and non-working day of an activity, that is also controlled. So both ways the calendar is controlling, right? Now, let me show you one more slide, that what kind of the data is there. See, on the top, so it starts from left to right. So first we have the EPS, then we have the OBS. Under the OBS, we create resources, and we have the roles, and we have the WBS. So we are going to do all this. So guys, right now what we have completed, EPS we have completed, OBS we have completed. Okay, then we are going to learn about the resources and roles and WBS, right? So is this clear? Yes, sir. Roles I will take up in the last, because it is not so easily understood. So I will take up in the last. Okay, so I start like this. My sequence of the teaching is like this: 2, then 3, then 4, and then 5. I will teach you like this. It will be easy for you to understand it. Okay. Now there is one more thing I want to see this picture also. So this is the example of the WBS. See, WBS is very, very important. Suppose if I'm making a building, so how will I make the building? What are the major activity groups? So this will be, the building will be the product. This will be the WBS. Okay. So the WBS can be having a sub WBS also, like foundation, then structural work, then mechanical systems work, then the finishes. In the mechanical, I can have the HVAC, the electrical system, the plumbing work, and in the finishing work, I can have the roof, I have the installation of windows and doors, right? So this is the example of a WBS. Then under the HVAC, I will have the activities which will help me install the air conditioning system, right? Under the electrical, I will have the activities which will help me complete the electrification of the building. Plumbing will let me complete the transport of water throughout the building. Right, guys? Is this clear? So this is how the WBS is organized by the engineers. So in the Primavera, since it is following the fundamentals of the project management, first we create a project, then we create the WBS, and then we create any activities which are there under the WBS. So this is how it works. So, but keep this picture in mind. This is the main picture you have to keep in mind. So the main thing is that what you have is the enterprise, portfolio, project, WBS, activity. Now, guys, I think now it is sounding very logical to you, right? And what is the organizational structure? सबसे ऊपर कौन होता है? CEO होता है, ठीक है। CEO के पास होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, उसके पास होते हैं फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होते हैं टीम लीडर, और टीम लीडर के नीचे जो है रिसोर्सेस काम करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही प्योरली टेक्निकल होते हैं। उनको किसी भी प्लानिंग या कंस्ट्रेंट से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो now guys, if this is clear, so we are going to take a break. So right now, what is the time? So the time is 7:26. So we will meet after 20 minutes. Okay. So please pause your recording. And now Anand, you please share your screen. Okay. Sayad, you share your screen. आप ना ये अभिषेक, आप कौन सा माइक यूज करो? इसमें ना नॉइज आ रही है आपकी ये माइक में से।
आपका ब्लूटूथ माइक तो नहीं है? आपकी माइक में ना कुछ हिसिंग नॉइस है। अच्छा, नाउ what we are going to do, see, till now what we have done that we have restructured. Okay, so what we did, we restructured the energy. Now this was an existing portfolio. Now suppose you have joined a company, there is a boss there, he says that yeah, this is good, all that is good. He says that under the enterprise, I want to create a new learning and development portfolio. That should be under the enterprise. So what is the name of this? I'm going to write it here. So this portfolio will be L&D. So that will be the ID. And the name of the portfolio will be learning and development. So all the projects for the learning and development will be done under this portfolio, and a new portfolio manager will be appointed to handle and take care of this portfolio. Okay, so guys, you are ready to create this? Okay, so guys, step by step, follow me. We are going to create a new portfolio now. So to manage the portfolio and the program structure, so you can click on the pyramid button here. So click on the pyramid button here. सैयद, ये क्लिक करो इस पे, ये पिरामिड पे. सो गाइज, यू क्लिक ऑन द पिरामिड बटन. सैयद, आपको मेरी वॉइस में मिल रही नहीं, आपकी वॉइस बंद हो गई है. आप एक सेकंड अपना माइक ऑन करना जरा, आपसे फीडबैक जो है वो जरूरी है. आपकी ना वॉइस नहीं आ रही. अब अब आ रही है. अब ये किसका माइक ऑन है? सैयद आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल ठीक है. अब आप अपना माइक ऑन रखो. आपसे फीडबैक जो है वो जरूरी है, ताकि इसको ना अच्छे से डेमो कर सके. देखो, अब हमने करना क्या है कि ये पोर्टफोलियो है, इसको तैयार करना है हमने एंटरप्राइज के नीचे. अब आप एक काम करो गाइज, एवरीबॉडी प्लीज सिलेक्ट द एंटरप्राइज ऑन द टॉप. कर ले सिलेक्ट? Yes, sir. Okay, after selecting the enterprise, click on the add. So we will create a new portfolio. अब ये क्या होगा? ये सबसे नीचे क्रिएट होगा. इसको क्या करना है? इसको कर लो, क्रिएट कर लो, ऐड इसको कर लो, ऐड पे क्लिक कर दो. अब इसको ना क्या करो, इसको जो है धक्का मार के ऊपर ले आओ एंटरप्राइज के नीचे. ये है आपका ये बटन, इसको एक एक करके धक्का मारो. हाँ, स्टेप बाय स्टेप इसको उठाओ ऊपर, इसको ले जाओ एंटरप्राइज के नीचे, यहाँ तक ये आ जाएगा. ठीक है ना? अच्छा, अब इसका जो है, अब नाम चेंज करना है आपने. इसका नाम क्या डालना है? एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं निशान लगाता हूँ. देखो, इसका नाम जो है मैंने स्क्रीन पे ही दिया हुआ है, ध्यान से देखो. आपका L&D जाएगा कोड के अंदर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट जाएगा EPS नेम में. डालो इसे नाम, नया इसमें डालो EPS ID. लर्निंग एंड डेवलपमेंट. और एंटर प्रेस कर दो. एंटर प्रेस कर दो तो ये डेटा जो है डेटाबेस में ये चला जाएगा. एंटर प्रेस करो. एंटर का बटन होता है ना आपके पास कीपैड में, उसको प्रेस करो. हाँ, अब ध्यान से देखो कि जब भी कोई नया आपने क्रिएट किया तो वो किसको हुआ है असाइन. देखो, अब ध्यान से नहीं, एक मिनट हो जाओ, कर्सर नहीं हिलाओ, कर्सर को बिल्कुल कंट्रोल में रखो. कर दिया सर, कर दिया. जब ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया तो किसको गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की? किसको दी? सॉफ्टवेयर ने, CEO. अब CEO जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप बॉस होते हैं. CEO को इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्योंकि CEO फैसला करेंगे अब इसको रीअसाइन करने का. भाई अब ये किसको देना है ना? तो कोई भी जो है नई जो बिजनेस जो लाइन क्रिएट होती है तो CEO इसका फैसला करता है. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि शुरू में जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो है वो CEO को जो है बाय डिफॉल्ट वो तैयार करता है. जब CEO के पास ये जाएगा
तो सीईओ इसको फैसला करेगा। तो सीईओ ने फैसला ये किया कि ये जो नया पोर्टफोलियो है, एक नया पोर्टफोलियो मैनेजर पोजीशन डेजिग्नेशन कंपनी में क्रिएट किया जाएगा और उसको ये रीअसाइन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आपने बनाया पोर्टफोलियो, अब आप क्या बनाओगे, पोर्टफोलियो मैनेजर। अब आप इसको क्लोज करो। अब पोर्टफोलियो मैनेजर कहाँ पे बनता है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनता है ओबीएस में। इसको क्लोज क्लोज करो इसे। सेहत क्या बात है, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा क्विकली। हाँ, अब देखो ओबीएस में जाओ, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है ओबीएस, इसको देख लो ध्यान से। अब वो बोल रहे हैं कि एक नया पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो हाँ बनेगा। सर, मेरा सर थोड़ा सा ना हेडफोन प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए लैग लैग हो रही है इसमें। अच्छा अच्छा, तो हेडफोन जो है ना, तो आप एक काम करो ना, आप एक आपका जो है मोबाइल से सुनो आप, क्योंकि मोबाइल में क्या है कि आप ना उसको स्पीकर फोन पे चला दो, और जूम एप्लीक और मोबाइल का जो माइक होता है बड़ा वो होता है, स्ट्रांग होता है। आप उसको कहीं पे भी रख दोगे, अगर आपके स्क्रीन के अगर साइड में भी है तो वहां से भी आपकी वॉइस जो है आराम से पिक कर लेगा। और मोबाइल में जो है वो वॉल्यूम भी होता है अच्छा खासा। आप क्या करो, अपने लैपटॉप का जो है माइक और स्पीकर दोनों बंद कर दो, ठीक है, और मोबाइल से साउंड ट्रांसमिशन होने दो। आप कर लो सेट, एक बारी सेट करके आराम से ना उसको रख लो मोबाइल को, फिर चलते हैं आगे। तो मैं बोल रहा हूँ माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। सुनना मेरी आवाज मिल रही है, मेरी वॉइस आपको? ये तो ठीक है, सेटिंग आपकी ठीक है, ये तो सेटिंग ठीक है। अब देखो ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, इस पे आ रही है। हाँ तो बस ठीक है, फिर चलो आगे फिर। ठीक है, ब्लूटूथ जो है वो बंद कर दो, ये ब्लूटूथ जो है बहुत डिस्टरबेंस करता है ये। हाँ सर, सही कह रहे हैं, इसमें मतलब बहुत ज्यादा ब्लूटूथ जो डिस्टरबेंस ना, हो रहा है इसके अंदर। ब्लूटूथ जो है म्यूजिक सुनने के लिए बहुत अच्छा है। अगर जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो तो ब्लूटूथ चलाओ, और इससे कोई डिस्टर्ब। लेकिन ब्लूटूथ मैंने देखा जूम के साथ काम नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये जूम में जो है ब्लूटूथ नहीं चलता जूम के साथ जो है। क्या करो कि तुम्हारे जो है दोनों तरफ से चल रहा है ना, तो एक एक साइड का बंद कर दो। मतलब या तो मोबाइल का ऑन रखो या तो लैपटॉप का। साउंड एक तरफ से आएगी तो बहुत ही ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है तुम्हारे जो है फुल वॉल्यूम पे है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा स्पीकर जो है रियल टेक का है, तुम्हारा माइक्रोफोन एरे रियल टेक का है, तो इसका मतलब ये मोबाइल। हाँ ठीक है, आप एक काम करो ना कि मोबाइल का ना स्पीकर और माइक्रोफोन जो है म्यूट कर दो आप। मोबाइल का स्पीकर माइक्रोफोन म्यूट कर दो आप। नहीं, मोबाइल में जाके ना अपने फिंगर से कर दो। मोबाइल में जाओ ना, मोबाइल में। नहीं, आपके लैपटॉप का करो, मोबाइल का करो। सर वेट वेट सर, वेट सर। ठीक है अब।
चले आगे अब, ठीक है। अब हाँ, ये आवाज आ रही है मेरी आपको? सियाद, कैन यू हियर मी? सर मेरी आ रही है आवाज सर? हाँ, अब ठीक है, ठीक है, आवाज अच्छा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बेस्ट है सबसे, ठीक है, यहीं पे बस यहीं पे रहो सेटिंग अपनी। अच्छा, अब इसमें आ जाओ। ओबीएस वाला जो ये ना, ये बटन प्रेस करो। हाँ, अब इसमें क्या करना है आपने कि आपका जो है लर्निंग डेवलपमेंट का नया पोर्टफोलियो बना है, तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी नया अपॉइंट किया जाएगा। अब इस पे क्लिक करो ऐड पे। नाउ यू क्लिक ऑन द ऐड टू क्रिएट द न्यू पोर्टफोलियो मैनेजर। नाउ क्रिएट द पोर्टफोलियो मैनेजर लाइक दिस, L&D पोर्टफोलियो मैनेजर। जैसा ENC है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम शॉर्टकट में लिखो L&D पोर्टफोलियो मैनेजर। एम्परसेंड शॉर्टकट वाला एंड आएगा। कैपिटल में लिख दो P। हाँ, अब एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद इसे क्लोज कर दो, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी तो पोर्टफोलियो मैनेजर को हमने क्रिएट किया है, अब इसकी अपॉइंटमेंट होगी पोर्टफोलियो से। क्लोज करो, इसको क्लोज करो। हाँ, अब ये पोर्टफोलियो को करो सिलेक्ट, इसको L&D लर्निंग एंड डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करो। और नहीं, रुक जाओ, कुछ नहीं करना ना, आपकी डिटेल तो है खुली। जनरल टैब में जाओ सारे, एवरीबॉडी प्लीज कम टू द जनरल टैब, ठीक है। अब जनरल टैब के बाद आप आ जाओ इसमें रिस्पॉन्सिबल मैनेजर में, इसमें सिलेक्ट करो L&D पोर्टफोलियो मैनेजर, दिख जाएगा आपको। हाँ, इसको कर लो सिलेक्ट, ठीक है। गाइज, you have done. Okay, now you will see that your floppy is active. So if you see this floppy active, it means some data is to be saved. So you click on the floppy button for 2 times. 2 times, 1 2। क्यों 2 बारी? क्यों? ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई बारी क्या होता है, ये बटन छोटे छोटे होते हैं, कई बारी साइड में क्लिक हो जाता है, इधर उधर क्लिक हो जाता है, तो कई बारी जो है वो पता नहीं चलता। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि 2 बारी क्लिक करो, ठीक है, तो ताकि जो है क्लिक जो है 100% हो जाए। फिर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा यही डेटा। अब ये जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो आपने जो क्रिएट किया है, ये नया पोर्टफोलियो है। अब इस पोर्टफोलियो में हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने आज यहीं तक ही करना है। तो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर आप एक काम करो, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये सिलेक्टेड रख के देखो, यहाँ पे एक प्लस का ये बटन है, तो आप इसको सिलेक्टेड रख के अगर प्लस का बटन क्रिएट करोगे तो प्रोजेक्ट इसी के अंदर बन जाएगा, नया प्रोजेक्ट। तो ये देखो, इसने लिखा हुआ है सिलेक्ट EPS, तो आपने तो ऑलरेडी सिलेक्ट किया ही हुआ है ना। EPS है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो आप करो नेक्स्ट, करो इसमें नेक्स्ट। अब नए प्रोजेक्ट का ना नाम, मैं यहाँ पे जो कोड है मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप सबने बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम डालना है, कोई भी फर्क नहीं करना है। ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है कैपिटल में LSN-1, हाइफन डालना, कोई और कैरेक्टर नहीं डालना, यही डालना। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ये सीरीज क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे एक्सेल में होती है ना, जैसे नंबर 1 को ड्रैग करते हैं तो 2 3 4 अपने आप टाइप हो जाता है, वैसे ये भी बाद में हमारे काम आएगा। इसलिए इसी तरीके से आपने सीरीज क्रिएट करना है LSN-1। और इसका नाम भी मैं लिख रहा हूँ खुद, इसका नाम होगा शेड्यूलिंग विद कैलेंडर्स, ठीक है। शेड्यूलिंग विद कैलेंडर्स, ये देख लो, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को ना सब जो है बड़ी सब माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी स्पेलिंग कैसी है, उसकी बोलचाल कैसी है। सही बात है। ठीक है। ये स्क्रीन एक बार दोबारा से कर दीजिए सर। हाँ, कौन सा वाला बताओ? ये स्क्रीन कहाँ से आई? न्यू हाँ, ये ना देखो, सबसे पहले तो आप लर्निंग डेवलपमेंट पे सिलेक्ट करो, कर्सर ले आओ,
उसके किया। बाद बिल्कुल देखो दाईं तरफ देखो, वो पैनल जो है ना, राइट पैनल में एक प्लस का बटन है बड़ा, हम्म। कर दिया क्लिक उस पर। यस सर। देखो ये इसमें एक तो ये डालो और एक ये। मेरे विंडो दूसरी आ रही है सर। नहीं, कैसे बात कर रहे हो यार, आप प्रोजेक्ट में हो ना यहाँ पे, अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हो ना, मुझे तो पहले ये चीज बताओ, विंडो दूसरी कहाँ से आ जाएगी? सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है ना आपके सिस्टम पे। हाँ हाँ। हाँ, तो बस फिर विंडो दूसरी आ ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। अरे अच्छा, एक बारी मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैं आऊंगा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन यूं नहीं आऊंगा। मैं आपको ये आदत डालूंगा कि हाउ टू करेक्ट योरसेल्फ। आप एक बारी फिर से मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करो। पहले आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे अपना कर्सर ले आओ और मेरे को कंफर्म करो यस बोल के। यस। अब यहीं से ही जो है आप इस पे चले जाओ, जो राइट पैनल पे जो प्लस का जो है ये बटन, इस पे क्लिक कर दो आप। यस सर। अब आएगी नहीं न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये बॉक्स आएगी नहीं? सिलेक्ट ईपीएस करके आ रहा है सर। हाँ, सिलेक्ट ईपीएस जो है ना ये आएगा ना, सिलेक्ट ईपीएस। अब आप हाँ करो ना नेक्स्ट, करो नेक्स्ट करो आप। ठीक है, अब आया। हाँ, तो अब आप इसमें जैसा यहाँ पे ये डाल रखा है ना, ये डाल दो, देख के देख लो। हम्म। ठीक है, इसमें बिल्डिंग विथ बिल्कुल कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम टू सेम डालना है, फर्क नहीं करना है प्लीज। ठीक है, आप जब प्रोफिशिएंट हो जाओगे मेरे हिसाब से, जब मैं एक बारी में सिखा दूंगा, फिर आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो बटन्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एक बारी मैं जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे एक बारी ग्रिप में ले लो इसे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अच्छा अब आप करो नेक्स्ट। आपने आईडी और नाम डाल दिया, नेक्स्ट। अब आप जो है डेट सिलेक्ट करो, डेट सिलेक्टर का ये जो बटन है। अब आप स्क्रॉल करते हुए जाओ 2023 में। 2023 में, क्यों हम लोग हमेशा एडवांस में ही प्लानिंग करते हैं। 2023 के मई में जाओ। हम्म। सब मुझे कंफर्म करो 2023 के मई में हो ना? यस। मैं दो बातें यहाँ पे सेंसिटाइज कर कि प्रोजेक्ट जितनी जल्दी आपको जो है गंध मिल जाए, समझ आएगी नहीं, मेरे नाम पे प्रोजेक्ट आने वाला है, उतनी जल्दी जो है प्लानिंग का काम जो है स्टार्ट कर दो। क्योंकि प्लानिंग जो है रातों रात नहीं हो सकती। प्लानिंग करने के बाद इस प्लान को आप कई लोगों को दिखाओगे, उनसे कंफर्मेशन लोगे कि ये भी मैंने आपका नाम डाला, आपका नाम डाला, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। और फिर रिसोर्स मैनेजर से जाके रिसोर्स की मोबिलाइजेशन लोगे। साइट पे इक्विपमेंट और मटेरियल पहुंचाने के लिए भी आपको प्रोक्योरमेंट से बात करनी पड़ेगी, है ना? तो प्रोजेक्ट जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी प्रोजेक्ट की खामियों का जो है पता चल जाएगा, कंस्ट्रेंट्स का वो पता चल जाएगा, लोगों की टिप्पणियां मिल जाएगी, और पॉलिटिकल जो भी एनवायरनमेंट है उसमें सब हलचल हो जाएगी। जब सारी चीजें जब धूल बैठ जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट जो प्लान आपका जो बचेगा उसको आप बेसलाइन कर देना। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। रातों रात करके अगर आप साइड पे जाओगे तो 10 लोग जब वो खड़े हो जाएं कहेंगे हमारे से तो आपने ये सलाह की नहीं, तो आप ये चीज आप ये कर कैसे रहे हो? इसलिए बेहतर ये है कि कंपनी में आप जितनी जल्दी प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट करो उतना बढ़िया है। तो 1 मई सिलेक्ट करो। मैंने 1 मई इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। अब दूसरा रीजन ये है कि ये महीना बड़ा यूनिक है, ध्यान से देखना। इसमें इसकी डेट की नंबरिंग मंडे से स्टार्ट हो रही है, दिख गया आपको? ठीक है। में शेड्यूलिंग समझाना, कैलेंडर समझाना इस टाइप के महीने में बड़ा आसान रहता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो स्क्रॉलर का जो अप बटन है ना, इस पे क्लिक करके 9 AM करना है। इसको स्क्रॉल करते जाओगे जब तक 9 AM नहीं आएगा। जब 9 AM आएगा तो सिलेक्ट कर दोगे। तो अब मेरे को सारे ये कंफर्म करो कि आपके पास जो है प्रोजेक्ट की प्लान स्टार्ट डेट 1 मई 9 AM है। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब सब जो है नेक्स्ट। अच्छा, एक और मैं एडवाइस मैं दे देता हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस। कभी भी यहाँ पे मस्ट फिनिश बाय डेट मत डालना। क्यों? अगर आप जो है मस्ट फिनिश बाय डेट डाल दे तो आपकी क्रिटिकल पाथ को ये टेढ़ा कर देगा, और कभी भी क्रिटिकल पाथ जो है सही ढंग से कैलकुलेट नहीं होगी। आप इस ऑप्शन को यूज मत करो। इस ऑप्शन को जो है कम से कम 5 साल बाद यूज करना, जब इसकी पूरी समझ आएगी। अभी इसको बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग कहेंगे मस्ट फिनिश बाय डेट डालो, नहीं।
मस्ट फिनिश बाय डेट को अपने माइंड में रखो या लिख लो एक पर्ची के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मत डालो। ठीक है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि शेड्यूल कंप्रेशन के द्वारा कैसे आप जो है क्लाइंट के जो है दिए हुए कंस्टेंट डेट पे आप प्रोजेक्ट को पहुंचा सकते हो। इसमें यहाँ पे मत डालना कभी भी कुछ, क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशन को खराब कर देता है, फिर आपको नहीं समझ में आएगी कि भाई कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फ्लोट नेगेटिव दिखा देगा सर ये सारे। हाँ, सब कुछ ही क्रिटिकल कर देगा। मान लो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश हो रहा है 100 दिन में, अगर मान लो इसको ऐसी डेट पे डाल दिया जिसपे कि लिखा हुआ है 120 दिन, ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को खींच के ना बिल्कुल ये लंबा कर देगा, वो भी गलत है और नेचुरल कैलकुलेशन नहीं होने देगा। अच्छा, मान लो कि आपके प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ है 100 दिन, ये ले आएगा 80 डेज में, ये पूरे में जो है वो नेगेटिव फ्लोट डाल देगा पूरे प्रोजेक्ट में। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए आप इसको मत यूज करो, ये नहीं समझ में आएगी अभी, अभी इसकी तरफ ध्यान मत दो। अभी क्लिक करो नेक्स्ट। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर इसने अपने आप ही उठा लिया, बिल्कुल सही। इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू हैव दिस रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट। Standard rate type we are going to use here throughout the learning, and click on the next, and congratulations. So click on the finish. So What about the rate type, sir? standard rate type, Standard rate. Okay. standard use करेंगे हम इसमें, तो धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा। तो guys, you have this project which is created here. Yes, sir. ठीक है, now you open this project by right clicking and click on the open. So you will see a blank project. Now you switch off the Gantt chart side, you will be seeing only the column. Now it will initially give you a set of the columns. So some of the columns you don't need. I don't need this column because remaining duration, schedule, percentage complete is not useful during the planning phase. We are still in the planning phase of the project. We need this column when we enter the execution phase. क्योंकि उस वक्त मुझे ये देखना जरूरी हो जाता है कि मेरे किस एक्टिविटी में कितना टाइम बचा है और वो एक्टिविटी और प्रोजेक्ट कितनी कंप्लीट हुई है। अभी तो मैं प्लानिंग ही कर रहा हूँ ना, प्लानिंग की मैंने शुरुआत करी है। इस वक्त मैं शेड्यूल, परसेंटेज, ये सब देख के मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो साजी, यू आर हियर? Yes, I am here. Okay, glad to have you here. So are you here same to same on the same screen you are? Yeah, almost, yes. Okay, very good. Now, guys, we are going to configure the columns here. So please right click here. अच्छा, अब इसमें when you click on the columns, you will get the column configuration tool. So when you open the column configuration tool, guys, let me tell you, this tool is there in every tab, but the set of the columns that you see here is different from the projects. The set of the columns in the WBS will be different. Set of the column in the resources will be suitable for the resource type data. Set of the column in the reports will be different. Okay, guys, is this clear? The mechanism in this is the same, but these columns are different from the project columns, right? So once again, we will increase the size of the font here. So please click on this triangle and increase the size of the display font, table font and row, and choose the size Vardhana 9. Okay, so that we can see the list of the columns clearly. Vardhana 9, you will select and click on the OK. And click on the OK. So after this, you will see this. Now, we want to return this column, that is the remaining duration. So guys, you please select the remaining duration and click on this button to send it. So guys, do you see where is the home? Group. Yes. Duration. All column will go to their own home. Just see, if you want it again, you can come to the duration group and select it. Okay. Now you now you send it back home and see that where it goes. कहाँ पे गया? नो, परसेंटेज कंप्लीट में गया, क्योंकि शेड्यूल पर्सन कंप्लीट का घर कौन सा है, ये कौन से घर में रहता है, परसेंटेज कंप्लीट, वहां जाएगा, हर कॉलम अपने अपने वो घर में जाएगा. So next time you need this column, so what you can do, come to the percentage complete, then you can select the column, right? Okay, now you collapse the group. Click here on the minus sign, it will collapse.
Okay, now I'm thinking to include a column called the which is called the calendar. Okay, but I don't know where is this column. So there is an option here. If you don't know the column home, but if you know the column spelling, you can find it. So click on this triangle. And do you see the find button here? Click on this. And you type the partial word calen. Don't try to type the whole word. You can make a mistake. Calen, C-A-L-E-N. E-N. Yeah. Now click on the find next. So you have found it. So now click on the cancel. Just wait. You have to click the cancel. Now you select this calendar column to the right side. Now there is one more column I need, that is called the predecessor details. But I don't know. Fine. P-R-E-D. P-R-E-D. Click on the find. Okay, so you have found it. So you click, first you close this. No, first you click on the cancel. Then click on the selection. Selection pe karo click. Okay. So guys, please look at the screen and you will be having this set of the columns. ठीक है? तो सैयद एक बारी अपने फ्रेंड्स को पढ़ के बताओ क्या क्या है आपकी स्क्रीन पे. माइक ऑन कर लो अपना. माइक बंद है आपका. Activity ID, second activity name, third organizational duration, original duration, start, finish, calendar, procedure detail, total float. ठीक है. So guys, everybody has selected the same set of the column in the same sequence. Yes. Now click on the OK. Click on the OK. So after you have clicked on the OK, you will see the columns here on the screen, right? So after the columns have been selected, so now you go to the right side, there is an add button. So this add button will add activities. So you click on this button 16 times. 16 times. 16. 16 एक्टिविटीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल तरीका है. ठीक है, तो एक्टिविटीज जो है क्रिएट हो जाएगी. अच्छा, अब क्या है कि अब ये जो स्क्रीन है ना, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है. देखो यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें जगह थोड़ी सी गैंट चार्ट के लिए भी चाहिए. ठीक है, अब ओरिजिनल ड्यूरेशन को थोड़ा सी, अब देखो स्टार्ट का जो कॉलम है इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा, इसको ये डबल टैप करो कोने से, ये फैल जाएगा. अब कॉर्पोरेट में जो कैलेंडर का जो नाम है वो कट रहा है, इसको थोड़ा सा खोल दो ऐसे. देखो इसकी स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे डेमो स्क्रीन पे, और अपनी स्क्रीन जो है सेट कर लो उसके हिसाब से जैसा यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, नाउ गाइस वी वांट द गैंट चार्ट आल्सो. तो गैंट चार्ट को लाने के लिए ये वाला बटन क्लिक कर दो आप. ठीक है. अब क्या होगा कि गैंट चार्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से. इसने कुछ किया है लेकिन अभी मैं समझाता हूँ आपको. मान लो आपकी स्क्रीन पे ना गैंट चार्ट नहीं है. ठीक है, अब गैंट चार्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बिल्कुल ठीक एक्टिविटी के सामने, जैसे मान लो यहाँ पे है मेरा एरो, इसके बिल्कुल एरो की टिप पे क्लिक करो. यहाँ पे ये डबल क्लिक, खटखट. आपने देखा ये क्या करेगा, ये एक्टिविटी आईडी को कहीं से भी ढूंढ के ले आएगा, चाहे लेफ्ट साइड में होगा चाहे वो राइट साइड में होगा. अच्छा, अब ये जो रेड लाइन है, कैसे क्या बताया? देखो मैंने क्या 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 बताया. देखो अभी देखो क्या हुआ, एक्टिविटी टाइमलाइन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अब मैंने ये बताया कि ये एरो की टिप में बिल्कुल एक्टिविटी के सामने डबल क्लिक करो. करो एक बारी, सेहत करो जरा, डबल क्लिक दिखाओ. यस, दिख गया. यस. अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ ये जो डबल क्लिक है थोड़ा यहाँ पे करो, इधर बाईं तरफ को. दिख गया आपको क्या हुआ? अब मैं कह रहा हूँ ये जो डबल क्लिक जो है थोड़ा राइट साइड में करो जहां पे मैंने एरो का टिप लगाया है. तो ये क्या करता है, प्राइमावेरा करता क्या है?
आप जहां पर भी एक्टिविटी के सामने डबल क्लिक करते हैं, गैंट चार्ट को वो वहीं पे लाके प्लेस करता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गैंट चार्ट है, सबसे पहले तो ये जो रेड लाइन है ना, इस रेड लाइन को बंद करने का बटन ही है। ये अभी नहीं चाहिए, ये ट्रैकिंग के वक्त चाहिए, हम तब ऑन कर लेंगे। इसको बंद करो पहले, ये वाला बटन प्रेस करो, इसको बंद कर दो। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ। आप ध्यान से देखना, ये जो टाइम स्केल है इसमें 2 लेयर है। ध्यान से देखना, दिख गया? ये है आपका लेयर 1 और ये है आपका लेयर 2। तो लेयर 1 में इस वक्त क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, लेयर 1 में क्या आ रहा है? क्वार्टर। क्वार्टर। और क्वार्टर, क्वार्टर। और क्वार्टर से छोटी क्या चीज होती है? मंथ, मंथ। है ना? तो ये क्या कर रहा है कि क्वार्टर के नीचे ये मंथ डाल रहा है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, ये आप देखोगे एक हाथ आ रहा है, दिख गया आपको एक हाथ? यस। ये हाथ जो है ना, इसको ये पकड़ने के लिए होता है। देखो, मैं क्वार्टर पे या कहीं पर भी ऐसे हाथ लेके मैं ना इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ। देखो, ऐसे ऐसे मैं स्लाइड में कर सकता हूँ। अब आप लोग एक 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 काम करो, ये जो फर्स्ट वाली लेयर को पकड़ के लेफ्ट राइट करो, 10 बारी लेफ्ट और 10 बारी राइट करो। इसे लेफ्ट राइट करो। ये बिल्कुल यूं लगना चाहिए जैसे पिछले 2 साल से करते आ रहे हो। ट्रेनिंग के बाद ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग की है। ये क्वार्टर कैसे आएगा, एक बार बता दीजिए। देखो, अभी मैं बताऊंगा, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो आप करो। क्वार्टर भी अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप इसको लेफ्ट राइट इसको वो करो। इसको माउस से पकड़ के छोड़ना नहीं है, इससे पकड़े ही रहना है। पकड़े पकड़े ही लेफ्ट राइट करना है इसे। आपको एक फीलिंग मिलनी चाहिए कि हाँ, मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं इसको जैसे चाह रहा हूँ मैं स्लाइड में कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझे कि नहीं? है ना? और ऐसा होना चाहिए कि आपको 3 दिन के बाद ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आपने 3 दिन की ट्रेनिंग की है। आपको ये लगना चाहिए कि मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ मैं प्राइमावेरा को, कोई नया नहीं हूँ। क्योंकि कंपनी को फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए। कंपनी कभी, कोई भी कंपनी यूं यूं नहीं कहेगी। जैसे कोई एयरलाइन यूं नहीं कहेगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम पायलट हो, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, हमारी एयरलाइन ज्वाइन करो, 2-4 हवाई जहाज क्रैश कर दो, उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, फिर तुम उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट कर दीजिए। तो बात आ रही समझ में? नहीं तो Yes, sir. कोई 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 भी कंपनी जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, वो आपसे कहेगी ऐसे, आप ऐसा करो, हमारी कंपनी में आओ और हमारी कंपनी में हम तुम्हें तनख्वाह देंगे हर महीने, और तुम बैठ के ना प्राइमावेरा पे प्रैक्टिस करो और सारे प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी कर लो। उसके बाद जो है हम तुम्हें जो है गले में मेडल देके और तुम्हें कंपनी में अपॉइंटमेंट दे देंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? Yes, sir. हाँ, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? नहीं सर। कोई भी कंपनी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं देती। हर कंपनी कहती है कि भाई हमें तो सीखा हुआ आदमी चाहते। सिखाने की जहमत कोई कंपनी नहीं उठाएगी, इसलिए आपने खुद सीखना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इंडस्ट्री में जाना है ऐसे कि जैसे आप जो है काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो टाइम स्केल है ये 2 बटन से कंट्रोल होता है। अब ध्यान देना, ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 लेंस बने हैं, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस पे क्लिक करो। अब देखो, अब क्या आ रहा है? रुक जाओ, पहले देखो इसे क्या आ रहा है। आ गया, क्या आ रहा है अब इसमें, देख के बताओ। क्वार्टर आ गया सर, कोई बोले। नहीं सही है, आप बताओ आपकी Zoom, स्क्रीन में क्या है। देखो zoom इसमें in, sir. डेमो स्क्रीन में देखो, ऊपर सर वाले ये लेयर मंथ आ गया था, मंथ। और नीचे वाले लेयर में क्या है? नीचे सर डेज। डेज नहीं है, ध्यान से देखो। 7-7 दिन का गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेज नहीं बोलते, डेज में Week. ये वीक है हाँ सारे। सर, वीक का है सर। हाँ, अब फिर से प्लस पे क्लिक करो। अच्छा, अब क्या आ रहा है? पहली लेयर में क्या है? मंथ। मंथ है और नीचे में जो है फिर वही गलती दूसरी कर रहे हो, लेयर में। ध्यान से देखो। ऊपर जो है ये वीक है। हाँ वीक है सर, यस यस, वीक है। वीक यस, 7 दिन का दिया था। नीचे है डेज। नीचे डेज। डेज। ठीक है, तो स्केल का सबसे बड़ा जो फैलाव है वो यही है। आप समझो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पहुंच गए हो आप। समझे कि नहीं? अब देखो, अब इस पे जो है माइनस पे क्लिक करो। अब आप इस पे एक बारी क्लिक करो माइनस पे, और अब बताओ कि क्या आ रहा है? कुछ नहीं, ये वहीं पे ही है, अभी भी ये वीक और डेज पे ही है। एक बारी फिर से क्लिक करो।
अब बताओ ये क्या आ रहा है? मंथ्स में आ गया। months. अच्छा, फिर से माइनस पे क्लिक Months करो, only. स्केल को जो है श्रिंक करो। अब बताओ क्या आ रहा है? A quarter हाँ, or month. ऊपर जो है मंथ था ना, उसको श्रिंक कर दिया। तो मंथ को श्रिंक करा तो बन गया क्वार्टर, और जहां पे वीक था वहां पे बन गया मंथ। अब इसको फिर से करो माइनस। अब बताओ क्या आ रहा है? ईयर और मंथ। अच्छा, ईयर Year or और month. मंथ। हाँ, अब देखो स्केल जो है और श्रिंक हो गई। एक बारी और जूम आउट करो और क्लिक करो माइनस। अब बताओ क्या आ रहा है? ईयर और Year or क्वार्टर। quarter. क्वार्टर में तोड़ दिया। क्वार्टर अच्छा, ईयर। अब फिर से माइनस क्लिक करो, देखो ईयर का क्या बनता है। अब नहीं हो रहा सर। मेरे को एक चीज नहीं हो रहा। बताओ, ईयर को श्रिंक करके मल्टी ईयर का होता है कुछ, आपने सुना है कभी? 3-4 नहीं। साल का वो कैलेंडर? नहीं, नहीं सर। नहीं। एक साल में एक ही कैलेंडर होता है ना। तो इसलिए वो ये बोल रहा है कि ये जो टाइम स्केल है, तो इसके अंदर जो अगर बहुत बड़ा कोई होगा स्केल का टाइम काम होगा। अब ये जो स्केल है कहाँ यूज होगा? ये होगा प्रोजेक्ट लेवल पे यूज, एक्टिविटी पे तो यूज नहीं हो सकता ना। आपने सुना कोई एक्टिविटी होती है जो 3 साल चल रही है? एक्टिविटी 3 साल नहीं चलती, प्रोजेक्ट 3 साल चलते हैं। बात आ रही है समझ में? हाँ, इसमें आप इसमें छोटा आप कर सकते हो, वो तो मैं प्रैक्टिस में अब करवा रहा हूँ इसलिए। अब मान लो कोई एक्टिविटी है, मान लो 6 दिन की एक्टिविटी है, तो मेरे को एक चीज बताओ, डेज देखने के लिए नीचे वाले स्केल में क्या आना चाहिए? नीचे वाले स्केल पे डेज आना चाहिए। अब ये ना इतनी छोटी सी एक्टिविटी है, नन्ही सी जान है, और इतना बड़ा स्केल लगा दिया तुमने इसके ऊपर। जुल्म है ना ये, है ना? तो 6 दिन की अगर एक्टिविटी है, तो यहाँ पे स्केल भी जो है वो दिन वाला लाओ। तो अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें? जूम करना पड़ेगा। इसे करो जूम, और जूम करो, और जूम करो, और जूम करो, है ना? अब क्या हुआ कि जूम करते करते ये गायब हो गई। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने क्या करना है कि जिस एक्टिविटी को ट्रेस करना है, उस एक्टिविटी के ठीक सामने ला के ये डबल क्लिक मार दो यहाँ पे गैंट चार्ट में। ये हो गई, ट्रेस होगी, बिल्कुल आ गई ना सामने। अच्छा, अगर फाइन ट्यूनिंग करनी है, तो फाइन ट्यूनिंग के लिए क्या है कि जैसे गाड़ी को जैसे पार्किंग नहीं करते, है नहीं, ऐसे लाके हल्के से यहाँ पे पार्किंग कर दी। देखो, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ये चली जाएगी। लेकिन अगर अच्छे से अगर ये पार्किंग करनी है, तो इसको लो और इसको यहाँ रख दो। दिख गई? एक्टिविटी के बिल्कुल पास आ गया गैंट चार्ट। ठीक है गाइस, सो इज दिस थिंग क्लियर? Yes. यस सर। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों लेयर की ये खासियत क्या है। ऊपर वाला लेयर तो पकड़ने के काम आता है, और नीचे वाला लेयर आता है फैलाने के काम में। मान लो आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा ना ठीक से ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप इसको ये बड़ा कर दो। देखो, नीचे वाले लेयर में होती है लेंस। मान लो मैं इसको इतना मैं ये बड़ा कर देता हूँ, क्या ये काम का है? डू यू थिंक इट इज राइट? एम आई यूजिंग द स्क्रीन ऑप्टिमली? सो इजंट इट ए वेस्टेज ऑफ स्पेस? ठीक है। मैं कहाँ तक इसको मैं ले जाऊंगा? जब मेरे को बिल्कुल ही ऐसा कर दूंगा छोटा कि आदमी को लगे कि वो अंधा सा ही हो गया। ऐसा ये ठीक है? अब आ रहा है पढ़ाई में? नो सर। अब इसको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए अब आपको। अब प्राइमावेरा के ऊपर माइक्रोस्कोप वो थोड़ी ना लगाओगे आप। अब आपने करना क्या, अपनी जरा बुद्धि को यूज करके यहाँ तक रखना है, ताकि वो पढ़ने में भी ठीक हो और आपका स्क्रीन भी ऑप्टिमली यूज हो। अब आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि सॉफ्टवेयर को कोई सेंस नहीं है, आपको सेंस है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे वो रोकेगा नहीं अपने हाथ को। अगर आप इसको कंसंट्रेट कर दोगे, बिल्कुल काला पड़ जाएगा। तो लेकिन आपको टेक्स्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको चौड़ा कर दोगे, तो आपको वो चौड़ा भी करना ही देगा। लेकिन आपको पता है कि स्क्रीन इतनी तो बड़ी नहीं होती है ना, तो आपने करना क्या है, उसको उस साइज पे रखना है जो आपको मैक्सिमम स्क्रीन का भी बेनिफिट मिले और पढ़ने का भी बेनिफिट सही मिले। तो ठीक है इस वक्त? देखो, ठीक है। तो आपका क्या है कि आपने क्या करना है कि ये जो स्क्रीन का जो ये डिवाइडर है, इसको भी थोड़ा सा इधर बैलेंस करना है। तो 50-50 यहाँ दे दिया, 50-50 बाई तरफ दाई तरफ, और नीचे भी थोड़ी सी वो जगह डिटेल के लिए अभी छोड़ दी। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका लेआउट। अब आपने करना क्या है कि इस लेआउट को सेव करना है। तो लेआउट को सेव करने का बटन कौन सा है? ये वाला बटन है। देखो, इस पे करो सेव लेआउट एज। हाँ,
अब इसके अंदर लिखो नाम, बिल्कुल ये मिटा के लिखो, एक्टिविटीज लेआउट बाय सयाद। आपने सबने अपना अपना नाम डालना है, एक्टिविटीज लेआउट बाय, अपना नाम डालो फिर आगे। हाँ ठीक है बिल्कुल, और इसको करो सेव, सेव कर दो इसे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये लेआउट का नाम आ रहा है, यहाँ पे दिख गया आपको। Yes. और Yes, sir. ये आपकी लेआउट है। आपने देखो अपनी लेआउट से ज्यादातर काम करोगे तो ये बढ़िया रहेगा, तो कंफर्टेबल भी रहेगा। और वैसे तो लेआउट जो है वर्किंग डे मींस the planned the working day that which has been structured by the company. So according to their structure, this is the standard the working day. Now let's see that how you can make the working and the non-work day in the interface. Now in the interface, if you click on the work week, so click here in the work week. So if you click on the work week, you can clearly see this thing. Do you see this thing here? Now let me explain this to you. If you look at this one carefully, you know it is mapped like this. I will draw it with the red color. See, do you see the mapping here? See, if you put Saturday and Sunday as 0, so the Saturday and Sunday becomes non-work day. So that is why the Saturday and Sunday is the non-work day. And if you are putting something greater than 0, it will become a work day. So normally the work days are 8 man hours. So in this, if you put 8 man hours into the Monday to Friday, so Monday to Friday will become the working day, and Saturday and Sunday will become the non-work day. So that's how it is being represented in the calendar. Do you see that, guys? Yes. Okay. So, you know, this is the way you can create a structure in the calendar. You can tell Primavera which days of the week you will consider as the working and which days of the week you will consider as non-work. Now click on the cancel button. We will examine this further. Now we would like to know that what is the structure of the day, because in a day, if you click on a day, now it says 8 hours. Do you see this? And if you click on a non-work day, it will say 0. Do you see that, guys? It says 0. Yes. अब ये जो 8 घंटे है, इस 8 घंटे को किस प्रकार से उन्होंने स्टार्ट किया है? क्या इसमें ब्रेक टाइम है, कोई लंच टाइम दिया है? 8 घंटे को कहाँ से स्टार्ट किया है? 8 घंटे को स्टार्ट करने के लिए कोई 8 बजे भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यूएस और मिडिल ईस्ट में 8 बजे स्टार्ट होने का वर्क कल्चर है। इंडिया में जो है 9 बजे का है। कुछ कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में, वो 11 बजे स्टार्ट करते हैं दिन में। मतलब वहां पे दुकानें ही 11 बजे खुलती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना लोग लेट नाइट काम करते हैं कंपनी में, और वैसे भी लोग लेट नाइट काम करते हैं। जैसे अगर आप जो है थोड़ा साउथ ईस्ट, ये फिलीपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां पे आप जाओगे, आप देखोगे वहां पे लेट नाइट तक चहल पहल होती है। तो उनके वहां पे जो कंपनीज और बिजनेसेस जो है वो 11 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उनका वर्क कल्चर ये होता है कि वो ना दोपहर में, ये जो जापान तक, ये जो साउथ एशिया मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया से लेके यहाँ से लेके, इनफैक्ट बल्कि इसमें जो वेस्ट बंगाल इंडिया का स्टेट भी आ जाता है, ये लोग जो है दोपहर में खाना खाने के बाद सोते हैं, दे स्लीप। तो उनका जो कैलेंडर उसी हिसाब से ये बना हुआ है, ठीक है। जापान तक, ये वेस्ट बंगाल से लेके आगे जितना भी वर्ल्ड का मैप है उसमें देख लेना, ये सारी कंट्रीज जो है, मतलब वेस्ट बंगाल इज नॉट ए कंट्री, वो तो स्टेट है, लेकिन वहां से कल्चर ये स्टार्ट हो रहा है। तो दोपहर को ये लोग खाना खा के दे जस्ट गो टू स्लीप। लेकिन उसकी एक जो है ये वजह भी है, बिकॉज इन दिस रीजन दे कंज्यूम लॉट ऑफ राइस, एंड राइस व्हेन इट गोज इनटू योर स्टोमक, इट इज फर्मेंटेड एंड इट क्रिएट्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल एंड इट कंपल्स यू टू स्लीप। आदमी जाग नहीं सकता चावल खाने के बाद, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू देम। नाउ देयर वर्क कल्चर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 11 AM. Okay. Achha, now let us examine that what is the breakup of the 8 AM. Now the breakup of the 8 AM can be observed if you click on the radio button. Do you see that what is written here? पढ़ो इसे पहले। Detailed work hours. हाँ, detailed work hours. That what is the detail of the 8-hour breakup? 8 घंटे का ब्रेकअप डिटेल क्या है? अब इस पे क्लिक करो, इसमें ये रेडियो बटन पे क्लिक करो, क्लिक दिस। नाउ यू क्लिक ऑन द वर्क वीक, देखो इस पे क्लिक करो। अब इस पे क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, ये आपको ब्रेकअप दे रहा है कि 8 घंटे को इन्होंने किस तरीके से ब्रेकअप किया हुआ है। अब इसमें ना तुम ध्यान से देखो कि इसमें ना ये टाइम के ना स्लैब दिए हुए, इसमें 24 आवर का स्लैब दिया हुआ है।
तो गाइस आपने कभी नोट किया है कि डिजिटल क्लॉक में रात के 12 बजे कितना आता है डिस्प्ले में? 12 बजे कितना दिखता है उसमें? 11:59 के बाद, 11:59 और 59 सेकंड के बाद आता है 00, जीरो। है ना? तो हम कहते हैं कि दिस इज द 0 आवर, ठीक है। अब 0 के बाद जब 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तब क्या होता है? तब आता है 1 AM। आपने देखा यहाँ पे ये 1 AM है, तो 60 मिनट पहले ये कंप्लीट होते हैं। जब 60 मिनट जब कंप्लीट होता है तब रात का या फिर सुबह का जो है 1 बजता है, आप जो चाहे बोलना चाहो, ठीक है। अच्छा, अब ये बजा 1 के बाद बजा 2 AM। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे काम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है इस वाली कंपनी में? जो व्हाइट वाला पोर्शन कौन सा है? दिस इज द वर्क। ये 8 बजे काम स्टार्ट हो रहा है और खत्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मैं लिख के मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे है आपका 4 PM। आप देख लो इस पे कैलकुलेट करके, प्लीज ऑब्जर्व इट। राइट गाइज, इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दैट व्हाई आई हैव रिटन 4 PM देयर? Yes, sir. See, 15. What is 15? 15 is 3 PM. If you complete 1 hour after the 3 PM, it becomes 4 PM. So, when the clock strikes 4 PM, the company stops working. It is not working inside the 4 PM because this is the just touching the 4 PM, right? But the 4 PM is actually the 16. But in the 16, inside the 4 PM, the people are not going to work. They are going to stop the work just as the clock touches the 4 PM. So, if you look at this carefully, so they are working continuously. Do you see any break time here? Guys, do you see any break time here between 8 AM to the 4 PM? There is no break time. So now I'm clicking on the Tuesday. Do you see the Tuesday any different? No. So the working days will be having the same structure and there is no break time here. Now maybe the CEO of the company says कि भाई जल्दी आओ, जल्दी जाओ, ठीक है, बीच में खाना भी मत खाओ। क्यों करोगे काम ऐसी कंपनी में? हाँ भी सही याद? नहीं। देखो वेडनेसडे का स्ट्रक्चर देखो, फ्राइडे का स्ट्रक्चर देखो। करेंगे तो नहीं, लेकिन सिविल में ऐसे ही होता है। हाँ, वो एक अलग बात है, कोई जुल्म कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन जो कायदा तो वो ये है ना, जुल्म करने को तो आदमी कोई भी कानून तोड़ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब सैटरडे को देखो, सैटरडे इज नॉन वर्किंग, वो तो समझ में आ रही है, छुट्टी है। वो कह रहा है कि मैं 2 दिन छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन मंडे से लेके फ्राइडे तक ये बिल्कुल ये दबा के काम करना है, ठीक है। और बीच में जो है कोई बिल्कुल खाना वाना नहीं खाएगा, काम करो और घर जाओ 4 बजे। अब मेरे को एक बात बताओ सारे, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, वुड यू लाइक टू वर्क इन सच काइंड ऑफ ए शेड्यूल कंपनी? No. So now let us do this thing. We will create our own schedule and we will create our own calendar and implement it. Sir, I cannot see the day of the week, Monday, Tuesday. The calendar is only seen. Why? The calendar is? I cannot see this Monday, Tuesday, Wednesday, that column. I can see the work hours and the sideways, the calendar is seen. So you have to, first of all, you click here. Click this. You have to first click this detailed. Okay. After that, then you click on the work week button. Which one? Work week. Okay. Yeah. Observe on the demo screen. No, I think you are using a demo also. So look at that. Okay. After you click this, then you will come in the pop-up. You see, just on the screen, it is so simple. So when I click on the work week, it is showing calendar weekly hours, and it is showing another one, standard work hours 8. I don't know where you are. Can you please click according to the screen? Can you first please click here? Okay. Now it's okay. Fine. So Baba, observe it यार, इसलिए तो सबको 2 मॉनिटर लगवाए हैं मैंने, है ना? थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है। आंखें खोल के देखो, ये ना एक्चुअली पता क्या होता है, दीज आर वेरी फाइन थिंग्स। तो दिस इज इन द प्राइमावेरा। अब प्राइमावेरा में इतना फाइन कर रखा है, 1 2 3 4। अभी तक तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कुछ सालों बाद फिर मैं प्राइमावेरा वालों से कहूंगा कि यार प्राइमावेरा के साथ एक लेंस भी दो,
सॉफ्टवेयर के साथ फ्री में एकदम बड़ा सा लेंस। तो अब क्या होता है कि कई बार मैं लेंस लेके ही मैं बैठता हूँ, मैंने एक बड़ा सा लेंस लिया, जब भी प्राइमावेरा पे काम करता हूँ स्क्रीन पे लेंस लगा के देखता हूँ कोई इधर उधर गलत जगह पे क्लिक तो नहीं कर रहा, क्योंकि शेड्यूलिंग में अगर वो गलती हो गई तो क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट गया मेरा। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है प्राइमावेरा में। अगर आपको अगर ये नहीं दिख रहा तो आप एक लेंस खरीदे तो बड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा लेंस है मेरे पास। देख लो, कभी फिर ये मत बोलना कि मैंने प्राइमावेरा जो है वो समझा दी और मैंने नहीं बताया कि कौन सा लेंस यूज करना है। दिख गया ये? Yes. तो ये प्राइमावेरा के साथ यूज करना है आपने, ठीक है। कुछ लोग यार मजाक नहीं समझ में आती, समझ नहीं आ रहा किस टाइप में लोग हैं। प्राइमावेरा जो है टॉपिक जरूर सीरियस है, लेकिन अपना दिल जो है थोड़ा हल्का रखो, लाइट मूड पे रहो, ठीक है। जरूरत नहीं है लेंस की, ठीक है। आप जो है रोज टाइम से सो, टाइम से खाओ पियो, आपकी आंखें बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट में। मेन पॉइंट ये है कि हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया है। कुछ कुछ चीजें याद रखनी है आपने, इस पे ध्यान दो आप। ये जो सिंबल है ना, जो ये जो लेजेंड है नॉन वर्क, ये जो नॉन वर्क क्या है कि जिन दिनों में काम नहीं हो रहा। अब नॉन वर्क की जो है वो परिभाषा में क्या आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन वर्क क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो होता है आपका वीकेंड। दूसरा एक एक होता है कि एक होता है कि पैटर्न बेस्ड वीकेंड। तीसरी होती है आपकी Sir, I can see only black screen. हॉलीडेज। ठीक है गाइस, दिख गया आपको नॉन वर्क की क्या क्या है? सही है, तो पढ़ना जरा नॉन वर्क में क्या है। म्यूट है आपका माइक, एक बार माइक ऑन कर लो अगर नॉन वर्क में फर्स्ट वीकेंड। हाँ, अच्छा, एक तो होता है पैटर्न बेस्ड वीकेंड। और मैं लिख देता हूँ। वीकेंड है आपका रेगुलर वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर वाला वीकेंड है, जैसे आपकी कंपनी ने कहा कि भाई हमारा 6 डे वीक है, तो लेकिन संडे वाले दिन हर हफ्ते छुट्टी होगी, तो वो मैं कहूंगा वो मेरा रेगुलर वीकेंड है। लेकिन कंपनी ये भी बोल रही है साथ में कि महीने में एक सैटरडे आपको छुट्टी मिलेगी, तो वो भी वीकेंड है, लेकिन वो क्या है, वो पैटर्न बेस्ड है। उसका पैटर्न क्या है, मंथली। ठीक है। और और जो थर्ड क्या है, Holidays. हाँ हॉलीडेज। हाँ, ये आपको जो है किसी भी कंपनी में अगर आपको ये हॉलीडे मिलती है तो उसका संबंध उसकी कंट्री से होता है, ठीक है। तो उसकी कंट्री से होता है, उस कंट्री के हिसाब से जो है वो हॉलीडेज जो है कंपनी चूज करती है और वो डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। कुछ होती है जो आपकी जो हॉलीडेज है जो हर कंट्री में कंपलसरी होती है, कुछ होते हैं जो कंपनी अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपने कैलेंडर तैयार करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इसको हम जो है अबेंडन कर देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट एनी चेंजेस। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलेंडर, देन वी विल कम हियर टू क्रिएट दैट कैलेंडर, ठीक है गाइज। ओके, नाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द कैलेंडर लेट अस गो इनटू द नोट्स। आपके पास जो नोट्स वाली जो फाइल है ना, उसको आप जो खोलो, प्राइमावेरा नोट्स। सैयद प्लीज स्विच टू दी प्राइमावेरा नोट्स फाइल। देखो इसको ये मिनिमाइज करो, अपनी वर्ड फाइल खोल लो जरा। हाँ, ये वर्ड फाइल खोल लो, मेरे ख्याल से खुली थी, देख लो इसमें डॉक्यूमेंट्स में है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में। और डॉक्यूमेंट्स में ये जो नीचे देखो ये स्पेसिफिकेशन जो दिए ना, देखो ध्यान से देखो, ये एक मिनट हो जाओ जरा, ये जंप मार रही है स्क्रीन के ऊपर, इसको यहाँ ले आता हूँ स्टेबलाइज करके। सो गाइज प्लीज रीड दिस, ये आप देखो यहाँ पे, हाँ इसको यहीं पर रखो, फिक्स रखो। सो इसको ना पढ़ो, इसे पढ़ो। इसमें सबसे पहले क्या है कि कंपनी में कितने दिन काम होगा, 6 days. 6 डेज। और कौन से वाले 6 डेज में होगा,
मंडे Monday to Saturday. सैटरडे। और वर्किंग डे की डेफिनेशन क्या है? 8 man-hour per 8 man hours। तो working day. वर्किंग वीक की डेफिनेशन क्या है? 8 man-hour per तो working week. 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका हो गया जो वर्किंग मंथ की डेफिनेशन मैन आवर्स में हो गया 192। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब आप देखोगे अपने कैलकुलेटर में गाइस 192 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होता है? अरे इसको ना हिलाओ मत, ये तो अंधेरा कर दिया तुमने, क्या हो गया? हाँ, इसको यही रहने दो, इसको यही रहने दो। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज 192 मल्टी, अपने उसमें करो, मोबाइल में करो, यहाँ पे मत करो। मोबाइल में कैलकुलेट करो व्हाट इज 192 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्या होता है बताओ? 2304. 2304. आपका होता है 2304। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको 2400 क्यों लिया है, मैं समझाता हूँ आपको। 2400 हमने इसलिए लिया है क्योंकि ना देर आर सर्टेन मंथ्स विच आर हैविंग 31 डेज। एक साल में कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। अब उनमें 31 दिन होने की वजह से उनके जो वर्किंग जो सैटरडे जो पड़ता है उसको भी हमने काउंट करना है। तो इसलिए हमने जो है इसको 2400 मैन आवर्स पर ईयर लिया है। अच्छा, अब देखो कि 8 घंटे का ब्रेकअप क्या है, नीचे दिया हुआ ना शिफ्ट। Yes, first shift 9 a.m. to 1 p.m. हाँ, 4 hour, 4 man-hour. 4 मैन आवर। देखो मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है। जो वक्त आदमी काम करता है ना उसको हम कहते हैं मैन आवर, और जब आदमी काम नहीं करता ना हम उसको करते हैं जस्ट द आवर। देखा मैंने यहाँ पे एम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 1 to 2 PM मैन आवर नहीं है। बात ही समझ में कि मैन आवर को मैन आवर क्यों कहते हैं और ये आवर को सिर्फ जो है ना ये आवर क्यों बोलते हैं। सो गाइस, इज दिस पॉइंट फाइन पॉइंट क्लियर नाउ? Yes. अच्छा, अब सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ? Lunch time 1 p.m. to 2 p.m. हाँ, फिर उसके बाद जो 2 PM to 6 PM है। तो अब आप एक चीज मुझे ये बताओ ध्यान से इस तरफ ये देख के, अरे ये क्या हो रही है, ये हिल तो रहा है। अच्छा, इसको यही रखो स्टेबल। अरे ये क्या है? अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 9 to 6 में कितने हो गए टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना आता है? 10 घंटा। हाँ, 10 hours। 9 आवर्स। 9 to 6. स्कूल से भागने का जो है Yes, 9. ओके, ठीक है, फाइन। स्कूल में भाग लिया, अब यहाँ मत भागना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो 9 आवर्स जो आदमी जो कंपनी के अंदर है उसमें वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, वो मेहनत कितनी कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है 4 मैन आवर और 4 मैन आवर। एक आवर जिसको मैन आवर नहीं बोलते उसको जो है लंच टाइम का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो समझ आई बात? तो ये हमारी जो करंट कंपनी का वर्क कल्चर है, और कंपनी के बॉस बोल रहे हैं हॉलीडेज विल बी एज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, टाइम टू टाइम जो भी छुट्टियां होगी वो भी कैलेंडर में डाल दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी कैलेंडर को माइंड में रख के हम जो है अब हम तैयार करेंगे क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलेंडर प्राइमावेरा के अंदर, और फिर उस कैलेंडर से हम जो है अपने करंट प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग पे देखेंगे भी क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से वो उसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, इतना याद रहेगा मेरे ख्याल से सबको। अगर याद नहीं होगा तो यहाँ आ जाएंगे फिर से देखने के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन लिखना जो है अच्छा रहता है क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हम हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग पहले तैयार करते हैं, फिर हम उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है प्राइमावेरा में आओ। अब सबने जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज होके। देखो, सबसे पहले जो है आपने कहाँ क्लिक करना है, ये कैलेंडर टूल में, यहां से जो है ये कैलेंडर क्रिएट होगा। सो गाइज यू आर हियर? Yes. अच्छा, अब आपने ना ध्यान रखना है कि यू शुड बी इन द ग्लोबल, क्योंकि हम जो कैलेंडर क्रिएट करेंगे वो ग्लोबल होगा। ठीक है, सो गाइज एवरीबॉडी इज इन दी ग्लोबल। Yes. अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने ये करना है ऐड करो, क्लिक करो ऐड में। अच्छा अच्छा, ऐड पे क्लिक करने के बाद रुकना है, भी कहीं पे क्लिक नहीं करना, इसको पहले पढ़ो गाइस। यू फर्स्ट रीड दिस, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप। Display global select calendar to copy from. हाँ, अब वो प्राइमावेरा ये क्यों बोल रहा है सिलेक्ट ए कैलेंडर टू कॉपी फ्रॉम, ध्यान से सुनना। मान लो एक मैं आपको ना चिट्ठी लिखने को देता हूँ, 40 पेज की चिट्ठी है, और आपको ये पता चलता है कि आपके कॉलीग के पास उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, तो बिल्कुल वैसी चिट्ठी है, मिलती जुलती, तो अब आप क्या करोगे? बिल्कुल स्क्रैच से अपनी चिट्ठी लिखोगे या उसमें से पहले कॉपी लेके फिर कुछ बनाओगे? बताओ भाई नियाज। कॉपी नियाज, लेके ही बनाएंगे सर। हाँ कॉपी लेके हाँ, वही तो समझदारी वही है। कॉलेज में भी असाइनमेंट तरह ऐसे करते थे। हाँ बिल्कुल, ये हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कॉमन सेंस में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइमावेरा में भी वही बोल रहा है कि प्राइमावेरा ये बोल रहा है जो मिलता जुलता जो कैलेंडर है इसमें से छांट लो, उसकी वो कॉपी बनाओ। तो मेरे से जो मिलता जुलता जो कैलेंडर है वो है कॉर्पोरेट। तो मैं क्योंकि ये नहीं, मैंने आपको मैकेनिकली बोल दिया अब कॉर्पोरेट पे क्लिक करो, अब इस पे क्लिक करो, अब उस पे क्लिक करो, नहीं, हर स्टेप पे मैं समझाऊंगा, आपने बस समझना है। नहीं समझ में आएगा तो आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है 3 चीजों पे बेस्ड है, मैथ्स, साइंस और लॉजिक, ठीक है? तीनों यहाँ रहेंगे और चौथी चीज नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे करो प्लस, प्लस करो यहाँ पे सिलेक्ट। अब जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो इसने एक यहाँ पे एक उसकी कॉपी तैयार कर दी, अभी उसका नाम नहीं डाला। अब आप इसमें नाम डालो IST कैपिटल में लिखो, ठीक है? और एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, ये अपनी जगह पे आ गए, ये सॉर्ट हो गए, अपनी जगह पे पहुंच गया, ठीक है ना? तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये कैलेंडर बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो अब आपने क्या करना है, इसको डिफॉल्ट मार्क कर देना। अब डिफॉल्ट मार्क करने से क्या होगा कि अब इसके बाद अगर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसके ऊपर प्राइमावेरा IST कैलेंडर अप्लाई कर देगा, ठीक है? नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर IST कैलेंडर को ये चिपका देगा। अब हम करेंगे मॉडिफाई। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपको पता ही होगा, ये कॉर्पोरेट का है ना स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम मॉडिफाई करेंगे, हम टाइम पीरियड, अपना टाइम पीरियड हम डालेंगे, कॉर्पोरेट का टाइम पीरियड हम हटा देंगे। तो हमारी कंपनी में मैन आवर तो 8 है, वो तो 8 रहेगा। हमारी कंपनी में वीकली मैन आवर है 48 घंटे का। तो अवर वीक इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द 48 man hour, and the man hour per month is defined as 192, and we had decided that 2304 will be rounded off to 2400 man hours per year. So we expect a person to work approximately 2400 man hours per year. That is the work culture. So guys, is this clear to you? Before you are copying this from the screen, but please tell me, are you doing this with understanding or not? Yes. Yes, yes. Okay, now you click on the OK. Now we are going to tell the Primavera which days of the week and which days of the week are non-work. बताओ हमारे कौन-कौन से दिन वर्किंग है? Monday to Saturday. Correct. Now we are going to implement it. So guys, please click on the work week. अब देखो इसमें ऑलरेडी मंडे टू फ्राइडे तो है, आप सैटरडे में 8 घंटा डाल दो, ठीक है? So once you put 8 hours in the Saturday here, it will also become a working day, right? Okay, now then you click on the OK button here to implement it. Then you will see the implementation. Guys, do you see? Sir, how to put 8 hours in Saturday? Okay, how to put 8 hours here? Yeah. First you click on the work week. Work week. This pop-up will come, and in the Saturday you put 8 hours here. ठीक है? But here is not showing this pop-up. The top unit total hour. So you put here in this box. No, we haven't selected the radio button. That's why.
क्या सिलेक्ट कर लेते हो यार? दिखाओ क्या किया अपनी स्क्रीन पे, दिखाओ. Total work hours per day we need to select, no? So you show me your screen quickly. Yeah, I'll show you, sir. अरे कहाँ पहुंच गए तुम? देखो यहाँ पे कोई काम नहीं है अभी, आप इसको है, अभी हम यहीं पे हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करो, टाइम पीरियड में आओ, पहले टाइम पीरियड ठीक करो. टाइम पीरियड में आपने डाला, बिल्कुल ठीक है, आपका टाइम पीरियड ठीक है. अब आप इसको कैंसिल करके बाहर आ जाओ. अब वर्क वीक में आओ. अब देखो हर दिन लिखा हुआ है फ्राइडे तक 8 घंटा, तो सैटरडे भी हमारा वर्किंग डे रहेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 घंटा डाल देंगे. तो हम ये बोल रहे हैं प्राइमावेरा से हम ये बोल रहे हैं कि हम जो है सैटरडे तक 8 घंटे काम करेंगे रोज, ठीक है. अब ये हमने बोल दिया, तो हमारे वीक का स्ट्रक्चर क्या हो गया. अब इसमें पता क्या है कि ये जो आपने जो स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया ना, कि आपने जैसे ये मंडे में 8, सैटरडे तक 8 घंटे डाल दिए, ये परपिचुअल हो गया. परपिचुअल मतलब इसमें प्राइमावेरा में जहां तक इसमें कैलेंडर की रेंज है 100 साल, 200 साल, 300 साल के लिए सेट हो गया परमानेंटली, ठीक है, फॉर एवर. अब क्या है कि अब ये जो 8 घंटा है इसका ब्रेकअप भी तो होता है. 8 घंटा सिर्फ ये बताने से थोड़ी ना होता है. अब ये 8 घंटे को आप दिन में 8 घंटे की शुरुआत कितने बजे से करोगे? कुछ कंट्री में 8 बजे से होती है, और हमारे इंडिया में 9 से 10 के बीच में ही वो हो सकता है. कहीं पे 9 बजे से कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कुछ 9:30, कुछ 10 बजे तक काम करती है मॉर्निंग की शुरुआत. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 9 AM से स्टार्ट करें, वो हम इसको बताएंगे. तो गाइस प्लीज क्लिक ऑन द डिटेल्ड वर्क आवर पर डे. अब आप यहाँ आ जाओ, डिटेल्ड वर्क आवर पर डे, एंड आफ्टर दैट यू कम टू द work week button. Click on the work week. Now we want to tell the Primavera that what is our timing. Our timing is from 9 AM to 1 PM, and then from 2 then between 1 to 2 it is lunch, and then it will be 2 PM to 6. Now in the first step, when you are here, then you select the Monday to Saturday, 6 days you select here by pressing the shift and down arrow. Shift and down arrow like this. नहीं, शिफ्ट एंड डाउन से ना ये 6 दिन सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे एक्सेल में नहीं करते मल्टीपल रोज वैसे. ठीक है, कर लिया सबने? अब ये जो 6 दिन है ना, एक मुश्त, वी विल डू ए मास एप्लीकेशन ऑफ द शेड्यूल, डेली शेड्यूल, दैट व्हाट इज द ब्रेक. अब देखो, अब इसमें तो स्ट्रक्चर तो जो ये पुराने वाले ही है. नाउ गाइस इफ यू लुक केयरफुली, actually the 8 AM we are not working, so what you do, you select the 8 AM and you click on the non work. 8 AM इसमें 30 मिनट में बांट रखा है. एक बार ये देखो, आप देख लो पहले मैं क्या कर रहा हूँ. देखो ये मैं गया, मैं पहले स्लैब में नॉन वर्क कर दिया, दूसरे स्लैब में गया नॉन वर्क कर दिया. Guys, did you observe me doing it? Yes. Okay, now my non work is also 1 PM. So what is 1 PM? It is 13 hour, 13th hour. So अब नियाज एक काम करो, नॉन वर्क पे क्लिक करो. ठीक है, ये हो गया आपका 1:30 बजे तक. अब यहाँ पे क्लिक करो, दूसरा जो राइट साइड में वो 1:30 से 2 का टाइम है. तो 1 बजे का पूरा जो स्लैब है आपका, ये नॉन वर्क आपने कर दिया. तो आपने ये शो किया है कि 9 से लेके 1 बजे तक आदमी काम करेगा, 1 से 2 के बीच में ब्रेक टाइम रहेगा, फिर वो 4 घंटे और काम करेगा. तो ये है आपका 4 से 5 का स्लैब. इसमें भी करो. अब ये वर्क करो, वर्क. अब ये आपका वर्क है, ठीक है. इसमें कहाँ पे क्लिक हो गया. आप इस पे क्लिक करो, वर्क, वर्क करो, क्लिक करो, वर्क करो. हाँ ठीक है. अब वो अगले स्लैब में भी करो वर्क. अब ये आपका 5 बजे का टाइम है, 5 से 6 तक आदमी करेगा ना काम. यहाँ तक इसको भी करो ना, वर्क करो. जाओ नेक्स्ट रो में जाओ. हाँ देखो गाइस, ध्यान से देखना. आपको मैं लिख के मैं समझा देता हूँ बिल्कुल क्लियरली. ठीक है, देखो ये है आपका स्टार्ट.
ठीक है, अब वो तो 9 है, वो तो आपको समझ में ही आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ, ये है आपका 9 AM। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है आपका ये लंच टाइम। लंच टाइम कितने बजे हो रहा है? 1 बजे। हाँ, तो वो है आपका 1 PM। लंच लंच टाइम हो रहा है 13 बजे। या तो आप जो काउंटिंग से चलो 0 से लेके, तो ये आपका हो रहा है ये 13 बजे, ये आपका जो है ये लंच है, या तो 1 PM से 2 PM। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है कंपनी में, कंपनी का बिजनेस डे कितने बजे कंपनी बंद हो रही है? आपकी कंपनी ये 5 बंद बजे। हो रही है लास्ट में 6 बजे। ध्यान से देखो इसमें, पहले देख लो इसको ना, समझ लो ये सिंपल सा ही है, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका 5 से लेके 6 जो है उसके राइट साइड पे हो रहा है ना, खत्म। जी, यस। 5वां घंटा स्टार्ट हुआ 17 बजे, और कंप्लीट हुआ राइट साइड में जाके 1 घंटा। लेकिन 6 बजे को टच करते ही जो है काम बंद। मतलब हम 6 बजे के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब 5 के बाद जब जैसे ही 60 मिनट होंगे, 6 बजते ही सब काम बंद करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये क्या हुआ कि ये जो हमने जो भी स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, ये मंडे से लेके सैटरडे तक एप्लीकेबल होगा। और ये कब तक एप्लीकेबल होगा? जब तक इसमें प्राइमावेरा में, जहां तक इसमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में 400-500 साल का कैलेंडर इनबिल्ट है। तो ये मतलब आप ये समझो ये परपेचुअली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? यस। अच्छा, अब ये जो हमने जो सेटिंग वो कर दी है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब ओके का बटन क्लिक करेंगे और ये सेट हो जाएगा। अब इसको सेट करने के बाद हमने चेक करना है, इसको यही नहीं मानना। देखो, मैंने मंडे में रखा, राइट साइड पे ध्यान दो, ठीक है, मंडे का स्ट्रक्चर। गाइस प्लीज चेक, इज द मंडे लुक्स फाइन यस। as per our specification? Then you check ट्यूसडे। ट्यूसडे चेक करो, यहाँ यहाँ पे लो, हाँ देखो, ठीक है। यस। नाउ यू चेक दी वेडनेसडे, इज द वेडनेसडे फाइन? यस। Yes. Check the Thursday, Friday, Saturday, check the Sunday also. It is fine. So if you have checked one of the weekdays, it is perpetually correct, because you know this is being repeated over thousands of years in the calendar, which is inbuilt in the Primavera software. So which covers most of more than our lifetime. So we are okay with that, right? If the calendar goes for even the next 100 years, so we are fine with that. So we have to plan within our lifetime and complete the job. Okay, so the Primavera takes care of thousands of years. Now, once this has been implemented, so what we are going to do? We are going to say okay. So once we say okay, so guys, make sure that you click on the okay only. So this will save it. Okay, so this calendar has been created and saved in the enterprise, and it has been marked as the default calendar. So after that, we will close it. So we are done with the calendar. So everybody please confirm that you have created the Indian Standard Time calendar. कर लिया create? Guys? ठीक है। Yes. तो अब हम क्या करेंगे, इस कैलेंडर को प्रोजेक्ट लेवल पे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी जो कैलेंडर जो चल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, वो चल रहा है कॉर्पोरेट। नाउ गाइस प्लीज कम टू द प्रोजेक्ट टैब, आई विल बी बैक इन ए मोमेंट। Mhm.
Mine is like this. It doesn't put something. Okay, guys, I'm back. Sir, I'm back, guys. So now I have- come back here. one. No, I have after you come to the project. Sir, in my calendar, some project problem with this. Guys, please don't talk. Please, no background talks, please. Sir, I have a issue. Yes, you please share your screen quickly, guys. We have to go in a flow. Okay. ओके हाँ ठीक है। यहाँ पे ना एक मिनट रुको। आपने क्या किया है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करो प्लीज। देखो ये जो है ना, दीज आर द स्टैंडर्ड डेज। तो आपने इसको वापस स्टैंडर्ड, प्लीज डोंट क्लिक ऑन द वर्क, ठीक है। और आपने क्या किया है कि आपने यहाँ तक तो ठीक किया है। एक बार मैं टाइम पीरियड चेक कर लेता हूँ। ये ठीक किया है। ओह सॉरी, इसको कैंसिल कर देता हूँ। वर्क वीक आपने सेट किया है। नहीं, एक सेकंड, ये टोटल वर्क वीक जो आपने डाला है 8 घंटे बिल्कुल ठीक डाला है। अब आप यहाँ पे ना, आप एक काम करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो आप 6 डेज, मंडे टू सैटरडे सिलेक्ट करो आप। मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। अब आपने क्या कि कुछ दिन सही करे, कुछ आपने गलत करे। अब ये जो आपने 6 दिन जो सिलेक्ट किया ना, अब ये देख के लग रहा है कि 6 हो गए 6 सही है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। अब हम एक एक दिन करके चेक करेंगे। आपके मंडे का स्ट्रक्चर सही नहीं है। अब आप एक काम करो कि मंडे का स्ट्रक्चर पहले ठीक करो। सही नहीं है ना, 8 बजे तक शुरू है ना लिखा ना। वो भी नॉन वर्क है ना। हाँ, 8 AM इज नॉन वर्क ना, 8 AM इज नॉन वर्क, ठीक है। हमने स्पेसिफिकेशन में देखा था। आप इसमें नहीं, 12 बजे नहीं, लंच टाइम 13 बजे होता है, ठीक है। 16 और 17 आपकी कंपनी में काम होगा, ठीक है। तो आप इसमें करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप ट्यूसडे को चेक करो इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड है। कुछ दिन सही है, ट्यूसडे आपका ठीक है। वेडनेसडे चेक करो, वेडनेसडे ठीक है। थर्सडे चेक करो, फ्राइडे चेक करो, सैटरडे चेक करो, ठीक है बिल्कुल। और संडे तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप कर दो ओके। संडे तो छुट्टी है तो पूरा ही डार्क आएगा। अच्छा, अब एक बार हम बाहर से चेक करेंगे। अब आप जो है वो मंडे पे रखो कर्सर अपना। ट्यूसडे चेक करो, ठीक है। मंडे ठीक है। ट्यूसडे चेक करो, ट्यूसडे ठीक है। वेडनेसडे चेक करो, थर्सडे ठीक है। फ्राइडे ठीक है। सैटरडे ठीक है। और नहीं, इतने सारे थोड़ा ना चेक करोगे आगे, जो 1000 साल तक थोड़ा ना चेक करोगे। अगर गाइज मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर एक मंडे अगर आपने सही कर दी है ना, तो प्राइमावेरा में ये परपेचुअली अप्लाई हो गया। तो अब इसमें कैलेंडर आगे 500 साल का है, मान लो कि 500 साल का है। 500 साल के कैलेंडर पे ये सेम सेट हो गया, ठीक है। अब आपको एक मंडे के बाद दूसरा मंडे चेक करने की जरूरत नहीं है। मंडे के बाद आप ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक चेक कर लो, काफी है, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया। नाउ क्लिक ऑन दी ओके बटन टू सेव दी कैलेंडर। अब मेरे को बताओ अब कि किसी और के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं चलूं मैं नेक्स्ट स्टेप में क्लोज। मेरे को कल का एक इश्यू है WBS में। मेरा वो शेड्यूलिंग विद कैलेंडर एंटरप्राइज का नीचे वो कैसा वो एनर्जी का नीचे कर रहा है। दिखाओ क्या हुआ, देखें, देखो। अभी ना गाइस, अभी ना पीछे वाली जो चीजें है ना, उसमें स्टक मत हो, फिर हम ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज। प्राइमावेरा में काफी डिटेल्स हैं। मैं आपको शेड्यूलिंग आपके हाथ में देना चाहता हूँ, आप ले लो प्लीज इसे, ठीक है। छोटी छोटी चीजों से अपने आप को फ्री रखो, उलझाओ मत आपको झाड़ियों में। Now you would tell me, explain to me that what is the problem faced by you? 1 minute, I'll open the Primavera. Yes. You see here the scheduling with calendar is not inside, but it should be inside, right? Inside the inside of what? Inside of the Enterprise. learning development. So एक मिनट हो जाए यार, ये मेरे को जरा क्लियर करने दो। See, you should have created the learning and development. So did you leave the class? No, yesterday I had added that one. I yesterday added, but I think I didn't save this one. Because of that one this happened. No, I cannot speculate on that. Actually, I was teaching people that how to create a new EPS. Okay.
Now you just close this, and what we will do, and see, this is not the focus. Basically, our focus is on the calendar today. You know, this thing you should have asked me in the morning. This is not the right No, I time to didn't. ask me. I just now only see other No, people's projects time areas, you so should that's have why. noticed in the morning. You know, I told you. See, it is breaking the flow of the current thing. Now I want to see your calendar. What's happening? So I want to see, have you created the correct structure or not? See, try to focus on the topic. No. So you have not created the calendar. See, you have to, Anand, you have to be very serious on Yeah, the I have Primavera. created. Okay. So please click on the time period and let me have a look. We are going to extend it today. No, you have not noticed No, anything. no, Are you using a double screen or not? I'm using a double screen. And please observe and do it and make sure that No, I just be saved this one. distracted. Okay, please Plus click on. See, the 2400. software works very consistently. If you click on OK, it saves. If you click on the cancel, it will not save. Software doesn't Oh. work randomly. Software is very reliable. Okay, so please click here and put here No, 40. I saved this one. Why this is happening? This is the same problem. Maybe you clicked somewhere else, put here 2400. Now click on the OK there this time. Now you click here again. Click here again. Now see this. You saved it? I pressed OK. Okay. Now you click on the work week. You have to tell the Primavera that you are going to work 8 days a week. So Saturday is also full day. Okay. So that's what you told him. Now you are going to detail the breakup of the 8 hour per day. Now wait, click on the work week. Now you select from Monday to Saturday and set the structure. 8 a.m. will be non-work. So it will be non-work. Yes, correct. Now this lunchtime will be at 13 hours. See, you have to go in a sequence. Okay. And no, I saved this, sir. That's my doubt. I already done this. Now you click on the OK. Click on the OK. Now, after that, we will check. So click on the Monday, Tuesday. Tuesday is correct. Wednesday, correct. Thursday, correct. Friday, correct. Saturday, correct. And click on the OK. Okay. Now close it. So this calendar will be saved in the enterprise now. Now come back to the, just wait here. Now come to the project detail. You select this project. And guys, after selecting the project, you go to the project default here. Come here. Okay, wait. So everybody is here. So guys, you are in the default tab of the lesson 1. Yes. Okay, fine. Now, if you look here, so do you see that what is the calendar in force here? Corporate. Because where does this calendar come from? It comes from the previous default. Because when we had created the project, the corporate calendar was set as the default. So it got automatically applied on the project. Now we want this project to be scheduled by the Indian Standard Time calendar. So we will select Indian Standard Time here. So you write here, you just select here Indian Standard Time. And you select button is the green plus button. So guys, please confirm that you have selected in the default tab. Yes. You have selected the Indian Standard Time. Yes. So everybody please confirm, guys, there will be no U-turns from now onwards. Please check and make sure that you have this. You have done this, right? Okay, so one more thing I want you guys to do is this, come to the fixed duration and units and you select this option. Guys, do you see this option here, number 2? Fixed duration and units per time. So that I will explain in the resource. So once we reach the resource, I'll explain this to you, but for the timing, you please make this setting. So guys, make sure that you have done these two things. So you have selected the Indian Standard Time and you have selected the duration type as units per time. And then you should click on the save button. So this is the button to save the data. So on the left panel, you click the save button. So this says commit, you click this twice. Okay, just for the safety purpose.
Okay, just to ensure that it is saved. Now, please come back to the activities tab. Okay, so guys, in the activities tab, so Anand, where are your activities? The previously. This one yesterday I had done, sir. I have a doubt whether I saved or not. But I clicked 2 times. But right now everything is like nothing is there inside this one. I cannot show you. Okay, fine. So just do one thing. You actually you were not in the class. Did you leave the early? You were saying that you were going to leave or something. No. I left it here 7 p.m. Like after 8:30 only I left. That class was finished. But then why the data is not there? Because the column. No, yesterday you remember evening the computer was having an issue, and then again I restarted. At that time I had done this one, but after that one when I closed and opened, it is nothing is there. If it's a computer issue, then it's not a problem. But this should not be a person issue. Okay, this should not be a student issue. Today morning I had set all those tabs also again. Why? Okay, fine. Okay, fine. So let me set the columns. Okay, just to save you time, let me set the columns. We actually don't need this 2 column. We are sending them back home. So we need the column here, calendar. So I'm going to set this. So guys, you please wait. So while I bring him up to date, please wait. So I'm going to take the calendar. And I also need the predecessor detail. So predecessor detail I need here. Okay. Now, what do? You insert 16 tasks here, 16 activities. No, why do you have this wizard on? I had asked you to switch off the wizard. Why this is coming? I had told you to switch off the wizard in the user preferences. Why? Yes, in the assistance, we are not going to use it because, you know, guys, this is very irritating. See, so each time you insert an activity, you know, this pop-up will come. Do you really think you need this? You know, then it will ask you next. You don't need this. Okay, because activity, if you use the wizard, it's only a wastage of time. So guys, please make sure that in the activities, we don't use this wizard. We want just the activities to be created smoothly. Now, the problem is that you won't have any previous calendar. Okay, first of all, let me do this thing because yesterday it was the corporate calendar. So guys, please just wait. You don't do anything that I'm doing here. Please hold, please pause. I have to first bring him up to date. Then I will tell you to synchronize with me. Okay, guys, please wait. Actually, there are certain data we have to create, which was there yesterday. So, rest of you guys, please wait. Why your corporate calendar is modified? Baba, you have modified the corporate calendar? No. You are supposed to do the modification in the Indian Standard Time. You have applied the modification in the corporate. Now I can't help you. You have ruined the corporate calendar. See, this is a 5 days a week calendar. You have modified it to the 6 days a week. Yeah. What are you doing? The corporate calendar is not this. This is not the corporate calendar. You have to see that what you are doing. The corporate calendar is not structured like this. I'm not doing a mix of the calendars here. Okay. We need a mix of the calendar. We need the corporate calendar to be different so that I can teach you some example that how we can work in the mix mode. So here it is actually a 6 days a week. I mean the 5 days a week. So their work week is ranging from 8 a.m. to Anand, you got to be very, very attentive and careful. Okay.
See, now let me tell you what will happen in the industry. In the industry, people will not be that kind. Okay. So make sure that you are a perfect of the person, because industry expects a finished product. Nobody will give you the chance to learn. So here, basically, I'm not giving you a chance. You have paid me to learn something. Make sure that you make the most out of it, right? Yeah. So when you go to the industry, you are able to work confidently like a professional, and you are a absolutely finished product. So for the corporate standard one, 5 days a week, and the timing is from 8 to 4, right? Or 8 to 5. Yes, correct. So that's what I am replicating here. See, initially we have certain activities which were created according to the corporate, right? Now, what is happening, guys? Now, guys, please synchronize with me. Come to the project. So the Anand, you also start. So come to the project. Now, what we are doing, we are going to switch the calendar. So we will switch the calendar from corporate to Indian Standard Time. Now switch it to Indian Standard Time, click on the plus button. Okay, so after you have clicked on the plus button, please save the data because the floppy will be active right now. So now you click, see, guys, just do this thing. Please close this tabs here like resources, reports. We don't need them. Okay, so keep only just the 2 tabs on. That is your projects and activities. So please close the rest of the tabs. So guys, you have done that. सबने जो है बाकी टैब्स जो है वो बंद कर दिए अपने, याद किया कि नहीं? यस सर, बंद है सर। ठीक है, बाकी टैब जो है वो बंद रखो, अभी वो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें हाउ टू क्लोज सर टैब? जब भी जो टैब चाहिए वो हम ऑन कर लेंगे। हाँ, बताओ फटाफट बताओ। हाउ टू क्लोज द टैब? देखो, टैब सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्रॉस का बटन है, मैंने कल ये समझाया था ना, ये जो छोटा क्रॉस है, देख लो यहाँ पे, ये टैब के साथ रिलेटेड होता है। अगर आप इस छोटे वाले क्रॉस पे क्लिक करोगे, टैब जो है ये बंद हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही टैब रहेंगे आपके पास, हमने 2 में ही काम करना है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज में हमने काम करना है। तो कुछ आपके पास जो है, जो कैलेंडर जो है आप देखोगे कि जब आपने IST जब भी लगाया और नया टास्क आप ये क्रिएट ये कर रहे हो, तब यहाँ पे IST का ये कैलेंडर दिख रहा है आपको, दिख गया आपको गाइस? IST जो है ये लगाने के बाद 2 टास्क क्रिएट करो। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली नया पूरा IST पे आएगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगा। देखो, मैं एक डायग्राम तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अभी रुक जाओ। कैलेंडर जो है 3 लेवल पे मतलब वो होते हैं। एक होता है एंटरप्राइज डिफॉल्ट। एंटरप्राइज डिफॉल्ट से वो आ जाता है प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में, और प्रोजेक्ट से आ जाता है एक्टिविटी पे। ठीक है गाइस, आपने एंटरप्राइज में जिस कैलेंडर को डिफॉल्ट सेट होता है, मतलब वो क्या होता है, प्रोजेक्ट क्रिएशन के वो प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट कैलेंडर बन जाता है। अब हुआ क्या था कि जब हमने ये वाला प्रोजेक्ट जब क्रिएट किया था, तब क्या था, तब डिफॉल्ट कौन सा था? कॉर्पोरेट था ना, याद है? अच्छा, अब जो पहले की जो एक्टिविटीज है उसपे तो कॉर्पोरेट जो है वो लगा होगा। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने IST पे कैलेंडर जो है वो बनाया, और हमने IST कैलेंडर को प्रोजेक्ट डिफॉल्ट पे हमने सेट कर दिया। क्यों सेट किया? क्योंकि हमें कॉर्पोरेट नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि कॉर्पोरेट हमें सूट नहीं करता, इसलिए हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो एक्टिविटी है, ये जो रेड बॉक्स में है, देखो डेमो स्क्रीन पे ध्यान दो, ये जो रेड बॉक्स में जो एक्टिविटी है ये पहले की बनी हुई है, इस पे कॉर्पोरेट जो है ये लगा रहेगा। और इन एक्टिविटी की शेड्यूलिंग जो है गैंट चार्ट पे आप ध्यान दो, दिख गया आपको? ये भी 6 दिन की एक्टिविटी है और ये भी 6 दिन की एक्टिविटी है। ये किस डे को कंप्लीट हो रही है? ये अगले हफ्ते में कंप्लीट हो रही है। और ये जो 6 दिन की एक्टिविटी है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कैलेंडर के हिसाब से जो शेड्यूल करी जा रही है, वो उसी हफ्ते में कंप्लीट हो रही है 6 PM पे।
ठीक है, दिख गया आपको टाइमिंग? अच्छा, अब ये जो कॉर्पोरेट का टाइम जो है मतलब वो अलग है, और आपका जो है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का अलग है। इसका मतलब जो है एक प्रोजेक्ट में आप एक्टिविटी के हिसाब से भी अब कैलेंडर अब लगा सकते हैं। बात है नहीं समझ में? अब उसकी जो जरूरत क्या है, देखो मेरे क्लाइंट है, ध्यान से सुनना गाइस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आई हैव ए क्लाइंट who has basically he is manufacturing some filtration plants, petroleum related filtration plants, oil and gas filtration plants. Now these plants are basically manufactured here in Noida, okay, near Delhi. So you know the parts of the plants, they are transported to the Middle Eastern country, and there people work on site to reassemble them. उसको जो है वो असेंबल कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पहले ये लोग जो है ना, पहले जो है ना असेंबल करते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत टेस्टिंग करते हो, लेकिन वो रीअसेंबल वहां करके वहां पे पूरी टेस्टिंग करके फिर उसको जो है वो कमीशन कर देते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि कुछ टीम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक काम करती है, लेकिन ज्यादातर काम तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के जो है वो मुताबिक होगा ना। ठीक है, सपोज करो कि आपका 70% काम अगर इंडियन स्टैंडर्ड मुताबिक हो रहा है, तो आपका डिफॉल्ट कैलेंडर आप कौन सा यूज करोगे बताओ? कॉर्पोरेट या फिर मतलब मिडिल ईस्ट वाला कैलेंडर डिफॉल्ट सेट करोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को? जिस कैलेंडर के मुताबिक ज्यादा काम हो रहा है उसको आप डिफॉल्ट सेट करो, क्योंकि डिफॉल्ट एक सहूलियत है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भी किसी भी एक्टिविटी में मुझे कैलेंडर चेंज करना है, तो बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हो। तो गाइस, अगर किसी भी एक्टिविटी का अगर ये कैलेंडर आपने चेंज करना है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो कैलेंडर वाला जो कॉलम है इसके अंदर ये डबल क्लिक करो, ऐसे दिख गया आपको? देखो, सो Anand, you click in this column and a pop-up will come. Then you select Indian Standard Time and click on the plus button. Now, do you see that the scheduling has been changed according to Indian Standard Time Yes, yes. for this activity? Has decreased. This The timing has activity is getting controlled and scheduled by the Indian Standard Time calendar. So guys, you can have multiple calendars in a project, but one calendar which is more commonly used, that will be set as the project default calendar. Guys, is that clear? Yes, sir. है ना? तो गाइज एक काम करें, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जरा। आज जो है थोड़ा सा लेट थे हम, तो अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से कैलेंडर को यूज करते हैं, और अब यहीं से हम जो है कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मीट आफ्टर से 20-25 मिनट्स। सो लेट्स पॉज इट हियर। रिकॉर्डिंग चालू कर लो सारे। हाँ, तो देखो, अपना ध्यान से देखना यहाँ पे कि कैलेंडर जो है किस तरीके से काम करता है। आपका ना ये अभिषेक, जब भी आपका माइक स्टार्ट होता है ना, तो इसमें थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइस है, बैकग्राउंड में ना नॉइस आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, हमें ना वेट करना पड़ेगा। जो आनंद का ना कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, उसके कंप्यूटर में कुछ ये प्रॉब्लम थी। रुकना पड़ेगा एक मिनट अभी। दो डिवाइसेस ऑन है, एक एक बंद कर लो।
Okay, Anand, you share your screen. Share your screen, Anand. Yes, sir. Yes. Okay. And also make sure that you are on the logged in into the Zoom mobile, okay, app also. Log in from there also. You have shared? Please do it quickly. So we are losing time, guys. I'm sharing, sir. Okay, guys. Now let us observe that how is the Indian Standard Time calculating the schedule. Okay. Now, guys, just do this. In the new activity here, you enter here 1B. You write here 1W. In the small letters, you write here 1W. Now, do you see that what's happening here? It is translating the W into the 6 days only. Okay, now you add one more activity here. Okay, after adding one more activity, you type here 1 month. You write here 1MO. Now, do you see that what it is doing? It's converted into 20. Translating the 1 month. So, you know what is 1 month? 1 month is a collection of 24 working days. Now, that's what it is writing. Now, guys, you would tell me that if it is 24 days here, then why it is finishing on the 27th of the May? Why it is not finishing on the 24th of the May? There are holidays in between. Yes, correct. You know, it means that the calendar duration is 27 days, whereas the work duration is 24 days. So, you know, this is called work days, or this is called engineering days, engineering process days, like that it is called. And this is called the calendar days. So guys, now you realize that the calendar days will be more than the. Can you give permission to record this one? This is not recording. Okay, quickly, guys. Let us not get entangled in all these things. Okay, now I've done. You press Alt R. Okay. Now this is the calendar days. Why the calendar days are more than the work days? Because in the calendar days is being intersected by the non-work days. Do you see that? Now to complete the activities, it will require the working days. Now, if you look at the count of the working days, the count of the working days is here. So this is your 6, and this is your 6, this is your 6, and this is your 6. Now the calendar days are including your working and the non-working days. So that is why it is finishing on the 27th of May. So guys, can you just imagine that the same 24 working days will take how many calendar days in a 5-day week? It will take more. Maybe it will be finishing around 30th of May. Right, guys? Is this clear? It could be finishing around 30th of May because it will be having another weekend intersecting it, and it will be pushed more. Right? So this is how it is calculating. Now, I'll show you something which is interesting. Now, do this thing. You create another activity, and in the activity duration, you put here 4 hour, 4H. Put here 4H. Okay, so guys, did you put here 4 hours? So now guys, look at the finish time. So what is the finish time? Same date, but it is finishing at 1 p.m., right? Same date, it is finishing at 1 p.m.
Now you add another activity and make the duration as 5h. So please go ahead. Anand, you are here. Okay, guys, I'm not getting this. Okay, you write here 5h. Now, why are you getting 3 p.m. instead of 2 p.m.? Tell me, Anand. What do you think? Why, when you're writing 5 hour, it is finishing at 3 p.m., but when you're writing 4 hour, it is finishing at 1 p.m. So what is the difference between the two? The lunch break is correct. The lunch break is getting included here. So that is why the calendar is scheduling the 5-hour work to be finished at 3 p.m. Right? Okay. Now you add one more activity from here. Add one more activity from here. Now you write here 22 hour, 22h. You write here 22h. Now, when you write here 22h, what is happening? It is getting converted into 2 whole days and 6 hours. How it is doing it? See, when you write, so guys, I believe that you have done this kind of the division in the school. See, it is doing the division like this. And what is the remainder? The remainder becomes the days and the divisor becomes the 2. So guys, do you see that? It is doing the division. So 2 hours and 6 days. So 6 days is the remainder. So that is becoming the 6 hours. So guys, is this clear? Okay, now you insert another activity. Insert another activity here. Anand, insert, and you write here 1y. So guys, what is the meaning of y? So here, when you're writing the year, it is translating into 300 man days. So guys, can you tell me that why it is doing so? See, we had defined that 1 year is equal to 2400 man hours. If 2400 man hours is divided by 8, so we get 300 man days. Right, guys? Is this clear? Because per day is equal to 8 man hours. If per day is equal to 8 man hours, then 24 man hours is equal to 300 man days, right? So this is how the Primavera is doing. So if you write anything less than 8, it will be treated as the hours. But if you write 8 hours, it will be treated as 1 day, right? If you enter it below the fraction of the 8, so it will write as the hours. But if you write 8 hours, it will immediately translate into 1 day. Okay. So try to write here in the new activity, you create here new activity and try to write here 8h here. In the new activity, try to write 8h and see that what happens. You write here 8h here. If you write 8h, then what happens? So once you write 8h, it is translating it into 1 round day. 1 round, it is rounded off to 1 day. But if you write here, the Anand, go here and write 1.5d, 1.5d, 1.5 days. So then what is it translating into? The half day. Yeah, so the half day is being translated into 4 hours. Now you insert one more activity below this and you write 1.75d. You write here 1.75d. So what it is translating into? So guys, what is the 0.75? It is the 6 hours, right? 6. Right. Okay. Now you add one more activity here. You add one more. Now, after adding one more activity, you write here 1.25 days. 1.25 days. No, not here, Baba. What are you doing here? 1.25 days. So, guys, what is the quarter day? The quarter day is the 2 hour. And the 3/4 day is the 6 hour. And the half day is the 4 hour. Right? So, guys, is this thing clear?
So Primavera will translate everything into the hours, right? Okay, now you add one more activity here. And you write here, you add one more. And you write here 48H. Now, what it is doing? It is converting the 48H, the hours, into the days. So Primavera is considering everything in the days. So it is making your job simple to understand in the days, in terms of the days. So, you know, these are the working days or the engineering days. But the thing is that when it is exceeding 1 week, then it will start to include the weekend also, right? If you write here, see, right now the 6-day activity is finishing on the 6th. Now you do one thing, you insert one more activity here. You insert one more activity. Anand, quickly, respond quickly here. Insert one more activity and you put here 7 days. Now guys, tell me that what is the finish date? What is the finish date? 8th. No, 8th of the May. Yes. 7 days is 8th of the May. Why? Because the activity has to jump over the Sunday, which is a non-working day. So the activity is completed in the next week only. It cannot be completed over the weekend because the weekend is a Sunday. So what will happen? The 7th day of the work will go on to the Monday, right? Okay, guys. Now, if you look carefully, you will see that in our project, we have half the dates in the corporate and half of the dates are in the Indian Standard Time as on the demo screen. Now, I'm going to teach you something called the global change. Now, global change is just like the macros, which we know in Excel. So guys, have you heard of macros? Macros, M-A-C-R-O-S. Have you ever heard of the macros being created in and used in the Excel? Guys, do you know macros? Okay. Yes, sir. Automate करने के लिए होता है. हाँ, yes. तो यहाँ पे मैक्रो का इक्विवेलेंट है ग्लोबल चेंज. Guys, you see that there is a global change button here. It looks like a globe, and the global change is actually in two places. There is a global change in the tool button, and the icon is here also in the panel number 1. तो ग्लोबल चेंज क्या होता है? वो प्राइमावेरा का मैक्रो जो होता है वो उसको यहाँ पे प्राइमावेरा के अंदर उसको ग्लोबल चेंज का नाम दिया गया. तो अब हम जो है ग्लोबल चेंज सीखें. तो ग्लोबल चेंज से हमने वो करना क्या है? देखो, हमारे पास इस वक्त जो है इतने सारे एक्टिविटीज है. मान लो ये जो कॉर्पोरेट की एक्टिविटीज है, देयर अराउंड 1000, नॉट ओनली जस्ट अ फ्यू बट 1000 एक्टिविटीज we need to convert into the Indian Standard Time. So we are going to learn that how we can use the global change facility to change the calendar. Now let us do this thing. We will first of all go into the global change and create the global change and press the button just to convert the corporate calendar into the Indian Standard Time in one shot. Okay, so guys, please come with me step by step. So please click on the global change icon. Saji, are you using the mouse or what? Okay, now click on the new. See, there are many global changes here which are given as a sample. So now let me explain to you the global change tool. So guys, everybody is here. See, the global change tool, it has got two parts. One is the condition block and one is the execution block. In the condition block, you check the condition. Do you see if this condition is true? So in the execution block, then you say, then you execute this action. So the red one is the condition block, the green one is the action block. In the action block, the row you can add later, but first of all, you understand the structure. Now, first of all, whenever we are going to create the global change, we have to give it a meaningful name. Because if you create something without any meaningful name, you might forget that what is the functionality of this global change. Now, let us start from here. Let us go into the global change name and you write here, apply IST calendar. Because this is the functionality we want, apply IST calendar. Apply. See,
Anand, listen to me carefully. I said apply IST calendar. Do exactly that. Calendar. Okay. Now, then you go to the condition line here. In the parameter, you select C for calendar. C for a calendar. No, you just click on the C and you will get the calendar. See, press the button C. If you press the button C, you get calendar. Then in the condition, you select not equal to. So how to select calendar? See, first of all, you click here. Yes, done. Then you press C. Is the C for the calendar will come? Yes. If it does not come, you can scroll a little bit up, down, and you can get Yes, it. yes. Done, sir. Then is not equal to, then you select the condition here, not equal to, and then you select the value. In the value, if you click, you will get a list of the calendars. So what you are trying to check for? You are trying to check for the Indian Standard Time calendar. Now, let me tell you in Hindi, जहां पे calendar IST नहीं है, वहां पे IST calendar लगाओ. That is what we are going to tell. So guys, you are done with the condition part? कंडीशन वाली लाइन पूरी कर ली आपने? यस, गुड. यस सर, हो गया. पूरा कर लिया. नियाज, आपका भी हुआ कंडीशन? Yes, sir. डाल ली. देखो, अब ये जो कंडीशन है ना, ये हमने चेक कर लिया. अब लेकिन अगर मान लो मेरा कंडीशन सही है तो मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो गाइस प्लीज चेक. आई एम इनटू द एग्जीक्यूशन ब्लॉक. डू यू सी दैट? देखो, फोकस चेंज करने से आपने देखे पतला सा एक फ्रेम सा आ रहा है यहाँ पे. दिख गया आपको? Yes, sir. Now you are going to write the action. अब इसमें अब करो ऐड इसमें करो. कर दिया ऐड इसमें. अरविंद, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सर, आवाज आ रही है? हाँ, बताओ, फटाफट बताओ कहाँ अटक मेरे गए? में ये पैरामीटर्स वाला ऑप्शन तो वर्क नहीं कर रहा है सर. पैरामीटर वाले ऑप्शन में कौन से भाई? ये कंडीशन में, ये यहाँ पे इस पे करो ना क्लिक भाई. क्या दिक्कत क्या है? नहीं हो रहा है सर. नहीं होगा, ऐसे बोलने से नहीं होता. होगा. आप इस नहीं आ रहा पे है ना वो. आप इस पे सी फॉर कैलेंडर करो, ये आएगा. कर रहे हैं. ऐसे तो मैं कभी भी इसको कॉन्टिन्यूसली मैं समझा नहीं पाऊंगा कुछ बाबा. इससे क्या होगा, मैं आपकी स्क्रीन पे आऊंगा तो दूसरा गएगा तो मेरा अटक गया. आपके पास तो दो मॉनिटर है भाई, फुल साइज के. देखो स्क्रीन, देखो इसमें नहीं होगा. प्लीज ट्राई. आप यहाँ पे ये वेयर के बाद ये क्लिक करो, यहाँ पे आएगा ना बाबा ये कैलेंडर. आपने कहाँ क्लिक किया यार? ऊपर नहीं क्लिक करना, ये नीचे क्लिक कर रहा है ना, इसके अंदर. ये यहाँ पे देखो ना स्क्रीन पे. पता नहीं आप सिर्फ सुन के कर रहे हो या देख भी रहे हो. चलो, आप चाहते हो तो इस जो है ना, ये लटकाना चाहते हो ट्रेडिंग को तो लटकाओ. आओ दिखाओ, अपनी स्क्रीन दिखाओ. आप वहां पे क्लिक ही नहीं कर रहे यार. कमाल की बात है यार. आप इतने देखो इंजीनियर हो, इतने ये पढ़े लिखे हो, मैं दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन में, मैं कह रहा हूँ यार ये नीचे की लाइन में करो क्लिक. नीचे जो वेयर की जो साइड में क्लिक करो ना. आपके पास दो लैपटॉप है, आपके पास कोई छोटा स्क्रीन भी नहीं है. आनंद, प्लीज शेयर योर स्क्रीन. हाँ, अपनी ना ये कंप्लीट कर लो रो, फिर कंप्लीट करके मुझे कंफर्म करो. Guys, everybody has created the condition line? Yes. Okay. Now please Yes, sir. into the action block and you click on the add. ऐड करने से ना एक रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी. ठीक है, ऐसे कर लिया ऐड. अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये पैरामीटर में जाओ और पैरामीटर में सिलेक्ट करो कैलेंडर पैरामीटर. देखो ऐसे देख लो स्क्रीन में. पहले लाइन ऐड करोगे ब्लैंक. ठीक है ना. पहले अब जब आप आओगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा. तो अब आप ब्लैंक रो करोगे ऐड ऐसे.
ठीक है, ब्लैंक रो डालने के बाद उसके अंदर ये पैरामीटर ये सिलेक्ट करोगे कैलेंडर। देख लो सारे यहाँ पे, सारे कंफर्म करो कि सबने कैलेंडर सिलेक्ट किया है यहाँ पे। Yes, sir. अच्छा, अब ये जो कैलेंडर की जो Yes. पैरामीटर होगी वो होगी द IST। यस अभिषेक, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। ये IST होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको ना थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। हर एक एक्टिविटी पे जाओ और उसमें चेक करो कि एक्टिविटी में कैलेंडर अगर IST नहीं है देन तो कैलेंडर का पैरामीटर चेंज करके IST कर दो। अब ये जो इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू साइन का मतलब ये होता है कि द आनंद प्लीज कीप द स्क्रीन कांस्टेंट। मैं ये जो IST की वैल्यू है इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपने किया होगा ना एलजेब्रा में, x इक्वल टू वाई, नहीं x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 6, ऐसे। तो ये क्या कर रहा है कि हर एक्टिविटी में चेक कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि जहां जहां पे IST कैलेंडर नहीं है वहां पे IST कैलेंडर जो है ये लगा देगा। जो कोई सा भी होगा कैलेंडर, अगर IST नहीं होगा तो वो उसमें IST जो है वो लगाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? अच्छा, अब आपने करना क्या है, ठीक है गाइस, किसी के ना बैकग्राउंड में यार बात हो रही है, आप ना अपना माइक जो है वो बंद कर लो प्लीज। ठीक है, मैं सबका माइक में बंद नहीं करना चाहता क्योंकि काफी लोग जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप क्या है, नाउ क्लिक ऑन दी ओके बटन। द आनंद लिसन टू मी केयरफुली। हाँ, तो गाइस आपने देखा ये यू हैव द ग्लोबल चेंज हियर। अब ये जो ग्लोबल चेंज है, this is going to execute and make the changes automatically. So what we are going to do, we are going to place it a little bit here so that we can see the changes also being applied in these columns. ठीक है, now to run the global change, keep the global change selected and you click on the button apply change. So please click on the button apply change. So once you apply change, so what it does, it is checking each and every activity and saying that this is the old value and this is the new value, but it wants a confirmation. Guys, do you see on the right side bottom, it is asking changes. So you go ahead and click this button, commit changes button at the right side bottom. Anand, please click on the button, commit changes. Now, would you like to save the log file? You say no, log file should not be saved because we don't want to keep a record of it. We just simply want the change. So once you have applied the IST calendar, guys, do you note that all the activities are being scheduled by the IST calendar only? And do you see there is a change in the time? There is a change in the Gantt chart. Do you note that? Okay. Okay, fine, guys. So this is the result of the, this is the result of executing the global change. So global change is a macro, but doing it once is not enough. For a permanent practice, we will create another macro. Now, this time, so guys, listen to me carefully. Do not click elsewhere. We are going to create the opposite macro, but we will create from the copy paste method, right? Okay, now what we are going to do, that we are going to copy and we are going to paste and then we are going to modify it, right? Anand, while I'm talking, please do not use the mouse, because what happens, see, the calendar field has to remain this wide only. Why this wide? Because you know there are other calendar which are this wide. Okay, so basically do not distract yourself by using the mouse while I'm talking to you. Try to understand and absorb what I'm trying to tell you, because what happens when you are using the mouse, some part of your brain is also controlling the mouse. Okay, sir. Okay. Okay, so make sure that the entire part of your brain is able to grab this, because this is the opportunity of 3 days. Otherwise, you are welcome to attend all my batches for 1 year, free of cost. That's not a problem if you have that much time. From my side, you are welcome to attend next batch, next batch, next batch, next batch. Absolutely free.
But I'm sure as an engineer, you don't want to do it because you want to work on the site after creating a plan. So make sure that you learn in one batch. Sure, sir. And if you can learn in one batch, then I think that you will be getting a good grip on the Primavera. Now, what I'm saying is that if I want to create another macro, so if the target macro is similar, I just have to make a few changes. So copy paste method is better in the calendar. It is better here in the macro also. Now follow me step by step. So first of all, you select the global change. So open the global change toolbox. Now you select the macro IST calendar. After selecting the macro, so you click on the copy button. So I think you can see the copy here. So when you click the copy, do you see now the paste is active, right? So you click on the paste. Click on the paste. Guys, do you see that another macro has been created? Now, Yes. change the name of the macro to apply space corporate calendar. You put one space here. Apply corporate calendar. So we are creating the opposite macro from the copy. Press enter. Change the name and press enter. Now, keeping this one selected, click on the modify button. Anand, please control your mouse. Okay. Now, guys, what we have to change? We have to change only two parameters in the calendar value here. Change it to the corporate. So you select the corporate calendar, and here also change it to the corporate. Okay. So guys, now let me tell you what is the meaning. So here you are going to each and every activity and you are checking for the calendar. If it is not equal to corporate, then you are saying change the calendar parameter. Corporate. ठीक है, दिख गया आपको? So guys, is this clear? If the calendar is not equal to corporate, then you change to corporate. So how modify? They have to go modify after selecting corporate calendar. हाँ, इसमें वो करो ना कि modify. Yes. अब देखो यहाँ पे पैरामीटर कॉर्पोरेट कर दो और यहाँ पर भी पैरामीटर कॉर्पोरेट कर दो. मैं यहीं पे रुकता हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग हियर. तो इसका मीनिंग जो है उल्टा हो गया ना. पहले हम कह रहे थे भी आईएसटी लगाओ, हम कह रहे हैं कि जहां पे कॉर्पोरेट नहीं है वहां पे लगाओ कॉर्पोरेट, है ना? तो गाइस प्लीज कंफर्म दैट यू हैव डन. सर मेरा सर जो है सर मैं सर ग्लोबल मेरी सर स्क्रीन रुक गई थी सर थोड़ी सी. अच्छा, तो एक मिनट रुको. सर ग्लोबल चेंज पे सर आके मैं सर अप्लाई कॉर्पोरेट कर दिया पेस्ट करने के बाद. हाँ, आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया कि आईएसटी की जो है कॉपी ली और पेस्ट कर दिया और इसके अंदर जाके इसका नाम चेंज किया. देखो स्क्रीन में आपका वो आएगा ना, आईएसटी कैलेंडर 1 आ जाएगा. एक ग्लोबल चेंज में जो दूसरा जो पेस्ट का जो नतीजा जो होगा, एक दूसरा जो है अप्लाई कॉर्पोरेट कैलेंडर मैंने कर दिया. हाँ, तो उसके बाद जो है अप्लाई कॉर्पोरेट कैलेंडर में वो कर दिया नाम चेंजेस. इसका नाम चेंज हुआ कि नहीं? अरे यार कर दिया. हाँ ठीक है. अब आप इसमें ये मॉडिफाई करो इसमें आके. अब इसके अंदर जो है ये अंदर आ जाओ. अब इसको मॉडिफाई करो. देखो मॉडिफाई पे क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर का जो पैरामीटर है दोनों तरफ चेंज कर देना है. ठीक है. कर दिया चेंज. तो मॉडिफाई पे करके आईएसटी वैल्यू आ रही है, तो आईएसटी को जो है ना, आईएसटी को चेंज करके कॉर्पोरेट सेंटर कर दूं. हाँ, अब हम कर रहे हैं उल्टा काम कर रहे हैं ना, है ना? हम अब जो है उल्टा काम कर रहे हैं. पहले हमने आईएसटी किया था, अब हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं. तो हम ये बोल रहे हैं, जो कंडीशन ब्लॉक में हम बोल रहे हैं कि एक एक्टिविटी को चेक करो, जिस एक्टिविटी में कॉर्पोरेट कैलेंडर नहीं है वहां पे कॉर्पोरेट कैलेंडर लगा दो. ठीक है. देखो स्क्रीन के साथ मैच करो. ये हो गया सेम टू सेम. है हुआ? ठीक है सर, हो गया. हाँ, अब इसमें करो ओके. अब ये क्या है कि अब ये स्टोर हो जाएगा. अच्छा, now guys, now we are going to run this. So now we will see that how it will work. So first of all, we place it to the side just to see the impact here in this column.
So guys, after selecting, you click on the apply change and it will execute the global change. करो apply change. So it is basically telling you कि देखो old value ये मिल रही है, new value ये है. तो should I apply? तो आप इस पे कर दो commit change. और इस पर नो कर दो. लॉग फाइल को सेव नहीं करना है, ये ऐसे ही काम भाई. देखो अब आपने देखा ये सारी एक्टिविटीज में ये कॉर्पोरेट इसने ये लगा दिया है. दिख गया आपको? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, इफ आई टेल यू गाइस प्लीज अप्लाई IST कैलेंडर, विल दैट बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क? नो, because you already have the global change already there and you just have to apply the global change. आप इसको अप्लाई करो. हाँ, अब इसको कमिट करो और इसको नो बोल दो. देखो इसने जो है तुरंत जो है इसने कैलेंडर का कॉलम जो है पूरा अप टू डेट कर दिया. ठीक है, तो अब आपने क्या सीखा? एक तो आपने सीखा कैलेंडर जो है वो बनाना, कि कैलेंडर बनता कैसे है, और आपने साथ के साथ ग्लोबल चेंज भी सीख लिया. ठीक है गाइस? तो ग्लोबल चेंज जो है सिर्फ कैलेंडर पे नहीं, ग्लोबल चेंज जो है टेक्स्ट पे भी काम आता है, नंबर को भी चेंज करने में काम आता है. ठीक है, ग्लोबल चेंज में आप जो है छोटे छोटे जो है प्रोग्राम बना के डाल सकते हो. तो उसमें क्या होगा, आपके अगर कोई ज्यादा मास बेस्ड रिपीटेटिव एक्टिविटीज है तो उनको ये मॉडिफाई कर सकता है, और ये कंसिस्टेंटली काम करता है. इंसान जो है कंसिस्टेंटली काम नहीं करता. अगर कोई आदमी अगर 10 साल से भी एक काम को कर रहा है तो वो कभी भी गलती भी वो कर सकता है, उसको झपकी आ सकती है. बात आ रही समझ में? नहीं? yes. अभी क्या हुआ, अभी अफ्रीका में अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक फ्लाइट जो है 2 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ये जा रही थी. और आपको पता है कि हवाई जहाज में 2 होते हैं पायलट. ठीक है, दोनों पायलट सो गए, ऑटो पायलट जो है मतलब ये लगा के. अच्छा, जिस एयरपोर्ट पे लैंड करना था उस एयरपोर्ट को जो है वो हवाई जहाज जब ये पार कर गया तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वहां पे जो है ये मतलब वो बज गया अलार्म कि हवाई जहाज ने यहाँ लैंड करना था, और वो लैंड करने के बजाय हमारे एयरपोर्ट को पार करके जो है वो आगे चला गया. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंसान में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो ग्लोबल चेन से हम काम करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब एक काम करो, अब मैं आपको सिखाऊंगा फिल डाउन. फिल डाउन क्या होता है कि मान लो कि ऊपर जो है ना एक्टिविटी जो है, जैसे ये वाली एक्टिविटी है ना, मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया टास्क. अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो टास्क है ये यहां से लेके यहां तक आ जाए. ठीक है, तो आपने करना क्या है, देखो मैं डेमो दे रहा हूं, आप मेरे साथ करो. सब क्या करो, ऊपर वाले जो रो का जो एक्टिविटी का नाम है ऐसे स्मॉल लेटर में टास्क लिख लो, और शिफ्ट का ना ये बटन प्रेस करो. कर दिया प्रेस? शिफ्ट का बटन प्रेस करो अपने बाएं हाथ से, और अपने दाएं हाथ से यहाँ पे नीचे वाले रो में क्लिक कर दो. आप देखो यहाँ पे ये पहले रो से लेके नीचे वाले रो तक ये क्लिक करके इसको ये सिलेक्ट कर लो. बीच के रो नहीं क्लिक करने, आपने ऊपर का करना है और लास्ट का करना है. कोई यार कंफर्म तो वो करो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Yes, sir. Yes. क्योंकि पता क्या होगा, पहले आप चुप बैठोगे. अच्छा, अरे यार साजी यार, आपकी यार ये डेमो स्क्रीन है भाई, आप ना क्लिक मत करो प्लीज इस पर. मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं समझाते समझाते. देखो, या तो मैं किसी और की स्क्रीन पे मैं जाता हूँ. डेमो स्क्रीन में ना कुछ कायदा होता है, मैं आपको समझा. बीच में क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से मैं समझाता हूँ. मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर जो ये लिखा हुआ शब्द है ना, जो ये टास्क, ये सारे सेल में ये रेप्लिकेट हो जाए इसी वाले कॉलम में. तो मैंने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, बीच में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना. मैं इससे हिंदी में नहीं जानता और ज्यादा शुद्ध. इससे लास्ट में क्लिक करना है तो पूरे बीच के रोज जो है ये सिलेक्ट हो जाए ऊपर से लेके नीचे तक. अब साजी, अब आप क्लिक करो ये वाला बटन. अच्छा, वो बटन तो है नहीं, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, होल्ड योर माउस. वो बटन मैं डाल देता हूँ. आपने बटन भी नहीं लिए हैं यहाँ पे पूरे. आप ये देखो, एक जो है ये बटन, अरे यार फिर आपने फिर क्लिक कर दिया यार, ये तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा. नहीं, मैं कुछ नहीं करती. हाँ, मैं कहूंगा सिर्फ वहीं पे क्लिक करना आप, ऐसे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर, क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है. हैंड्स ऑन में आपको कुछ कायदा मान के चलना है. आप इस पे क्लिक करो इधर. दिस इज कॉल्ड फिल डाउन. फिल डाउन व्हाट डज इट डू?
ये जो ऊपर के रो की वैल्यू है जो है वो नीचे तक इसको डाल देता है। देखिए आपको बात आ गई समझ में गाइस? आपका sir. हुआ है ना? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि फिल डाउन, आप मान लो कि ये एक्टिविटी है, जैसे ये ऊपर वाले रो में मैंने इसके जो है वो ड्यूरेशन को कर दिया मैंने 1 डे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो सारे जो रोज हैं उनमें भी 1 डे हो जाए, तो मैंने क्या करना है कि इसी रो को सिलेक्ट रख के ये पूरे मैंने रोज को सिलेक्ट करना है। गाइस एक चीज का ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे आपने ये देखा इसका जो ऑरेंज ग्लो कहाँ पे है? ऑरेंज ग्लो ड्यूरेशन वाले कॉलम पे है। अब ये क्या ये करेगा कि ऊपर वाले रो की जो वैल्यू जो है नीचे तक बीच में सारे रोज में ये डालता चला जाएगा। साजी यू क्लिक हियर ऑन द फिल डाउन। So guys, do you see that it has become 1 day? दिख गया आपको? अच्छा, आपका हुआ? अच्छा साजी, अब आप जो है खुद करो प्रैक्टिस। हाँ अरविंद गुड। अच्छा अब देखो साजी, यू पुट हियर 6 days on the first activity, you put here 6 days. Now now you press the shift button and click on the last row. Now you click on the fill down. Okay, so is this clear to you? Yes. Okay, so you can fill down on which column? एक activity name में, duration में। यहाँ पे fill down नहीं करना, यहाँ पे होता ही नहीं है fill down। fill down वो होती है जो user input column होता है। बात आ रही समझ में? activity ID user input नहीं है, ठीक है। स्टार्ट और फिनिश डेट जो है वो कौन क्रिएट करता है? प्राइमावेरा क्रिएट करता है, वो आपका नहीं है, आप उसको नहीं देखते। तो प्राइमावेरा जो है स्टार्ट एंड फिनिश जो है वो कैसे क्रिएट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आप देते हो ओरिजिनल ड्यूरेशन को क्या ये करता है? ओरिजिनल ड्यूरेशन को प्राइमावेरा ना ये कैलेंडर में डालता है। अच्छा, कैलेंडर में डालने के बाद क्या करता है कि इसके ऊपर जो है इसके ऊपर लगाता है कैलेंडर एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम होते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड फॉर्मूला को हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम का जो है ये नतीजा क्या होता है? इसका जो है ये नतीजा होता है स्टार्ट, और इसका जो है ये नतीजा होता है फिनिश डेट। तो स्टार्ट और फिनिश डेट की कॉम्बो को हम क्या बोलते हैं गाइस? स्टार्ट और फिनिश डेट की कॉम्बो को क्या बोलते हैं हम? स्टार्ट और फिनिश डेट की कॉम्बो को बोलते हैं हम शेड्यूल। तो आपका जो है ये शेड्यूल बनता है। Schedule. हाँ, शेड्यूल मीन्स start date and finish date of an activity, start and finish date of a WBS, start and finish date of a project. It is called a schedule. Now, where does the duration come from? The duration comes from your knowledge, and schedule is calculated by the Primavera. So, guys, is the picture clear now? Yes. हाँ? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कैलेंडर चेंज कर दोगे तो आपकी डेट भी चेंज हो जाएगी। देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पे सारे कैलेंडर आपके आईएसटी है। मान लो आप इस कैलेंडर को चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। तो डबल क्लिक करते ये पॉपअप आएगा कैलेंडर का, आपने चेंज कर दिया इसको ये कॉर्पोरेट में। तो गाइज आपने ये देखा, ये नोट किया आपने यहाँ पे एक एक्टिविटी में कॉर्पोरेट लगाया तो इसकी शेड्यूल चेंज हो गई, ठीक है ना? अगर एक आध एक्टिविटी चेंज करनी है तब तो मैनुअल ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि आप अगर काफी सारी चेंज करना चाहते हो तो हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके एक जो है मैक्रो ये बना सकते हो जिसको हम कहते हैं ग्लोबल चेंज। और एक्टिविटी में ये जरूरी नहीं है कि चेंज सिर्फ जो है ये कैलेंडर के कॉलम से ही होगा। कैलेंडर के अंदर इसकी डिटेल में अगर जाओगे ना तो ये जो कैलेंडर कॉलम यहाँ पर भी होता है। गाइस कैन यू सी? Yes. Saji, you change the calendar here and you change it to the corporate. So guys, do you see that? Yes. आप यहां से चेंज करोगे तो यहां हो जाएगा, यहां से चेंज करोगे तो वहां हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है? तो ये है आपका कॉलम, ठीक है? और ये है आपका प्रॉपर्टी। हम कहते हैं दिस इज दी प्रॉपर्टी। सो यू कैन चेंज इट फ्रॉम द कॉलम, यू कैन चेंज इट इन द प्रॉपर्टी आल्सो, ठीक है? तो गाइज इज दिस क्लियर?
So you can Yes, change sir. it. But why are we including the calendar column here? Normally, we are not going to include. We are including the calendar column here as a matter of convenience, because I'm trying to teach you guys so that you can instantly see that which activity is being scheduled by which calendar. It is for convenience only. So normally, don't keep the calendar column. Right? Calendar column occupies a lot of space. And since the calendar can be viewed from the calendar, I mean the activity detail also, so we prefer to view it from the detail only. Okay. So guys, is this thing clear now that the schedule is created by calendar? Do you agree with this fact and statement? Yes. अच्छा, अब हम देखेंगे कि जब शेड्यूल जब बन गया तो आप मान के चलो कि शेड्यूल ना एक छोटा बच्चा है. जब 5 साल का हो जाता है तब क्या आप तो करते हैं? जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब हम उसको स्कूल भेजते हैं. तो अब देखो वो ना आगे जो है 5 रूल्स हैं वो उन स्कूल्स में वो जाएगा. तो सैयद आप जो है ना, एक सेकंड, ये अरविंद आप कॉल क्यों तब कर रहे हो? यस सर, थोड़ा जरूरी है सर, मेरे बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब है, मुझे जाना. हाँ तो कोई नहीं, आप जो है सर. आप एक काम करो अरविंद, देखो यस सर. मैं आपको बता दूं, आप ना अपनी ना ये लैपटॉप ऑन छोड़ दो. आप ठीक है. आपकी रिकॉर्डिंग बनती रहेगी, आप इसको म्यूट करके छोड़ दो और वो बच्चे को ख्याल कर लो एक बार. ठीक है सर. ठीक. कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको लगता है नेक्स्ट बैच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है सर. ठीक है ना, कोई चिंता नहीं है, बच्चे ख्याल कर लो. ठीक है. थैंक यू. इसको म्यूट करके छोड़ दो, ये रिकॉर्डिंग आपकी बन जाएगी. सो नियाज, यू शेयर योर स्क्रीन एक बार. हाँ, अब देखो, अब हम क्या करेंगे नियाज, अब आप भी ना डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाओ और डॉक्यूमेंट है एक आपका ये प्राइमावेरा नोट्स, ये वर्ड फाइल जो है इसको आप खोल लो. ठीक है, प्राइमावेरा नोट्स. हाँ, बहुत बढ़िया. देखो गाइस, ध्यान से देखो, हमने रूल नंबर 1 जो है देखा, हमने क्या किया कि शेड्यूलिंग इज क्रिएटेड बाय द कैलेंडर. अब शेड्यूल क्या हुआ कि मान लो एक छोटा बच्चा है. अब छोटा बच्चा जो है 5 साल का हो जाता है तो स्कूल भेजते हैं. तो उसमें यहाँ पे क्या है कि 2, 3, 4, 5, 6 में उसकी ट्यूनिंग हो रही है. यहाँ पे वो और भी ज्यादा जो है शार्प वो होता जा रहा है. अब बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 2, 3, 4, 5, 6 तक. ठीक है, ये आज हमने कंप्लीट ये करना है. अच्छा, अब हम चलेंगे. शेड्यूल इज एडजस्टेड बाय क्रिटिकल पाथ, नॉन वर्किंग डेज लाइक वीकेंड एंड द हॉलीडेज. अब आप एक काम करो, अब ये जो लेसन नंबर जो आपका जो 1 है, इसकी एक कॉपी बनाओ. इसको आप पहले क्लोज करो. गाइस प्लीज क्लोज दिस. कंट्रोल W प्रेस करो आप लोग. कंट्रोल W, एवरीबॉडी प्लीज प्रेस द कंट्रोल W एंड से यस. क्लोज कर दो इसे. अब देखो, अब ध्यान से देखना. अब इस पे नियाज, इसमें ना राइट क्लिक करो. इस पे ये जो लेसन 1 है, इसी पे राइट क्लिक करो. गाइस प्लीज लुक एट द डेमो स्क्रीन. अब इसको करो कॉपी करो और अब इसके ऊपर लर्निंग डेवलपमेंट को सिलेक्ट करो और इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इसके ऊपर पेस्ट करो. ठीक है, अब इसमें आप कर दो ओके ओके ओके. 3 बार ये आएगा ऐसे पॉपअप. ओके करो, फिर से करो ओके. गाइस आपने देखा ये लेसन 2 हो गया क्रिएट. ये नंबर 2. Sir, once again, I didn't get that one. Close that one, then again open, then copy. And paste it on the learning and development portfolio. Okay. See, these are very small things. Anand, please sync up. अब इसमें आपने करना क्या है कि इसका नाम चेंज करो, क्रिटिकल पाथ एंड हॉलीडेज. फटाफट, क्रिटिकल पाथ एंड हॉलीडेज. अब हम ये समझेंगे कि क्रिटिकल पाथ का हमने प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है. क्रिटिकल पाथ को समझना कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, क्रिटिकल पाथ जो है मैं विजुअली समझाऊंगा, डेफिनेशन से नहीं समझाऊंगा. सो गाइज, यू हैव डन दैट. यू हैव क्रिएटेड द लेसन नंबर 2. लगता है कोई चुप बैठा, वो यू टर्न करवाएगा मुझे. यस सर. हाँ यार, यस बोल दो, नहीं तो तुम घात लगा, ऐसा लगता है तुम हमला करोगे थोड़ी देर बाद. फिर कहोगे सर आ जाओ 10 किलोमीटर की यू टर्न लगा के. हाँ अभिषेक, सो थैंक्स फॉर टेलिंग.
आनंद, अरे Yes, yes. हाँ यस बोलो यार, हाँ चलो। अब इसमें राइट क्लिक करो, इसको खोलो, लेसन नंबर 2 को ना खोल लो, राइट क्लिक करके करो ओपन। हाँ अब देखो, अब इसमें क्या है कि अब हम इस लेसन से हम ये समझें क्रेडिट वाला। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो है ना, जो लेसन, हमें यहाँ पे कैलेंडर नहीं चाहिए, तो हम कैलेंडर फील्ड को हम चाहिए बंद कर देंगे, तो करो बंद, इसे कर दो बंद। इसमें राइट क्लिक करो, नहीं राइट क्लिक करो और इसमें जाओ, कॉलम में जाओ। अरे ये रहा ना, ये बीच में रहा ना, ये कॉलम ऑप्शन। हाँ अब ये कैलेंडर को करो सिलेक्ट और इसे वापस कर दो, इसे घर भेजो। देखो कौन से घर में गया, जनरल, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कल इसको चाहिए तो जनरल के सामने जाके आवाज लगाना, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब आपका ये फील्ड गया। अच्छा नाउ गाइस, आई डोंट वांट टू यूज द टाइम पार्ट आल्सो। ये जो टाइम आ रहा है ना 6 PM, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसको कहाँ से बंद करना मैं बता देता हूँ, फिर से मैं याद दिला देता हूँ। दिस कैन, द टाइम पार्ट कैन बी स्विच्ड ऑफ फ्रॉम द यूजर प्रेफरेंसेस। आप यूजर प्रेफरेंसेस में जाओ। मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को एक एक्टिविटीज नहीं आ रहा है इधर, सेम नहीं आ रहा है। अरे यार मेरे को फिर यार तुम्हारी स्क्रीन पे ही बैठता हूँ मैं सारा दिन। आओ चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी स्क्रीन से डेमो करता हूँ। देखो फिर स्क्रीन दिखाओ अपनी। हाँ ओके। दिखाओ स्क्रीन, दिखाओ, तुम्हारी स्क्रीन से करता हूँ मैं डेमो। अच्छा अब हमने ना टाइम पार्ट को हमने ये बंद करना है। वी डोंट वांट द टाइम। हमारा कैलेंडर सेट है, अगर हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी फिर करने हैं। नाउ आनंद, यू क्लिक ऑन द यूजर प्रेफरेंसेस क्विकली। आनंद, यू हैव टू मूव क्विकली। हाँ नाउ गो टू द डेट्स, कम टू द डेट्स हियर and you select do not show time. Select the do not show time and then click on the close. Yes, sir. Okay. So guys, आपने जो है टाइम को कर दिया बंद। देखो टाइम बंद है ना अब आपका। User, first I go to user preference. हाँ यूजर प्रेफरेंस में जाओ, देखो हाँ यूजर प्रेफरेंस में जाके डेट्स में जाओ, डेट्स में जाके सिलेक्ट करो डू नॉट शो टाइम, देखो नीचे Do not show. Yes. या Then फिर close. ये है, फिर आप क्लोज कर दो इसे, Yes. ठीक है। क्लोज करने के बाद ये आपका जो है टाइम बंद हो जाएगा, आपकी फील्ड जो है वो छोटी हो जाएगी, अपना स्पेस रिक्लेम कर लो आप। अच्छा गाइस एक काम करो, नियाज आपकी ना स्क्रीन पे आप फिल डाउन करो, ऊपर से 6 दिन भर लो, सब में ना ऐसे 6 दिन भर लो सारी एक्टिविटीज में। नाउ गाइस आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू समथिंग, ध्यान से देखना गाइस। डू यू सी दिस ब्लैक बार हियर? ये ब्लैक बार क्या है? ये ब्लैक बार है आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन। क्या है ये ब्लैक बार क्या है? प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्रोजेक्ट टाइमलाइन। और ये जो सारे जो ग्रीन बार्स क्या हैं, ये आपके हैं? ड्यूरेशन है। नहीं, एक्टिविटी टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है, ये एक्टिविटी की लंबाई को दिखा रहा है, वो प्रोजेक्ट की लंबाई को, ठीक है। आनंद, हाँ keep your mouse still, okay, otherwise I will beat your mouse, okay. Okay, now you have to understand that how the project timeline is getting the duration, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है कहाँ से लेता है ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज राइट नाउ it is having a duration of the 6 days. Do you see the duration of the project timeline? But this duration is measured. It is not entered by you. Right, guys? Is it clear? The project duration is entered, it is calculated by the system. It is not entered by you. Now, if you want to
see the project timeline change, just do this thing. Go to the last task and change the duration to 12 days. You change it to 12 days. Now, guys, what do you see? You see that immediately the project timeline is becoming equal to the longest activity. You see that? I have one doubt. Yes, quickly. So last week, just previous to this slide, making 12 days, we have done 6 days. But in my LSN2 critical path, it is showing 7 days. नहीं 7 कहाँ से आएगा बाबा? आप डालो ना 12 days. 7 क्यों आएगा? 7 से हम तो 12 से पहले 12 से पहले अभी तो मैं क्रिटिकल बात मैंने तो बताया नहीं है. मैं तो ये अभी समझा रहा हूँ कि आपका क्या आ रहा है कि 7 days आ रहा है तो फिल डाउन कर रहा हूँ ना 6 सब में, फिर भी वो 7 ले रहा है. 7 ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वो कैलेंडर में जो है वो समस्या है. इसका मतलब कैलेंडर सही ढंग से सेट नहीं हुआ है ना. तो आप एक काम करो, मेरे को स्क्रीन दिखाओ, अभी ठीक करते हैं. तो डिफॉल्ट ले रखा होगा उसमें. फटाफट करते हैं भैया. अभिषेक, एक्चुअली पता क्या है, अभी तक ना 3 लेसन कंप्लीट हो जाने चाहिए थे. आज मैं फास्टिंग करूंगा. आज हम सारे फास्टिंग पे रहेंगे गाइस. मैं क्लियर कर रहा हूँ. अच्छा, पहले मैं काम करता हूँ. पहले तो मैं एक मैं ग्लोबल चेंज में रन करता हूँ. हो सकता है किसी एक्टिविटी में आईएसटी कैलेंडर लगा ही ना हो. देखो अब आया कि समझ में दिख गया आपको, है ना. अब मैंने कर दिया. अब वो बात पता क्या है कि क्योंकि मुझे तो वो दिख नहीं रहा ना कैलेंडर का, तो कॉलम मैंने बंद कर दिया. मुझे डाउट हो रहा है. ठीक. अब इसमें क्या हुआ कि 6 दिन हो गए. आप अगर चाहते तो इस कैलेंडर की डिटेल में भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे नीचे आपको दिख जाए कैलेंडर. मान लो मैं इसको कर देता हूँ, मैं फिर से कॉर्पोरेट कर देता हूँ. अब आप ध्यान से देखना क्या हुआ. 6 दिन का काम जब वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी सैटरडे की छुट्टी होती है. अब मान लो कि अगर आप यहाँ से देख लेते तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो. एक आध आइटम के लिए आपको इनफैक्ट मैक्रो चलाने या बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर मान लो कि खूब सारे मतलब आपकी एक्टिविटीज में अगर ये गलत चीज कोई हो जाए तो उसको अप टू डेट करने के लिए मैक्रो बनाना जायज है. उतना टाइम इन्वेस्ट करना फिर ठीक होता है. पहले इंसान तो हाथ से ही काम करता था ना. तो पहले इंसान की जो है ना वो जरूरतें कम थी. तो हर काम, जैसे कपड़ा भी हाथ से ही बनता था, खाना भी हाथ से ही बनता था. आजकल तो बड़ी फैक्ट्रीज में आपने देखा है जो आलू की चिप्स हैं पहले हाथ से बनती थी, और वो सारा जो है ना वो मशीनों से बनती है. आपने देखा एक वो मशीन आ रही है, इंटरनेट में जाओ टाइप कर देना रोटीमेटिक. वो क्या है कि इस तरफ आटा डालो, पानी डालो, मशीन के अंदर थोड़ा तेल डाल दो. वो क्या करेगी, आटे को गूंद के और सामने से जो है वो रोटियां निकाल देगी आपको. क्योंकि अब आदमी के पास टाइम नहीं है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम कम होता है ना और काम ज्यादा होता है, तब हम मैक्रो लिखते हैं या ग्लोबल चेंज लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं जो है ना वापस आनंद में जा रहा हूँ. तो आनंद, यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन. यस गाइस, आज जो है हम खाना नहीं खाएंगे. ठीक है. अच्छा, तो अब इसका नाउ गाइस एक चीज मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं. आपने जब इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को 12 दिन किया तो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो इसके बराबर आ गई. ठीक है, समझे कि नहीं. अच्छा, अब आप एक काम करो, आप ध्यान से देखना. अब इस पे जो ये नजर रखना. अब जैसे आनंद से मैं कह रहा हूँ, आनंद ये जो एक्टिविटी है ना 1090, दिस एक्टिविटी 1090 इंक्रीज द ड्यूरेशन टू 15 days. Make it to 15. Now do you see that it is now becoming equal to this one? Okay. Yes. Now you go to this activity 1010 and make the duration to 3 weeks. Make the duration, change the duration to 3 weeks for this. Now guys, do you see that it is always equal to the longest activity? Do you see that? The project duration is derived from the longest activity. So we can say that if this activity is delayed, then the project can be delayed, right or wrong? Right. So now, due to this reason, what the project manager will do, in the past, when there were no computers, after drawing the Gantt chart on the draft board, so the project manager will take a red pen and will put a red line. क्यों?
एंड ही विल कॉल इट द क्रिटिकल पाथ। इसको वो कहेगा क्रिटिकल पाथ। अब ये समझो कि ये क्रिटिकल क्यों है। अब ध्यान से देखना। अब मान लो मैं एक ना लाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनना और ध्यान से देना आंसर, और ये डेमो स्क्रीन की तरफ ध्यान देना। मान लो एक आदमी है इस एक्टिविटी पे, वो चलते हुए प्रोजेक्ट में, रनिंग प्रोजेक्ट में, वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को जो है एक दिन छुट्टी करनी है। क्या क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि बॉस मैं एक दिन में छुट्टी पे जाऊंगा रनिंग प्रोजेक्ट के बीच में। अब बताओ कि अगर वो बीच में एक दिन की छुट्टी ले लेगा तो ये टास्क कौन सी तारीख पे पहुंच जाएगी, इसकी फिनिश डेट? एक ही दिन एक्स्ट्रा होएगा। अरे डेट पूछ रहा हूँ, वो मुझे ही पता है एक दिन एक्स्ट्रा होगा। मुझे वो मत बताओ जो मुझे पता है, मुझे वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, कितनी तारीख पे जाएगा? मंडे मंडे। हाँ मंडे पे जाएगा। वही मंडे आप कहो कि 22 तारीख पे ये चला जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को संडे है। अगर आदमी, अब मेरे को एक चीज बताओ, उसने काम का दिन तो एक दिन एक्स्ट्रा लिया, अब क्लाइंट क्या कहेगा आपसे? क्लाइंट कहेगा आपने मेरा प्रोजेक्ट 2 दिन डिले कर दिया। डिले हुआ कि नहीं हुआ? Yes. है ना? Yes. अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक आदमी है, वो इस एक्टिविटी पे काम कर रहा है। किस पे? 1090 पे। आपने देखा कि 1090 और ये जो प्रोजेक्ट की जो फिनिश डेट है, ये जो फिनिश टाइमलाइन है, इसके बीच में गैप है जो मैंने एक ब्लैक मार्कर से मैंने लगा दिया। अब इसमें जो आदमी है वो रनिंग प्रोजेक्ट में बीच में एक दिन की वो छुट्टी ले लेता है, तो डिले होगा या नहीं होगा? प्रोजेक्ट की फिनिश डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी आगे, क्योंकि गैप है ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब एक और आदमी है नीचे, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1220 पे। अब वो कह रहा है कि सर मैं, वो रनिंग प्रोजेक्ट के बीच में बोल रहा है कि सर मेरे को 2 दिन की चाहिए छुट्टी। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये जो नीचे वाला आदमी, अगर ये 2 दिन की छुट्टी ये ले लेगा तो प्रोजेक्ट डिले होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं। नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ किस पे कितने दिन का गैप है। देखो, इस पे तो 0 डेज का गैप है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस पे है 3 दिन का गैप, और इस पे है 6 दिन का गैप। बात आ गई समझ में? है ना? इनफैक्ट बीच में जो एक्टिविटीज है उनके पास भी गैप है, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा। तो जो एक्टिविटी जिसपे बिल्कुल गैप नहीं है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी, और उस क्रिटिकल एक्टिविटी के पाथ को हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो पहले तो गैंट चार्ट तैयार करता था, फिर वो मैथमेटिकली क्रिटिकल पाथ को वो कैलकुलेट करता था, और कैलकुलेट करने के बाद वो रेड पेन से निशान लगाता था। और निशान लगाने के बाद आज वो जो करता था पहले क्रिटिकल पाथ मीटिंग, वो आज भी करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मीटिंग, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि अब इसके अंदर मैं क्रिटिकल पाथ को मैं चेंज कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो एक्टिविटी है आनंद, इस एक्टिविटी को कर दो आप 20 डेज। इस I have a doubt, sir. I have a doubt. एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी डाउट मत रखो, अभी पहले देखो इसे। अभी डाउट अपने आप क्लियर होगा। इसको आपने कर दिया ना 20 डेज। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब ये क्रिटिकल पाथ बन गया, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है रेड कलर नहीं लगा रहा। आप कहोगे कि सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है अगर ये रेड कलर नहीं लगाएगा तो हाँ, हमें काम करते हैं कि सॉफ्टवेयर को कहते हैं क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करके रेड कलर बनाओ, ठीक है, रेड कलर लगाओ इसमें। तो आप एक काम करो, ये जो बटन है ना, इस पे क्लिक करो, जरा करो, इस पे क्लिक करो। दिस इज कॉल्ड दी शेड्यूलिंग बटन। ओके, मैं एक मिनट रुकता हूँ गाइस, प्लीज कंफर्म कि आपने शेड्यूल का बटन प्रेस किया है और ये शेड्यूल का बॉक्स आ रहा है आपके पास। यहां तक पहुंच गए सारे? Yes. वेरी गुड। अब आप क्या करो कि ये शेड्यूल का बटन प्रेस करो। यहाँ पे शेड्यूल का बटन प्रेस करने के बाद आप ये देखोगे कि प्राइमावेरा ने इसके ऊपर रेड कलर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कॉलम है फ्लोट, इसके जो है कॉलम में क्या है? 0 0
और जीरो क्यों है? आप देखो, मैं ना लाइन पूरा ड्रॉ gap। कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई गैप है ये फिनिश लाइन और इसमें? और ये वाली लाइन कौन सी है? ये फिनिश डेट लाइन है, ठीक है। आपने देखा इसके और उसके बीच में कोई गैप है? नहीं है। अच्छा, अब बाकी जिन एक्टिविटीज में जो गैप है, मैं कुछ कुछ एक्टिविटीज के लिए मैं ये मार्कर लगा रहा हूँ। देखिए आपको ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है। अच्छा, ये बताओ जो ऊपर जो 1000 है उसमें फ्लोट कितना है? 14 days। और उसके जो बाद जो एक्टिविटी है 10 में कितना फ्लोट है? 2 days। 2 days. So this 2 days is basically the gap of 2 days from the finish line. Now you tell me that what is the float in the activity 1220? 8 days। 8 days. So I'll show you that where is there. See, 6 days are coming from here and 2 working days are coming from here. So guys, let me tell you one thing, and you should remember it permanently. The non-working days are not counted in the float. So the Sunday will not be counted. Okay. So guys, is this thing clear? Yes. The Sunday will not be counted. Only the working days will be counted as float, because those are the opportunity to work which you cannot use. See, Sunday is no opportunity to work. Anyways, you can't use it. So those are not considered as the float. Only the working days are considered as the float, because on those days you can possibly work. So any person taking a leave on the float can take a leave less than the float. Guys, is this clear? अब मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी जो है इस एक्टिविटी में काम कर रहा है, गाइस ध्यान से सुनना। अगर वो 10-10 पे काम कर रहा है, वो आपसे कह रहा है कि बॉस मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 10-10 पे काम कर रहा है, ध्यान से देखना। आप उसको 3 दिन की छुट्टी दे पाओगे? यस नो? ध्यान से देखो 10-10 की तरफ, इस पे डेमो स्क्रीन पे कितना फ्लोट है? 2 दिन का गैप है। नहीं सर, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे ना? हाँ, तो बोलो। तो 2 दिन का गैप है, उसको आप क्या कहोगे? भैया देख, अगर तू ईमानदारी से छुट्टी लेता है तो 2 दिन की ले ले, और 2 दिन की छुट्टी लेके 2 दिन में ही आ जा। तो उसको कहीं से भी एक्टिविटी के बीच में अगर 2 दिन का अगर आप उसे छुट्टी दे देते हो और वो ईमानदारी से अगर 2 दिन में ही लौट आता है, तो आपकी एक्टिविटी बिल्कुल जाके लास्ट डेट पे कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिले नहीं होगा। लेकिन अब ये आदमी जो है यहाँ पे जो जिसका जो क्रिटिकल पाथ है, वो कह रहा है कि उसको आप 2 दिन की दे रहे हो छुट्टी, आप मुझे एक दिन की भी नहीं दे रहे छुट्टी। तो उसको क्या समझाओगे? उसको कहोगे भाई तुम्हारी एक्टिविटी में फ्लोट ही नहीं है, तुम्हारी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ है, एंड क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट। गाइस, इज दिस क्लियर? अब ये बात क्लियर है? क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। आनंद, डोंट क्लिक। ओके, so critical path is the longest path. अच्छा, Sir, can there be 2 critical paths in a project? हाँ, yes. Very good question. Yes, there can be 2 critical paths, but every project first of all will have 1 minimum critical path. So is that clear? Okay. Okay. Now what is happening right now? The critical path is in the manual mode. But why are you thinking that we are using such fast computers, and why are we having the manual mode? Guys, you have to understand one thing. Primavera was released first time in 1983. Okay. No, not in 83, but in 1993. When it was released in 1993, the computers were not so powerful, but that is why they used to have the batch process. So you know what they will do in those times, the software to design to take the data, and then you will press some button and it will do the batch processing. It was not real-time processing, that you did some action and instantly it updated on the screen. So that is why it is right now in the manual mode. So by default, it is still, even today, it is in the manual mode, but we will convert it into the automatic mode. देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो इस एक्टिविटी को भी मैं जो है 20 दिन का मैं ये कर देता हूँ। अब आप देखोगे ये भी एक क्रिटिकल पाथ है, दोनों ही है। गाइस, देखिए आपको ये और ये दोनों ही क्रिटिकल पाथ है, लेकिन एक लाल में है और एक अभी भी ग्रीन में है,
और इसका जो फ्लोट वाला जो कॉलम है वो अभी भी 2 डेज शो कर रहा है। तो अभी बात पता क्या है कि अभी इसने इसको प्रोसेस नहीं किया है, तो अब मैं इसको ऑटोमेटिक मोड में चेंज कर दूंगा। क्या क्या हुआ कि 93 से चलते चलते जब हम जो है आगे हम बढ़े 95 98 में, तब सीपीयू आ गए नए और बड़े फास्ट वाले आ गए सीपीयू। तब प्राइमावेरा ने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि ओरेकल कंपनी ने जिन लोगों के पास पुराने सीपीयू हैं वो मैनुअल मोड में यूज करो, जिन लोगों के पास नए फास्ट वाले सीपीयू हैं वो ऑटोमेटिक मोड में यूज करो। अब मुझे ये बताओ कि आपने कौन से मोड में काम करना है, ऑटोमेटिक या मैनुअल? ऑटोमेटिक में करेंगे। वेरी गुड। अब इसको जो है ऑटोमेटिक में चेंज करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करो शेड्यूलिंग के जो है ये बटन में। अच्छा, शेड्यूलिंग, आफ्टर यू क्लिक ऑन द शेड्यूलिंग बटन, स्टेप बाय स्टेप, आनंद कंट्रोल योर माउस, click on the options, click on the options. So guys, are you in the scheduling the options here? Yes, sir. So guys, read this option. ये ऑप्शन है जो चेक बॉक्स का, इसको ये पढ़ो। क्या है? आनंद आप तो पढ़ सकते हो यार इसे। Schedule active automatically when a change affects dates. हाँ, so is the meaning clear? Okay. Now, what kind of change is going to affect the date? One is the duration and one is the relation. The duration and relation, they can affect the change. So that is why we say schedule or automatically when a change affect the date. Now, what do? You select the. How to come on this pop-up, sir? हाँ, ये देखो, ये अच्छा सवाल पूछा। ये अच्छा हुआ इतनी जल्दी पूछ लिया आपने। कौन है? Yes. कहाँ थे? करो इस पे क्लिक करो, इधर Schedule, yes. हाँ, इस पे क्लिक करो। ठीक है, देखो क्लिक करके देखो ये आ गया बॉक्स। पहुंच गए यहाँ तक? Yes, sir. अब इस पे ऑप्शन में क्लिक करो। Option. Okay. Yes. ठीक है, ऑप्शन में कर दिया क्लिक। अच्छा, ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दिया है। अब नियाज इसको जरा ये पढ़ो, इसे ये वाला पढ़ो, ये ऑप्शन पढ़ो, इसमें चेक बॉक्स वाला। Schedule automatically when a change affects dates. इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर जी, जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि केबीसी में कंप्यूटर जी से हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी एक्टिविटी में कोई भी चेंज हो जाए, उसकी ड्यूरेशन चेंज, यार तुम हिला देते हो स्क्रीन, यार ये गलत बात है। No. दूसरे लोग भी हैं यहाँ पे और तुम्हारी स्क्रीन डेमो स्क्रीन है। No. मेरे को वो नीचे वाला नहीं देखता था, इसके लिए मैं थोड़ा आगे कर दिया। अरे भाई, नीचे वाले को कहो कि भैया वो थोड़ा शांति से बैठे ताकि ऊपर वाले पढ़ सके। देखो, हाँ देखो, दूसरे लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी मार्किंग तो हिलती नहीं है ना, मार्किंग तो वहीं पे। अब ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। शेड्यूल ऑटोमेटिकली when it. Now, what are the changes when a task is changed? See, when the duration is changed, when the relation is changed. Keep in mind, duration, relation. Now, when these two changes happen, so you are asking the Primavera to immediately create the schedule, update the schedule automatically. Now, after you have done this setting, click on the close button. हाँ, close करो and click yes. Then after that you click on the schedule button once again. अब शेड्यूल का जो रूल जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। अब इसको चेक करने का जो है कि वो तरीका क्या है, मैं आपको जो है वो बताता हूँ। देखो, सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी पे जाओ और इसकी ड्यूरेशन को आप 20 डेज कर दो, इसको भी 20 डेज कर दो। अब आप देखो क्या होगा तुरंत, देखा। अब जब 3 एक्टिविटी लॉन्गेस्ट हो गई तो ये क्रिटिकल पाथ बन गया। सो क्रिटिकल पाथ की जो डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन ये है, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। गाइस, डू यू एग्री और नॉट? क्रिटिकल पाथ। अच्छा, मान लो आपके बॉस आ गए रूम में, उन्होंने पूछा कि भाई आनंद, आप ना प्लानिंग कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में कितना ड्यूरेशन आया। So Anand, what you are going to tell your boss if he is asking the question, what is the duration of the project? Duration means up to 23rd it will be finishing. So I'm 20 days talking is the about the duration. duration. 20 days is the duration.
is asking for the duration. So 20 what? days. 20 days. 20. No, you will not tell him 20. You will tell him, boss, it will take minimum 20 days. Why? Because Weekends means possibility holidays there. are not calculated. No, not because of that. Because everything has a variance. You have to understand one thing. Okay. Guys, you are an engineer. I'm asking you to think of another term called tolerance. Guys, do you understand what is the meaning of tolerance? Yes. Tolerance is in the project management, it is called acceptable variance, right? So what is the tolerance? Tolerance is the variance of the dimension which is acceptable as good. ठीक है? मान लो कि एक आई एम मशीनिंग ए कंपोनेंट लाइक दिस, एक ना कंपोनेंट, सो दिस इज ए कंपोनेंट और क्लाइंट ने ना ये स्पेसिफिकेशन दिया है, क्या 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 दिया है क्लाइंट ने कहा है कि ये जो कंपोनेंट है 10 cm और इसका जो वेरिएंस है प्लस माइनस 0.00 मिलीमीटर रहेगा। तो गाइस इसमें इसका ये मतलब क्या है, प्लस माइनस 0.002 मिलीमीटर का, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल वेरिएंस। ये तो इसलिए हम जो है बॉस से ये हम बोलेंगे, बॉस इट इज 20 days बट इट इज मिनिमम 20 days, देयर कैन बी ए वेरिएशन। ठीक है, फिर बॉस आपसे पूछें कितने दिन का, आप बोल देना कि प्लस माइनस 1 day। ठीक है गाइस, इज दिस क्लियर? यस सर। सो बेसिकली क्या है कि आपने डिप्लोमेटिकली आंसर देना। अगर आपने बोल दिया 20 दिन और मान लो प्रोजेक्ट हुआ खत्म 21 दिन में, तो बॉस तो आपका फिर ये गला पकड़ लेंगे कि गोलीबाजी कर रहा है मेरे से। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? Yes. Yes, yes. एक चीज और सुन लो, दुनिया में कोई भी एब्सोल्युटली करेक्ट प्रोजेक्ट प्लान नहीं होता, हर प्रोजेक्ट प्लान में टॉलरेंस होता है। और वो टॉलरेंस का जो इंजीनियरिंग से अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मीनिंग में ले आता हूं, तो उसका मतलब होता है एक्सेप्टेबल वेरिएंस। उस वेरिएंस को जो एक्सेप्टेबल है, मैंने कहा कि भाई मेरा जो है 100 दिन का प्रोजेक्ट है, उसमें एक्सेप्टेबल वेरिएंस 3 दिन का है प्लस माइनस, मतलब मैं प्रोजेक्ट 97 से लेके 103 दिन के बीच में कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्टेबल वेरिएंस जो है ये बजट में कितना है, मान लो मैंने कहा कि मेरे बजट की बेस लाइन है 10 करोड़, तो मैंने कहा अभी प्लस माइनस 5 लाख में 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। 5 लाख ऊपर या 5 लाख नीचे आप ले लो। नीचे इसलिए नहीं जाना क्योंकि इससे क्वालिटी जो है इंफीरियर हो जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू स्क्रैप हो जाएगी। ऊपर इसलिए नहीं जाना क्योंकि इसके ऊपर जाने का मतलब है आप प्रोजेक्ट के जो है कैलकुलेटेड कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जिस चीज को हम इंजीनियरिंग में टॉलरेंस बोलते हैं, उस चीज को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस इसलिए हम ये लगाते हैं क्योंकि सीमेंट को हम कभी भी एब्सोल्युटली यूज नहीं कर पाते। आपने भी नोट किया होगा सैयद कि सीमेंट के अंदर एक वेस्टेज का भी हम फैक्टर हम लगाते, जो उसकी क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हैं, करते नहीं करते हम? जी सर बिल्कुल। अब कितना है बताओ एक्सेप्टेबल जो है, कितनी वेस्टेज है बताओ? 1%, 2% कितनी है सर? 2%। हाँ, अगर एक साइड पे क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची घटना, आज से नहीं तो 10 साल पहले, तब तो खैर मैं मतलब प्राइमावेरा जब स्टार्ट किया था, ये सीमेंट में ना वेरिएंस आ रही, जो डेटा हमने जो बेसलाइन बनाई और साइड से जो डेटा आ रहा जो कंजम्पशन का, उसमें वेरिएंस पता कितनी आ रही? उसमें वेरिएंस आ रही 10% की। तो 10% में से हमने 2% तो लेस कर दिया। हमने कहा 8% की वेरिएंस किस चीज की है? आदमी के इन्वेस्टिगेट करके 15 दिन बाद कहता है कि सर रात में चोरी होती है। बात आ गई समझ में? अगर मान लो हमारे पास बेसलाइन नहीं होती तो हम पकड़ पाते? हम नहीं पकड़। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में लाखों का लॉस हो जाता। अब वो रिमोट साइट में काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, और वो रिमोट साइट में रात में जो है वहां पे ऑफ द ग्रिड जगह है, फिर वहां पे जनरेटर का इंतजाम किया गया, फिर वहां पे गार्ड लगाए गए, फिर उसके बाद जो है फिर देखा कि जो एक्सेप्टेबल वेरिएंस 2% में ही काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बेसलाइन आपके रहनी चाहिए और कितना आपका वेरिएंस एक्सेप्टेबल है। आप देखोगे पेंट होता है, थिनर होता है, ये लगाते लगाते जो वर्कर के डब्बे में ही इवेपोरेट हो जाता है। होता है नहीं होता? Yes. है ना? तो हम अब जो ईंटें होती हैं, ईंटें जब ट्रक से जब उतरती है तो सारी ईंटें क्या साबुत रहती है जब तक ढेर बनता है? नहीं,
5% का वेरिएंस। हाँ, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें एक्सेप्टेबल वेरिएंस इतना है। तो प्रोजेक्ट का कोई भी प्लान बनता है गाइस, उसमें क्या होता है कि जब भी अगर कोई बॉस पूछे, कोई भी स्टेक होल्डर पूछे, तो आपने बोलना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट का जो बेसलाइन ड्यूरेशन है वो 100 डेज का है, और उसके ऊपर जो एक्सेप्टेबल जो वेरिएंस है प्लस माइनस जो भी ठीक है, जो रीजनेबल है। आप कहोगे कि भी प्लस माइनस 3 दिन या 5 दिन, हमेशा ऐसे बोलना है। तो यू विल टेल योर बॉस इट इज गोइंग टू टेक मिनिमम 20 days. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ? The definition of the critical path derives from this common sense. So I'm going to write it. The longest path with the zero float. नहीं, जीरो फ्लोट तो है, उसको नहीं लिखूंगा। जो आप जानते हो मैं आपको वो मैं बताऊंगा जो आपने जानना है। अब जो क्रिटिकल पाथ के बारे में मैं जो समझाने वाला हूं उस पे आपने ध्यान देना है। पहले तो इसको पढ़ो कि क्रिटिकल पाथ का लिखा क्या है मैंने। longest path and it represents minimum time to complete the project. मानते हो ना कि मिनिमम अगर आप इस पे ध्यान दो, भाई कम से कम 20 दिन तो चाहिए ही चाहिए, है ना? Yes, yes, sir. क्रिटिकल पाथ से तो कम में तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए ये वाला मीनिंग जो है ये कई लोगों को नहीं समझ में आता। इसलिए मैं सबसे मैं पूछता हूं, आप इस लाल लाइन की तरफ ध्यान दो और ध्यान से सोच के मुझे बताओ, क्या इससे कम में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि फिजिकली तो लॉन्गेस्ट है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम से कम आपको इतना टाइम चाहिए। अच्छा, वेरिएशन जब भी होती है ना, तो वेरिएशन की टेंडेंसी माइनस की तरफ बल्कि ज्यादा प्लस की तरफ होती है। कॉस्ट में नोट ये कभी हुआ है कि आपने 10 लाख में प्रोजेक्ट प्लान किया हो और वो 10 लाख से वो कम में कंप्लीट हुआ हो? वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही होती है। प्लस माइनस तो कहने वाली बात है, लेकिन जब रियल लाइफ में काम करोगे तो आप देखोगे कि वेरिएंस हमेशा प्लस की डायरेक्शन में ही होती है। प्लस डेज, प्लस कॉस्ट, प्लस मटेरियल। आपका हुआ है कभी 100 टन कैलकुलेट करा सीमेंट और 99 टन में कंप्लीट हुआ है? हुआ नहीं होगा कभी ऐसा, ठीक है? ज्यादा ही बैठता है। हाँ, तो वो ज्यादा ही बैठ जाता है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं इट रिप्रेजेंट द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है? तो दिस इज द डेफिनेट यस ऑफ एंड आल्सो क्रिटिकल पाथ है जीरो फ्लोट। जीरो फ्लोट का मतलब है उसकी अपनी जो फिनिश डेट है उससे उसके साथ उसका गैप होता है जीरो। अब क्रिटिकल पाथ में अब मैं आपको समझाता हूं कि क्रिटिकल पाथ का यूज क्या होता है। देखो, क्रिटिकल पाथ में अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने क्रिटिकल पाथ है? ये जो प्लान जो आपके सामने है, जो डेमो स्क्रीन पे जो प्लान है, कितने क्रिटिकल पाथ है? 3 है ना? अच्छा, मान लो कि मैं यहाँ पे कि 3 एक्टिविटीज मैं ले लेता हूँ या मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे ना मैं काम करता हूँ, मैं 3 एक्टिविटी ले लेता हूँ, इनको मैं लिंक करता हूँ, ठीक है? लिंक करने के बाद नहीं सॉरी, एक सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ मैं 6 days। तो ये हो गया 18, इसको भी मैं कर देता हूँ 18, और इसको भी मैं कर देता हूँ 18, ठीक है? तो गाइस अब देखो क्रिटिकल पाथ से कितने? 3 है क्रिटिकल पाथ। एक क्रिटिकल पाथ में 3 टास्क कंबाइंड है, 1 2 3 तो क्रिटिकल पाथ है। अब ये चीज बताओ कि क्रिटिकल टास्क कितने हैं? बताओ, क्रिटिकल टास्क कितने? 5 है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। क्रिटिकल टास्क आपके पास 5 है। अब आपने करना क्या है कि एक मीटिंग कॉल करनी है जिसमें 5 लोग आएंगे जो कि एक्टिविटी या टास्क ओनर हैं। अब इनसे आपने मीटिंग करनी। ये मीटिंग कोई समझाएगा नहीं, कोई भी ट्रेनर। वो बोल देगा देखो ये लाल रंग का है तो ये क्रिटिकल टास्क है, क्रिटिकल पाथ है, खत्म बात। वहां से बात खत्म नहीं होती, वहां से बात होती शुरू। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मीटिंग, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये सिर्फ मैं ही अपनी उसमें समझाता हूँ। एक लड़का इसका जवाब दे के यूके पहुंच गया, वो इसी क्वेश्चन का उसने जवाब दिया जैसे मैंने उसको बस समझाया था।
उसका नाम है ब्रिजराज पांडे, उसका टेस्टिमोनियल भी है मेरे पास। बिल्कुल हिंदी में बोलता था, छोटी मोटी कंपनी में काम करता था बिहार में, और इसने कोर्स अटेंड किया। मैंने उसको ना एक चीज कहा, ब्रिजराज देखो अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, प्राइमावेरा में तो बड़ी इंटेलिजेंस तुमने दे दिखाई है, लेकिन ना तुम प्लीज कहीं से भी इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स कर लो। उसने ना मेरी बात को बहुत ही सीरियसली मान लिया, और उसने जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, ठीक है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, और बाई चांस उसने रिज्यूमे दिया था ऐसी कंपनी में जो यूके बेस्ड वो कंस्ट्रक्शन वो कंपनी थी, उसका इंडिया में कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहां पे उसका सिलेक्शन हो गया। अब वो यूके में ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पे उसको जो है वो कुछ कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, फिर वो इंडिया में आके कंपनी के प्रोजेक्ट वगैरह सब वो संभालेगा। तो जिंदगी में तरक्की करने के रास्ते बहुत हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना इधर। अब मैं ये बताता हूँ कि क्रिटिकल पाथ मीटिंग क्या होती है। तो गाइस, क्रिटिकल पाथ मीटिंग हम कब कॉल करेंगे? व्हेन योर प्लान इज कंप्लीट एंड करेक्ट, ओके, आफ्टर completing and checking the plan, आफ्टर कंप्लीटिंग एंड चेक, बीच में नहीं करना है, क्योंकि बीच में क्रिटिकल पाथ आपकी रिलायबली कैलकुलेट नहीं हो सकती। जब तक आपकी एक्टिविटी कंप्लीट एंड करेक्ट नहीं होगी तब तक क्रिटिकल पाथ जो है दिखाने कोई तुक नहीं बनता। अब आपने करना क्या है गाइस, मेरे साथ चलो, देखो यहाँ पे ना फिल्टर है, दिख गया आपको फिल्टर? 1 minute, sir. Just 1 minute. 10, 10, 10, अनंत 10, 103. फिल्टर में क्लिक करो। एक मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। एक आपके पीछे कोई बोल रहा है क्या? कोई बैकग्राउंड में है क्या आपके? For 1 minute. For 1010, 1020, and 1030, you have assigned these predecessors. हाँ, इनको मैंने लिंक किया है, थोड़ा सिंपल तरीके से लिंक किया। मैंने ये समझाने के लिंक किया है, कभी आपको ये फील ना हो कि क्रिटिकल पाथ सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी से बनती है, वो एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से भी बनती है। जब हम रेल के डब्बों की तरह एक्टिविटी को जोड़ते हैं ना फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में, तब भी क्रिटिकल पाथ बनती है। इसलिए आपके मैं माइंड सेट को हार्ड कोड नहीं करना चाहता। ओके, तो लिंक कैसे किया आपने इसमें? हाँ, लिंक अभी मैं समझाऊंगा। पहले तो आप ये समझो, मैं जो समझाने वाला हूँ क्रिटिकल पाथ मीटिंग, लिंक हम आएंगे, वो मेरा नेक्स्ट है, इसके बाद हम लिंकिंग पे आएंगे। अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्रिटिकल पाथ जो एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, एक सिंगल एक्टिविटी से भी बन सकता है। आनंद, प्लीज क्लिक ऑन द फिल्टर। कहाँ पे हो आनंद? अरे क्लास छोड़ के वो बच्चे चला गया यार, क्या आनंद, वेयर आर यू? अच्छा, मैं, हाँ, ओके। नाउ गाइस, आफ्टर सिलेक्टिंग द फिल्टर, you will select from here. In the filter you will select critical, so you can see that there is a critical option here, so you select this checkbox, the critical checkbox. आनंद, अब गाइस मेरी आवाज मिल रही है आपको? yes. वो आनंद बोल रहा है कि उसको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। मैं नहीं, सब ना थोड़ी फीडबैक दे दिया करो, हो सकता है मेरा डिस्कनेक्ट हुआ हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, हैव यू सिलेक्टेड द क्रिटिकल फिल्टर? यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अभिषेक फॉर फीडबैक। अब इसको करो ओके। देखो अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास सिर्फ जो क्रिटिकल एक्टिविटीज आपकी आ रही है। तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज कितनी है? एज ऑन द डेमो स्क्रीन कितनी एक्टिविटीज हैं आपके पास? आपके पास होगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इन 5 लोगों को मीटिंग में बुलाना है आपने, और इन 5 से आपने क्वेश्चन करना है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन। किसी के ना बैकग्राउंड में ना नॉइज हो रही है, प्लीज अपना ना माइक प्लीज वो बंद कर दो, खचर 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 की साउंड हो रही है।
गाइस ये पढ़ो इसे, क्या क्या लिखा है? आनंद, यू इफ यू आर नॉट If you हैविंग, have planned to take leave during the activity, हाँ, अगर अगर मान लो कि अगर कोई भी आदमी अगर इस एक्टिविटी में वो छुट्टी ले लेता है अपने, अब क्रिटिकल है, फ्लोट इज जीरो। अब ध्यान से देखो, जीरो फ्लोट मीन्स देयर इज रूम फॉर गैप, नो डिले। Anand, so you have to so then if this guy says no, then it's not a problem. If this guy says yes, boss, I have planned to take the leave during this activity, if he says yes, then guys, what will be your response? So I'm going to write the response. Guys, response क्या होगा मेरा? अगर मान लो ये आदमी कह रहा है नहीं मैं छुट्टी पे जाऊंगा, देखो छुट्टी पे जाने की जैसे मान लो कुछ होते हैं रीजन जो कि नेगोशिएबल होते हैं, कुछ नॉन नेगोशिएबल। अगर कोई आदमी कह रहा है कि सर मेरी एंगेजमेंट होगी या मेरी शादी होगी या मेरी वाइफ के बच्चा हो रहा है या फिर जो है मेरे भाई की शादी है या सिस्टर की है, तो क्या होगा कि ये सब चीजें तो हमें पता है कि जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है, ये नॉन नेगोशिएबल होती है, इस डेट्स को आदमी टाल नहीं सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट से बहुत पहले अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आदमी इन डेट्स में छुट्टी करना चाहता है, तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू अरेंज फॉर इक्वली स्किल्ड रिसोर्स। ठीक है कि नहीं है? yes sir. ठीक है ना? करेक्ट। अच्छा, अब हम दूसरा सवाल उससे पूछेंगे। देखो दूसरा सवाल मेरा उससे ही होगा, इज देयर एनी इक्विपमेंट विच कैन ब्रेक डाउन। मान लो कि कोई भी इक्विपमेंट क्रिटिकल पाथ पे यूज हो रहा है और इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसका काम जो है वो चलेगा या बंद हो जाएगा? जाहिर बात है काम बंद हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या है कि उसको ये जो है हमने सोल्यूशन देना है। क्या देना है वो सोल्यूशन? अगर वो कहता है कि हाँ बॉस ऐसा इक्विपमेंट है जो ब्रेक डाउन हो सकता है, तो मैं उसको ये मैं दूंगा सजेशन या फिर सॉल्यूशन। गाइस पढ़ो, मैंने क्या लिखा आंसर? Yes, if it is small, arrange standby. If big, then arrange preventive maintenance. मैं ये बोल रहा हूँ अगर छोटी सी अगर कोई वो मशीन है तो एक स्टैंड बाई ले आओ। अगर ये बड़ी मशीन है तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए भेज दो, है ना? तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको पता है ना क्या होता है कि मशीन को चलाने से पहले हम खोल के सारा कुछ जो है जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको जो है चेंज या रिप्लेस हम कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब उसका लैपटॉप ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में नहीं गया अभी तक, बताओ। यही हाल होता है क्रिटिकल पाथ में। हमारा जो ट्रेनिंग है ना क्रिटिकल पाथ में चल रहा है, इसमें फ्लोट नहीं है। बात आ रही समझ में? Yes. तो सयाद अपनी स्क्रीन शेयर करो। हम क्या करते हैं कि स्टैंड बाई पे जो है चले जाते हैं, हमारे पास तो स्टैंड बाई है कहीं। आ जाओ स्टैंड बाई में। हाँ देखो, तो इसलिए यही मैं समझा रहा हूँ कि क्रिटिकल पाथ की मीटिंग आपने करनी है, उस मीटिंग में ये पूछा, देखा हम स्टैंड बाई पे मतलब हो गए ना शिफ्ट। Yes sir. ठीक है, अब वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर रहा उसकी, तो अब हमने क्या किया स्टैंड बाई पे शिफ्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगी, वो जो क्वेश्चन जो लिखे थे वो हो गए गायब। अब मैं फिर से नहीं लिख पाऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं तीसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यूं है
अब तीसरा मेरा क्वेश्चन यूं है, इज देयर एनी मटेरियल विच कैन रन इन शॉर्ट सप्लाई? अब देखो, मैं एक ना छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। गाड़ी है, आदमी है, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चल पाएगी? नो सर, नो। नहीं चल पाएगी ना। तो पेट्रोल क्या मटेरियल है। तो कैब ड्राइवर इज द मैन, car is the machine, material is the petrol. If the material is not there, can the activity be done? No. So this is what I'm going to tell him. If he says which can run in short supply, तो मैं उसको यही कहूँगा, वो suggest order it now to see if there could be any interruption in रेगुलर सप्लाई। देखो, मैंने अपने टीम मेंबर को मैंने उसको समझाया कि अभी इसको ऑर्डर कर दो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि रेगुलर जो सप्लाई है, मतलब रेगुलर जो सप्लायर है, उसके वहां से आने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या हुआ कि मेरे आदमी ने जो है मेरी बात मानी। उसने क्या किया, तुरंत उसने सप्लायर को फोन किया और मैंने उससे कहा कि बेटा इससे बोल कि मेरे को 2 हफ्ते में चाहिए। अभी मुझे चाहिए नहीं, मेरे प्रोजेक्ट की डेट कब है? मई के महीने में है ना। बात आ रही समझ में? यस सर, यस सर। अभी मैं कौन से महीने में बैठा हूँ? अभी मान के चलो कि मैं जो है मतलब सितंबर में पहुंच गया। अभी मैं सितंबर में प्लान कर रहा हूँ, तो सितंबर है साल 22। काम मैं करूंगा 1 मई से, लेकिन मैं अपने आदमी को कह रहा हूँ तो उसने सप्लायर से बोल कि आज से 15 दिन में चाहिए ये सामान। देख, पूछ के देख वो क्या रिएक्शन देता है। तो उसने कहा, स्पीकर फोन लगाया, उसने कहा भी सप्लायर से कि मेरे को 15 दिन में ये मटेरियल चाहिए। उसने कहा कि सर ये ना पहले 15 दिन में मिलता था, क्योंकि ये यूक्रेन से आया करता था। बात आ रही समझ में? यूक्रेन से ये मटेरियल मिलता था 15 दिन में, अब ये जो है यूक्रेन से नहीं मिलता। तो मैंने कहा भाई तेरी बात तो ठीक है, कहाँ से मिलता है वहां का नाम बोल। कह रहे कि अब ये मिलता है ताइवान से। तो ताइवान से कितने दिन में लाएगा? कह वहां से सर 1 महीने में ले आऊंगा। तो मैंने कहा फिर ले आ। बात आ गई समझ में? अब उसको मैंने ऑर्डर दे दिया और मटेरियल आ गई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। काम करूंगा मैं मई में। दिक्कत है कोई? क्रिटिकल पाथ पे जो है मटेरियल अगर पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और रख लो 3-4 महीने, ठीक है। बात आ रही है कि नहीं समझ में? तो मैन और मशीन का इंतजाम कर दिया, मटेरियल का भी कर दिया। एक चौथा क्वेश्चन और मैंने पूछना है। देखो, क्वेश्चन जो है वो पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो सैयद। Is there any subcontracted work which required large cash payment approval? हाँ, देखो, लार्ज कैश पेमेंट अप्रूवल जो होता है वो कई जगह से अप्रूव होता है, तो उसमें टाइम लगता है। हमारी कंपनी में 5 दिन का प्रोसेस है। मान लो मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और मैंने फिर कैश अप्रूवल के लिए, पेमेंट के लिए, अप्रूवल के लिए दिया। अब मेरी एक्टिविटी जो है 5 दिन की, 5 दिन अप्रूवल में लग गया, तो 10 दिन में हो रहा है। उसमें बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएगा। पता क्या होता है, ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो ठेकेदार जो होते हैं, इनकी जेब में कोई पैसा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, इधर उधर दूर दराज से जो है आदमी वो पकड़ पकड़ के ले आते हैं, लेकिन वो आपके पैसे से चलते हैं। आपने उनको आज पैसा दिया, वो शाम को बांट देगा, या आज दोगे तो कल बांट देगा। अगर उसको हम पैसा नहीं देंगे, वो क्या करेगा, सारे आदमी वो तितर बितर करके दूसरी साइड पे वो भेज देगा। मैंने देखा है ऐसा होते हुए, मुझे नहीं पता आपके होता है नहीं होता, लेकिन सिविल में ऐसे ही होता है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो फिर आपने इसका ख्याल रखना है। तो मैं अपने टीम मेंबर्स में मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई लार्ज कैश अप्रूवल है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि स्टार्ट दी अप्रूवल प्रोसेस इन एडवांस में ये अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट कर दो, कि ताकि इस एक्टिविटी से पहले आपके हाथ में अप्रूवल तो आ जाए। आपके पास अगर अप्रूवल है तो आप जो है मतलब अकाउंटेंट के पास जाओगे। हर अकाउंटेंट को हमने कंपनी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जिस पे अप्रूवल है उसको ऑन द स्पॉट कैश देना है, ठीक है।
मतलब अप्रूवल वाले को ये नहीं पता कि Okay, आपको right. मैं कल दूंगा अप्रूवल, तो इसलिए एक एक बोरी कैश जो है सब कैशियर को हमने दिया हुआ है, ठीक है। जिसके पास अप्रूवल है वो बोरी में से निकाल के उसको पैसा दे दे, ठीक है। तो दीज आर द 4 थिंग। तो इसके अंदर क्या है कि क्रिटिकल पाथ में व्हाट इज द थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इन द क्रिटिकल पाथ. So basically, if any activity is delayed, so then it is going to delay the project. Okay. So that is why we have to take care of this rule. So this rule in short is called 3M plus 1C rule. 3M plus 1C rule for delay prevention on critical path. So guys, is this clear? 3M plus 1C rule for delay prevention on critical path. समझ में आई बात? 3M क्या है? मैन मशीन मटेरियल, और 1C क्या है? कैश. तो डिले कहाँ पे होती है? डिले होती है क्रिटिकल पाथ से. बाकी पाथ पे तो फ्लोट है, थोड़ा थोड़ा फ्लोट है, तो उससे जो है कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी लेट भी हो गई तो थोड़ा सा फ्लोट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन वो क्रिटिकल पाथ नहीं वो बनेगा. तो क्रिटिकल पाथ पे तो आपके पास ये देखो कि ये बाउंड्रीज को ही खुद ही ये डिफाइन कर रहा है. तो फ्लोट इज 0. अगर फ्लोट अगर 0 है, देयर इज नो रूम फॉर डिले, तो हमने क्या करना है कि दिस इज ए नॉन रिस्क. डिले ऑन द क्रिटिकल पाथ इज ए नॉन रिस्क. तो व्हाट इज द नॉन रिस्क? द नॉन रिस्क इज द डिले और द शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. मान लो कि मैन पावर जो है वो डिले इन ज्वाइनिंग द प्रोजेक्ट है. कोई आदमी जो है किसी कंपनी से अपॉइंट हुआ हमारी कंपनी में आ रहा है, तो वो अगर वो डिले हो जाता है, हमारे इंटरनल पूल में से ही जो है सिलेक्शन करने में अगर ये डिले हो जाती है, तो दैट इज द डिले. एंड द डिले इन ज्वाइनिंग ऑफ द मैन मशीन एंड द मटेरियल कैन डिले द प्रोजेक्ट. सो दैट इज व्हाई वी से मैन मशीन मटेरियल प्लस द कैश शुड बी ऑलवेज देयर ऑन द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज. ठीक है गाइस, क्लियर है? Okay, sir, clear. है ना? तो क्रिटिकल पाथ पे हमने जो है जो नॉन रिस्क को जो है प्रिवेंट कर रहे हैं. एक नॉन रिस्क होती है, एक अननोन रिस्क होती है. नॉन रिस्क को हम जानते हैं, उसको हम जो है प्रिवेंट, जैसे फायर होती है नॉन रिस्क होती है, बारिश होती है नॉन रिस्क होती है. अननोन रिस्क क्या होती है? जैसे अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक को आप जो प्रेडिक्शन कर सकते हो, अननोन रिस्क होती है. अब जैसे मान लो कि भाई पेंडेमिक है, पेंडेमिक अननोन रिस्क है, उसको आप जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई मंकी पॉक्स कितने दिन में फैल के कहाँ तक जाएगा. कर सकते हो प्रेडिक्ट? नहीं कर सकते. अब पता क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ मैं 2019 की, 2019 की, ध्यान से सुनना मेरी बात. 2019 में नवंबर के महीने में मेरे पे एक वीडियो आया, चाइना से जो है किसी ने भेजा. तो वो कह रहा है कि देखो चाइना में क्या हो रहा है कि ऐसी बीमारी वो फैल रही है कि लोग जो है लाइन में खड़े खड़े गिर के मर रहे हैं, सांस फूल रहे हैं और वो मर रहे हैं. तो वीडियो देखा, मैंने कहा ये कौन सी फिल्म की वो क्लिपिंग है? कह रहे नहीं, ये फिल्म की क्लिपिंग नहीं है, ये फिल्म की क्लिपिंग नहीं है, ऐसा हो रहा है चाइना के इस वाले शहर में. मैंने कहा यार ये तो चाइना में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होगा. और वही देखो हमारे जो है वो पड़ोस तक पहुंच गया वो चाइना से. कहाँ चाइना, कहाँ मैं बैठा हूँ मैं गाजियाबाद में, और सन 2020 में जून के महीने में वो यहाँ तक पहुंच ही गए. बात आ रही समझ में? और ना जून में भी पहुंचा, तहलका मचाया इसने, और सन 21 में भी इसने मचाया तहलका. आपको पता ना कि सेकंड वेव में क्या हुआ था? सेकंड वेव में हॉस्पिटल के बाहर लोग लेटे हुए इलाज करा रहे थे धूप में. हॉस्पिटल के अंदर तो जगह थी नहीं, ठीक है. तो ये हाल हो गया था. तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो और क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? देखो एक चीज होती है फ्लड. फ्लड का कोई पैटर्न नहीं होता, फ्लड हर साल नहीं आती, लेकिन कब आ जाएगी आप उसको पैटर्न. नाउ अननोन रिस्क इज टेकन केयर ऑफ बाय द सीनियर मैनेजमेंट, द नोन रिस्क इज टेकन केयर ऑफ बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो प्रोजेक्ट मैनेजर शुड प्रिवेंट द नोन रिस्क. सो वन ऑफ द नोन रिस्क इज द 3M plus 1C, non availability of the resource, man machine material or cash on the critical path which can delay the project. So if I know any risk, then I should have a prevention plan already put into the place, right, to prevent. Now guys, the critical path is clear. ठीक है. अब अगर क्रिटिकल पाथ क्लियर है तो मैं आपको एक और चीज में समझाऊंगा, नियर क्रिटिकल पाथ. ये आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, लेकिन मैं तो आपको समझाऊंगा, ये भी प्रैक्टिकली आपको चाहिए. ठीक है. अब इसमें पहले फिल्टर को हटाओ, पहले यहाँ जाओ.
ये ऊपर जाओ, फिल्टर को हटाओ, यहाँ पे क्लिक करो ऑल एक्टिविटीज, नहीं वहां नहीं, ऑल पे क्लिक करो। अगर नीचे आपने 10 भी फिल्टर लगाए तब भी ऑल एक्टिविटीज से 10 के 10 फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। अब ओके करो। ओके करने से ये सारे फिल्टर हट गए, तो अब आपकी सारी एक्टिविटीज दिखने लग गई। अच्छा, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी को मैं करने वाला हूँ ये 15 दिन, और दूसरी एक्टिविटी है इसको भी मैं करने वाला हूँ मैं 15 दिन। अब ध्यान से देखना, ये जो 15 दिन की जो एक्टिविटी है, आपने देखा ये फिनिश बाउंड्री के बिल्कुल पास में है। यस सर। फिनिश बाउंड्री के बिल्कुल, ये बिल्कुल पास में ही है, ठीक है, लेकिन ये क्रिटिकल पाथ नहीं है, ठीक है। अब क्रिटिकल पाथ नहीं है तो अभी तो क्रिटिकल नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज नोट किया, मैं अपना एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है ना, जो एक्टिविटी अभी वो लग रही क्रिटिकल नहीं है, ये क्या करती है, ये क्रिटिकल से भी ये आगे ये चली जाती है। तो इसलिए क्या हुआ कि मैंने अपनी कंपनी में एक रूल सेट कर दिया कि कोई भी एक्टिविटी अगर फिनिश डेट के अगर 3 दिन के अंदर अंदर भी अगर होगी, अगर वो 3 दिन को भी अगर वो टच करती है, तो उस एक्टिविटी को भी क्रिटिकल मार्क करना है। तो इस रूल को सेट कर दिया 3 days नियर क्रिटिकल पाथ रूल। इस रूल का नाम है 3 days, ठीक है, नियर CCP रूल, 3 days नियर क्रिटिकल पाथ रूल, ठीक है, तो समझे कि नहीं? अच्छा, अब ये जो क्रिटिकल पाथ रूल जो मैंने जो सेट किया है, अब ये वर्बली बताने से काम नहीं चलेगा, इसको प्राइमावेरा में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे साथ चलो, ठीक है। अब हम करेंगे इंप्लीमेंट इसको। तो गाइस प्लीज स्टेप बाय स्टेप कम विद मी, come to the scheduling button and click it. After clicking the schedule button, so you are here, so everybody is here. Now click on the options button. तो मैं रुकता हूं यहाँ पे, आप सब पहले कंफर्म करो कि शेड्यूल ऑप्शंस वाले इस टूल बॉक्स में हो। यहाँ पे पहुंच गए सारे? नियाज आप हो यहाँ पे? अभिषेक आप हो यहाँ पे? यस सर, मैं हूँ न्यास। हाँ, साजी आप हो? यस यस। हाँ, देखो अब ध्यान से देखो। अब ना गाइस, अब मैं ना एक बाउंड्री लाइन लगा रहा हूँ, इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ो इसे। Define critical activities as total float less than or equal to longest जीरो। path. अब ये तो जीरो पे तो सेट है ये बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा नहीं, अब ये जीरो पे नहीं रहेगा, अब ये 3 दिन पे आ जाएगा। अब मतलब कि जो बाउंड्री लाइन के जो टच करेगी वो क्रिटिकल होगा। मैं कह रहा हूँ जो बाउंड्री लाइन से जो पीछे भी है 3 दिन, उसको भी हम क्रिटिकल की तरह ही जो है इंतजाम करेंगे उसका, ठीक है। अब इस पे आप एक काम करो, यहाँ पे कर दो आप 3 days। Now you write here 3D, 3 days. After writing 3 days, click on the close and yes, say yes, and then click on the schedule button. अभी क्लोज नहीं करना, इसे शेड्यूल करना, अभी इंप्लीमेंट हो गई है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर तो फ्लोट है, दिख गया आपको? यस सर, 3 days का। देखो इसमें 3 days का फ्लोट है, इसमें भी 3 दिन का फ्लोट है, तो ये भी क्रिटिकल की कैटेगरी में आ गई, क्योंकि इस पे ना रूल लग गया 3 दिन Yeah, की, it is showing green color, sir. ठीक है। नहीं, आपका रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपका रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो इसलिए वो ग्रीन आ रहा है। लेकिन रूल अगर इंप्लीमेंट होगा तो आपने, पता क्या है, आप जल्दबाजी करते हो, आपने शेड्यूल में आपने क्या किया, फट से आके इसको क्लोज कर दिया। अरे बाबा, शेड्यूल का बटन मैं बताऊं इससे पहले ही आपने क्लोज कर दिया। अब आप एक काम करो, शेड्यूल के बटन में जाओ और ये शेड्यूल जो बटन है इसके अंदर इसको क्लिक करो, तब ये रूल इंप्लीमेंट होगा। करो इसे, करो। अब हुआ चेंज? भाई चेंज हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं देखता हूँ, दिखाओ अपनी स्क्रीन दिखाओ।
देखो, अब देखो आपने ये एक्टिविटीज जो है रखी है 5 दिन पे। देखो सुन, रुक जाओ, कुछ नहीं करो, आप इस एक्टिविटी को करो। आपका देखो टोटल ड्यूरेशन कितने दिन का है, 20 का है ना, तो 20 के दिन पे आप जो है रूल सेट करोगे 3 दिन का, ये तो 15 दिन का, इसमें फ्लोट 5 दिन का, आप इसको करो 17 करो, इसे इसकी करो ड्यूरेशन करो चेंज, 17 करो। अब हुआ ना क्रिटिकल, 3 दिन का रूल है ना बाउंड्री लाइन से। अब इसमें इसमें करो 17 दिन करो इसमें। जब 3 दिन पास नहीं जाएगा बाउंड्री लाइन के, वो तब तक रेड नहीं होगा ना। आपका तो प्रोजेक्ट 20 दिन का, वहां पे उसके बस याद की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट 18 दिन का है ना। अब हुआ ना रेड। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने फिल्टर लगा के वही मीटिंग कॉल करनी है। अब आप क्या करोगे, फिल्टर लगाओ, हम देखेंगे ये क्रिटिकल पाथ में आता है या नहीं आता है। क्रिटिकल पाथ की जो परिभाषा इस पे लागू है या नहीं है। आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो फिल्टर है इस पे क्लिक करो और सिलेक्ट करो क्रिटिकल और करो ओके। ओके इस पे कर दो। ओके करने के बाद क्या होगा, तो आपने ये देखा कि क्रिटिकल एक्टिविटी भी जो है 0 दिन वाली भी है, और ये भी एक्टिविटी जो है आपके क्रिटिकल की कैटेगरी में सिलेक्टेड हो रही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों लोगों को भी मीटिंग में बुला के इनका भी जो है क्रिटिकल पाथ वाला ही इंतजाम करना है। ठीक है, समझ में आई बात। क्यों नियर क्रिटिकल पाथ जो है हमने ऑब्जर्व की है रियल लाइफ में कि बेशक इस वक्त ये क्रिटिकल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के चलते ये क्या होती है कि अपने आप ही ये जो है क्रिटिकल पाथ को भी पार कर जाती है और प्रोजेक्ट को डिले कर देती है। तो गाइस, इज दिस क्लियर? नियर क्रिटिकल पाथ इज क्लियर? Yes, sir, clear. So near critical path is a sort of a extra safety measure कि 0 ड्यूरेशन वाली 0 फ्लोट वाली भी क्रिटिकल को लेंगे तो 3 दिन तक भी हम क्रिटिकल में ले लेते हैं, क्योंकि कई बारी जो बड़े वाले प्रोजेक्ट में 3 दिन का फ्लोट जो है बड़ी जल्दी ये खत्म हो गए, एक्टिविटी बिल्कुल क्रिटिकल को भी पार कर जाती है। और कोई भी एक्टिविटी अगर क्रिटिकल को पार कर जाए तो इसका मतलब ये समझो कि मेरी प्रोजेक्ट की जो डिक्लेयर्ड जो फिनिश डेट है ना, उसको ये पार कर गई। तो अगर डिक्लेयर्ड फिनिश डेट को कोई भी एक्टिविटी पार कर गई तो उसका जो ये नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि आई लुक बैड ऑन माय प्रॉमिस। राइट और रॉन्ग गाइस? आई लुक बैड ऑन माय प्रॉमिस। Okay, now guys, to remove the rule, so first of all you go to this, go to the scheduling button and click on the options. After you click on the options, you go to this rule box and change the rule to 0. Just put 0 and that is enough. Click the close button, click the yes button, click the yes button, and then click the schedule button. This will implement the rule. Now guys, do you see that this activities are looking normal once again? Now since you are having a filter on, the best practice is to, after you are done with the filter, you should remove the filter. So guys, go to the top and remove the filter. फिल्टर रिमूव करने के लिए ऑल एक्टिविटीज पे क्लिक करना है और कहीं नहीं देखना है। ओके करो। तो गाइस ये आपका फिल्टर जो है ये हट गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ नियाज, अपनी स्क्रीन पे ना आप देखो ध्यान से, आपके जो है ना प्रोजेक्ट में फिनिश डेट क्या है, बताओ आपकी फिनिश डेट क्या है। आप अपना माइक ऑन कर लो, पता नहीं किसी के माइक में नॉइज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट ऑल किया था। आपकी फिनिश डेट क्या है नियाज, बोलकर बताओ अपनी माइक। 20 में। अच्छा 20 तारीख है ना, 20th of May इज योर फिनिश डे। अब ध्यान से सुनना मेरा सवाल। हमारी कंपनी में क्या हुआ कि बॉस ने, मैंने जब प्लान तैयार किया और तैयार करने से पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन तैयार जब हो गए उन्होंने कहा कि मैं ना वेडनेसडे एक में छुट्टी कर। ठीक है, अगर मान लो वो बीच में एक दिन छुट्टी दे देते हैं, अब मुझे बताओ कि मेरी फिनिश डेट क्या क्या होगी। 20 तारीख से बढ़ के कहां पे पहुंच जाएगी फिनिश डेट? 21 तारीख। भैया 21 तारीख अगर तुम बोल रहे हो ना, ऐसे ऐसी बददुआ लगेगी जिंदगी भर संडे में काम करते रहोगे। दुनिया संडे को कराएगी काम तुम्हारे से। सर 22 में जाएगी मंडे। 22 में जाओगे ना? 22 में जाएंगे सर।
थोड़ा ध्यान दो यार, थोड़ा इंजीनियर की तरह सोचो yes. कि अगर बीच में गाड़ी चल रही है, अगर स्पीड ब्रेकर आएगी तो उसके ऊपर जो है कूद के ही जाओगे ना। अब बैठ के स्पीड ब्रेकर को थोड़ी ना खोद के फिर आगे जाओगे। तो वैसे ही क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी उसके आगे अगर कोई संडे आता है तो वो नेक्स्ट डेट पे वो चली जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि वेडनेसडे की छुट्टी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो आपकी जो दोनों लॉन्गेस्ट एक्टिविटी है वो 20 पे जाएगी, 20 पे काम नहीं होगा तो वो चली जाए, मतलब 21 पे नहीं होगा तो वो 22 पे जाएगी। ठीक है, अब इसको अब मैं बताता हूँ कि गाइस हाउ टू इम्प्लीमेंट दी हॉलीडे इन द प्राइमावेरा। ठीक है, अब सब ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। ठीक है, बीच में कहीं पर भी खो नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा अब स्टेप बाय स्टेप चलो। अब देखो ये कैलेंडर पे क्लिक करो, इस पे सब पहुंच गए यहाँ पे। देखो इसके बाद जो है मैं लंच के लिए मैं छोड़ दूंगा, वरना मैं लंच के लिए मैं नहीं जाने दूंगा अगर किसी ने भी मिस किया। ध्यान से सुनना, आईएसटी में हो सारे? Yes, आईएसटी sir. हो ना? अब देखो अब इसको मॉडिफाई करो, छुट्टी करेंगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ गाइस प्लीज स्क्रॉल टू द मंथ ऑफ मई 2020, सन 2023 के मई के महीने में और सिलेक्ट करो 3 तारीख को। 3 तारीख को सिलेक्ट करो, कर्सर ले आओ और ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वर्क। अब जैसे ही आपने इसको नॉन वर्क किया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा सब कंफर्म करो यहाँ पे। सयाद, Yes, sir. ताजी, अभिषेक, Yes, करने yes, से yes. Done. यू टर्न तो नहीं होगा? नहीं नहीं. I'm doing it, doing it. अच्छा अब करो ओके, अब करो क्लोज। Sir, अब ध्यान से देखो वेडनेसडे की तरफ, देखो वेडनेसडे का कलर चेंज हुआ। sir, once again, can you tell? हाँ करवा दिया ना, यू टर्न, मैं जानता था यहीं से ही हो। ठीक है, अब अच्छा कोई बात नहीं, अभी आता हूं मैं आपके पास। अच्छा गाइस प्लीज लुक, आपकी फिनिश डेट कितनी आ गई? So 22 May. 22 को आ गई। क्यों 22 को इसलिए आई क्योंकि जब एक दिन यहाँ पे छुट्टी हुई तो ये जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी ये 21 को जंप करके ये 22 पे पहुंच गई, है ना? क्योंकि नॉन वर्क डे होगा, नॉन वर्क पे तो काम नहीं हो सकता ना। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूँ कि इसके पास क्या हुआ। हाँ देखो अपनी स्क्रीन दिखाओ फटाफट। Here this one is, I cannot unlink this one. I was trying अनलिंक for that one. नहीं करना बाबा, कहाँ फंस गए यार अनलिंक के चक्कर में। मैं कह रहा हूँ कैलेंडर में छुट्टी लगाओ, आप अनलिंक कर लो। आप यहाँ No, इधर बीच में मैं इधर फंस गया. छुट्टी लगाओ, इधर अनलिंक नहीं करना। लिंक अनलिंक तो नेक्स्ट वाला है लेसन, वो तो ऐसे सैंपल डाला है। आप इसमें क्लिक करो मॉडिफाई। आप डिस्ट्रैक्ट करते हो यार अपने आप को ही। नाउ यू सिलेक्ट द 3rd of the May and click on the non-work and tell me what do you see here? 0. 0, because non-work is having 0 capacity to work. Now click on the OK and click on the close. Now do you see that what is the difference in appearance of the Wednesday? And now Yes. do you see that what is the finish date? The finish date has gone up to the 22nd because one day of the holiday has been inserted in the calendar. Now I will tell you how to remove it also, because sometimes if you inserted it by mistake or you don't want it, so how to remove it? अब आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे कैलेंडर, फिर क्लिक करो मॉडिफाई, उसके बाद आप क्लिक करो May 23 में जाओ और 3rd May को सिलेक्ट करो। गाइस रुक जाओ, स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड। क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड पे क्लिक करने को? क्योंकि ध्यान से देखो, जब आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हो स्टैंडर्ड डे बनता है। जब आप वर्क पे क्लिक करते हो ये क्या करता है, आपने देखा ये दिन का स्ट्रक्चर जो है ये गलत तैयार कर रहा है। दिख गया आपको? आपने वर्क पे क्लिक नहीं करना है। दिस वर्क इज द रॉन्ग बटन, सो गाइस प्लीज नोट इट, you will not click on the work, rather you will click on the standard. Now guys, do you see when you click on the standard, so it creates a standard working day.
Okay, is this clear? Will you be able to remember it? Anand, याद रहेगा कि नहीं? Yes, I can. हाँ, तो then click on the OK. After this, click on the close. And then do you see that your finish date has come back to the 20th? Right? So Yes. this is how you can apply the holiday. This is how you can remove the holiday. So guys, critical path is clear? Yes or no? Yes. Yes. Clear, sir. Acha, no, acha, near critical path is clear? Clear. Yes. Yes, sir. How to apply the holiday and how to remove it is clear? Clear. Okay. So you know what is happening? These things are fine-tuning the schedule, right? Okay. Now you go to the document folder and tell me that what is the third rule which is further fine-tuning the schedule. So you open the Word file, go to the document folder, Primavera document folder. Schedule is adjusted by dependencies, Yes. lead and lag time. हाँ, डिपेंडेंसी क्या होता है? डिपेंडेंसी आपस में क्या होती है कि रिलेशनशिप होती है. तो व्हाट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पहले यहाँ से खोलता हूँ इसे. आई थिंक इट्स हियर. आपका जो है ना, ये कहाँ पे है आपका? एक सेकंड. Download. Shortcut होगा ना सर? Download. कहाँ पे गया? वर्क एरिया. Download. नहीं, अरे आनंद, वर्क एरिया कहाँ गया आपका? अच्छा, इधर ही है आपका, अच्छा, आपका जो है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज जो पढ़ा रहा है, मैं इसमें से करता था. अच्छा, ठीक है, आपका लैपटॉप चेंज हो गया. चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसकी अच्छी स्पीड है. आप जो है ना अपना जो है स्क्रीन दिखाओ. सैयद अपनी स्क्रीन खोलो. हाँ, देखो, अब आप ना वो डॉक्यूमेंट खोल लो जरा, वो वर्ड वाला जिसमें रूल है ना, शेड्यूलिंग रूल, इसको खोल लो. हाँ, देखो, अब इसमें जाएंगे ऊपर स्क्रॉल करके, देखो 3 नंबर रूल पढ़ो. एडजस्टेड बाय डिपेंडेंसी, लीड एंड लैग टाइम. डिपेंडेंसी क्या होती है? एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंट होता है. क्यों? इंजीनियरिंग प्रोसेस की वजह से. एक स्टेप में प्रोसेस होता है, एक आउटपुट बनती है, वो आउटपुट जाती है अगले टास्क में, फिर वहां पे प्रोसेस होती है, फिर वहां से आउटपुट जाता है तीसरे टास्क में. इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी. बात आई समझ में? नहीं तो डिपेंडेंसीज कम फ्रॉम योर इंजीनियरिंग नॉलेज. अगर डिपेंडेंसी है तो हम लगाते हैं रिलेशनशिप. तो अब इतना ही बस दिमाग में रखना है. और अब सब जो है खाना खा लो सारे. अभी देखो, अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको क्लोज करो. पहले कंट्रोल W करो. अब इसी की लेसन. सर गिव मी परमिशन टू रिकॉर्ड. हाँ, कौन है? नियाज सर. हाँ, ठीक है, ये रिकॉर्ड करो. यस. अभिषेक, यू आर हियर. अच्छा, ठीक है. ये आनंद, आप आ गए क्या? अच्छा, चलो ठीक है. अब ये जो लेसन 3 है ना, ये लेसन 2 है. इस पे राइट क्लिक करके कॉपी करो इसे. कॉपी करो. कॉपी करो, कॉपी करना है. अब इसको यहाँ पे रख के ना पेस्ट कर दो, ग्रुप के ऊपर रख के. और इसका लेसन का नाम कर दो डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप्स. अच्छा, किसी के माइक में ना फड़फड़ की जो है मतलब साउंड आ रही है, वो देख लो जरा, कंट्रोल करो उसे. जब बंद कर दो, ये खराब हो रहा है सारा रिकॉर्डिंग.
ये नियाज यूं तो नहीं हो रहा, आपके पास जो माइक है वो आपके थोड़ा जो है मतलब वो सांस आप ले रहे हो ना, उसकी जो है मतलब वो हवा पास हो रही है उसके ऊपर, कई बार उससे भी साउंड क्रिएट होती है। आप देखो अपनी लैपटॉप वाली माइक यूज करके, शायद उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, सबने ये लेसन 3 क्रिएट किया क्या? लेसन 2 की कॉपी करके लेसन 3। But I'm creating. कर लिया क्रिएट? 1 minute, I'm just creating. हाँ, मुझे तो फटाफट चलो थोड़ा। अभी तक तो पता कितने हो जाते हैं लेसन, अभी हम तो 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक तो 4 एंड हो रहा होता। कर लिया क्रिएट? अच्छा, अब ये लेसन 3 जो है वो खोल लो। अच्छा, लेसन 3 में जाके एक काम करो कि यहाँ से ना जो ऊपर से लेके नीचे ये जो 6 डेज की जो ड्यूरेशन हो ना, फिल डाउन कर लो जरा, ऐसे सारी एक्टिविटीज जो है 6 डेज की कर लो एक बारी, फिल डाउन कर लो। कर लिया फिल डाउन? Okay. Lesson 3 में भी okay. कर लिया फिल डाउन? Yes. We're already saying 6 days. हाँ, ये सब में 6 डेज जो है ये फिल डाउन कर लो। Okay. ठीक है, कर लिया फिल डाउन? सर एक सेकंड सर, तो मेरी सर स्क्रीन पे सर पता नहीं चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब आप, मैं काम कर रहा हूँ, मैं शेयरिंग बंद करो, अब चेक करो। हाँ रिकॉर्डिंग का बटन। हाँ, हो गई सर, हो गई सर। हाँ, तो अब फिर से शेयर कर लो। Yeah. Done. Actually, my Wi-Fi was disconnected. That's why I. कौन बोल रहा है? Sannyas, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ी फटाफट चलना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो एक्टिविटीज है ना, इनको हम करेंगे ग्रुपिंग। अब जो है ये WBS में जाओ। WBS का जो बटन है आपके लेफ्ट साइड में है, ये ब्लू जो बटन है ना स्क्वायर, इस पे क्लिक करके WBS टैब में जाओ, और WBS टैब में जाके राइट साइड में क्लिक करो प्लस का बटन। ठीक है? हाँ, अब इसमें सबसे पहले WBS नेम वाले कॉलम में जाओ, इसमें लिखो फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश Sir, I टू didn't स्टार्ट get anything, sir. लिखो इसमें, फिनिश टू स्टार्ट। Hello, हाँ, हेलो। sir. I'm Nyas, sir. I didn't get anything because my Wi-Fi disconnected, sir. That's why, sir. क्या चीज नहीं मिला, मतलब समझा नहीं, मेरे को क्लियर नहीं है। वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी क्या जी, नहीं हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था सर, कुछ भी नहीं। आपने जो स्टार्ट किया ना वहां से मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मैंने नहीं देखा। चलो फिर आपकी स्क्रीन पे आते हैं, दिखाओ। Yes. अच्छा, ये आपका क्या है कि एक एक पीस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया आपका। अब आप करो कंट्रोल W, करो कंट्रोल W। एक मिनट रुको, मैं ना जरा इसको मैं कर देता हूँ, इसकी जो कन्वर्जन है ना, इसकी Yes. कन्वर्जन को रोकना होगा, वरना ये स्लो स्लो कर देगा पूरा सिस्टम। अभी एक एक सेकंड रुक जाओ, स्टॉप करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा ये प्रोसेसिंग पावर ये ले लेता है। और ये सब कुछ एक बारी बंद कर दो। ब्राउजर चल रहा है क्या? ब्राउजर भी बंद कर दो आप, ब्राउजर भी बंद कर दो। अच्छा, प्राइमावेरा में आओ। Okay, sir. प्राइमावेरा में आओ।
आप आ गए प्राइमवेरा में? नहीं सर, कर्सर फटाफट करना पड़ेगा, कर्सर बड़ी कर्सर इज नॉट वर्किंग भाई, है। कर्सर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अब देखो मैं बताओ क्या करूं, ये क्लास तो जो है लटक गई आज की। अब बताओ कितने दिन में पूरा करें ये वाला बैच? 4 दिन लगाए क्या? मंडे को भी आओ सारे। यस अच्छा, सर। अब इसको 1 मिनट रुको, मैं कर देता हूँ, वरना ना बता के मैं कराऊंगा बहुत टाइम लगेगा। रुक जाओ 1 सेकंड। आपके ना स्पीड स्लो हो गई, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है आपकी स्क्रीन से। आपका इंटरनेट जो है तो कुछ फर्क आया है इसमें। पहले जब मैं कर रहा था लंच से पहले तब फास्ट था थोड़ा। पता नहीं है सर क्या हो गया वाईफाई में। चलो कोई कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी पहले मैं अप टू डेट ले आता हूँ, लेकिन ना अभी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई या तो मेरे साथ चल लो, या तो फिर क्या होगा, फिर वक्त जो हमें खींच के ले जाएगा रात के 10 बजे तक। ठीक है, लेकिन आज का एजेंडा आज पूरा करना पड़ेगा। कैन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग सर? नहीं, अब रहने दो। अब आप इसमें लिखो फिनिश टू स्टार्ट। अब मैं दूंगा रिकॉर्डिंग, अब कोई भी रिकॉर्डिंग पे मत ध्यान दो, अपने मन में करो रिकॉर्ड। अब फिनिश टू स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखो स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट लिखो। हाँ, अब फिर से पेरेंट पे रखो कर्सर को, ध्यान दिया सबने? ये पेरेंट पे रख के फिर से ऐड करना है, ताकि ये जो है ये डायरेक्ट चाइल्ड बने, वरना ये चाइल्ड का चाइल्ड बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें लिखो फिनिश टू फिनिश। अब इसमें लिखो फिनिश टू फिनिश। अब इसमें लिखो स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सारे ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 एक्टिविटी मैंने डाल दी फिनिश टू स्टार्ट में। ठीक है, अब आप एक काम करो, 3.2 में 2 एक्टिविटी डाल दो, सब में 2-2 एक्टिविटी डाल दो। न्याज, बात आई समझ में? 2-2 एक्टिविटी जो है कट पेस्ट करके 3.2, 3.3, 3.4 में डाल दो। कट पेस्ट करो कंट्रोल एक्स से, जल्दी हो जाएगा। 3.2 में डाल दो 2, दो ध्यान से सुनो मेरी बात प्लीज। 2 का मतलब 2 होता है। 3.3। हाँ, डालो इसमें। जी बाकी एक्टिविटी जितनी बच गई है ऊपर सब ये डिलीट कर दो। तो गाइस एक बारी ना ऐसे ये सैंपल डेटा ये तैयार कर लो,
ठीक है, फिनिश टू स्टार्ट में 4 हैं, बाकियों में 2-2। सब एक बार ना तुरंत एक आर्मी जो फौजी जो बटालियन होती है ना उसकी तरह प्लीज कंफर्म करो मुझे, सबके पास ये है। Yes, done. सियार डन है आपका? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये डिटेल में आओ, नीचे जो डिटेल वाला टैब है इसमें जो ग्रे जो बार है ना, ये इस ग्रे बार पे ये राइट क्लिक करो और देखो ये आ रहा है आपके पास, ये एक मेनू आ रहा है, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल। नियाज आप क्लिक मत करना, मैं यहाँ से Okay, sir. कर लिया सबने इस पे क्लिक, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल, यहाँ आ गए सारे सयाद और अभिषेक। आगे सर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या क्या कॉलम मैं ये हटा रहा हूँ, पहले 2 मैं ये हटा रहा हूँ कॉलम, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे टैब में डाल रहा हूँ, देखो अब मैंने डाला एक्सपेंसेस, एक मिनट। उसके बाद मैंने डाला नोटबुक, उसके बाद मैंने डाला रिलेशनशिप, उसके बाद मैंने डाला WPs एंड डॉक्स, ठीक है। और ये जो नोटबुक है इसको मैं रिलेशनशिप के नीचे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ना प्लीज एक बार स्क्रीन पे सीक्वेंस चेक कर लो, आप देख लो। नियाज जरा पढ़ के बताओ इन्हें सीक्वेंस क्या है डिस्प्ले टैब्स का। General, status, resources, expenses, relationships, netbook, and एक docs. ये कहाँ से आया एक्टिविटी डिटेल्स? एक मिनट। एक्टिविटी डिटेल में है ये कॉलम में सिलेक्ट करना है? ये टैब्स हैं एक्चुअली, हमें ये वाले टैब चाहिए, हाँ। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये मिला लो, ये सबके टैब जो है सेम है ना, देखो। आपने किस पे राइट क्लिक किया था? चलिए एक मिनट। ये मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया था और उसके बाद आया था मेनू। मेरे को एक चीज बताओ, इतना स्लो रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो? ये स्क्रीन तो ठीक ठीक ही है, कस्टमाइज एक्टिविटी, हाँ ठीक है, आ गया। अब ये ले लो ना, ये फटाफट लो यार, ठीक है। ये वाला मेन काम नहीं है, ये तो सिर्फ हम सेटिंग कर रहे हैं, हमने काफी आगे तक पहुंचना है हमने। ये सिर्फ छोटी छोटी ये सहूलतें तैयार कर रहे हैं ताकि हम मेन काम को अंजाम दे सके, ठीक है। इसको इन सब को ना जरा फटाफट रिस्पॉन्ड करके कर लिया करो, कर लिया सबने यार, कंफर्म कर दिया करो क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। नोटबुक कहाँ पे? पढ़ा दिया मतलब लगा दिया आपने? यार अगर इसी में सारा दिन गया ना फिर तो हो गया सर। अब बोल दिया करो ना। देखो अब मैं आपको ना समझाता हूँ, देखो ये जो नीचे टैब है जो रिलेशनशिप का, आपके पास पहले था नहीं। आनंद आप जो है ना रहने दो, आप जो है ना मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है आपसे। आपका कभी लैपटॉप स्लो हो जाता है, कभी आप स्लो हो जाता है, आपने इतनी जरा स्क्रीन शेयर कर लो। अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैं रिस्पॉन्स मांग रहा था कि आप हो या नहीं हो, आपने कुछ नहीं बोला। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो प्लीज। I came only right now. I went for to नहीं have आनंद, food. दिस इज नॉट द थिंग, लुक एट द टाइम। मैंने सबसे कहा था कि भी 3:50 पे आना है। Sorry, sir. Actually, देखो या तो रात के 10 बजे तक बैठना मेरे साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे जाना है जल्दी, sorry, मुझे sir. कहीं नहीं जाना। आज मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, आप रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब आप नहीं करो, लेट मी ब्रिंग यू अप टू डेट। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे के करवा नहीं पाऊंगा ये, पहले मैं रॉ रॉ डेटा मैं तैयार करता हूँ और रॉ डेटा की बेस पे ही से है वो बाकी का होगा। अब आपका ये जो लेसन 2 है इसको क्लोज करके अब मुझे क्या करना है कि लेसन 3 तैयार करना है। Okay. किसी के ना माइक में ना थोड़ी ब्रीदिंग नॉइज आ रही है, आप अपनी माइक बंद कर लो प्लीज।
देखो 4 तरीके की ना रिलेशनशिप्स होती हैं। सबसे जो पहली रिलेशनशिप है वो है फिनिश टू स्टार्ट। Okay. उसके बाद जो सेकंड मोस्ट जो कॉमन रिलेशनशिप है वो है स्टार्ट टू स्टार्ट। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं ग्रुप तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से बाद में मैं समझा सकूं। तो हर एक जो है लेसन में क्या है कि सैंपल डेटा तैयार करना होता है। अभी आप कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, रुक जाओ आप। गाइस मैंने देखो प्रीडिसेसर सक्सेसर हटा के जो अलग अलग था, मैंने ये रिलेशनशिप क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है इसके अंदर जो है दोनों है। ठीक है, प्रीडिसेसर बाईं तरफ है, सक्सेसर आपके दाईं तरफ है। अच्छा, आप एक काम करो, सैयद से बोल रहा हूँ। सैयद आपके ना स्क्रीन पे क्या है कि एक ना रिलेशनशिप जो है ये बना हुआ है, इसको ब्रेक करो। ये सक्सेसर साइड में जाओ, इसको ये रिमूव कर दो ताकि ये सारे टास्क ना इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, देखो ये स्क्रीन पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ऊपर जो ग्रुप है फिनिश टू स्टार्ट में, जिस टास्क में जो सक्सेसर के साथ रिलेशनशिप है उसकी रिलेशनशिप को मैं रिमूव कर रहा हूँ। दिख गया आपको? ठीक है सर। सारे टास्क जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आनंद के पास ना वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसने लास्ट मोमेंट में एनरोलमेंट की थी। डॉक्यूमेंट का फोल्डर जो है बना बना नहीं है। तो आनंद मैं काम कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं सैयद के पास जा रहा हूँ। सैयद आप अपनी स्क्रीन शेयर करके वो डॉक्यूमेंट खोल लो जो एमएसपी नोट्स वाला जो है। वो डॉक्यूमेंट किधर मिलेगा सर? वो डॉक्यूमेंट, रुक जाओ अब, अभी रुक जाओ, मैं बाद में बताऊंगा। ओके। वो डॉक्यूमेंट आपके स्टूडेंट पैकेज में ही है, वो फोल्डर सेटअप नहीं हुआ था। ठीक है, सैयद आप जो है एमएसपी नोट्स खोल लो। हाँ ये वाला, बहुत बढ़िया। अच्छा गाइज, अब इस नहीं, वो फोल्डर खोलो, उसमें ना एमएसपी नोट्स नाम से बिल्कुल सेम नाम से एक एक्सेल शीट है, ये नीचे वाला, वो प्राइमेवेरा नोट्स। हाँ सॉरी, देखो गाइज इन एवरी रिलेशनशिप, ये ना, ये किसका माइक है यार, एक बार प्लीज सारे ना, एक मिनट में म्यूट ऑल में कर रहा हूँ मैं सबको, क्योंकि मैं बार बार समझा नहीं पा रहा मैं। देखो गाइज, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। So let me first explain the relationship. See, in a relationship, we require minimum 2 activities. Okay. So one of the activities which is going to control, so that is called the predecessor. So someone whose background is quiet can unmute and read this. Predecessor task की जरा definition को पढ़ो। सैयद आपकी मेरे ख्याल से बैकग्राउंड क्वाइट है, आप क्या करो कि प्रीडिसेसर टास्क की ना डेफिनेशन को पढ़ो यहाँ पे। Predecessor task is the one which control the start and or finish date of the successor task. हाँ, अब इंग्लिश जो लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब जो है वो अलग है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द प्रीडिसेसर मीन्स एंसेस्टर, ठीक है, पूर्वज। और सक्सेसर का मतलब होता है डिसेंडेंट, मतलब वंशज।
पूर्वज और वंशज। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा अगर मेरे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रैंडफादर जो ग्रेट ग्रैंडफादर प्रीडेसेसर है, ग्रैंडफादर प्रीडेसेसर है, पिताजी प्रीडेसेसर है, मैं सक्सेसर हूँ। ठीक है, अगर मेरे ग्रैंडफादर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सारे सक्सेसर हैं। तो दिस हैज बीन टेकन। अब इंग्लिश में क्या किया है कि मीनिंग इसका जो है प्रीडिसेसर और सक्सेसर का है, मतलब कि एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। बट इन द project management, the predecessor task is the one which controls the start and finish date of the successor task in a relationship. तो रिलेशनशिप में अगर दो टास्क अगर आप ये रिलेट करते हो तो हर टास्क है ना दो डेट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट फिनिश। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना हो जाता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है। मैथ्स में आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा ही होगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं जो वेरिएबल्स को, तो इसमें टोटल वेरिएबल बनती है 4। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है फिनिश टू स्टार्ट का। अगर आप ये मान के चलो कि मैं कहता हूं कि प्रीडेसेसर एक आदमी है और सक्सेसर भी एक आदमी, दोनों जो है व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट से क्या ये बोलता है, ये फिनिश टू स्टार्ट में वो यहाँ पे पढ़ो यहाँ पे। Sir, can you tell this in English? I didn't understand this. ठीक है, एक बारी ना इसको ये पढ़ो कि व्हाट इज द बॉस सेइंग टू हिज सबऑर्डिनेट इन द फिनिश टू स्टार्ट। Okay. यार पढ़ो इसे। Yes, sir. When When I finish, then you can start. हाँ, so in the finish to start relationship, the boss is saying to the subordinate, when I finish, then you start. So the relationship in the Gantt chart is represented like this. So, you know, these representations were done by Henry Gantt in 1904. In 1904, Henry Gantt gave not only the theory, but the practical way to utilize the Gantt charts to properly depict the time. Right? Okay. Now, this is the way it will be depicted on the Gantt chart. Now, let us read the second, start to start, and what is the dialogue from the boss to the successor. When I start, then you also start. Yes, you know, this kind of a relationship will be represented by this arrow. The arrow will start from the start side and it will go to the start side of the successor. This is the way it will control. So now what happens? That when the predecessor is advanced, the successor is also advanced, right? So this is the start to start, because here the start date is the start date of the predecessor is controlling the start date of the successor. Okay. Now read the third relationship, which is the finish to finish, and what is the dialogue here? When I finish, then you also finish. So it will be like this, finish to finish. And in the Gantt chart, the arrow will start from the finish side of the predecessor. It will go to the successor. And if the finish date of the predecessor changes, only then the successor finish date will be also changed, because the finish date of the successor will be under the control of the predecessor's finish date. Now you read the fourth one, start to the finish. Before I start, you should be finished. Yeah, so you know, it will be represented like this. The start side of the predecessor will control the finish date of this successor. So it will be represented like this in the Gantt chart. But there is a condition here, guys. Guys, read this condition. Kya hai condition? Start date is predetermined. Okay, so now you keep this in mind. So based upon this knowledge, we are going to see that how we can represent this relationship in the Primavera. Now you switch over to the Primavera. Primavera में switch कर जाओ. Now in the Primavera, so we have got the finish to start. So what we have here? So we have got, there are two boxes here in the relationship tab. One is the predecessor box and one is the successor box. So when I want to set up the relationship, if I select a particular task, like on my screen, I have the task number 1260. For the 1260, if I want to select the successor, so I will go to the successor box. If I want to select a predecessor, I will go to the predecessor box.
So on the left side, I will connect to the predecessor. On the right side, I can connect to the successor for a particular task. Now, I asked one of my civil engineering friends, he says that when we construct a building, the sequence of the work may go like this. The first is excavation. लिखना है यहाँ पे excavation. Excavation means digging out the earth. Then he says that after the excavation is finished, so we start doing PCC. So PCC, plain cementing and concreting, just write the short form. Then he says after the PCC is completed, then what we do next is the reinforcement. Reinforcement लिख दो यहाँ पे, FORCEMENT, reinforcement. फिर मैंने पूछा भाई reinforcement कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ है क्या? उसने कहा कि reinforcement के बाद हम करते हैं शटरिंग. तो इसने ये 4 टास्क दिए कि ये जो शटरिंग है, SHUTTE, डबल टी के बाद ई भी लिखते हैं वो, ठीक है, शटरिंग है. तो ये जो शटरिंग है ये करते हैं वो जब reinforcement जब कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सकवेशन में जाएंगे. तो मेरे को एक चीज बताओ, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है कि एक्सकवेशन के बाद जो है वो पीसीसी स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक्सकवेशन का सक्सेसर कौन हुआ? एक्सकवेशन का सक्सेसर कौन हुआ? पीसीसी. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम जो है सक्सेसर साइड में जाएंगे और सक्सेसर साइड में जो असाइन का जो ये बटन है उस पर क्लिक करेंगे. करो, क्लिक करो. कर रहा हूं. ये रहा ना, ये असाइन का बटन, ये जो एरो से मैं मार्क कर रहा हूँ. हाँ देखो, ये पहली बारी जब बॉक्स खुलता है ना, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो है इसमें छोटा आता है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना ये बड़ा कर लिया ऐसे. अब इसका फॉन्ट भी सेट कर देते हैं एक बारी. फॉन्ट हमने कर दिया टेबल फॉन्ट है, इसमें ले लो तो वर्दाना 9 ले लो. ठीक है, ये एक बार ही सेट करना, बार बार नहीं होगा, फिर ये अपना आराम से ये बड़ा ही आएगा. अब इसमें आप सेलेक्ट कर लो पीसीसी और इसमें प्लस का बटन क्लिक कर दो एक बारी और इसमें क्लोज कर दो, ये छोटा क्रॉस का जो बटन है वो. तो गाइस, आफ्टर यू सेट the relationship, assign the successor, it has created the relationship finish to start. दिख गया आपको? तो finish to start क्यों है? क्योंकि ये जो finish date है ना, ये finish date है excavation की, जो तीर है वो finish date से वो चल रहा है और ये PCC की start date को जाके ये कंट्रोल कर रहा है. अच्छा, अब एक चीज और मैं ये बता दूं, नीचे जो रिलेशनशिप का जो बॉक्स है, अब आपने कोई रिलेशनशिप तो चूज नहीं की, इसने रिलेशनशिप कहां से ली है इसने. अब एक चीज ना ध्यान रखना, फिनिश टू स्टार्ट बीइंग द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप इन एवरी सॉफ्टवेयर, द फिनिश टू स्टार्ट विल बी अप्लाइड बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो फिनिश टू स्टार्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट वो लग जाएगी. तो आपने करना क्या है कि अगर मान लो आपको फिनिश टू स्टार्ट नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, अगर फिनिश टू स्टार्ट नहीं चाहिए तो आपको जो चाहिए वो आप चूज कर सकते हो. ये एक ड्रॉप डाउन है गाइस, इस पे ना सैयद देखो, क्लिक मार के एक बारी जरा क्लिक मार के देखो, इसको महसूस करो, ये ड्रॉप डाउन है. ठीक है, इसमें 4 रिलेशनशिप पहले से डाल रखी है, लेकिन फिनिश टू स्टार्ट को डिफॉल्ट इसलिए डालता है, वो आपकी सहूलियत के लिए डालता है, क्योंकि फिनिश टू स्टार्ट सबसे ज्यादा कॉमन होती है. गाइस, इज दैट क्लियर? करेक्ट, गॉट इट. अब क्या करना है कि अब हमने पीसीसी का सक्सेसर हमने सेट करना है. तो आप जो है पीसीसी पे आओ और पीसीसी को सिलेक्ट करके और सक्सेसर साइड में आप जाके ये असाइन करो. तो पीसीसी का सक्सेसर कौन है? रीइंफोर्समेंट. अब रीइंफोर्समेंट को सिलेक्ट करके अब आप इसको क्लोज कर दो बॉक्स को. अब देखो, रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट हमें चाहिए था, तो वो बाय डिफॉल्ट वो लग गया. रुक जाओ, अब हम क्या करेंगे कि शटरिंग का प्रीडिसेसर कौन है बताओ. अब हम प्रीडिसेसर सेट करेंगे. बताओ, शटरिंग का प्रीडिसेसर कौन है? रीइंफोर्समेंट. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम शटरिंग का हम जो है प्रीडिसेसर सेट करेंगे प्रीडिसेसर वाली साइड में, क्योंकि हम सक्सेसर भी सेट कर सकते हैं तो प्रीडिसेसर भी सेट कर सकते हैं, बात तो एक ही है. अब ये वाला बॉक्स हम फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, ये असाइन प्रीडिसेसर वाला, तो इसमें भी हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी. आप बॉक्स को यहाँ पे जो तिरछे तरीके से खींच के इसको ये बड़ा करो और ये टेबल फॉन्ट एंड रो में जाके 9 नंबर फॉन्ट साइज ले लो.
9 नंबर फॉन्ट साइज लगाओ इसमें बॉक्स में। अब आप ये सिलेक्ट करें। वो वरदाना किधर से कर रहे सर? फॉन्ट देखो देखो स्क्रीन पे। हाँ दिख गया? हाँ ओके। इसके अंदर जाके सिलेक्ट कर लो वरदाना 9 नंबर, ठीक है? फटाफट करो और फिर इसमें सिलेक्ट करो रीइंफोर्समेंट, ठीक है? रीइंफोर्समेंट ये क्या है? ये प्रीडिसेसर है, आपने प्रीडिसेसर लगाया, फिर इस बॉक्स को क्लोज कर देना है, ठीक है? क्लोज कर दिया बॉक्स। देखो वो बात वही है, आपने प्रीडिसेसर का जो है मतलब सक्सेसर का प्रीडिसेसर सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये क्या हुआ कि ऑल दिस 4 एक्टिविटीज आर इन द फिनिश टू स्टार्ट। अब हम ये समझेंगे कि फिनिश टू स्टार्ट जो है प्रैक्टिकली चलती किस तरीके से है। अब आप एक काम करो कि एक्सकवेशन की जो ड्यूरेशन को जो है 10 दिन कर दो। एक्सकवेशन की ड्यूरेशन को जो है बढ़ा के 10 दिन करो। तो क्या हुआ, एक्सकवेशन की फिनिश ने पीसीसी के स्टार्ट को पुश किया और पीसीसी के फिनिश ने जो है रीइंफोर्समेंट के स्टार्ट को, और रीइंफोर्समेंट की फिनिश ने शटरिंग के स्टार्ट को जो है ये पुश किया। दिख गया आपको? ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो फिनिश के कंट्रोल में स्टार्ट है, तो अगर एक्सकवेशन का फिनिश बढ़ता है तो वो पीसीसी के स्टार्ट को धक्का मारता है। अगर पीसीसी का फिनिश अगर आगे की तरफ को बढ़ता है तो वो रीइंफोर्समेंट के स्टार्ट को धक्का मारता है। रीइंफोर्समेंट का फिनिश जो है अगर वो बढ़ता आगे तो वो शटरिंग का स्टार्ट, क्योंकि हर प्रीडिसेसर अपने सक्सेसर को फिनिश टू स्टार्ट के द्वारा वो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, मान लो एक्सकवेशन जो है जल्दी हो जाता है खत्म। एक्सकवेशन कहता है कि मैं 4 दिन में हो रहा हूँ खत्म, तो क्या होगा को पीसीसी को जो है वो जल्दी स्टार्ट होने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? अब एक्सकवेशन की ड्यूरेशन को 4 दिन करो और देखो कि क्या असर हो रहा है गैंट चार्ट में। अब क्या हुआ कि अगर एक्सकवेशन अगर आगे गया तो पीसीसी भी जल्दी स्टार्ट होगा। पीसीसी जल्दी अगर फिनिश हो रहा है तो रीइंफोर्समेंट भी जल्दी स्टार्ट हो सकता है। रीइंफोर्समेंट जल्दी फिनिश हो रहा है तो शटरिंग भी जल्दी स्टार्ट हो सकती है। तो ये फिनिश टू स्टार्ट का ये जो है मतलब इफेक्ट ये होता है। अगर फिनिश अगर जल्दी स्टार्ट खत्म होगा तो स्टार्ट भी, जो स्टार्ट डेट है सक्सेसर का, वो भी जल्दी स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है फिनिश डेट, और कंट्रोल कौन हो रहा है? स्टार्ट डेट। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप। तो इस फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप का एक शॉर्टकट जो है लिंक एक्टिविटीज में ऑप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन अभी तो यहीं से करो। अच्छा, अब इसमें क्या करो, एक्सकवेशन की ड्यूरेशन को वापस 6 डेज कर दो। इसको वापस 6 डेज कर दो। जैसे ही आपने इसको 6 डेज किया तो क्या हुआ, इसने सारी एक्टिविटीज को, अब आपने ये देखा कि फिनिश डेट ही स्टार्ट डेट को कंट्रोल कर रहा है। बात आ गई समझ में? तो ये जो फिनिश टू स्टार्ट जो डिपेंडेंसी है, ये आपने कहां से डाली? ये आपने इंजीनियरिंग नॉलेज से डाली है। हर इंजीनियर अपने अपनी डोमेन की डिपेंडेंसी को जानता है कि यहाँ पे मेरी फिनिश टू स्टार्ट की डिपेंडेंसी है तो वही लगाऊंगा, स्टार्ट टू स्टार्ट किया तो वो लगाऊंगा, और फिनिश टू फिनिश किया है तो वो मैं लगाऊंगा। तो डिपेंडेंसी जो है अपने आप वो डिसाइड करता है। लेकिन फिनिश टू स्टार्ट जो है ना, क्या होता है कि हम लोग जो है बहुत ही मतलब कि सिंपल तरीके से शुरू में ही जो है वो समझ जाते हैं। एक चीज और मैं बोल देता हूँ कि शुरू में जो भी आदमी प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है ना, तो उसको फिनिश टू स्टार्ट ही समझ में आती है, तो वो बार बार जो है वो फिनिश टू स्टार्ट जो है वो लगाता है। तो मैं क्या किया करता था कि जब मैंने अपना शुरू में जब मैंने अपना रोल स्विच किया, जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना, तो मैं फिनिश टू स्टार्ट ही मैं ये लगाया करता था। एक दिन क्या हुआ, मेरे बॉस ने बुलाया। मेरे बॉस ने कहा भाई देखो 6 महीने से कम वाले तो प्रोजेक्ट में फिनिश टू स्टार्ट इसलिए चल जाता है क्योंकि फिनिश टू स्टार्ट जो आपके प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन कम है, लेकिन 6 महीने से जो ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप सिर्फ फिनिश टू स्टार्ट लगाओगे तो उससे क्या होगा, 8 महीने का प्रोजेक्ट एक साल का बन जाएगा। 1 साल का प्रोजेक्ट जो है 1.5 साल का बन जाएगा। क्योंकि फिनिश टू स्टार्ट में आप ध्यान दो, आप ऊपर देखो कि ड्यूरेशन क्या है, कितनी है ड्यूरेशन यहाँ पे? 6 दिन की 4 एक्टिविटी है, कितनी है ड्यूरेशन? 24 डेज। हाँ, ये फिनिश टू स्टार्ट क्या करता है कि ड्यूरेशन को ऐड करता है। ये किस तरीके से चलता है, जैसे 6 + 6 + 6
+6, ये फिनिश टू स्टार्ट वो इस तरीके से चलता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलता है तो चलता है। अब फिनिश टू स्टार्ट जहां चाहिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहिए। ठीक है गाइस, फिनिश टू स्टार्ट क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, अब क्या है कि अब मैं समझाऊंगा आपको स्टार्ट टू स्टार्ट। मैं पहले क्या करूंगा, अपने एग्जांपल से समझाऊंगा, आपने उस पर सोचना है। दिस इज टू स्टिमुलेट योर थॉट प्रोसेस। आपने क्या करना है, मेरे एग्जांपल से अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ये बना के एक अपना एग्जांपल अपने याददाश्त से जो उठा के लाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है ये 2 हफ्ते की, तो मैंने इसमें लिखा 2 वीक्स। उसके बाद क्या है कि भाई टेस्टिंग हम किसी भी चीज की करते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम डिफेक्ट फिक्सिंग करते नहीं कितने करते हम, है ना। जब हमें टेस्टिंग में जब डिफेक्ट जब ये पता चल जाता हम उनको क्या करते हैं, डिफेक्ट फिक्सिंग करते हैं। तो डिफेक्ट फिक्सिंग की एक्टिविटी है मेरी, ये भी 2 हफ्ते की है। तो मैंने अपने टीम मेंबर से कहा कि भाई देखो, जब ये टेस्टिंग की एक्टिविटी जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं डिफेक्ट फिक्सिंग करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसका सक्सेसर लगाया डिफेक्ट फिक्सिंग, और ये अपने आप ही एक ड्यूरेशन बन गई। कितने दिन की बन गई? 24 दिन, 24 डेज की। अब हुआ क्या कि मैंने थोड़े दिनों बाद मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे एक जो है ये मतलब वो इनोवेशन कर सकते हैं। वो यूं किया कि जो सॉफ्टवेयर है, अगर मान लो उस पर कोई टेस्टिंग कर रहा है तो दूसरा आदमी उस पर काम, मैं ये एज्यूम करके चल रहा था कि दूसरा आदमी उस पर काम नहीं कर सकता, एक बारी में एक के ही हाथ में सॉफ्टवेयर रह सकता है। तो मैंने ये किया कि सॉफ्टवेयर को मैंने ना एक क्या किया, एक ना ये सर्वर में डाल दिया। एक जो ऊपर जो ग्रीन रंग का जो बॉक्स है ये सर्वर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने 2 टीम मेंबर को 2 मैंने लैपटॉप दिए। लैपटॉप जो है ना ये ऑरेंज कलर के हैं। फिर मैंने क्या किया कि सर्वर से मैंने दे दिया कनेक्शन, और यहाँ पे एक तरफ मैंने बिठाया टेस्टर को, और एक तरफ मैंने बिठाया डेवलपर को। तो टेस्टर को मैंने कहा कि तुम जो है सर्वर में देखो, और सॉफ्टवेयर में जो डिफेक्ट है वो डेवलपर को बताओ जो तुम्हारे साथ में बैठा है, और वो जिस लाइन को ठीक करेगा वो करता रहेगा, तुम अगली लाइन पे पहुंच जाओ। अब दोनों का काम पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ गाइस? जी सर, बिल्कुल। दोनों का काम अब ये पैरेलल में हो गया। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर से आ रहा है तो वो टेस्टर को भी दिख रहा है, डेवलपर को भी दिख रहा है। तो टेस्टर मान लो उसको कह रहा है कि लाइन नंबर 10 पे ये फॉल्ट है, तो डेवलपर क्या कर रहा है, लाइन नंबर 10 को ठीक कर रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो दोनों पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों अपने काम को एक ही साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये किसकी स्क्रीन है? बस सयाद की। तो सयाद एक काम करो, इस पे सिलेक्ट करो ये वाला टास्क, आप सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग। अच्छा, अभी पहले कितना बताओ, अभी कितना है ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन कितना है? 24 दिन, 24 डेज, है ना। अब एक काम करो, ये जो रिलेशनशिप है इसको चेंज करके स्टार्ट कर दो, इसको कर दो SS। अब देखो कितनी हो गई ड्यूरेशन? 12 डेज। 12 डेज वो हो गई ना। अच्छा, अब मुझे ये चीज बताओ कि 24 - 12 तो कितने दिन की सेविंग हुई? 12 दिन की। देखो 12 दिन जो है वो सेव्ड हो गए, 50% टाइम जो है वो बच गया। तो इसको हम कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट। सिर्फ यहीं पे बात नहीं हुई खत्म, इसमें हम जो है एक डिपेंडेंसी चेक करेंगे। एक लॉजिकल सा एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग सब इंजीनियर हो, अपनी जो है लॉजिकल नॉलेज से मेरे को जवाब देना। अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम अगर मैं कैंसिल में कर देता हूँ, अगर मैं नहीं करता इसे, क्या मैं डिफेक्ट फिक्सिंग का काम मैं कर पाऊंगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब वो डिपेंडेंसी है। तो गाइस, अगर 2 टास्क के बीच में डिपेंडेंसी है तो तभी रिलेशनशिप डालना, वरना मत डालना। वरना लोग क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट टास्क है, चलो वो पैरेलल में है तो उसमें डाल दिया रिलेशन। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, अब इस डिपेंडेंसी की जो है वो वजह से क्या हो रहा है, इसका जो स्टार्ट डेट है, ये जो आपके जो प्रीडिसेसर का जो स्टार्ट डेट है ना, ये सक्सेसर के स्टार्ट डेट को कंट्रोल करता है। मैं दिखाता हूँ ये कैसे कंट्रोल करता है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रीडिसेसर के स्टार्ट डेट को मैं मैनुअली में चेंज करने वाला हूँ।
अब जैसे ही मैंने इसकी डेट को आगे मैंने किया तो अपने आप आपने देखा सक्सेसर की डेट अपने आप जो है ये आगे ये गई है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं कि प्रीडिसेसर की स्टार्ट डेट को आगे मैं खिसका रहा हूं। ठीक है, देखा आपने, नीचे वाली डेट को मैं चेंज नहीं कर रहा। अब नीचे वाली डेट इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि जो सक्सेसर है वो इससे रिलेटेड है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कनेक्शन जो है ये स्टार्ट साइड से आ रहा है और इसकी स्टार्ट साइड में ये जा रहा है। तो ये प्रीडिसेसर की स्टार्ट डेट है, ये सक्सेसर की स्टार्ट डेट है। तो प्रीडिसेसर बोल रहा है कि मेरी जब स्टार्ट डेट जब चेंज हो वो होगी तो आपकी भी स्टार्ट डेट चेंज होगी, क्योंकि मेरी स्टार्ट डेट आपकी स्टार्ट डेट को कंट्रोल कर रही है। देखो फिर से देखो ध्यान से, ठीक है, ये चली गई आगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है अपने जो प्रीडिसेसर को मैं ले आया पीछे। जैसे ही मैं प्रीडिसेसर को मैं पीछे लाया तो सक्सेसर भी साथ साथ आ गया पीछे। अब गाइस नाउ द मैटर इज क्लियर नाउ। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में कि एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो दूसरी एक्टिविटी हम साथ के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी मेरी इंजीनियरिंग की बात। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको काफी एक आइडिया दिया है। अब आप ना ध्यान से अपनी डोमेन में जाओ, अपनी डोमेन से कोई याददाश्त से कोई स्टार्ट टू स्टार्ट का कोई अच्छा सा एग्जांपल लाओ बना के अपने माइंड से। बनाना क्या है, क्या होगा जरूर। सर जैसे जब हम स्लैब कास्टिंग करते हैं तो अब हमारी लिखो फर्स्ट स्लैब हमारी कास्ट हो गई है। सक्सेसर का लिखो, लिख के हमें समझाओ। Sir, I have a doubt. शॉर्ट एंड स्वीट में लिख दो कि भाई प्रीडिसेसर क्या है, और शॉर्ट एंड स्वीट में हमें समझा दो कि सक्सेसर क्या है। ठीक है Sir, I have a doubt. हाँ पूछो फटाफट। Earlier you changed the date to 15th of May. After that one you changed again to 1st of May back. But in my computer I am trying to change that one. I cannot change that one. Why? अभी रुक जाओ, अभी बता दो। पहले ना इस एग्जाम्पल को समझो। बताओ सर, एक्सप्लेन करो। हाँ तो गाइस देखो, इन्होंने लिखा है शटरिंग और स्टील बाइंडिंग। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एक मैं डिपेंडेंसी चेक की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो मैं शटरिंग नहीं करता तो क्या मैं फिर भी स्टील बाइंडिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकते सर। हाँ, फिर तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसी चेक को ये पास कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ओके है। लेकिन इसमें ना मैं एक बात बताता हूँ। देखो, एक आदमी जो है वो शटरिंग कर रहा है, एक आदमी स्टील बाइंडिंग कर रहा है, तो दोनों इमीडिएटली साथ साथ काम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शटरिंग का काम जब थोड़ा सा कंप्लीट होगा, कम से 2 दिन का काम जब कंप्लीट होगा, जब वहां पे कुछ शटरिंग होगी तो स्टील बाइंडर उसके ऊपर हाथ लगा के कुछ कर सकता है। बात है नहीं समझ में? करेक्ट है ना? तो अब इसमें देखो रहेगी रिलेशनशिप जो है वो अपना स्टार्ट टू स्टार्ट ही रहेगी, लेकिन इसमें फाइन ट्यूनिंग क्या होगी? फाइन ट्यूनिंग यूं होगी, जो अब आप इसमें रिलेशनशिप में जाओ और इसमें 2 दिन का डिले डाल दो, तो डिले को हम बोलते हैं लैग। अब आप इसमें लिखो, ये जो लैग वाला जो ये जो है ना जो कॉलम है, इसमें लिखो 2 days 2D। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 दिन का लैग टाइम आ गया। मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ, दिख गया? अब ये जो रेड वाले पीरियड में क्या होगा कि पहले थोड़ी सी शटरिंग बन जाएगी, उसके बाद जो है स्टील बाइंडिंग वो चलेगी वो पैरेलल में। तो पैरेलल वाले पीरियड को मैं ये शो कर रहा हूँ ग्रीन में। दिख गया आपको ये ग्रीन वाली जो पट्टी जो है? दिख गई आपको? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन। देखो, अगर इन दोनों को अगर हम फिनिश टू स्टार्ट में डालते हैं तो कितना हो जाता है ड्यूरेशन? फिनिश टू स्टार्ट में डालते हैं तो ड्यूरेशन होता हमारा 24 दिन। 12 और 12 होते 24। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो WBS में ड्यूरेशन कितनी आ रही है? तो 14 days। 14 days। तो बचत कितने दिन की हुई? बचत कितने दिन की हुई बाबा? सर 10 दिन की। हाँ, तो 10 days सेव्ड। अब ये जो 10 days सेव्ड है मैं आपको दिखाता हूँ, आपके बिल्कुल सामने ही है, ध्यान से देखना। मैं लिख के मैं समझा रहा हूँ। देखो इस पे ये ना ये जो ओवरलैप पीरियड है इस पे ध्यान दो। आप देखोगे ये 4 दिन है और 6 दिन यहाँ पे है। दिख गया आपको? दिख गया?
ये 4 दिन की जो सेविंग है वो फिजिकली दिख गई गैंट चार्ट पे, क्योंकि ये जो 10 दिन है ना, ये ओवरलैप है यहाँ पे। 4 दिन ये पहले हफ्ते में, 6 दिन दूसरे हफ्ते में। तो ये जो 10 दिन का जो ओवरलैप है, इसकी वजह से, ये जो ओवरलैप की वजह से 10 दिन ये सेव हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो पूरी शटरिंग करके भी स्टील बाइंडिंग आप कर सकते हो, उसमें टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे कि नहीं? टाइम बहुत लग जाएगा। हाँ, टाइम बहुत इसमें जो है वो लगेगा। अब इसमें टाइम आपका जो है कितना सेव्ड है, आप ध्यान से देखो। अगर आप 10 दिन, और अगर आप जो है, अब मान लो कि भाई 24 दिन लगाओ, और 24 दिन के ऊपर 10 दिन की अगर ये परसेंटेज अगर आप ये कैलकुलेट वो करते हो, 10 डिवाइडेड बाई 24 इजिकल टू कितना परसेंटेज बनता है? देखो आप अपने कैलकुलेटर में करके बताओ कितना परसेंटेज हुआ। आप नहीं, 14 डिवाइडेड बाई 24 कितना हुआ परसेंटेज वाइज? आप इसमें देखो कि परसेंटेज जो है आपका हुआ, 8. देखो 14 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू आपका 58% टाइम सेव हो रहा है ना? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्टार्ट टू स्टार्ट। ठीक गाइस, क्लियर है अब? क्लियर है सर। अच्छा आनंद, एक काम करो, ये ना शटरिंग को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ। Okay, sir. For Status me, में जाओ। instead of near the date, there is a star symbol. What is that? स्टार जो है मैं भी समझाता हूँ, Star symbol. कंस्ट्रेंट है, अभी उस पर ध्यान मत दो। आई एम यूजिंग द कंस्ट्रेंट एज ए फैसिलिटी, आई एम नॉट टीचिंग द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इज द नेक्स्ट लेसन। No, for me, I cannot change the date. हाँ, so do this thing, look at the screen, select the shuttering activity, Okay. then go to the status, come to the status। Okay. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा तीर ले लूं यहाँ से। Status, then from the status you go to the constraint and you select here none. There is a primary constraint here, select none. Once you select none, so it will come back naturally. Please do it quickly. In my system, in shuttering, under the start date, it is showing star बाबा remark. वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप इस पे ध्यान से देखो, उसको हटा लो। शटरिंग पे जाओ, स्टेटस पे जाओ, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट में नन कर दो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन सा जो है, इसमें सिलेक्ट करो नन, अपने आप हट जाएगा स्टार। वो तो सिर्फ एक सहूलियत के लिए यूज किया था, उसमें अभी इतना ध्यान मत दो, अभी उसको हटा लो। अभी हमारा अगला लेसन जो है कंस्ट्रेंट का ही है। हमारा इस वक्त जो है वो फोकस है रिलेशनशिप पे। एक्टिविटी में 4 प्रकार की जो रिलेशनशिप है वो कैसे ये लगाई जाती है और उसका महत्व क्या है। कर दिया? हाँ यार, हाँ कर दिया। हाँ, वेरी गुड। और मेरा शटरिंग टू स्टील बाइंडिंग का वो एरो दिखा रहा है, वो डॉटेड है, वो क्यों? अब यार, अब तो तुम्हारी सिस्टम पे आना पड़ेगा। लगाओ अपना सिस्टम फटाफट, देखें क्या क्या हो रहा है। Here. अभी भी इसमें जो है वो लगा हुआ ना कंस्ट्रेंट, इसलिए वो लगा है ना? कंस्ट्रेंट नहीं लगाना ना, कंस्ट्रेंट आप जो है नो कंस्ट्रेंट। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें क्या है कि हम ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट टू स्टार्ट रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद चालू होगा, 2 दिन के लैग टाइम से होगा। इमीडिएटली हम जो है शटरिंग के साथ स्टील बाइंडिंग नहीं कर सकते। इधर से देना पड़ेगा, उधर नंबर चेंज नहीं करना, डेट नहीं चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें क्या है कि देखो, पहले 2 दिन का जो है वो शटरिंग बनेगा, तो 2 दिन की जो शटरिंग जो ये बनेगी ना, मैं यहाँ पे एक रेड टाइम पीरियड में मार्क कर रहा हूँ, ये 2 दिन की जो है वो शटरिंग बनेगी आपके मंडे और ट्यूसडे को। वेडनेसडे ऑनवर्ड क्या होगा, ध्यान से देखना। वेडनेसडे ऑनवर्ड से लेके अगले हफ्ते के सैटरडे तक पैरेलल में काम होगा। और पैरेलल में कितने डेज हैं? देखो यहाँ पे 4 दिन है पैरेलल में, यहाँ पे पैरेलल में 6 वर्किंग डेज है। तो आपका जो टोटल जो टाइम सेव हो रहा है, ये जो पैरेलल वाली जो ड्यूरेशन है, इसमें आपका
10 days जो है आपका saved है. ठीक है guys, clear है? 10 days की जो सेविंग है ये आपके पैरेलल ड्यूरेशन से हो रही है, ये आपका पैरेलल ड्यूरेशन है. तो इसलिए हम जो है कोशिश ये करते हैं कि भाई या तो स्टार्ट टू स्टार्ट लगाए या तो हम फिनिश टू फिनिश लगाए. अब मैं आपको समझाऊंगा फिनिश टू फिनिश. ठीक है, तो गाइस स्टार्ट टू स्टार्ट इज क्लियर. Anand, you are also a civil engineer, right? Yeah, mechanical basically, but I'm working in Basically, civil. you can also understand what is the shuttering and steel winding. You can find Yeah, it on the YouTube. Okay. So see, mechanical and civil engineers, they work very closely to make a building or a structure. So they can understand each other's terminology, right? So I think it will not be very much difficult for you to understand the shuttering and the steel binding. So now I will explain to you the finish to finish with my example. Then one of you will be asked to think of your example and bring it here. So I am first of all closing this group. So make some space. Now I'm doing software testing. Software development. Software development. Now this activity, in my case, is going to take me 4 weeks to complete, right? So the duration of the software development is I'm writing as 4 weeks. Now, what happens that I also need a user manual because the software is a product which is having quite a lot of features and functionalities, and the user manual is very useful accessory to be included with that and given to the client, right? Now, I call my technical writer and tell him that he needs to write the user manual. So then I write here his activity as write user manual. Write user manual. ठीक है, तो अब now he is asking me कि boss कि user manual में लिखना कब start करूं? So then I tell him it is not important when you start. It is more important that your user manual should be finished and ready along with my software development. Means when my software development finishes, your user manual should also finish at the same time, right? Now, what is the relationship type? So the relationship type is finish to finish. Now, what you do, you go to the predecessor. From the predecessor, now you select, you go to the successor side. Correct. After you go to the successor side, then you select a write user manual here. You select 81070 and then you click on the plus button only once and then you close this box. After you close this box, if you see, it is basically, you know, what is happening, it is putting the finish to start. So you change it to finish to finish. You change it to finish to finish. Now, when you do the finish to finish, okay, now suppose the user manual is going to take 10 days. So you put here 10 days. Now, if you look at the total duration, so guys, what is the total duration of the finish to finish here? Kitna ho gaya? 24. Acha. Now, if I say that I'm going to change the relationship to finish to start, now see, technically it is not a problem. But look, what is the duration now? देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद अगर मैनुअल अगर मैंने ये बनाया है तो इज दैट टेक्निकली अ प्रॉब्लम? नो, एब्सोल्युटली नॉट. Technically it's not a problem, but now you look at the duration. If you are a good project manager, your aim would be always to finish within the given time constraint of the client. Now if you look at the duration right now, the duration is 34 days. Do you see that? Now I'm going to write here 34 days, which is taken in the finish to start. Now I will change the relationship to finish because it is possible to do it this way. Now guys, what is the duration after the finish to finish? After switching to finish, what is the duration now? कितना हो गया duration? 24 days. हाँ, अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि 24 ये 34 minus 24 कितना हुआ? 10 days. So you know, it is, I can safely say 10 days were saved due to the
फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, ठीक है, 10 days सेव्ड है। अब 10 days कहाँ सेव्ड है वो तो आपके सामने ही है। अगर आप कहो तो मैं मार्क कर देता हूँ, देखो 4 दिन यहाँ सेव हुआ है और 6 दिन यहाँ सेव हुआ, दिख गया आपको, है ना? तो दिस इज द सेविंग इन द, नहीं रुक जाओ, यहाँ पे 4 दिन का है और यहाँ पे 6 दिन का ओवरलैप है, ठीक है। तो टोटल आपका कितना सेव हुआ, 10 दिन हुआ ना सेव आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बेनिफिट है फिनिश टू फिनिश का, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल, तो मेरा एग्जाम्पल है ना, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अब आप एक काम करो कि अगर आपने फिनिश टू फिनिश किया है और नहीं भी किया है तो फिर भी आप सोच के मुझे बताओ कि आपकी इंजीनियरिंग डोमेन में, वो सिविल में हो चाहे मैकेनिकल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, आप मुझे बताओ कि फिनिश टू फिनिश का बढ़िया एग्जाम्पल क्या है आपके पास, फटाफट लाओ यहाँ पे। Reinforcement and casting. Yeah, painting and cleaning. हाँ क्या क्या बताओ यहाँ पे, बताओ प्रीडिसेसर का नाम लो। Painting and cleaning, one example. Painting, okay, so you write it, this is your screen and you explain to us. Painting and cleaning. Yeah. Yeah, as you are painting, so you are cleaning the premises at the same time, and I think that it is a good one. Yeah, painting and cleaning. Yeah, you don't have to complete the painting to do the cleaning job. So what you can do the painting, but as you complete a part of the painting, you can start the cleaning process. And when the painting finishes, and the cleaning can be also finished with that. Okay. So guys, now I agree with this example of the finish to finish painting and cleaning. So guys, you tell me, do you agree with this finish to finish? Do you think it makes sense to do the painting and cleaning like this? See, the cleaning can be done even after completing the painting. So technically it is not a problem, but we are not being smart with time. If you want to be smart with time, just think of it, what will be useful. So all activities can be put into the finish to start relationship, but a smart project manager will look forward to save time. You can save time if you think that you can put here start to start, or you can put here the finish to finish. So if you look at the painting and cleaning, if the cleaning started somewhere in the middle of the painting and continued to clean, and then you can clean the area completing when the painting finishes, I think that's a smart move. Now guys, I'm going to ask you a dependency check question. Suppose you are not doing any painting at all, would you still need to do the cleaning part, cleaning activity? Yes. No, painting नहीं हुआ तो कुछ गंदा ही नहीं हुआ तो फिर cleaning क्यों करोगे? Okay, fine. Do you get my point? So it means that the cleaning will be done if you do the painting, but if you're not doing the painting, there is no need to clean. Okay. Because nothing is going to get messed up. It means that who is the boss? Painting is the boss. Painting. So if the painting happens, only then the cleaning will be required to be done. Okay. Right? Okay. Okay. So that is why we say that the painting is the. Now I'll tell you that what is the dynamics. See, the dynamics is that if you change the cleaning duration to 15 and see the start date, see that what happens? The finish date will not change. The finish date will be staying fixed on the 27th of May. Change करो इसे, cleaning की जो है duration करो ना यहाँ पे 15. अरे बाबा, start date नहीं बाबा. अरे यार, मैंने एरो लगाए यहाँ पे, आप घुसे रहो वहां पे. 1 मिनट हो जाओ यार. Oh, sorry. आप highlight किया इसके लिए मैं उधर ही था. आप इसमें करो ना चेंज. हम डेट थोड़ी ना चेंज करेंगे, हम यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज करेंगे. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट डेट इसलिए चेंज होगी क्योंकि फिनिश डेट प्रीडिसेसर के कंट्रोल में है. फिनिश डेट नहीं चेंज होगा यहाँ पे. स्टार्ट डेट जो है क्या होगा, और भी प्रीपोन हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा. और भी वो कहेगा कि ठीक है, आपको 10 दिन की बजाय अगर 15 दिन चाहिए, फिनिश डेट चेंज नहीं होगी, इसलिए आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ये 15 दिन का काम आप जो है ये पूरा कर सको. अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, अगर मैं
अगर मैं पेंटिंग का ड्यूरेशन में 30 दिन में कर देता हूं, पेंटिंग का ड्यूरेशन 30 दिन में कर देता हूं, तब मुझे एक चीज बताओ कि क्लीनिंग का फिनिश डेट चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे कोई जवाब तो दो चेंज यार। नहीं हो होएगा। जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर पेंटिंग की ड्यूरेशन को अगर आप ये बढ़ाओगे तो उसकी फिनिश डेट बढ़ेगी। तो वो क्या करेगा, साथ में क्लीनिंग की भी फिनिश डेट को वो घसीट कर साथ में लेके जाएगा, क्योंकि वो फिनिश टू फिनिश में वो कनेक्टेड है। आनंद इसको चेक करो, Yes, इसको yes, चेक yes. करो, जाओ पेंटिंग की ड्यूरेशन को करो 30 दिन, और इसको याद कर लो अपने माइंड में कि फिनिश टू फिनिश में क्या होता है। करो, 30 किया, दिख गया? Yeah. हाँ, अब इसको करो फिर से 24 करो, 30 का 24 करो। ठीक है, समझ में आई बात? फिनिश टू फिनिश में क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखो, ऊपर जो बॉस हैं वो बोल रहे हैं कि भैया जब मेरी फिनिश डेट चेंज होगी तब आपकी फिनिश डेट भी चेंज होगी। मैंने थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया यारो। तो ये जो ऊपर वाली जो फिनिश डेट है वो बॉस की है, नीचे वाली फिनिश डेट जो है वो सबऑर्डिनेट की है। तो बॉस बोल रहे हैं कि मेरी फिनिश डेट चेंज होगी तब आपकी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये फिनिश टू फिनिश जो है, इसलिए ये ऐसे काम करता है। अगर इसको मैं करता हूँ 30 दिन, अब 30 दिन होने से क्या होता है कि बॉस की फिनिश डेट चेंज होती है, तो सबऑर्डिनेट की भी फिनिश डेट जो है वो चेंज होगी। अगर मैं इसको करता हूं मैं 29 दिन, अब देखो धीरे धीरे चेंज हो रही है नहीं? तो अब इसको मैंने 28 दिन कर दिया, अब देखो धीरे धीरे ये आ रहा है आगे। अब मैंने इसको जो है 25 दिन कर दिया, आ रहा है धीरे धीरे आगे। अब मैंने इसको 24 दिन कर दिए, ये आ गया धीरे धीरे आगे। बात आ गई समझ में नहीं? Okay. सभी से पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर? यस फिनिश सर, है? Yes. क्लियर सर, क्लियर। तो फिनिश टू फिनिश का ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सबको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। वैसे तो एग्जाम्पल तो कई हैं, तो आप अगर इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं अगले पे चलूं? यस सर। Okay. हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये जो स्टार्ट टू फिनिश है ना, कुछ लोग कहते हैं यार स्टार्ट टू फिनिश जो है समझाना थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन मैं स्टार्ट टू फिनिश के कम से कम 4-5 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो हमारे रियल लाइफ में है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ना मैं ये बता देता हूँ, स्टार्ट टू फिनिश जो है इन तीनों से जो है ना, मतलब ये अलग है। मैं तुम्हारा माइंडसेट में वो तैयार कर देता हूँ। ये जो फिनिश टू फिनिश है, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश जो है, ये जो तीन है ना, ये आपकी जो है आते हैं इंजीनियरिंग प्रोसेस से। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोसेस। एक चीज मैं लिख देता हूं मैं पहले, दीज थ्री रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो है स्टार्ट टू फिनिश, इट इज ड्यू टू नॉन इंजीनियरिंग रीजन। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर रीजन और भी क्लियर होगा। इतना अपने माइंड में डाल लो। डाल लिया माइंड में? स्टार्ट टू फिनिश क्या है? इट इज ड्यू टू नॉन इंजीनियरिंग रीजन। बाकी तीन क्या है? अरे कोई कुछ बोलो यार। Due to non-engineering reason. वही हो जाता, शोले में होता है ना, वो कहते हैं अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है, ऐसे सन्नाटा मत किया करो बीच बीच में। ठीक है, तो कुछ बोला करो, ताकि देखो हम इंटरनेट में बैठे ना, हो सकता है मैं ही डिस्कनेक्ट हो जाऊं, तो मैं फिर क्या करूंगा, फिर मैं पता करूंगा अभी क्या हुआ। तो डिराइव फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोसेस ड्यू टू। अच्छा, अब हम इसको समझेंगे पहले अपने जो है फाइल में जाके। अब एक काम करो कि आप ना सैयद अपनी ना वो MSP नोट्स वाली वर्ड फाइल खोलो, वर्ड फाइल नहीं, प्राइमावेरा नोट्स। ठीक है, प्राइमावेरा नोट्स जो है वो दो फॉर्मेट में है, एक वर्ड फाइल में भी और एक एक्सेल फाइल में भी है। अच्छा, अब इसमें जो वर्ड वाली फाइल है वो वाली फाइल खोलो। अब वर्ड फाइल में इसकी एक सिचुएशन दी हुई है, वहां से मैं समझाऊंगा, फिर आपको स्टार्ट टू फिनिश बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें आ जाओ वर्ड फाइल में। ये तो एक्सेल फाइल है ना, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। उसी फोल्डर में उसी के साथ में एक वर्ड फाइल भी है। अरे एक सेकंड। हाँ देखो गाइस,
This is the word file. Now in the word file there is a situation here. कहाँ पे गया? हाँ देखो guys, यहाँ पे क्या है कि एक जो है situation है guys, please read this start to finish. पढ़ो इसे. I have to catch a train that dispatch at 5 p.m. from station. 5 बजे ट्रेन जो है बिल्कुल निकल जाएगी स्टेशन से. 1 घंटे का जो है ना, मतलब ये समय लगता है घर से स्टेशन तक पहुंचने में. तो मुझे घर से कितने बजे चलना चाहिए? 4 बजे. अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैं 4 बजे जो है मैं ये घर से चला. ठीक है. अब 4 बजे चलने के बाद क्या हुआ कि रास्ते में कैब ड्राइवर बोलता है कि सर ये 10 मिनट मुझे लगेंगे टायर चेंज करने में. ठीक है. अब उसने 10 मिनट जो है वो लगाए टायर चेंज करने में. तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ट्रेन पकड़ पाऊंगा? नहीं. नो. नहीं. अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एक दूसरा मौका और ले लेते हैं. अब की बारी में फिर से चलता हूं मैं घर से. अब मुझे वही बात है कि 5 बजे मुझे पहुंचना है. अब की बारी बताओ कि तुम घर से कितने बजे तुम चलोगे ताकि ट्रेन मिस ना हो. अब की बारी कितने बजे? 4:30. सॉरी 3:30. 3:30 बजे मैं घर से चला. ठीक है. अब ध्यान से सुनना. अब हुआ क्या कि रास्ते में 10 मिनट लग गए टायर चेंज में. बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांति से सोचना, तब जो है वो जवाब देना. 10 मिनट और लग गए रूट चेंज करने में. ठीक है. अब ध्यान से सोच समझ के मुझे ये बताओ कि ट्रेन में पकड़ पाऊंगा कि नहीं. 1 घंटा तो मेरे को रोड पे तो चाहिए ही चाहिए. मैं स्टेशन में कितने बजे मैं पहुंचूंगा? 4:50 को आएगा. हाँ, तो ट्रेन कैन आई कैच द ट्रेन इफ आई रीच द स्टेशन 10 minutes before the departure? Yes. Now this is called the time buffer. So you will create a buffer. Now guys, tell me one thing. अब ध्यान से ना सुनना मेरी बात. Suppose if I reach the railway station at 4:30 p.m. I reach the railway station at 4:30 p.m. There is no problem on the way. Can I ask the station master to depart the train for me? No. No, I cannot say. Suppose the station master is my childhood friend. Okay. Now I know the station master's mobile number also. As I'm going toward the station, I feel that I would be delayed. Now, can I tell the station master to delay the departure of the train from 5 p.m. to 5:05 or 5:10 p.m.? Can I ask him to delay the train for me? अरे बाबा बोलो यार, बोल दो. हाँ बोल दो. हैं? No. No, he will not depart the train because he will say that, look, you are my friend, but this is a public utility vehicle. So there are thousands of people, they are trying to board it. And I have a responsibility to ensure that the trains waiting outside the city boundaries. आपने कभी फील किया है कि आप अपने शहर में पहुंच जाते हो और ट्रेन जो है वो सिग्नल पे बिल्कुल शहर के बाहर आके जो है वो अटक जाती है? क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे फंसी हुई है. बात आ रही है समझ में? नहीं. Yes. कई बार हुआ ना ऐसा आपके साथ कि आप अपने शहर में पहुंचे और यूं हो जाती है स्थिति कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके. वो क्यों होता है कि प्लेटफॉर्म पे जो है कोई ट्रेन फंस जाती है, किसी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी का भी वो टॉयलेट में वो पानी नहीं भरा होता है, या किसी का अभी स्टाफ नहीं आया. किसी ट्रेन का भी होता है ना स्टाफ, वो स्टाफ नहीं आया तो वो कहते हैं यार रुक जाओ, वो ट्रैफिक में है, वो रोक लेता है फिर ड्राइवर. तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो शहर में आने वाली ट्रेन है जो बाहर जो है वो भीड़ लग जाती है. इसलिए स्टेशन मास्टर पे बड़ा प्रेशर होता है कि हर ट्रेन उसके जो प्लेटफॉर्म पे वो टाइम से जाए, टाइम से जाए, टाइम से जाए. ठीक है. तो स्टेशन मास्टर नहीं कर सकता. इसका मतलब जो है ट्रेन ये बोलती है कि द स्टार्ट, my start is going to happen at 5 p.m. You please finish reaching the railway platform before I start. Your activity is to reach the railway platform
एंड योर एक्टिविटी शुड फिनिश बिफोर आई स्टार्ट। ठीक है गाइज, यही है ना, यही है ना बात। अगर मान लो कि ट्रेन से आप बात कर पाते तो ट्रेन आपसे क्या क्या बोलती? ट्रेन आपको जब वो घर पे फोन करती, ठीक है, तो ट्रेन आपसे बोलती कि मैं 5 बजे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपका जो काम है रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का, वो आप कृपया करके 5 बजे से पहले ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का कार्य आप फिनिश करें, क्योंकि मैं अपनी स्टार्ट टाइम जो है चेंज नहीं करूंगी। बात आ रही समझ में? नहीं जी सर, आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टार्ट टाइम है वो फिनिश टाइम को कंट्रोल कर रही है, और ये जो डेट एंड टाइम है ये आपने चूज नहीं किया, आपने सिर्फ टिकट चूज किया। ये डेट एंड टाइम किसने बनाया? ये रेलवे बोर्ड ने बनाया। आपने रेलवे की वेबसाइट पे देखा 1 महीने पहले, आपने इसको बुक कर लिया। बात आ रही समझ में? अच्छा, मान लो ये जो है ट्रेन नहीं है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, 5 बजे की इंटरनेशनल फ्लाइट है। आपने दिल्ली से जो है रियाद जाना है, आपके जो है नए बॉस ने, नई कंपनी में नए बॉस ने आपको वीजा भेज दिया फ्री में, टिकट फ्री में भेज दी है, और वहां पे 15 दिन जो है होटल में ठहराने का इंतजाम भी फ्री में वो कर दिया है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि आप इस फ्लाइट को मिस करना चाहोगे? अरे कोई कुछ नो, फ्लाइट को मिस तो आप क्या करोगे? आप जो है ऐसे इंतजाम करोगे कि करेक्ट आप ये करोगे कि भाई चलो हम एक काम करते हैं कि 5 बजे की अगर ये बोर्डिंग टाइम है, मतलब 5 बजे की बोर्डिंग टाइम नहीं है, वो तो डिपार्चर है फ्लाइट की, तो बोर्डिंग टाइम है वो आपकी शुरू हो जाती है कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा पहले ही। क्योंकि हवाई जहाज में क्या होता है कि वो ABCD जो रो होती है ना, जो आपकी जो नंबर से सबसे पहले जो पीछे के जो पैसेंजर होते हैं उनको कहते हैं कि आप जाओ पहले, जो बिल्कुल लास्ट के जो नंबर होता है, ठीक है। तो पहले तो जो सबसे जो लास्ट में होते हैं उनको पहले कहते हैं कि आप घुसो अंदर, फिर धीमे धीमे करके जो पीछे फिर आगे वाले रोज के फिर 1 नंबर तक आते हैं, ठीक है, उनको फिर वो बिठाते हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें आधे पौने घंटे का टाइम लगता है। तो बोर्डिंग तो आपकी जो है कम से कम नहीं तो बस 4:15 बजे स्टार्ट हो जाएगी, अगर 5 बजे उसकी फ्लाइट टाइम है। तो आप ये कहो कि चलो ठीक है कि बोर्डिंग अगर ये 4:15 बजे स्टार्ट होगी तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं बिल्कुल बोर्डिंग गेट पे 4 बजे पहुंचने का टारगेट करता हूँ। फिर आप क्या करोगे, 4 बजे से उल्टी जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे कि मेरे को पासपोर्ट में वो उसमें जो इमिग्रेशन में कितना टाइम चाहिए, सिक्योरिटी जांच में कितना टाइम चाहिए, कोविड क्लियरेंस में कितना टाइम चाहिए, चेक इन काउंटर पे कितना टाइम चाहिए, मेरे को सड़क पे कितना टाइम चाहिए, और घर पे अपना सामान पैक करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट करके घर में अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप जो है करेक्ट 4 बजे पहुंच गए। अगर आप 4 बजे पहुंच जाते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वेट भी करना पड़ता कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब अगर आपकी ट्रेन या फ्लाइट मिस होगी। मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं 4:30 बजे में रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है, और मेरी 5 बजे की ट्रेन है, अगर मैं आधे घंटे वेट कर लेता हूँ उसमें प्रॉब्लम है या ट्रेन मिस होने में जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम है? बताओ। सेफर साइड है सर, अगर पहले पहुंचना है। हाँ, तो पहले पहुंचना जो है वो अच्छा होता है ना। लेकिन ट्रेन तो 5 बजे ही जाएगी और फ्लाइट भी 5 बजे ही जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो फ्लाइट की जो डेट और टाइम है ये आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज किया, लेकिन इसको आपने शेड्यूल आपने नहीं बनाया। जो फ्लाइट के जो शेड्यूल कौन तैयार करता है? एयरलाइन तैयार करती है भाई, बोलो ना सीधा, एयरलाइन तैयार करती है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपने स्कूल से लेके जो है अपने कॉलेज टाइम तक काफी एग्जाम दिए, कोई एग्जाम मिस हुआ है आपका? नहीं सर। हाँ, नहीं हुआ ना मिस, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट टू फिनिश। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो उसका तो खास ध्यान रखोगे, आप तो सेंटर में 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओगे। आप कहोगे 1 घंटा पहले जाके जो थोड़ी देर बैठ के हम जो वहां पे रिवाइज कर लें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसी घंटी बजेगी, जब जैसी एग्जामिनर और जो भी लोग होंगे वो कहेंगे जी चलो जी आप अंदर एग्जाम हॉल में जाओ, तो आप लाइन में लग जाओगे, आप अपना आराम से अपनी सीट पे जाके बैठ जाओगे। लेकिन लेट करना तो फायदे का सौदा नहीं है ना। तो कई जगह पे स्टार्ट टू फिनिश है। जब हम ट्रेन पकड़ते हैं वो स्टार्ट टू फिनिश है, जब हम फ्लाइट पकड़ते हैं वो स्टार्ट टू फिनिश है, जब हम एग्जाम देते हैं वो स्टार्ट टू फिनिश है। और एक जगह और है जो स्टार्ट टू फिनिश है। मान लो कि 5 बजे की जो है ये मूवी है,
हाँ, मूवी में एक बात है, एग्जाम हॉल में अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मूवी में कोई रोकेगा नहीं आपको। मान लो 5 बजे जो है पिक्चर स्टार्ट है, ठीक है, 5 बजे जो है मूवी स्टार्ट हो गई और आप अपनी सीट में बैठे 5:30 बजे जाके, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो यार बड़ी मारामारी चल रही है खूब, और पूरी मूवी आपकी निकल गई और सर के ऊपर से स्टोरी चलेगी, नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि जो शुरू के जो आधे घंटे थे उसी के अंदर मूवी की बैकग्राउंड बन रही थी। अब आपको बैकग्राउंड का ही नहीं पता तो फोरग्राउंड में क्या कर लोगे आप? बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में कई जगह पे स्टार्ट टू फिनिश है। मेरे को एक चीज बताओ, अपनी शादी पे टाइम पे पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे? हाँ, पहुंच गए थे। बस ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश, फिर समझाने की और क्या जरूरत है? फिर इससे ज्यादा और क्या समझाऊंगा मैं? अगर आपने अपनी शादी टाइम पे वो कर लिया है तो फिर इसका मतलब स्टार्ट टू फिनिश में आप तो माहिर हो। अब स्टार्ट टू सर फिनिश इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा अब आपको। हाँ, कोई कुछ पूछ के चुप हो गया, पूछ लो पूछ लो। सर एक एग्जांपल एक और हो सकता है। हाँ बताओ, बहुत अच्छी बात है, ये तो एग्जाम्पल और दो, बिल्कुल होना चाहिए। सर सर जैसे कि सर हमारा जो एटीएम मशीन होती है, तो उसमें जो गार्ड है, तो उसकी ड्यूटी अगर शाम में 5 बजे चेंज होती है, वो तभी हो पाएगी तब दूसरा गार्ड आ जाएगा। नहीं, अगर वो नहीं आएगा तो उसकी ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी। नहीं, वो एक अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहे। उसकी अच्छा। ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये जो है ना, आपने कहाँ से सुना है ये स्टोरी, कहाँ से सुनी है? सर मैंने पढ़ी थी इधर कहीं 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 पढ़ी नहीं। स्टार्ट टू ये फिनिश में। ये स्टार्ट टू फिनिश में नहीं है, ये स्टार्ट टू फिनिश ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको। वो गार्ड वाली जो स्टोरी है वो सुनाता है वो गोस्वामी है, वो सचिन गोस्वामी। लेकिन ना किसी को ना उससे समझ नहीं आती, लोग उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको जो है बिल्कुल डिलीट कर दो माइंड में से। आप इस पे ध्यान दो कि फ्लाइट टाइम पे, फ्लाइट ओके सर। आपने कभी एग्जाम मिस नहीं किया, बस 2 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है ना? ठीक है सर। अगर आपने जिंदगी में कोई एग्जाम मिस नहीं किया है, कोई फ्लाइट मिस नहीं की है, ठीक है, तो आप ये समझो कि स्टार्ट टू फिनिश की अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी पूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या किया था कि प्रीडिसेसर से पहले ही जो है वो तैयारी करके आप जो है वो उस पर पहुंच गए थे, और उसमें कोई डिले। अब मैं स्टार्ट टू फिनिश की इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, इसका एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इसका मैं सैंपल दूंगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ क्या है। एक ना मैं एक मोबाइल टावर का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उस मोबाइल टावर के प्रोजेक्ट में क्या है, एक टास्क है एक्टिवेट 5G सिग्नल, एक, ठीक है, टावर अपग्रेड हो रहा है, एक्टिवेट 5G सिग्नल। अब क्या हुआ कि ये जो 5G सिग्नल जो आदमी अपग्रेड जो करता है ना, जो मतलब जो एक्टिवेट जो करता है, ये है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है। अब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ये थोड़ा सा शेयर्ड रिसोर्स है, रेयर रिसोर्स है, क्योंकि महंगा रिसोर्स है। तो हमारी कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं कि ये जो आदमी है ये 1:5 की रेशियो में रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आदमी 1:5 की रेशियो है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, एक सेकंड ये स्क्रीन शिफ्ट नहीं करना, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो 5 प्रोजेक्ट्स में वो शेयर होगा, ठीक है। 1:1 सब्जेक्ट मैटर will be shared across 5 projects. Guys, is this clear? Okay, now what happens, I call this guy and I ask him that can you please come on the 1st of the May? He says no, I cannot come on the 1st of the May, I am engaged, but I can come on the 20th. So guys, this is the 20th of the May, he can come on the 20th. So first of all, I believe that you agree that I'll have to push this task to the 20th because he has given me the appointment for the 20th. अब मैंने क्या किया, इसकी जो एक्टिविटी के ऊपर एक मैंने कंस्ट्रेंट लगाया और वो है मैंडेटरी स्टार्ट। और ये किस डेट को होगी स्टार्ट? उसने मुझे अपॉइंटमेंट दी है 20th of May, तो मैंने इसको 20 तारीख पे जो है इसको सेट कर दिया। आपने देखा ये एक्टिविटी सेट हो गई 20 तारीख पे, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रेंट भी आएगा ना, सेट मैंने वो कर दिए क्योंकि उसने मुझे अपॉइंटमेंट 20 तारीख की दी है। अब मैंने उससे पूछा कि आपके आने से पहले क्या क्या चीजें तैयार रहनी चाहिए, तो उसने कहा
कि before I come, you should install hardware, firmware, and software. So this is the activity to do the same. Install hardware, then firmware and software. हार्डवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसने कहा कि भाई ये तैयार रहना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया, मैंने पूछा भाई टीम, ये जो 5G एक्टिवेशन करने के लिए हार्डवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा, इसमें कितना दिन चाहिए? उन्होंने कहा सर 6 दिन चाहिए। तो मैंने कहा भाई देखो, आपकी एक्टिविटी, ठीक है, इनकी एक्टिविटी से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा सर ठीक है। तो अब आप एक काम करो सैयद, इसमें जी सर। आप रिलेशनशिप टैब में जाओ, इसी को सिलेक्टेड रखते हुए अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी हम स्टार्ट टू फिनिश की रिलेशनशिप जो है वो सेट करेंगे हम। जाओ इसमें फटाफट जाओ रिलेशनशिप। सर एक सेकंड, ये सब छोड़ दो, अभी स्पीकर जैसे चल रहा है ना उसका अंदर का, उसे चलने दो। अब इसमें हमने क्या करना है, हम अभी सक्सेसर पे हैं, तो सक्सेसर का प्रीडिसेसर सेट होगा, तो इस पे जाओ, ये ऐसा है। अब इसका प्रीडिसेसर होगा एक्टिवेट 5G सिग्नल, इसको सिलेक्ट करो, एक्टिवेट 5G, और इसको सिलेक्ट करके इसको क्लोज कर दो इसे। अब इसमें क्या हुआ कि देखो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये फिनिश टू स्टार्ट ही डालेगा, बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोग्राम किया हुआ है। अब आप इसको चेंज करके कर दो SF। अब देखो इसमें बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल बैक टू बैक है। आप मुझे बताओ, क्या इसी तरीके से हम रेलवे स्टेशन की प्लानिंग करते हैं और फ्लाइट की? नहीं, नहीं करते ना हम। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि गाइस एक काम करो कि 3 दिन का ना लीड टाइम डालो, लीडिंग, ठीक है, 3 दिन। तो 20 तारीख में से 3 दिन जो है पहले कंप्लीट करो। तो 20 - 3 कितना हुआ? फटाफट बोला यार, 20 - 3 कितना हुआ? 19 क्या बात कर रहे हो यार? सर। 20 20 - 3, 20 मई -3। हाँ, तो अब आप इसमें क्या करो कि -3 इसमें डालो। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 17। हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी टीम से मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो काम के तो 6 दिन तो ले लो ये पूरे, और बीच में 3 दिन का गैप भी ले लो। अब 3 दिन का गैप जो है ये मैंने इसलिए डाला है, ये सेफ्टी मार्जिन के लिए। तो ये जो आपका ये जो टाइम है, इसको हम बोलते हैं लीड टाइम, और नॉर्मल में हम बोलते हैं इसको बफर लीड टाइम, और इट इज आल्सो कॉल्ड सेफ्टी। हम लोग क्या कहते हैं ना प्रचलित भाषा में, बफर टाइम। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है सेफ्टी मार्जिन, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन टाइम, ठीक है। गाइस जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, ये ब्लूटूथ यूज कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, करो। सर ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था मैंने। डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी? देखो हाँ आ गया सर। ये जो है ना, देखो ये जो लीड टाइम है, ये हमने जो है ये बफर डाला है। तो दिस इज ए बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यू आर हैविंग ए स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप। आप ये बात मानते हो ना कि आपको रेलवे स्टेशन थोड़ी पहले पहुंचना चाहिए, एयरपोर्ट थोड़ी पहले पहुंचना। अब क्यों, मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, मैंने इनसे पूछा कि सर अगर 20 तारीख को अगर मैं आपके इनपुट्स में प्रोवाइड नहीं कर पाया तो क्या करोगे आप? वो फिर बोल रहे हैं कि अगर आप 20 तारीख को मेरे इनपुट प्रोवाइड नहीं कर पाए तो मैं आपकी साइट पे काम नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा वापस और बॉस को मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि दैट यू आर वेस्टिंग माय टाइम। बात आ रही समझ में? नहीं?
Yes, sir. वो ये बोल रहे हैं कि बॉस डायरेक्टली मेरे टाइम को कंट्रोल करते हैं। मेरी तनख्वाह जो है पूरी कंपनी में जिसकी सबसे ऊंची तनख्वाह है उससे भी 5 गुना है मेरी तनख्वाह। मेरा एक भी घंटा वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। और बॉस मेरे टाइम का हिसाब रखते हैं। मेरी टाइम शीट जो है बॉस के पास होती है। तो मुझे जो है हर रोज के 1-1 घंटे का बॉस को हिसाब दे देना पड़ता है, मैंने कहाँ पे क्या काम किया। अगर आपकी साइट पे आया और आपने मुझे इनपुट प्रोवाइड नहीं किए तो मैं 20 तारीख को आऊंगा और 20 तारीख की मैं रिटर्न फ्लाइट से मैं दूसरी साइट पे मैं ये चला जाऊंगा, लेकिन मैं बॉस को मैं लिख के आपका नाम मैं दे दूंगा कि इन्होंने मुझे साइट पे बुलाया लेकिन साइट पे इनके इनपुट्स तैयार नहीं थे, इसलिए मेरा एक दिन वेस्ट हुआ है और मेरी जो एक दिन की तनख्वाह है इनकी तनख्वाह में से काट ली जाए। बात आ रही समझ में? नहीं? जी सर। हाँ, ये रियलिटी है, ऐसा हुआ है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी इंडस्ट्री में तो खैर जो है वो माफी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर और आईटी में माफी नहीं मिलती। हम अगर किसी दूसरे का टाइम वेस्ट अगर वो करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट तनख्वाह हमारी तनख्वाह में से काट के कंपनी अपने पास जमा कर लेती है। Sir, can I come to my screen 1 minute? नहीं, वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डू नॉट इंटरप्ट दिस, ओके, प्लीज वेट। अब ये जो रिसोर्स है, अब मैंने इससे पूछा कि भाई एक मेरे को बताओ कि अगर ये डेट आपकी मैं नहीं ले सकता, मैं आपको पहले ही मैं ये मना कर दूंगा, तो आप अगली डेट कब दोगे? क्या आपको अगली डेट 1 महीने बाद मिलेगी। अब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोग मुझे सोच के ये चीज बताओ, क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी एक्टिविटी हो जाए? अरे तो यार, सर हाँ, नहीं ना। तो नहीं आप हर तरीके से कोशिश करोगे कि इसकी इनपुट भी तैयार हो जाए। तो इसकी इनपुट क्या है? तो इसका इनपुट जो है, ये जो सक्सेसर वाला टास्क है, ये जो इंस्टॉल हार्डवेयर फर्मवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर है, ये आपने हर हाल में तैयार करके देना है। तो इसलिए आपने अपनी टीम से कहा है कि देखो, एक तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 6 दिन और 3 दिन की मैं ये मार्जिन दे रहा हूँ। अगर तुम लोग अगर 6 दिन का काम करने के बाद और 3 दिन मार्जिन लेने के बाद अगर इस एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाए तो ये आदमी आएगा और हम सब की जो है कंप्लेंट कर देगा बॉस को। अब बताओ क्या करना है? तो सबने कहा नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, हम तो कोशिश करेंगे 6 दिन का काम 6 दिन में ही हो जाए पूरा, और 3 दिन का भी मार्जिन जो है वो यूटिलाइज ना हो, वो हमारी तो कोशिश ये होगी। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आपको आई बात ये समझ में कि स्टार्ट टू फिनिश इंपॉर्टेंट क्यों है। अब स्टार्ट टू फिनिश मैं आपको बताता हूँ कि किन रीजन से प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये लगाया जाता है। द स्टार्ट टू फिनिश इज अप्लाइड मेनली ड्यू टू 2 रीजन। 1, गाइस ये दो रीजन पढ़ लो आप, और पढ़ के जोर से बताओ मुझे क्या है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, स्पेशल क्लाइंट रिक्वेस्ट। हाँ, ये नॉन इंजीनियरिंग की जो है वो वजह से होता है। या तो क्लाइंट कहता है, देखो क्लाइंट कहता है कि देखो मेरा जो एक कंपोनेंट है ना, इसको थोड़ा पहले कर दो। मान लो मैंने कैलकुलेट किया कि ये कंपोनेंट जो है 30 मई को कंप्लीट होगा नॉर्मली मेरी इंजीनियरिंग के प्रोसेस के वो मुताबिक। वो ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा ये जल्दी कर दो। वो ये कह रहा है कि इसको ना 30 मई की बजाय इसको 20 मई पे करके दो मुझे। ठीक है, तो ये जो स्पेशल क्लाइंट रिक्वेस्ट है, तो इसकी जो है वो वजह से मुझे यहाँ पे डेट कंस्ट्रेंट डाल के फिर मुझे उल्टी गिनती वो करके मुझे वो करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि आप जो अगर हवाई जहाज पे चढ़ सको अपनी मर्जी से, तो वो क्या होगा? क्या वो स्टार्ट टू फिनिश रहेगा या फिर वो फिनिश टू स्टार्ट हो जाएगा? फिर तो वो फिनिश टू स्टार्ट हो जाएगा, है नहीं। एयरलाइन कहेगी भाई आप लोग जो है वो टिकट बुक करो, आप लोग टेंशन मत लो, जब आप एयरपोर्ट पे आओगे तो तब हम फ्लाइट जो है वो चलाएंगे। मान लो कि फ्लाइट आपकी जो है 5 बजे की है, आप पहुंच गए। अब आप जो है 5 बजे बोर्डिंग गेट पे आप पहुंच गए और बैठ भी गए हवाई जहाज में। अब आप कह रहे हो कि फ्लाइट क्यों नहीं चल रही। तो एयरलाइन ने कहा कि सर आपको याद नहीं है, हमने कहा था कि जब आप पहुंचोगे तब फ्लाइट चलेगी। तो आप कहोगे मैं पहुंच तो गया,
कह रहे जो लास्ट सीट में जो आदमी उसने कॉल करा है वो 8 बजे आएगा, तो अगर वो 8 बजे आएगा तो तब चलेंगे हम, तो सबके लिए तो बराबर है। बताओ एयरलाइन चल जाएगी ऐसे? नहीं सर, कोई मतलब नहीं, नहीं चल पाएगी ना। मान लो आप जो मूवी हॉल में बैठ गए आप, और 5 बजे पिक्चर स्टार्ट है और आप बैठ के इंतजार कर रहे हो कि पिक्चर स्टार्ट होगी। अब आप कह रहे हो कि पिक्चर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, तो फिर जो है मूवी हॉल का मैनेजर आया आपके पास, कह रहा है कि हमने ये कंडीशन दी हुई है टिकट के ऊपर कि जब आप आओगे तब स्टार्ट होगी। तो फिर आपने कहा अभी कब स्टार्ट होगी? कह रहे जो हमारा जो आखिरी पैटर्न है वो रात के 10 बजे आएगा, तो आप बैठे रहो जब तक। बात आ रही समझ में? नहीं? जी सर। इसलिए दुनिया में स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप ये बनाया गया है, क्योंकि कुछ कमिटमेंट क्या होता है, वो डेट बाउंड होती है। जैसे आपका जो है एग्जाम है, तो एग्जाम की जो डेट एंड टाइम को कौन सेट करता है बताओ, आप या एग्जाम बोर्ड? एग्जाम बोर्ड। हाँ, एग्जाम बोर्ड जो है डेट एंड टाइम को सेट करता है। वो आपको जो है टाइम शीट, वो डेट शीट वो बांट देता है, एग्जाम किस किस दिन जो है किस किस तारीख को कितने बजे एग्जाम होगा। तो आप उसके मुताबिक आप स्टार्ट टू फिनिश में कैलकुलेशन करके अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी रिवीजन करके और अच्छे बच्चों की तरह झोला लेके आप एग्जाम हॉल के बाहर टाइम से पहले पहुंच जाते हो। पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? जी सर, पहुंच जाता हूँ। या फिर उनको जाके धमकाते हो कि अभी मैं पहुंचूंगा जब जाके होगा, अभी मैं रिवीजन नहीं करी है? नहीं सर, पल पल के पहुंच जाता। हाँ बिल्कुल। तो इट इज ड्यू टू द स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप, एंड स्टार्ट टू फिनिश इज नॉट ड्यू टू इंजीनियरिंग। आपके ये जो 3 जो रिलेशनशिप है ना, ये आपका जो है ये डिराइव होता है इंजीनियरिंग से। आपको ना ये जो 3 रिलेशनशिप है ना, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, इनको याद करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं खास बात तुम्हें ये बता देता हूँ, स्टार्ट टू फिनिश इज रेयर बट इट इज देयर। अगर आपने इसको नहीं ढूंढा और अगर ये बीच में अगर ये हो गया तो आप दिक्कत में आ जाओगे। बात आ रही समझ में? नहीं? जी सर। प्रोजेक्ट में स्टार्ट टू फिनिश कहाँ पे है ये बताएगी नहीं, ये छुपी होगी कहीं पे। कहीं पे आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लॉज में होगी, या तो कोई क्लाइंट ने जो है आपके बॉस को कहा होगा कि इस फिनिश डेट को कोई स्पेशल कंपोनेंट जो है ये थोड़ी पहले तैयार कर देना, प्रोसेस डेट से पहले तैयार कर देना, इसे थोड़ा जल्दी करके। तो ये सब बातें अगर आपके बॉस ने आपसे कही है तो आप तुरंत इस पे स्टार्ट टू फिनिश की कंस्ट्रेंट जो है वो लगा के आपने इसको प्लान करना है। और बाकी फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश, ये जो 3 जो रिलेशनशिप है, जब आप अपनी इंजीनियरिंग पे ध्यान दोगे तो अपने आप ही ये निकल के आपके सामने आ जाएगी। स्टार्ट टू फिनिश को ढूंढना पड़ता है, और स्टार्ट टू फिनिश की जो है ये रीजंस हैं, लेकिन रीजन तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, लेकिन ये 90% ऑफ द केसेस में यही है रीजन। ठीक है, बात आ गई समझ में? नहीं? जी सर। इसका मैं एग्जांपल नहीं मांग सकता, हो सकता अभी तक आपने यूज ही ना किया हो। मैं सिर्फ इतना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझे कि नहीं समझे। समझ गया सर। इम्प्लीमेंट कर लोगे ना कॉन्फिडेंस के साथ? सर कोई दूसरा एग्जाम्पल बोलेगा तो भी शिपमेंट और पैकिंग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप अपना जो है वो बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज बताओ, मेरा एग्जाम्पल जो मैंने जो समझाया आपको, एक्टिवेट 5G सिग्नल से पहले और जो एयर और फ्लाइट टाइम से पहले और एग्जाम टाइम से पहले, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया आया आया। बस फिर ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखाओ कि आपके स्क्रीन पे क्या जो है वो अलग से हो रहा है जो दूसरे की स्क्रीन पे नहीं हो रहा। आप फिर मेल खोल के बैठ गए, यार ये बंद कर दो मेल ना, पहले उसको बंद करो। यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ, इसको बंद कर दो। इस वक्त मेल क्यों खोल रखा है? जॉब तो आपको मिलती रहेगी। जॉब कहाँ जा रही? दुबई में बैठे हो, जॉब की क्या कभी? इसको प्राइमेवेरा सीख के जाके किसी वो दुबई वर्ल्ड मॉल में जाओ, ठीक है, वहां पे अपने बोर्ड टांग लो गले में कि आई नो प्राइमेवेरा। आप देखो 10 शेख आएंगे आपको ले जाएंगे वो उठा के गोद में। बात आ रही समझ में? नहीं? समझ में आया। मैं एयरपोर्ट मैं वैसे मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मजाक की बात नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट एक इश्यू है डिपार्चर में दुबई में, ठीक है, तो हाँ। बैठे बैठे मेरी किसी से जान पहचान वो मतलब वो हो गई मेरी। तो ऐसी बातचीत करते करते जान पहचान हो गई, तो मैंने उसको अपना कार्ड दे दिया। उसको कार्ड पे वो लिखा हुआ था
मेरा जो कार्ड है ना मेरे कॉन्टेक्टस पेज पे, वही सेम कार्ड है, वो मैंने उसको दे दिया। तो उसमें लिखा है प्राइमावेरा पीएमपी, ये वो ट्रेनिंग कंसल्टिंग। अब मैं इंडिया में लौट आया, पता क्या हुआ, 1 महीने बाद मेरे को फोन कॉल आया, कहाँ से, ये जॉर्डन से। जॉर्डन एक कंट्री है ये मिडल ईस्ट में। तो जॉर्डन से कॉल आया, वो आदमी जो है वो जॉर्डन का था। मैंने उसकी नेशनलिटी नहीं पूछी, मैंने कहा कि मैं ऐसे कंसल्टेंट हूँ, मैं इसलिए मैं ये दुबई में आता हूँ। तो उसने मेरे से पूछा कि अगली आपकी विजिट कब है, मेरे को जो है 25 लोगों की अपनी टीम मेंबर की ट्रेनिंग करवानी है आपसे। मैंने कहा आप मेरी डेट को छोड़ो, आप मुझे बताओ कि कब कराओगे, और बुलवा लो मुझे। बुलाया उसने। वहां पे 25 नहीं, बल्कि जब ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई उसके बाद तो और भी लोग आने लगे। तो 25 नहीं, उस वक्त मैं 75 लोगों की मैं ट्रेनिंग करके आया। तो कौन सा मौका कहाँ आ जाए जिंदगी में कुछ नहीं पता, लेकिन मौके की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना पहले। Okay. और ये जो जिंदगी के जो मौके होते हैं ना, ये होते हैं स्टार्ट टू फिनिश में। बात आ रही है समझ में? स्टार्ट टू फिनिश Okay. होते हैं ये सब मौके। तो आपका जो है प्राइमावेरा की ट्रेनिंग जो है वो फिनिश करके आपको जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। कौन सा मौका जो है कब बैठे कहाँ पे कुछ नहीं वो पता। ठीक है। Okay. हाँ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम क्या हुई है? सर इधर कंस्ट्रेंट दिखा रहा है, ये क्यों है? मैं सक्सेस कर अच्छा, नहीं रहा। देखो कंस्टेंट, गलती से डाला। देखो हमें जो है कंस्टेंट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ना हमने डेट को स्टेबलाइज करना होता है। अब ये वाला कंस्टेंट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें कंस्टेंट चाहिए होता है सिर्फ प्रीडिसेसर, क्योंकि प्रीडिसेसर की डेट फिक्स है 20 तारीख, वो जो है सक्सेसर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो कंस्टेंट है ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट मतलब ट्रेनिंग है। ठीक है, इसको आप अभी क्लोज कर दो बहुत ही आराम से, इसको कंट्रोल डब्लू कर दो। अब आप एक काम करो, यहां से बनाओ लेसन नंबर 4, इसको करो कॉपी गाइज। लेसन 3 इज कंप्लीटेड। लेट अस क्रिएट लेसन नंबर 4। ठीक है, कॉपी पेस्ट करो, लेसन नंबर 4 आपका तैयार हुआ। और 4 को तैयार करने के बाद इसका नाम रखो क्या, कंस्टेंट्स लिखो, डेट कंस्टेंट्स लिखो इसमें, डेट कंस्टेंट्स। डेट की लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ डेट, डेट कंस्टेंट्स। ठीक है, अब एंटर प्रेस करो। हाँ, नाउ यू ओपन द डेट कंस्टेंट्स। अब डेट कंस्टेंट्स में करना क्या है कि ये जो डेटा जो है इसको सारा जो है ट्रांसफॉर्म करना है इसे। देखो सबसे पहली डेट कंस्टेंट क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर प्राइमावेरा में होती है स्टार्ट ऑन और आफ्टर। तो गाइज ये ले लिखो, पहले वाले को चेंज कर दो, स्टार्ट ऑन और आफ्टर। ठीक है, और दूसरी हमारी कंस्टेंट होती है फिनिश ऑन और बिफोर। ठीक है, ये जो है ये मॉडिफाई करो। ठीक है, तीसरी हमारी जो कंस्टेंट है, जो बड़ी अच्छी कंस्टेंट है, वो है आपकी एज लेट एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद हमारी जो चौथी जो द कंस्टेंट है वो उसका नाम है प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रेंट। लिखो ऐसे लिखो स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद एक पांचवी कंस्ट्रेंट है, पहले कर्सर जो है पहले पेरेंट में ले आओ, फिर ऐड करो यहाँ पे चाइल्ड, पहले पेरेंट में ले आओ फिर चाइल्ड होगा ऐड। इसमें लिखो मैंडेटरी, मैंडेटरी फिनिश, MANDATORY फिनिश, मैंडेटरी फिनिश। मैं यही रुकता हूँ। आप लोग पहले जो है ये 5 जो है WBS तैयार करो ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो मैं 5 मिनट में मिलता हूँ, इसको पहले तैयार करो, मैं अभी 5 मिनट के बाद मैं फिर मैं बात करता हूँ।
Yeah, what needs to be done? First, I need to create. Can you go to this Anand? Yes. Can you go to this project tab? So what I need to copy means I need to copy dependencies and relationship and then need to paste. Copy, paste. Copy it and paste it there. Okay. Need to include WBS also. Should be automatically copied when you are copying the project. Okay. But as I open this date constraint, I see these four dependent, these four finish to start. गाइज मैं अभी 1 मिनट में समझा रहा हूँ आपको। आप एक काम करो, पहले ना ये WBS तैयार करो। आप पहले ये जो WBS है ना, इसको आप ये तैयार करो ऐसे। इसमें देख लो, ये बिल्कुल इसी सीरीज में तैयार होनी चाहिए, 4.1 से लेकर 4.5 तक। मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, मैं अभी आप लोगों के साथ में ही मैं आता हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो जरा, मेरे को कुछ अर्जेंट जो है कुछ करना था यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपके साथ आता हूँ मैं। अच्छा, तो आप जो है ना, देखो, सबसे पहले तो आपने ये करना क्या है कि ये आपने ये 5 आपने कर ली क्रिएट। No, I am not able to create because when I copy pasted वो पुरानी वो finish to start to start. नहीं तो उसको मॉडिफाई करना है ना भाई, इसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? ये देखो, इसके अंदर जाओ, इसका नाम चेंज करना है ना। इतना तो अंडरस्टूड है भाई, हम चेंज कर सकते हैं। देखो, ये कर्सर पे क्लिक मारते ही जो है वो एडिट मोड में आ जाता है। वही तो किया मैंने, स्क्रीन पे तो मैं कर रहा था आपके सामने। अभी तक तो आपका ये तैयार भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है कि अब आप इस साइड में आओ। अब यहाँ पे जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, अब आपने इसको करना फिल डाउन। आपने पता क्या लिखना है यहाँ पे आपने लिखना है टास्क, और इसको करना है फिल डाउन। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है, इनका नाम चेंज हो जाएगा टास्क। समझे कि नहीं? और यहाँ पे फिल डाउन करना है जो ड्यूरेशन, और ये सारी की सारी जो ड्यूरेशन है आपकी फिल डाउन से ये हो जाएगी 6। दिख गया आपको? अच्छा, अब आपने क्या क्या करना है, देखो स्क्रीन पे मैं जैसे सैंपल डेटा मैं ये तैयार कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपने तैयार करना है। ऊपर वाली जो स्टार्ट ऑन और आफ्टर है, उसमें सिर्फ 2 ही टास्क चाहिए, बाकी डिलीट कर दो। फिनिश ऑन और बिफोर में दो चाहिए, एज लेट एज पॉसिबल में 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ रहा है? आपका आ रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रेंट, इसमें 2 चाहिए। मैंडेटरी फिनिश में कितनी एक्टिविटी चाहिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप ये 8 जो है ना, ये एक्टिविटीज इसमें डाल लो। ठीक है, और सबसे पहले आप आ जाओ स्टार्ट ऑन और आफ्टर में। ये आपका है सैंपल डेटा। ठीक है,
सारे टास्क जो है वो 6-6 दिन के होंगे, सबका नाम जो है वो टास्क होगा। अगर नहीं है तो आप इसको आप एक बार फिर से फिल डाउन कर दो, फिर से इन सबका नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टास्क। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, कर लिया तैयार ऐसे सैंपल। अरे भाई कोई कुछ बोल नहीं रहा है यार, ऐसे तो डिले कर रहे हो यार इसको तुम जबरदस्ती। देखो जो चीज, ये तो सारी सिंपल चीजें, ये तो आपका जो है कोई मतलब मैं ये कहूंगा जैसे आप एक्सेल में काम करते हो बिल्कुल वैसे ही है। अब जैसे ये जो आपके पास है, ठीक है ना, ये एक्टिविटी है, इसमें जैसे ये डेट कंस्टेंट है तो इसको ये क्लियर कर लो, डेट कंस्टेंट को इसको नॉर्मल कर दो पहले टास्क को। ठीक है, इसको नन कर दो आपके ना। मैं माइक बंद कर रहा हूं मैं, इससे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड में जो साउंड है वो आ रही है। ठीक है, तो देखो आप लोगों की रिकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि क्लीन बन जाए आप लोगों की रिकॉर्डिंग। तो आप लोग इसमें, आपको भी इसमें ध्यान रखना होगा कि भाई आपकी बैकग्राउंड नॉइज जो है इसमें रिकॉर्डिंग में दर्ज ना हो जाए। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट ऑन और आफ्टर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। डेट कंस्ट्रेंट होती है लिमिटेशन ऑफ द डेट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि मैं ना ये टास्क में प्लान कर रहा हूं, मैं टास्क 1 और ये है टास्क 2। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या हुआ कि मैंने फिनिश टू स्टार्ट की रिलेशनशिप डाली। अब फिनिश टू स्टार्ट की रिलेशनशिप डालने के बाद क्या हो रहा है कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरा टास्क 2 जो है वो 8 मई को स्टार्ट हो रहा है। दिख गया आपको सयाद? आनंद, डू यू सी दैट it is starting on the 8th of May? Yes. Now, which is basically derived from the predecessor finish date, because the predecessor is finishing on the 6th and the next working day is the 8th, right? Now, this guy who is assigned on the task 2, or that is the 10-10, so he comes to me, he says, boss, I need to talk to you. He says that I would be on leave and I would not be able to start on the 8th. He says that he would be able to start on this 20th. Guys, do you see that date? He'll be able to join on the 20th. It means that I have to push his activity from the 8th to the 20th. Right, guys? So he says that after I have joined on the 20th, from 20th onward, I would be available to work. So it means that his joining period will be from Saturday onwards. But before this Saturday, guys, किसी के ना बैकग्राउंड में नॉइज हो रही है काफी, मतलब बहुत ज्यादा ये नॉइज है, इससे मैं बहुत ही मतलब परेशान हूं मैं। ठीक है, पता नहीं कुछ हिसिंग नॉइज है, वो माइक के ऊपर कोई हवा पास हो रही, कई बार होती है माइक के ऊपर जो पंखे की मतलब हवा पास होती है। कई बार क्या होता है, हम जो वो लटका हुआ माइक यूज वो करते हैं तो वो हमारे ना बिल्कुल मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं मुंह से तो नाक से जो हवा पास होती है वो उसके नीचे होती है डायरेक्टली। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोफेशनल जो रिकॉर्ड्स जो करते हैं उनकी माइक के आगे एक छोटा सा एक पर्दा होता है गोल सा। ठीक है, प्लीज आप कोशिश करें कि लैपटॉप का माइक यूज करें या माइक को ना अपने सांस की रेंज से थोड़ा बाहर रखें इसे। ठीक है गाइस, प्लीज कोऑपरेट करें प्लीज, तो ताकि मैं आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो ये बोल रहा है कि ये आदमी बोल रहा है कि मैं ये जो रेड वाला जो पीरियड है इसमें मैं लीव पे हूँ। ओके, वो ये बोल रहा है ये है मेरा लीव पीरियड। ठीक है, और ये है मेरा ये अवेलेबल पीरियड। तो ये जो ग्रीन वाला जो पैच है वो उसकी जो है ये अवेलेबिलिटी पीरियड है। वो ये कह रहा है कि सैटरडे के बाद से मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सैटरडे ऑनवर्ड्स मैं अवेलेबल हूँ। तो आप मेरे को सैटरडे ऑनवर्ड्स जब मर्जी जो है काम के लिए आप मुझे बोल सकते हो। तो इस वक्त आपको क्या करना है, अगर कोई आदमी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपके लिए अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम के अंदर, इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर दूसरा आदमी लेना फिजिबल नहीं होगा। क्यों? दूसरे आदमी को काम समझाओगे, उसको सिर्फ 6 दिन और 1 हफ्ता काम कराओगे और समझाने में ही पूरा 1 दिन चाहिए और काम आगे 3 महीने का है। तो मुझे एक चीज बताओ
कि जो आपका जो ओरिजिनल आदमी है उसके लिए वेट करना आपके लिए समझदारी है, या फिर कि शॉर्ट पीरियड के लिए आदमी को समझाओ और उसको फिर छोड़ दो? बताओ सैयद। शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, तो इसलिए आपने क्या किया कि आपने कहा चलो मैं आपके लिए मैं वेट करता हूँ, तो मैं आपकी एक्टिविटी को मैं खिसका के मैं सैटरडे पे ले आता हूँ। आप जब सैटरडे को ज्वाइन करोगे फिर मैं आपके साथ में काम को मैं करूँगा। अब इस चीज को सेट करने के लिए हमने क्या करना है कि इसकी जो एक्टिविटी हम कहेंगे स्टार्ट ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ 20th। ठीक है, ये 20 तारीख है, स्टार्ट ऑन और आफ्टर। देखा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, स्टार्ट ऑन और आफ्टर, मतलब कि स्टार्ट ऑन द 20th या 20 के बाद जो है, कब जब मर्जी स्टार्ट कर लो, क्योंकि आदमी 20 के बाद ये ज्वाइन कर चुका होगा। ठीक है, फिर आप 22, 23 मतलब जो भी वर्किंग डेज है उससे काम करवा सकते हो। अब आपने करना क्या है कि आनंद, ग्रैब योर माउस एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द टास्क टू गो टू द स्टेटस टैब। नीचे है ना आपके पास जो स्टेटस टैब है। अब इसमें एक मिनट रुको, मैं आपको क्या करता हूँ कि थोड़ी मैं ये जगह मैं ये बना दे देता हूँ। देखो, इसको थोड़ा खिसकाते हैं ऊपर। अब ये जो स्टेटस टैब है, इस स्टेटस टैब के अंदर आपके पास एक कंस्ट्रेंट है, देखिए आपको, स्टार्ट ऑन और आफ्टर। गाइस इसको थोड़ा और मैं उठा रहा हूँ क्योंकि इनकी स्क्रीन पे जो है दिख नहीं रहा है। देखो गाइस, दिख गया आपको स्टार्ट ऑन और आफ्टर, ये ड्रॉप डाउन में दिख गया गाइस? हाँ सर, दिख गया सर, दिख गया। हाँ, ये जो स्टार्ट ऑन और आफ्टर है ये आपने लेना है। अब वो ये बोल रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा 20 मई को। तो आनंद आप एक काम करो, इसमें डेट सिलेक्ट करो 20th ऑफ मई। 20th ऑफ मई सिलेक्ट कर लो आप और करो सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही आपने 20th ऑफ मई आपने ये सिलेक्ट किया, तो गाइस एक तरफ ध्यान दो कि ये जाके 20th ऑफ मई पे ये एक्टिविटी जाके ये सेट हो गई। दूसरा, क्योंकि आपने स्टार्ट कंस्ट्रेंट डाला है, तो आप ये देखो कि स्टार्ट कंस्ट्रेंट जो है क्या कर रहा है, स्टार्ट डेट में एक स्टार डाल रहा है। देखिए आपको स्टार्ट डेट में इसने एक स्टार डाल दिया है। स्टार क्यों डाला इसने? क्योंकि ये जो डेट है ये आपने सेट किया, ये अपने आप नेचुरली कैलकुलेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कभी भी आप जो है डेट कंस्ट्रेंट कभी भी आप डालते हो तो हमेशा जो है कंस्ट्रेंट जो है वो आ जाता है। ठीक है, आता ही समझ में? तो कंस्ट्रेंट जब आप डालते हो तो ये अपने आप ये स्टार से ये शो करता है कि इस डेट के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट जो है वो लगाया है। अब आपने जो कंस्ट्रेंट जो लगाया है उसका एक रीजन डालना पड़ेगा आपको ये नोटबुक में, क्योंकि कंस्ट्रेंट अगर आपने डाल दिया और किसी ने देखा और आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज होकर वो कंस्ट्रेंट को या तो वो मानेगा नहीं या तो वो हटा देगा। तो Anand, you have to write a reason for the constraint. You write here. Click on the head. Now you select the word constraint. Now you click on the plus button. After clicking the plus, you click on the cross button. Click on the cross button. Guys, ये ना किसी की माइक में से बड़ा नॉइज आ रहा है यार, ये बंद कर दो। किसकी माइक है प्लीज यार, फॉर गॉड सेक यार, ये वाली माइक ऑन मत करो। ये ना नॉइज ये कॉन्स्टेंटली क्रिएट की जा रही है। जो स्क्रैचिंग साउंड है ये बहुत इरिटेशन हो रही है इससे मुझे। इससे आपकी जो है रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, परमानेंटली आपकी रिकॉर्डिंग जो है पूरी खराब हुई है। आप रिकॉर्डिंग चाहे अपनी करो चाहे मेरी करो, ये साउंड ही आएगा उसमें। आप मेरी आवाज आप क्लियरली सुन नहीं पाओगे आप। अच्छा, अब इसमें करो मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद आप इसमें लिखो द रिसोर्स असाइन्ड ऑन टास्क 2, the resource assigned on task 2 will be joining from 20th May onwards. Will be joining from 20th May onwards.
ठीक है, इसलिए ये आपने कंस्ट्रेंट लगाया है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि 20th में ऑनवर्ड्स जो है आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मान लो आपकी जो है टास्क 1 अगर मान लो 20th या 21 मई पे पहुंच जाए, तो तब ये टास्क जो है ये बैक टू बैक होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आप अगर जैसे आपकी टास्क 1 जल्दी कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये एक्टिविटी सामने नहीं आएगी, वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये इस टाइम पीरियड में जो है यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो जो ग्रीन जो पीरियड है उसमें है। तो ग्रीन पीरियड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर देता हूँ। ग्रीन पीरियड एग्जैक्टली आपके सैटरडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो इस एक्टिविटी को अगर आप ये बड़ा भी कर दोगे तब भी कोई इफेक्ट वो पड़ने वाला नहीं है इसे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को आप स्टार्ट ही आप करोगे सैटरडे से। इस एक्टिविटी के बढ़ने से टास्क 1 के ड्यूरेशन बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो। अगर आप टास्क 1 को अगर आप 12 दिन वो कर देते हो, वो तब भी वहीं पे ही है, क्योंकि टास्क 1 और 2 के बीच में गैप है। अगर आप इसको 6 दिन कर देते हो, वो तब भी वहीं पे ही है। क्यों वहां पे है? क्योंकि वो जो है आदमी 21 तारीख को ज्वाइन करेगा। अगर इस टास्क को आप अगर मान लो कि आप इसको कर देते हो 6 और 6 12 और 12 और 4 16 दिन, तब भी वो एक्टिविटी उसके पास पहुंच जाएगी, उसको धक्का नहीं मार सकती। अगर आप इसको 6 डेज वो कर देते हो, तब भी वो उसको खींच के वो ला नहीं सकता, क्योंकि इसका जो लेफ्ट साइड वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो मैं रेड में जो ये डाल रहा हूँ, ये इसका लीव पीरियड, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपके ग्रीन पीरियड में। तो इसलिए यहाँ पे आप ये देखो, आपकी जो रिलेशनशिप की जो लाइन है उसमें हल्के हल्के जो है ये डॉट आ गया। देखिए आपको डॉट्स, गाइस डू यू नोटिस द डॉट? यस सर। है ना? तो वो ये शो कर रहा है कि आपने क्या किया, इसके सक्सेसर को धक्का मारा है। अगर कहीं पे भी आपको रिलेशनशिप की लाइन अगर डॉटेड मिल जाए, तो आप ये समझो कि आपने उसको खींच के लंबा किया है। तो आप मान के चलो कि जैसे कोई जो है मतलब वो इलास्टिक है, तो इलास्टिक का जो बैंड है अगर वो अपनी नेचुरल विड्थ पे है तो वो सॉलिड है। अगर आप उसको खींचते हो तो वो स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, वो डॉट 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 सी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट ये कह रहा है स्टार्ट ऑन और आफ्टर, अगर सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करो कि इस तारीख या उस तारीख, मतलब इस तारीख को या उसके बाद। ठीक है, इस तारीख को या इस तारीख के बाद आप जो है इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। और गाइज एक चीज मैं पहले में बोल देता हूँ, 100% अगर आपने कंस्ट्रेंट डालना है तो नोट डालना पड़ेगा आपको। दिस इज द रूल। ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रेंट डाला है, अगर नोट नहीं लिखा, कई जगह पे जो है मतलब जो प्राइमावेरा का जो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा या जो भी इस चीज को देख रहा होगा, वो इरिटेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो कभी भी कंस्ट्रेंट डाल के उसको बगैर नोट के मत छोड़ना। ठीक है, अगर आप मान लो किसी बॉस को दिखाओगे प्लान और बॉस बार बार देखेंगे कि जगह जगह पे कंस्ट्रेंट है लेकिन नोट नहीं है, वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे, बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए जो है हमेशा, क्योंकि कंस्ट्रेंट के लिए वो आपको बार बार फोन नहीं करेंगे, आपको बिठा के नहीं। और मैं आपको एक चीज में बोल रहा हूँ, आपने किसी भी वजह से कंस्ट्रेंट डाला हो, आप भी मतलब ये वजह भूल जाओगे आप। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करके छोड़ दो कि ये कंस्ट्रेंट जो है इस वजह से डाली है। तो गाइस, इज दिस क्लियर? इज दिस स्टार्ट ऑन और आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर, क्लियर। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हम ना परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रहते, हमने कहा और रिसोर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई रिसोर्स एक पर्टिकुलर डेट के बाद मिलता है तो हम उसके लिए स्टार्ट ऑन और आफ्टर कंस्ट्रेंट हम डालते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास 2 एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरे पास एक है टास्क 3 और एक है टास्क 4। अच्छा, अब मैं आपको फिनिश टू स्टार्ट में दिखाता हूँ शॉर्टकट में ये किस तरीके से बनता है। अब देखो ध्यान से, मैंने टास्क 3 और 4 को जो है वो सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। गाइस अब ध्यान से देखना, नीचे ये बीच की तरफ देखो, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे है कर्सर, जो मेरा ग्रीन ब्लू बार कहाँ पे है, ये लिंक एक्टिविटीज।
हाँ, लिंक एक्टिविटीज। तो आनंद आप इस पे क्लिक कर दो, लिंक। देखो लिंक करने से क्या हुआ, ये फिनिश टू स्टार्ट की रिलेशनशिप जो है बन गई। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान दिए आपने, अब ध्यान से देखना यहाँ पे देखो रिलेशनशिप लाइन देखो सॉलिड है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पे आप जो रिलेशनशिप को स्ट्रेच नहीं कर रहे, यहाँ पे आपने रिलेशनशिप को स्ट्रेच कर रखा है, धक्का मार रखा है। किसको? टास्क 2। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। जब मैं प्लानिंग कर रहा था, एक आदमी है जिसका नाम जो है टास्क 4 पे लगाया हुआ है। अब ये आदमी आया मेरे पास कि बॉस आपने ना प्लानिंग की है, मेरे को आपने एक टास्क में जो लगाया, मैंने वो देखा है वो नेटवर्क में कि मेरे नाम पे एक एक्टिविटी का जो है ये मैसेज आया टास्क 4 का 10:50 का। मैंने कहा हाँ आया, तो क्या दिक्कत क्या है? कहा सर दिक्कत है एक, मैं आपको जो है पहले से मैं ये बता देता हूँ। गाइस ध्यान से सुनना, ये माइक बंद कर दो, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। वो ये बोल रहा है कि सर मैं ना इस कंपनी में एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करता हूँ, मेरी लास्ट डेट जो है 20 तारीख है। क्या है उसकी लास्ट डेट? 20 तारीख। क्या है कि मैं 20 तारीख की 6 बजे तक ही अवेलेबल हूँ। अगर आप मुझे कोई भी काम देते हैं तो वो 20 तारीख तक ही मैं कर पाऊंगा, उसके बाद प्लीज मुझे कोई काम मत देना। और मुझे 6 दिन का टाइम चाहिए और मैं 20 तारीख तक ही मैं काम कर पाऊंगा। अच्छा, अब गाइज मैं एक चीज मैं आपसे मैं डालने को कहूंगा, एक फ्लोट बार होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी अगर अगर उसका फ्लोट देखे तो हमेशा जो है वो प्रोजेक्ट की वो फिनिश डेट तक ही होती है फ्लोट बार। ठीक है, वो यूं होती है फ्लोट बार। इस केस में क्या होगा, इसका जो फ्लोट बार जो है ये यहीं पे ये लिमिट हो जाएगा, लेकिन फ्लोट बार पहले डिस्प्ले हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फ्लोट बार डिस्प्ले करने के लिए करना क्या है कि हम जो है बार में सेटिंग करेंगे। ध्यान से देखना, आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करो, पहले यहाँ पे बार में जाओ। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो बार एरिया है, ये जो ब्लैंक में, यहाँ पे राइट क्लिक करो, जो व्हाइट है एरिया जहाँ पे मैं टिक मार रहा हूँ। आनंद देखो यार गाइस, दिख गया आपको ये राइट क्लिक करने पे जो मेनू आया है? एक बारी कंफर्म करो। जी सर, दिख गया सर। हाँ, वेरी गुड। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बार, देखो इसमें, इसको सिलेक्ट करो बार। ठीक है, ये जो बार है इसमें कई प्रकार के बार हैं। आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाओ। अब नीचे तक पहुंचने के बाद आपने पता करना क्या है कि इसमें 2 बार आपने सिलेक्ट करने हैं। एक तो आपका फ्लोट बार है, एक आपका ये नेगेटिव। इस पे ना 2 बारी क्लिक करने पे ये टिक होगा। ये नहीं, सिंगल क्लिक से टिक नहीं होता, इस पे डबल टिक करना पड़ता है। हाँ देखो, 1 मिनट रुक जाओ, आनंद स्क्रीन को फ्रीज रखो, दूसरे लोग इस पे देख रहे हैं। गाइज everybody please see and please confirm that you have selected these 2 check boxes, एक फ्लोट बार और एक नेगेटिव फ्लोट बार। कर दिया सिलेक्ट आपने? कर दिया सर। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दो तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी आप देखोगे हर जगह पे आपको दिखेगा फ्लोट बार फ्लोट बार। करो ओके कर दो इसको। हाँ, ओके करने के बाद आप देखोगे ये दिख रही है आपको ब्लैक लाइंस। ये जो ब्लैक लाइन है ये फ्लोट है। देखो जो क्रिटिकल पाथ है उसमें तो फ्लोट नहीं होता है ना। यहाँ पे आपके जो है वो फिनिश डेट का जो है वो लिमिट है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे फिनिश डेट के बीच में अभी गैप है तो इसलिए यहाँ पे फ्लोट है, इसमें तो लिमिट है। ये यहाँ पे जो एक्टिविटी आपकी फिनिश डेट को जो टच कर रही है उसमें आपको फ्लोट नहीं मिलेगा, और जो एक्टिविटी आपकी फिनिश डेट से अंदर की हो, अंदर की तरफ है, उसमें फ्लोट मिलेगा। और इनफैक्ट आपको टोटल फ्लोट जो है वो दिख भी जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको खिसकाता हूँ, रुको जरा एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ये जगह बना देता हूँ। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख गया आपको टोटल फ्लोट। गाइस देखो, ये वाली एक्टिविटी जो है बिल्कुल फिनिश डेट को ये डिफाइन कर रही है, इसलिए ये तो रेड में है, इसका फ्लोट होगा 0। बाकी जो एक्टिविटीज जो फिनिश डेट से जो पीछे की हो रहे हैं उसमें फ्लोट आ रहा है। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी है इसमें अभी जो फ्लोट है इसके जा रहा है एंड डेट तक, लेकिन ये आदमी बोल रहा है कि मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो 20 तारीख तक ही है।
20 तारीख के बाद नहीं मिलूंगा मैं, तो इसलिए आप मुझे कोई भी एक्टिविटी देंगे तो वो प्लीज आप कोशिश करना मेरी एक्टिविटी 20 मई को पार ना करे, ठीक है? क्योंकि मैं 20 मई की 6 बजे तक ही मैं कंपनी में आपके पास मैं अवेलेबल हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पता क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसका जो इतना पोर्शन फ्लोट जो है ही नहीं। दिख गया आपको? मैंने ये मिटा दिया, देखो इसका जो फ्लोट है सिर्फ यहीं तक रहेगा। कहाँ तक? ये जो इसका जो फ्लोट बार है सिर्फ वो सैटरडे तक ही रहेगा। इसका फ्लोट बार सैटरडे तक ही रहेगा। सैटरडे कितनी तारीख है? 20 तारीख तक इसका फ्लोट जो है सीमित है। चलो अब हम इसे करते हैं इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने जो टास्क 4 को सिलेक्ट करना है। पहले आप टास्क 4 पे आओ, सिलेक्ट करो इसे। अनंत टास्क 4 को सिलेक्ट करो और इसके ऊपर क्लिक करो। ये डिटेल पे क्लिक करो। हाँ, अब टास्क 4 को सिलेक्ट करने के बाद अब आप जो है स्टेटस में जाओ, स्टेटस में, और स्टेटस के बाद जो आप ये कंस्ट्रेंट में जाओ, कंस्ट्रेंट में आप ये सिलेक्ट करो फिनिश ऑन और बिफोर, फिनिश ऑन और बिफोर। अब आप इसमें सिलेक्ट करो 20 तारीख और इस पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है? तो गाइस आपने देखा कि इसकी फ्लोट जो है ये लिमिट हो गई है 20 तारीख पे। दिख गई आपको? ये आपकी 20 तारीख का ये कंस्ट्रेंट डेट है, ठीक है आपको? और आपने एक चीज की है नोट, आपने फिनिश साइड पे कंस्ट्रेंट डाला तो यहाँ पे स्टार लग गया है। दिख गया आपको? ठीक है, क्योंकि आपने प्राइमावेरा से ये कहा है कि ये जो एक्टिविटी है ये 20 तारीख या 20 तारीख से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले आप जब मर्जी कंप्लीट कर दो, लेकिन आप इसको 20 तारीख से आगे एक्सीड नहीं कर सकते। अब क्योंकि आपने कंस्टेंट डाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोट डालना पड़ेगा इसके कि भाई कंस्टेंट किस वजह से आपने डाला है, ठीक है? किस चीज का कंस्टेंट है आप लिखो इसमें। नोटबुक में जाओ और नोटबुक में इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करो, किस चीज का नोट है। देखो यहाँ पे टॉपिक की लिस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्टेंट। अब आप इसमें सिलेक्ट करो कंस्टेंट, क्लोज कर दो इसे। अब इसमें मॉडिफाई करो। अब आप लिखो द रिसोर्स असाइंड ऑन, द रिसोर्स असाइंड। देखो आप जो है ना स्पेलिंग अपनी ठीक बनाओ आनंद, स्पेलिंग ठीक बनाओ। रुक जाओ भाई, दो ही में गलत स्पेलिंग जो है लोग जल्दी नोट करेंगे। वहां पे अमेरिकन बहुत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब जो है वो सब कंपनी चलाते हैं और इंडियंस जो है वहां पे वो प्रोजेक्ट मैनेजर और ये मजदूरी करते हैं। रिसोर्स असाइंड ऑन लिखो, रिसोर्स असाइंड ऑन दिस टास्क is available till 20th of May 6 p.m. till 20th of May 6 p.m. अब लिखो इसमें 6 p.m. ये उसकी टाइम लिमिट है। अब इसमें क्या है कि अब मैंने 6 p.m. लिख तो दिया लेकिन मैंने टाइम को ऑन नहीं किया। तो गाइज एक काम करो, क्योंकि ना प्राइमावेरा बड़ा टाइम सेंसिटिव है। अब एक बार फिर से टाइम ऑन कर लो। यूजर प्रेफरेंसेस में जाओ प्लीज, यूजर प्रेफरेंसेस में जाओ और यूजर प्रेफरेंसेस में डेट में जाओ और इसमें सिलेक्ट करो 12 आवर फॉर्मेट, सिलेक्ट करो 12 आवर और क्लोज कर दो इसे। हेल्प नहीं, क्लोज, ठीक है? अच्छा, अब आपने डाल दिया ना टाइम इसमें। अब इसमें जो टाइम कंस्टेंट, इसमें जो डेट कंस्टेंट है, एक बार फिर से चेक करते हैं कि कंस्टेंट की डेट क्या डल गई है। ये डल गई है 12 AM, तो 12 AM नहीं है, ये होगा 6 PM। मैं इसको ठीक करता हूँ। 20 तारीख की होनी चाहिए 6 PM, ठीक है? तो मैं इसको स्क्रॉल करके मैं 6 PM पे ला रहा हूँ। तो गाइज ये चीज देखो, ये आ गई ये 6 PM पे। आपके स्क्रीन पे भी 6 PM है क्या? 6 PM
सर 12 था, उसको सर 6 कर दिया। आप इसको स्क्रॉल करोगे, ये जो स्क्रॉलर है ना, कोई सा भी स्क्रॉल ले लो, ये गोल गोल है, आप इसको स्क्रॉल करते जाओ, अपने आप ही 6 वो आ जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करके 6 PM ले आओ और कंफर्म करो कि 6 PM कर दिया आपने। कर दिया सर। अब आप इसको कर दो सिलेक्ट, तो आपके क्या होगा, यहाँ पे टाइम लिमिट उसकी ये सेट हो गई कि फिनिश ऑन और बिफोर 20 मई 6 PM। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है 20 तारीख तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इस बात को मैंने नोटबुक में भी लिख दिया, रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टिल, और इसमें एक थोड़ा सा और मैं लिख देता हूं, एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा ये चीज, ये जरूरी नहीं कि आदमी होगा, हो सकता है आपका इक्विपमेंट भी हो, इक्विपमेंट भी कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ठीक है, अगर कोई इक्विपमेंट अगर आपके पास 20 तारीख तक है, तो आपको 20 तारीख तक ही उसे यूज करना होगा, आप उसको 20 तारीख के बाद यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। अच्छा, अब क्या है कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ। फर्ज करो आप लोगों ने देखना है, पहले आपने इसको ये समझना है, करना नहीं है आपने। जब आप इसको समझ जाओगे तब आप अपनी स्क्रीन पे करोगे। पहले देखो ध्यान से, ये जो टास्क 3 है ना, अब ये टास्क 3 अभी आप जो है कितने दिन का है, 6 डेज का है। अब मैं इस टास्क को मैं कर देता हूँ 12 दिन का। अब 12 दिन का करने से क्या होगा, ये अपने सक्सेसर को धक्का मारेगा। कौन है इसका सक्सेसर? टास्क 4 है। अब जैसे इसने धक्का मारा, तो क्या हुआ कि ये इसको धक्का मार के इसके बिल्कुल लास्ट डेट पे इसने ये पहुंचा दिया। दिख गया आपको? अब यहाँ पे जैसे ये लास्ट डेट पे पहुंचा, आपने ये नोट किया कि यहाँ पे फ्लोट हो गया 0 और ये पाथ हो गया क्रिटिकल। अब एक चीज हमने कही थी कि क्रिटिकल पाथ सिर्फ लॉन्गेस्ट ही नहीं होता, क्रिटिकल पाथ वो भी होता है जिसमें फ्लोट 0 होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पाथ है टास्क 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, ये 0 क्यों हो गया फ्लोट इसमें? क्रिटिकल पाथ है। नहीं, क्रिटिकल पाथ ये बना क्यों? ये क्यों बना क्रिटिकल? देखो, क्रिटिकल पाथ इसलिए बना क्योंकि जैसे आखिरी स्टेशन पे गाड़ी के आगे एक स्टॉपर नहीं होता, आपने यहाँ पे एक भारी सा स्टॉपर जो है वो लगाया हुआ, इसके आगे वो जा नहीं सकती। दिख गया आपको स्टॉपर? किस चीज का है स्टॉपर? ये आपने 20 मई को कहा है कि ये इसके आगे जा नहीं सकती। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये एक्टिविटी जब अपने स्टॉपर को टच करेगी, इसके पास और कोई ड्यूरेशन है आगे जाने के लिए, तो इसका फ्लोट हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक दिन पीछे में खिसका रहा हूँ। अब मैंने इसको एक दिन पीछे मैंने खिसकाया। अब देखो कितने दिन का फ्लोट बना अपने स्टॉपर से? एक दिन का। हाँ, एक दिन का बन गया ना फ्लोट। तो इसका मतलब ये जो टास्क 4 है, इसकी जो लास्ट जो लिमिट डेट प्रोजेक्ट की फिनिश डेट नहीं है, इसके कंस्टेंट की डेट है। इसके जैसे ही वो अपने कंस्टेंट के डेट को टच करती है, तो इसका जो है फ्लोट 0 हो जाता है, क्योंकि इसके फ्लोट की कैलकुलेशन अपने कंस्टेंट डेट से हो रही है, प्रोजेक्ट्स के फिनिश डेट से नहीं हो रही। जिसकी लिमिट प्रोजेक्ट के फिनिश डेट तक नहीं है, उसको पहले ही कंप्लीट करना है। उसको किस तारीख तक कंप्लीट करना है? टास्क 4 को 20 तारीख तक। और जैसे ही वो 20 तारीख को टच करती है, तो इसका जो फ्लोट है वो कंप्लीट है। अगर वो कंप्लीट है, तो फिर इसमें आपका जो है ना वो 0 फ्लोट हो जाता है और ये एक्टिविटी रेड हो जाती है, दोनों इनफैक्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टास्क 3 को मैं 12 दिन की बजाय मैं कर रहा हूं 16 दिन। तो क्या होगा गाइस, अगर मैं टास्क 3 से टास्क 4 को और 4 दिन आगे की तरफ अगर मैं धक्का मारता हूं, तो क्या होगा? तो नेगेटिव फ्लोट हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव फ्लोट हो जाएगा। अब नेगेटिव फ्लोट आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन नेगेटिव फ्लोट का प्रैक्टिकली मतलब क्या है वो आज मैं समझाऊंगा आपको। ये बड़ा फाइन पॉइंट है, आपने थोड़ा ध्यान देना है बस ये मेरे साथ। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखो, प्राइमावेरा हमारा किस तरीके से ही जो है ये मददगार है। अब मैंने इसको जो है वो बढ़ाया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये चला गया उस पीरियड के अंदर। अब यहाँ पे जो डार्क वाला पोर्शन है, मैं ये हटा देता हूँ। अब गाइज अब ना अपना जरा ध्यान से देखना, अब कोई भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना प्लीज। गाइज ये चीज देखो, ये जो आपको दिख रहा है एक येलो सा जो रिबन सा है, दिख गया कि नहीं? अच्छा, ये जो येलो जो रिबन है, इसमें एक ना फोल्ड है यहाँ पर, एक ना वो चुन्नट टाइप का है।
दिख गया आपको? एक मोड़ है, जैसे टॉफी होती ना, टॉफी का जो एक सिरे का जो मोड़ होता है, जैसे वो मोड़ा होता है, वैसे ये ये इंडिकेट कर रहा है 20 तारीख, ये लिमिट है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा है? -4। अब -4 की मैं गिनती मैं करवाता हूँ आपको, अब ध्यान से गिनना आप। देखो, ये है आपका -1, ये है आपका -2, ये है आपका -3, और ये है आपका -4। गिनती गिनती हो गई? हो गई सर। अब ये जो ये जो 4 दिन है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि नेगेटिव फ्लोट को आपने कैसे यूज करना है। नेगेटिव फ्लोट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है अपनी लिमिट से 4 दिन आगे एक्सीड कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग में कुछ गलती होगी, कुछ गड़बड़ी होगी, इसको ठीक कर लो। नेगेटिव फ्लोट का मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कुछ भी। नेगेटिव फ्लोट का मतलब है ये हिसाब में आपको ये चीज वो बता रहा है कि आप जो है अपने टाइम के जो है ये ओवर बजट जो है वो चले गए हो। अब आप क्या करोगे? अपनी इंजीनियरिंग टीम को ना ये बुलाओगे आप, ठीक है? अब आप अपनी इंजीनियरिंग टीम से ये कहोगे कि भाई इसमें देखो नेगेटिव फ्लोट है, तो आप लोग प्लीज एक काम करो, आप लोग इसकी ड्यूरेशन को कम करो ताकि यहाँ पे फ्लोट कम से कम 0 तो हो, ठीक है? अच्छा गाइस, मेरे को एक चीज बताओ, 16 - 4 कितना होता है बताओ? 12 है 12 12 हुआ ना? तो अब आप एक काम करो, ये जो टास्क 3 की जो ड्यूरेशन को 12 दिन करो आप। टास्क 3 की ड्यूरेशन को 12 दिन करो। आनंद, कर रहे। अरे आपके माउस में कंट्रोल क्यों क्यों नहीं है यार? ये लड़खड़ा क्यों रहा है माउस आपका? अरे सीधा खट से कर दो यार, इस पे क्लिक है, ऐसे मारो, सीधा माउस पे जाके ऐसे मारो, ऐसे करो, इसे 12 दिन करो इसे। आपके पास ट्रैक पैड है क्या? माउस नहीं है क्या? माउस है क्या माउस ने क्या दारू पी है क्या इसने? नहीं चल नहीं पा रहा, देखो कैसे लड़खड़ाता हुआ पहुंच रहा है। मैं कह रहा हूँ वहां पहुंचो, देखो माउस को सेंसिटिविटी ज्यादा है। माउस कौन सा है? ये वाईफाई है क्या माउस ये? वाईफाई नहीं है वाईफाई माउस है। हाँ, तो वाईफाई माउस है यार, वो हाईफाई माउस मत यूज करो। ये माउस होता है मिस यूनिवर्स के लिए, ये हमारे लिए नहीं होता, इंजीनियर्स के लिए वायर वाला माउस होता है। मैंने कल भी कहा था कि ये जो वाईफाई और हाईफाई माउस जो है, ये मिस यूनिवर्स यूज करती है, ये हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमें चाहिए वायर माउस। हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जो हवा में लहरा लहरा के और नाच नाच के काम करते हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट के बीच में जाओगे ना, अगर इस माउस से काम करोगे, माउस और लैपटॉप समेत बॉस बाहर कर देंगे, क्या यार कहीं और टाइम वेस्ट कर, मेरा टाइम मत वेस्ट कर, ठीक है? ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ओके ठीक है। हाँ, इस माउस को चेंज करके इसको रख दो, इसको रेस्ट कराओ इसे, ठीक है? अब देखो गाइज, नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि ये जो अभी आपका फ्लोट हो गया 0। अच्छा चलो, दिस इज टेक्निकली करेक्ट, बट इज इट प्रैक्टिकली करेक्ट? गाइज थिंक, वुड यू लाइक टू प्लान लाइक दिस? सोच कर बताओ मुझे। आप जब एयरपोर्ट जब पहुंच रहे थे, कि आप जो है 0 फ्लोट लेके पहुंचे थे, या फिर थोड़ा सा आपने जो है ये बफर टाइम क्रिएट किया था? नहीं, बफर टाइम डालेगा। हाँ, बफर टाइम आपने क्रिएट किया था। आपने कहा था कि ठीक है, अगर 5 बजे की फ्लाइट है तो बोर्डिंग गेट पे मैं 4 बजे जाके मैं बैठ जाऊंगा, है ना? तो वैसे आपने प्लान की थी, तो यहाँ पे भी आपने वही करना है। आप अपनी इंजीनियरिंग टीम से कहो कि भाई प्लीज इंक्रीज द मैन मशीन ऑन द टास्क 3 एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन टू 10 days, ठीक है? अब इसे करो 10 days, कर दो 10 days। तो गाइस, दैट इज द यूज ऑफ द पॉजिटिव फ्लोट एंड नेगेटिव फ्लोट। पॉजिटिव फ्लोट भी आपको कुछ बोल रहा है और नेगेटिव फ्लोट भी कुछ बोल रहा है। पॉजिटिव फ्लोट आपको एक कंफर्ट दे रहा है, और नेगेटिव फ्लोट कह रहा है कि भाई अपने जो है अपने प्लान को सही करो, आप वो ड्यूरेशन यूज कर रहे हो जो आपके पास नहीं है। लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोट की जो कैलकुलेशन में सहायता कौन कर रहा है? आपको सहायता कर रहा है फिनिश ऑन और बिफोर। ये कंस्ट्रेंट क्या है कि एक ना यहाँ पे एक अदृश्य एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। इस बाउंड्री को कोई भी पार करता है
तो नेगेटिव फ्लोट हो जाती है। इस बाउंड्री को कोई टच करता है तो वो क्रिटिकल हो जाता है, और इस बाउंड्री के जो पीछे रह रहता है तो वो आपको बताता है पॉजिटिव फ्लोट। तो इस तरफ होगा पॉजिटिव फ्लोट और उस तरफ होगा नेगेटिव फ्लोट। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे होगा जीरो फ्लोट। गाइस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये होगा आपका जीरो फ्लोट अगर कोई यहाँ पे टच कर रहा है, और यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव फ्लोट। ठीक है, और अगर इस तरफ को कोई जा रहा है बाई तरफ को, वो होगा पॉजिटिव फ्लोट। ठीक है गाइस, क्लियर है अब? है ना? एक मिनट है ना? तो ये फिनिश और ऑन और बिफोर ये आपकी मदद करता है कि आप जो है पॉजिटिव फ्लोट में रहे। ये आपको पहले से ही जो है ये आगाह कर देता है कि आप जो है एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक मेरा क्वेरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी टास्क 3 में 12 डेज किया, लेकिन फ्लोट और जो है वो 5 डेज ही आ रहा है, टोटल फ्लोट 5 हाँ डेज। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ना प्राइमावेरा टाइम सेंसिटिव है। आपने टाइम डिस्प्ले नहीं किया है। टाइम डिस्प्ले कर दिया। टाइम डिस्प्ले करने के बाद आप देखोगे वो 12 बजा रखे हैं उसने, वो 12 AM लिया हुआ उसने टाइम। इसमें प्राइमावेरा में क्या होता है कि अगर आपने टाइम नहीं डाला, वो 6 PM नहीं डालेगा, वो 12 AM डाल देगा, इसलिए वो आपका 5 दिन आ रहा है आपको। नहीं, 9 AM to 6 PM दे रहा है टाइम। अरे नहीं बाबा, मेरी बात मैं वही समझाऊंगा। अब अपनी स्क्रीन शेयर करो फटाफट। प्राइमावेरा जो है जब तक आपके हाथ से टाइम नहीं लेगा वो तब तक नहीं मानेगा। ठीक है, जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता, अगर अब वो आपके साथ अगर वो मतलब हिला मिला हुआ है तो और घर में और किसी और फैमिली मेंबर से वो खाएगा ही नहीं। देखो अब ध्यान से देखना, अब ये जो टास्क है ना, इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट आपका होना चाहिए। देखो ये तो दिख रहा है ना बाबा आपको। आपने इसका जो टाइम ऊपर वाला देखा था 9 AM to 6 नहीं, फिनिश ऑन और बिफोर करना है। आपने कंस्ट्रेंट जो है वो गलत लिया हुआ है। आपने देखो यहाँ पे क्या लिया है कंस्ट्रेंट, फिनिश आप कह रहे हो कि उसके बाद करो, आपने तो उल्टा ही कर दिया कंस्ट्रेंट को। हम कह रहे हैं कि इस डेट से और इस डेट से पहले, आप पहले कंस्ट्रेंट को पहले ठीक करो, आप इसको पहले इसको करो फिनिश ऑन और बिफोर इस डेट तक या इस डेट से पहले। अब यहाँ पे जो है जाओ इस टाइम को करो 6 PM करो। 6 PM आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रॉल करो इसे, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, घूमते रहो, दुनिया गोल है। ठीक है ना? अब देखो ये हो गया ना सही। देखो इस वक्त ये करेक्ट बिल्कुल जीरो फ्लोट की लाइन पे है, दिख गया आपको? अब ये अगर जीरो फ्लोट की लाइन को अगर ये पार करते हुए अगर तुम दाईं तरफ गए, मान लो कि मैं 4 दिन में क्रॉस कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये आपको बता रहा है कि आपने जीरो फ्लोट को 4 दिन से क्रॉस किया है आपने। देखिए आपको -4 और -4 मैं दिखाऊं आपको। देखो ये जो मंडे देखो इसमें संडे काउंट नहीं होगा क्योंकि संडे तो वैसे भी काम नहीं कर सकते। आपका मंडे जो है ये -1 है, ट्यूसडे आपका -2 है, वेडनेसडे आपका -3 है, और थर्सडे आपका -4 है ना? तो वो बोल रहे हैं कि आप ये 4 दिन आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। और ये जो बहुत सुंदर सा ये दृश्य है, ध्यान से देखो, ये जो आपका जो ये जो छोटा सा जो फोल्ड है, इस फोल्ड का मतलब क्या है? इस फोल्ड का मतलब है 20 तारीख, ये आपकी लिमिट है, वो नहीं है अभी नेगेटिव, वहां तक आपकी जो है 0 है। ठीक है, अगर आप इसको दाईं तरफ जाते हो, मान लो आपने कहा चलो मैं ना इंजीनियरिंग टीम से कह के मैं मैन मशीन बढ़वा देता हूँ, आपने कर दिया 12 दिन, अब हो गया आपका जीरो फ्लोट। अच्छा जीरो फ्लोट टेक्निकली तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली बताओ, आप बगैर कोई फ्लोट लिए या बगैर टाइम का जो है वो सेफ्टी मार्जिन रखे, आप कर लोगे काम? बाई चांस आपने प्लानिंग करी बिल्कुल ये लबालब, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे गिलास जो है वो लबालब वो भरा हुआ है। अगर लबालब भरा हुआ गिलास आपसे कहे कि भी 100 मीटर तक जो है ले जाओ, तो गिरेगा पानी कि नहीं? आप ये कहोगे कि भाई गिलास में थोड़ा सा फ्लोट छोड़ दो, बात आ रही समझ में? आम आदमी मत बोलना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। हम आपस में कभी प्रोजेक्ट मैनेजर बात वो करेंगे ना, तो हम कहेंगे भैया पानी के ड्रम में
ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्लोट छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि पानी के ड्रम में ऊपर से 20 सेंटीमीटर तक का गैप रख के पानी भरना है, उसके ऊपर नहीं भरना है। मैंने कहा ये जो पानी का जो ये जो हमने जो ये जो हौदी जो बनाई है पानी की स्टोरेज, इसमें 1 फीट का जो है फ्लोट छोड़ दे। अपने आप ही वो समझ जाएगा 1 फीट के फ्लोट से क्या मतलब है। कहेगा कि अगर इससे ऊपर अगर ये पानी गया तो ये पानी पंप के अंदर घुस जाएगा और ये पंप को शॉर्ट कर देगा, ये पानी छलकेगा और जो बगल में जो पंप है उसके अंदर ये घुस जाएगा। तो कई चीजें हम जो सेफ्टी के लिए हम कहते हैं। आपने भी देखा होगा कि गाड़ी के अंदर आपका जो कूलेंट का टैंक होता है उसमें एक मैक्सिमम का भी तो दिया होता है लाइन, जो कूलेंट की जो टंकी होती है। तो वो जो मैक्सिमम से ऊपर जो ढक्कन में गैप होता है वो क्यों होता है? वो फ्लोट होता है। वो फ्लोट की किस लिए होता है? क्योंकि कूलेंट जब गर्म होता है वो एक्सपैंड होता है ना। कूलेंट जब गर्म होगा वो एक्सपैंड होगा, अगर वहां पे फ्लोट नहीं होगा तो क्या होगा? उस टंकी को वो तोड़ देगा प्रेशर से, एग्जैक्टली। है ना। क्योंकि वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला वो लिक्विड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का होता है 100 डिग्री। अगर उसको एक्सपेंशन की जगह नहीं मिलेगी, वो पानी की तरह नरम नहीं होता है, वो प्लास्टिक को तोड़ देगा, इसलिए उसमें फ्लोट छोड़ते हैं। इसलिए हम भी अपने प्रोजेक्ट में फ्लोट छोड़ते हैं, इसलिए फ्लोट छोड़ते हैं कि ताकि हम लोग जो है एक सेफ्टी मार्जिन से काम कर सके। लेकिन ये फ्लोट हमें ये बता कौन रहा है? ये फ्लोट हमें ये बता रहा है फिनिश ऑन और बिफोर। तो फिनिश ऑन और बिफोर क्या बोल रहा है कि आप 20 तारीख या 20 तारीख से पहले इस काम को कंप्लीट कर लो। इसका ग्रीन पोर्शन यहाँ पे है और उसका रेड पोर्शन जो है ये मंडे ऑनवर्ड्स ये रेड है। मंडे में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ग्रीन में रहोगे तो पॉजिटिव फ्लोट रहेगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? सैयद? जी सर, क्लियर है सर। यस। आनंद क्लियर है? Yes, yes, clear, clear. चलो वेरी गुड। अच्छा, अब हम करेंगे, मैं आनंद की स्क्रीन पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। आनंद अपनी स्क्रीन शेयर करो। गाइस थक तो नहीं गए? नहीं सर, नहीं। हाँ वेरी गुड। ठीक है, थकना नहीं है, इसको करके एक ब्रेक लेंगे, इसको पूरा करेंगे पहले कंस्टेंट को। ठीक है, तो ताकि हम जब ब्रेक लेंगे तो हमें मतलब लगेगा कुछ अकम्पलिशमेंट किया हमने। अच्छा, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ एज लेट एज पॉसिबल। अब इसको मीनिंग समझो यार, एज लेट एज पॉसिबल, जितना लेट हो उतना ही वो बढ़िया। ये कैसी बात हुई? नहीं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट की ना लाइफ साइकिल में क्या होता है। जब हम प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं तो हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम होता है क्लोजिंग प्रोसेस। क्लोजिंग प्रोसेस में क्या होता है? क्लोजिंग प्रोसेस में, अब ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है कुछ भी। क्लोजिंग प्रोसेस में हम जो है साइट को, जैसे मान लो मैंने शॉपिंग मॉल तैयार कर दिया, तो क्लाइंट को हैंडओवर करने से पहले, मैं साइट की क्लीनअप में करूंगा कि नहीं? है ना। देखो मैं क्या 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 करूंगा, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है। मैं साइट क्लीनअप करूंगा सबसे पहले। मैं साइट से क्या करूंगा, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो मैंने वहां पे जो खड़े किए थे सामान के लिए, आदमी के लिए, वो मैं हटाऊंगा वहां से। अच्छा, वहां पे मेरा जो मटेरियल जो अनयूज्ड है उसको मैं हटा के रीस्टॉक में, स्टॉक में डाल दूंगा ताकि दूसरे प्रोजेक्ट में यूज हो जाए। फिर मैं क्लाइंट के पास में जाऊंगा कि सर मैंने आपका काम जो है वो कंप्लीट कर दिए, कृपया मुझे क्यूए एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। तो क्लाइंट ने कहा कि ठीक है ले लो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मुझे क्यूए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो सर्टिफिकेट मिल गया तो मैंने क्लाइंट को इनवॉइस रेज कर दिया। अब क्लाइंट की पेमेंट जो है मुझे मिलने की भाई वो गारंटी हो गई। इसी एंटिसिपेशन में मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मैंने रिलीज कर दिया। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों की छुट्टी, काम कंप्लीट है, क्लाइंट ने ओके कर दिया है, आप लोगों के काम में कोई दोष नहीं है, आप लोग जो अपनी पेमेंट लो। और मैंने उनको कैश पेमेंट करी, उनकी छुट्टी कर दी। देन आई एम रिलीजिंग माई मैन एंड मशीन फ्रॉम द साइट। मेरे वहां पे आदमी और जो साइट पे आदमी और जो मशीनें हैं सबको मैंने इवेलुएट किया और सबको एक एक करके वापस अपनी कंपनी में भेज दिया। मैंने कहा चलो भी जाओ यहाँ से निकलो। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद मैंने क्या किया कि क्लाइंट का जो स्टाफ था उनको मैंने ट्रेनिंग दी। किस चीज की ट्रेनिंग दी? कि भाई लिफ्ट कैसे ऑपरेट करना है, HVAC जो लगा हुआ है
एयर कंडीशनिंग पूरे शॉपिंग मॉल के लिए उसको कैसे ऑपरेट करना है, सीसीटीवी कैसे ऑपरेट करना है, पानी का पंप कैसे ऑपरेट करना है, जनरेटर को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। और आपके ऊपर जो सोलर का जो पैनल है वो ग्रिड में कहाँ पे उसकी वो कनेक्टिविटी है, ये सारा कुछ उनको मैंने समझा दिया। फिर मेरे पास जितने भी थर्ड पार्टी इक्विपमेंट है, देखो थर्ड पार्टी इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं बिल्डिंग में, लिफ्ट मैं खरीद के लगाऊंगा, है ना, है नहीं? है। तो लिफ्ट की जो गारंटी वारंटी का कागज मुझे क्लाइंट को देना है। ये इस टाइप की जितनी भी इक्विपमेंट है, जनरेटर, पंप, मोटर, एचवीएसी, लिफ्ट, सोलर पैनल और जितनी भी थर्ड पार्टी इक्विपमेंट्स है, इनकी गारंटी वारंटी के पेपर फाइल में डाल के इनको दे दिए। प्लस लिफ्ट की जो ऑपरेशन का जो जो म्यूनिसपैलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो लाइसेंस होता है, वो भी मैंने बनवा के मैंने दे दिया क्लाइंट को, ठीक है, कि आपका जो है लिफ्ट ऑपरेट करने का ये लाइसेंस है, ये सेफ्टी का सर्टिफिकेट है आपका। तो ये सारी चीजें मैंने क्लाइंट को दे दी। अब ये सब जो काम होता है ये कब होता है? ये प्रोजेक्ट के लास्ट के दिनों में होता है। तो मैंने अपनी टीम से पूछा इसके लिए कितने दिन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बॉस क्लोजिंग करने के लिए लास्ट के 6 दिन चाहिए। ध्यान से सुनना, लास्ट के 6 दिन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी जो है, इसकी जो पोजीशनिंग जो है वो होगी लास्ट में। लेकिन एक चीज और है, अगर इस एक्टिविटी को अगर मैं लास्ट में ये पोजीशनिंग करता हूं तो इसमें जो है फ्लोट हो जाएगा 0, एक्टिविटी हो जाएगी रेड। तो इस एक्टिविटी को मुझे क्या करना पड़ेगा कि धक्का मार के इसे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो धक्का मारेगा कौन सा कंस्ट्रेंट? उस कंस्ट्रेंट का नाम है एज लेट एज पॉसिबल। इसमें मुझे कोई डेट डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें कंस्ट्रेंट डालो। तो आनंद, नाउ यू गो टू द स्टेटस and here you select the constraint as late as possible and see the magic. Guys, दिख गया आपको? इसने क्या किया कि प्रोजेक्ट की फिनिश के डेट के साथ जो है ये इसकी जो है अलाइनमेंट कर दी। अब अगर प्रोजेक्ट की फिनिश डेट जो होती है कि किसी भी वजह से कहीं से भी, ये भी अपने आप आगे पीछे प्रोजेक्ट की फिनिश डेट के साथ ये अलाइनमेंट में रहेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे रहेगा अलाइनमेंट में। फॉर एग्जांपल नीचे का एक टास्क है, उसको ना मैं ये बड़ा करके कर देता हूँ 5 वीक्स। अब देखो ये अलाइनमेंट में है, ये दिख गया आपको? प्रोजेक्ट की फिनिश डेट चेंज हुई तो वो फिनिश डेट के साथ है, फिनिश डेट आई पीछे तो ये भी आ गया अब पीछे। बात आ गई समझ में? ये संभव हुआ कैसे? एज लेट एज पॉसिबल से। हाँ, अगर किसी भी एक्टिविटी को आप ये क्लोजिंग प्रोसेस में यूज करना चाहते हो तो आप उसमें एज लेट एज पॉसिबल ये लगा सकते हो। तो एज लेट एज पॉसिबल में कोई डेट डालने की जरूरत नहीं होती। व्हाट इज द लेटेस्ट डेट ऑफ एन एक्टिविटी? इट इज द लास्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? उससे तो और कोई लेट नहीं हो सकता ना। गाइस क्लियर है? करेक्ट है ना? तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो डेट कौन सी होती है? जो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट ही होती है। तो वो अपने आप ही प्रोजेक्ट की फिनिश डेट के साथ वो अलाइनमेंट में रहेगा। और जो क्लोजिंग प्रोसेस में कौन से काम होते हैं मैं आपको नोट में लिख देता हूँ। यहाँ पे नोटबुक में गया, कंस्ट्रेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें एक टाइप का काम होता है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर। याद आया कि नहीं पीएमपी से? क्लोजिंग प्रोसेस में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर। जी सर। सही याद? हाँ जी सर, होता है। हाँ, अब उसकी यहाँ पे क्या होगी, इसमें ना हम इसमें क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव उसी वगैरह लेते हैं। वी कीप ए चेकलिस्ट बिलो। ठीक है, यहाँ पे आप जो है चेकलिस्ट डाल दो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर में क्या काम करोगे। जैसे इसमें लिख दिया टास्क 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 टास्क। इसमें क्या होता है, कोई भी टास्क है ना, ये इट इज दीज टास्क आर नॉट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, रेदर दीज आर अपॉर्चुनिटी बेस्ड। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि जो टास्क पहले कंप्लीट, उस टास्क को कर दो। ये मौके पे आधारित होते हैं। जिस काम को करने का मौका पहले मिल जाए उसको पहले कर दो। इसमें कोई वो प्रीडिसेसर सक्सेसर नहीं होता। और इसको लमसम 6 दिन में करना है। अब मेरा टीम मेंबर आया, कह रहा है कि सर मुझे ना 10 दिन चाहिए। मैंने कहा भी 10 दिन ले लो। अब 10 दिन लोगे तो ध्यान से देखना इसकी स्टार्ट डेट में क्या होगा।
तो आनंद इसे 10 दिन करो, इसे इसको करो 10 दिन। क्या हुआ? फाइनल हो गया। दिख गया आपको? हम्म। देखो, इसको 10 दिन किया तो ये कह रहा है कि भाई आपको 6 दिन की बजाय 10 दिन चाहिए, तो और जल्दी स्टार्ट करो। आपकी फिनिश डेट तो फिक्स रहेगी ना, फिनिश डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि फिनिश डेट का रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? हाँ, फिनिश स्टेटस को। रेफरेंस आ रहा है प्रोजेक्ट की फिनिश डेट से। अब ये प्रोजेक्ट को थोड़ी ना धक्का मार सकता है। बात आ रही समझ में? ये प्रोजेक्ट को धक्का इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि ये प्रोजेक्ट की गोद में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा है। बात आ रही समझ में? नहीं, जी सर। इसलिए ये प्रोजेक्ट को धक्का नहीं मार सकता। अगर इसको ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए या कम चाहिए, इसकी स्टार्ट डेट ही एडजस्ट होगी। देखो, अगर मैं इसको कर देता हूं 1 दिन, तो बिल्कुल लास्ट के 1 दिन पे रहेगा। अगर मैं इसको कर देता हूं 4 दिन, तो उल्टी गिनती करेगा 4 दिन। बात आ रही समझ में? अगर मैं इसको करता हूँ 6 दिन, तो उल्टी गिनती करेगा 6 दिन। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। तो ये तब खिसकेगा जब प्रोजेक्ट खिसकेगा, वरना वो फिनिश डेट उसकी वहीं रहेगी। तो इट इज कॉल्ड एज लेट एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रेंट। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रेंट में अब जैसे मेरे पास एक टास्क है, टास्क एक्स, ठीक है, दूसरा टास्क है मेरा टास्क वाई। ठीक है, ये टास्क वाई है, और दोनों ही टास्क जो है ये 4-4 दिन के ये टास्क है। अच्छा, इसका 1 सेकंड गाइस, यहाँ पे कंस्टेंट नहीं होगा, ये होगा नन। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों टास्क जो है ये आप ये बनाओ 4-4 दिन के, एक्स एंड वाई बनाओ 4, और वाई ये बनाओ 4 दिन का। ये बनाओ पहले, ये सैंपल डेटा बनाओ। ठीक है, बना दिया? अच्छा, अब एक्स और वाई के बीच में ना आप फिनिश टू स्टार्ट जो है रिलेशनशिप डाल दो, लिंक एक्टिविटी यूज करके। देखो, यूं लिंक एक्टिविटी से जो है फिनिश टू स्टार्ट जो है कंस्ट्रेंट बहुत ही आराम से लग जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? दिख गया आपको? अच्छा, अब मैं आपको ना एक बात पूछता हूँ। आप लोगों ने लाइब्रेरी से कभी बुक तो बोरो किया होगा, आप लोग इंजीनियरिंग के टाइम में, स्कूल टाइम में? नहीं? हाँ सर, किया सर, लाइब्रेरी से ही पढ़े। हाँ, अब देखो लाइब्रेरी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि किताब के ऊपर जो है डेट लिमिट होती है। ठीक है, कि इस डेट से आपको रिटर्न करना है। आप मान लो कि मैं ना लाइब्रेरी गया, मैंने मैडम से कहा कि मैडम मुझे एक ना किताब चाहिए, सिर्फ 4 दिन के लिए चाहिए, तो मुझे जो है ये अभी चाहिए। तो मैम ने कहा कि भाई देखो बेटा, अभी ये किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किताब जो है थोड़ी डिमांड में है, सर्कुलेशन में है। तो मैंने कहा मैडम मेरे को सिर्फ 4 दिन के लिए ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किताब आपको मिल जाएगी मंडे को। तो मैं कब डिमांड कर रहा हूँ? मैं डिमांड कर रहा हूँ 5 तारीख को। वो बोले कि नहीं, आपको मंडे को मिलेगी, और आप मंडे से लेके आप इसे चाहे तो यहाँ तक यूज कर सकते हैं इस डेट रेंज में। 1 मिनट हो जाओ, मैं ग्रीन ग्रीन कलर डालता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट हो, गाइस ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मैंने ये डेट रेंज मैंने सुना उनसे। उन्होंने कहा आपको इस तारीख को जो है ये मिल जाएगी। आप इसको बेशक 4 दिन पढ़ो, चाहे आप इसको 12 दिन पढ़ो, आपको ये किताब मिलेगी 12 दिन के लिए। अब आप इसमें से कोई भी 4 दिन आप पढ़ो, या 5 दिन पढ़ लो, या 6 दिन पढ़ लो, इस डेट रेंज में आपको मिलेगी। तो गाइस मुझे टाइम स्केल पढ़ के बताओ कि स्टार्टिंग डेट क्या है और इसकी एंडिंग डेट क्या है। टाइम स्केल पढ़ना सीख लो। देखो कहाँ से चल रहे हैं, जो ब्राउन एरो जो है, स्टार्टिंग डेट क्या है भाई? आनंद इसको बताओ ना पढ़ के। स्टार्टिंग डेट 1 में। अरे ध्यान से देखो, ये एरो कहाँ से चल रहा है भाई? हाँ, मंडे।
9th में 1 2 3 9th नहीं 9th में बाबा, ये 8th हाँ। में है। ये जो 8 तारीख है ना, ये 8th की डेट है। 8th में 8th में हाँ, और इधर पढ़ो राइट साइड की डेट, ये कितनी है? 15 16 20th। तो उल्टी गिनती कर लो ना, वहां से पास रहता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। अब मैं अगर ये वाली डेट को मार्क करता हूँ तो गिनती कहाँ से करोगे? उल्टी करो यहाँ से, बताओ कितना है ये। 19 हाँ, अच्छा, अब मैं अगर मैं यहाँ पे मैं लगाता हूँ निशान, ये बताओ डेट कहाँ पे है? 16 हाँ, आप इसकी गिनती कहाँ से करोगे? यहाँ से देखो। और गाइस एक चीज ध्यान रखो, ये जो 8 तारीख है ना, ये मंडे है। हर मंडे का जो है यहाँ पे मेंशन किया है कि ये कौन सा हफ्ता है। ये 22 तारीख वाला हफ्ता है, तो ये मंडे जो है 22 तारीख है। ठीक है, दिस वीक इज स्टार्टिंग ऑन मंडे द 22। ऑल दीज डेज आर मंडेज। हमने उसमें आपको याद है, हमने ये सेट किया था, हमने क्या कहा था प्राइमावेरा से? द वीक विल स्टार्ट ऑन मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। याद है याद है। सेटिंग में? तो ये जो डेट है ना, ये ध्यान रखो, ये मंडे। और टाइम स्केल जो है पढ़ने में कोई ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि जब आप काम करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे से जो है रिसोर्स मैनेजर बोल रहे हैं कि आपको ये मंडे को मिलेगा 8 तारीख को, और 20 तारीख को रिटर्न करना है। तो टास्क वाई एक्चुअली है क्या? टास्क वाई में क्या है कि एक ना इक्विपमेंट है जो कि काफी बड़ी इक्विपमेंट है। इट्स ए क्रेन। ठीक है, क्रेन मुझे चाहिए 40 टन का, जो 40 टन को जो है ये उठा सके। अब मेरे को एक चीज बताओ कि 40 टन का क्रेन कोई चम्मच तो है नहीं जो हर एक की प्लेट पे एक एक बांट दिया जाए। हाँ भी सही बात बताओ। जी सर, ये सबको बारी बारी मिलेगी ना कंपनी के अंदर, बिल्कुल सर। है ना? हाँ हाँ हाँ, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कर रहे हैं हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजर। एक होता है रिसोर्स मैनेजर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एक होता है आपका हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजर। तो हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजर जो है इन सब चीजों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि कोई इसको ये ओवर यूज या मिस यूज ना करे। ठीक है, रख रखाव मेंटेनेंस सब इनकी जिम्मेवारी होती है। तो इनको आपने कहा कि सर मुझे क्रेन जो है 5 तारीख को चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं 5 तारीख को फ्री नहीं है, हम ये आपके पास 8 तारीख को सुबह हम पहुंचा देंगे। आपने कहा सिर्फ 4 दिन के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चार चार दिन यूज कर लो, लेकिन क्या है कि हम आपकी साइट से 20 तारीख की शाम को ही जो है मतलब उठाएंगे। ये नहीं कि 4 दिन यहाँ से उठाएं और वो उठा के हम कहाँ पे लेके जाएंगे। हम आपकी साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड पे पहुंचाएंगे सीधा, क्योंकि बीच में रखने की जगह नहीं है हमारे पास। बात आ रही समझ में? ठीक है सर। भाई बड़ी चीज है, कोई डायरेक्टर अपने घर के पार्किंग में थोड़ी ना उठा के रख लेगा 20 टन की क्रेन। नहीं नहीं ना, वो साइड टू साइड जाएगी कि नहीं जाएगी? एक साइड पे जब पहुंचा दिया तो वो दूसरी साइड पे ही जाएगी, बीच में रखने की कोई जगह नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप काम करके वो सड़क की पटरी के किनारे रख दिया। भाई वो बड़ी चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी साइड पे 8 तारीख को इंस्टॉल कर दी जाएगी, और वहां से 20 तारीख को जो है ये उठा ली जाएगी। शाम को 6 बजे तक आपके पास है, बीच में आप 4 दिन 5 दिन जैसे। अब आपके पास क्या है कि 2 कंस्टेंट आपको ये लगाने पड़ेंगे। एक कंस्टेंट होता है प्राइमरी, एक कंस्टेंट होता है सेकेंडरी कंस्टेंट। ठीक है, अब आप जो है इन दोनों कंस्टेंट को जो है ये लगाने के लिए तैयार हो जाओ। आप सिलेक्ट करो टास्क वाई, और टास्क वाई सिलेक्ट करने के बाद आप जो है इसमें आओ स्टेटस में। ठीक है, स्टेटस में जब आप ये पहुंच जाओगे तो नीचे की तरफ आप देखो कि 2 प्रकार के कंस्टेंट है यहाँ पे। एक है आपका प्राइमरी कंस्टेंट और दूसरा है आपका सेकेंडरी कंस्टेंट। दिख गया आपको? अरे दिख गया कि नहीं? जी सर, देख गया सर। क्योंकि फिर मैं जाऊंगा आगे, फिर कहोगा कि भाई यू टर्न करो, नहीं दिखा मुझे। अब इसमें सिलेक्ट करो स्टार्ट ऑन और आफ्टर। करो इसमें सिलेक्ट स्टार्ट ऑन और आफ्टर, नीचे है थोड़ा। हाँ, अब इसमें आप डेट डालो 8 मई 9 AM। सिलेक्ट करो मंडे 8 मई 9 AM। ठीक है, 9 AM है, कर दो सिलेक्ट। बहुत बढ़िया। अब आप ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ ध्यान दो गाइस, ऊपर की तरफ ध्यान दो। क्या हुआ देखो, ये अपने आप ये टास्क होगी ना, यहाँ पे ये पोजीशनिंग इसकी। ठीक है,
अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अब हमने फिनिश वाला भी कंस्ट्रेंट डालना है। अब फिनिश वाले कंस्ट्रेंट में सिलेक्ट करो फिनिश ऑन और बिफोर। फिनिश ऑन और बिफोर कौन सी तारीख है? 20 तारीख 6 PM। करो सिलेक्ट, 6 PM है इसमें, करो सिलेक्ट। देखो अपने आप आपने एक चीज नोट की है कि जैसे ही इसमें कंस्ट्रेंट ये लगा और इमीडिएटली आपने नोट किया यहाँ पे इसकी फ्लोट जो है वो ट्रिम हो गई है यहीं तक ही, दिख गया आपको 20 तारीख तक। और आप ये देखोगे अब की बारी ये जो दोनों आपके जो डेट्स हैं उन पे स्टार है। देखो स्टार्ट डेट पे भी स्टार है और फिनिश डेट पे भी स्टार है। ध्यान से देखो, 1 मिनट हो गया, मैं अभी दिखाता हूं। मैं जगह बना के देखो गाइस, ध्यान से देखो, ये स्टार्ट डेट का स्टार है और ये फिनिश डेट का जो है कंस्टेंट का स्टार लग गया। इसका मतलब ये है कि इसमें मतलब ये दोनों तरफ से जो है एक लिमिट डाल रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट। देखो ये है आपकी ओपनिंग ब्रैकेट और ये है आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट। मतलब ये जो ब्रैकेट है ना इसी के अंदर आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो बने बनाए भी होंगे। देखो ये बना बनाया लेआउट है यहाँ पे खूब सारा, है नहीं, और इसका अलग अलग जो है वो मीनिंग ये निकालता है। जैसे क्लासिक WBS लेआउट, तो इसमें कुछ पता नहीं क्या क्लासिक है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। EPS WBS लेआउट, इसमें कुछ कॉलम डाल दिए, अगर आपके काम के हैं तो ठीक है। कैलेंडर एंड ऑर्डिनल टाइम स्केल, अब पता नहीं इसका क्या यूज है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ना एक जो है एक बड़ी अजीब सी चीज दे रहा है, देखिए ये -609, ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्ट से उतनी ये आगे ये चला गया है ये, ठीक है। कॉस्ट एक्चुअल, अब इसमें फोकस किस चीज पे होगा? कॉस्ट पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगा कि हाँ काफी दुनिया घूम लिया, मैं वापस अपनी लेआउट पे आ रहा हूँ, तो आप इस पे क्लिक कर दो, आप अपनी लेआउट पे आ जाओगे वापस, ठीक है। बात आ गई समझ में? यस सर। तो इसलिए अपने हिसाब से लेआउट बनाना है। फॉन्ट साइज, प्लेसमेंट ऑफ द कॉलम, सीक्वेंस ऑफ द कॉलम, साइज ऑफ द स्क्रीन डिवीजन कंफर्टेबल होना चाहिए अपने हिसाब से। तो प्राइमावेरा क्या है कि ये सारी चीजें करने देता है आपको। अगर ये करने देता है तो आपको पता भी होना चाहिए और उस पर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आज बस यहीं तक है, और कल हम जो है लेसन हम करेंगे, कल से हम करेंगे शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग और रिसोर्स में जाएंगे। तो शेड्यूलिंग पे क्या है, मैं एक बात मैं ये बताता हूँ, क्योंकि काफी सारे मैं काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रीज के काफी सारे जो मतलब जो डायरेक्टर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट थे पहले, 10 साल पहले। तो वो कह रहे हैं कि सर आज की जो नई जो जनरेशन जो मतलब आ रही है ना, उनको शेड्यूलिंग की जो है बिल्कुल समझ नहीं है, वो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। तो कई बार क्या करते हैं कि वो गलती करते हैं, फिर उनको क्या करना पड़ता है प्राइमावेरा से हटा के फिर किसी दूसरे काम में डालना पड़ता है, फिर उसको फिर थोड़े और ज्यादा पैसा खर्च करके फिर दूसरा आदमी ट्राई करना पड़ता है। तो शेड्यूलिंग में बड़ी दिक्कत है। तो मैं वही सब फीडबैक लेके मैं आप लोगों की ट्रेनिंग में शेड्यूलिंग पे थोड़ा टाइट करूंगा कल। तो कल आपने जो है बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कल हम करेंगे शेड्यूलिंग विद कैलेंडर्स, ये हमारा होगा, और 6 होंगे लेसन। और ये सारा जो है कैलेंडर और ये शेड्यूलिंग पे बेस्ड होगा। अगर शेड्यूलिंग को आपने कंट्रोल कर लिया तो रिसोर्स भी कंट्रोल में आ जाएगा, और रिसोर्स कंट्रोल में आ जाएगा तो आपकी कॉस्टिंग भी सही आ जाएगी, एक्यूरेट आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास जो है प्रोजेक्ट का एक बढ़िया बेसलाइन होगा, बढ़िया अच्छे से प्रोजेक्ट को ट्रैक कर। तो हम क्या करेंगे, पूरी लाइफ साइकिल करेंगे। तो हमने कहाँ से शुरुआत करी है? हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट हमें जो मिला है वो इनिशिएटिंग प्रोसेस पार कर गया। अब कल हम करेंगे प्लानिंग, और परसों हम करेंगे एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड क्लोजिंग, ठीक है ना। ओके सर। तो कल हम जो है प्लानिंग करेंगे पूरा, उसमें हमारा खास ध्यान जो है वो शेड्यूलिंग और ये कैलेंडर पे होगा। नाउ द थिंग इज दैट बिफोर आई क्लोज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई विल पॉज हियर फॉर क्वेश्चन। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टू द इंटरफेस, टू द डेटाबेस, और आपकी जूम फाइल कहाँ पे है, ये सब, ठीक है, जो आज के जो टॉपिक्स हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछो। नहीं। अच्छा, तो एक काम करो सारे, अपने पास ना अपने बस सिराने के पास एक नोट पैड रख के सोना,
क्योंकि क्वेश्चन आएगा माइंड में, बाद में आएगा जब आप रिलैक्स हो जाओगे खाना वाना खा के, अब क्वेश्चन नोट कर लेना, मिस नहीं करना क्वेश्चन। कल सुबह जो है आते ही क्वेश्चन जो है पूछ के हम स्टार्ट कर देंगे अपना, क्योंकि आज के जो भी टॉपिक्स आपने ये कवर किए हैं उसका कोई भी डाउट अपने माइंड में रख के आगे मत बढ़ना प्लीज, ठीक है। तो आज के टॉपिक का अगर कोई डाउट अगर बाद में आपको आता है तो उसको नोट रखना है, कल सुबह आपने पूछना है। तो अभी आपने ना रेस्ट करना है, ठीक है। प्लीज डू नॉट यूज एनी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ भी यूज नहीं करना प्लीज। अभी आप लोग एक काम करो, खाना वाना खाओ और थोड़ा सा हल्का म्यूजिक सुनो। आप ये मान के चलो आप किसी रिजॉर्ट में रेस्ट करने आए हो, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना इधर उधर के काम की, और अपना खाना वाना खा के म्यूजिक सुनो एंड यू जस्ट गो टू स्लीप, क्योंकि कल जो है थोड़ा इंटेंसिव रहेगा कल दिन, ठीक है। कल हो सकता है 1 आध घंटा एक्स्ट्रा लग जाए कल, ठीक है। ओके गाइस, देन गुड नाइट। अभी ये कन्वर्ट होगी 3-4 घंटे में कन्वर्ट होती है, तो इसको लैपटॉप को ऑन ऑन छोड़ देना, इसको कन्वर्ट होने दो, ठीक है। आई एम गोइंग टू एंड, ठीक है। क्वेश्चन Thank you. को चाहिए कल सब 2-2 क्वेश्चन, ठीक है, नोट होने चाहिए सबके पास मिनिमम। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। Okay, sir. Thank you. Bye. में यूजर में होता है ये, यू आर द एडमिन राइट। तो इसमें आपका ना ये डाउनलोड होगा, इसमें आपने डाउनलोड किया ना, आपने डाउनलोड नहीं, आपने ना डाउनलोड पता क्या है, एक ही फाइल को किया है, आपको पूरा फोल्डर चाहिए। आप एक काम करो कि